2, where 8 teams will proceed to fight out for those 4 golden tickets throughout 4 matches. 4 of the qualified teams will then claim their tickets and head to the World Finals in Jönköping in Sweden at the end of November. So it's going to be absolutely incredible throughout this weekend, and I could not be more pleased to start things getting underway. Obviously, it's a little bit sad that we have to say goodbye to 8 teams, but I think we'll see some great players advance. Let's take a little bit of a look at those groups to see who will be playing who throughout this first day. Starting things off in Group A then, SK Gaming, Team Flash, Reconic Esports and Chasmat Gaming EA will be the first group we take a browse at today. Group B will consist of VN Esporting, STMN, Chasmat Gaming NA and Clash. For Group C, we'll have Team Humble, Revenant Esports, Rising Sun, and Dados FA. Group D, last but not least, it's going to be Navi, Reject, SK Kalalas, and Marcos Gaming. I think it's fair to say, Teddy, there's a bit of a strong group there. And I'm not going to say who it is. I can imagine what you're going to say, but what do you think I'm looking at? Yeah, I'll say who it is. Group B, the group of death. Every single group stage, there is always one that is just a little bit spicier, and this one, particularly spicy. I mean, we've got all the NA teams in the same group already. That spells for disaster, but then they're joined by some Titans as well from Latham and East Asia. That one is going to be one you definitely don't want to miss. Yeah, big shout out to Kenny for throwing all those NA teams in one group to give us a bit of a bang. But let's take a little bit of a look at the schedule and to see what we've got going on throughout this first day. Starting things off with an absolute banger. Some of EMEA's best in SK Gaming versus some Titans over in East Asia with Chasmat Gaming, Teddy. Yeah, so basically we will be streaming actually half of the opening matches. So in this case, SK versus Chasmac for Group A. For Group B, Chasmac Gaming NA versus VN Esporting. Then we'll be watching the winners match and the tiebreakers. So the second opening match is going to be off stream as well as the elimination match. But for Group C, we'll have Revenant Esports versus Rising Sun as an opening match. For Group D, Navi versus SKC. Yeah, it's definitely a bit scary for a few of these teams. There's some fierce competition, but I don't think we really could have started things off in a better way. That SK Gaming versus Chasmat Gaming EA is it's a dangerous game for both of those teams because obviously it's double elimination, right? So you've got another chance, but you don't want to lose a life that early on. Let's take a little bit of a look at the Group A bracket then to see how things will be playing out, who the other teams are going to be playing whilst we watch this first match between SK and Chasmac EA. Reconic Esports versus Team Flash will be the other team, and as Teddy mentioned, we'll then proceed to watch the winners match. हेलो 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 भाई, आपने क्या वोट किया? अभी वोट स्टार्ट नहीं हुआ है. Exciting group to kick things off. I think it's fair to say there's a couple of favorites that have been paired against each other. आवाज नहीं आ रही. आएगी आएगी. Reconic Esports and Team Flash yet because they've been showing quite a lot of oomph in some scrims. Yeah, the scrims have been crazy. देखो, इसमें कुछ मैच जो है ऑफलाइन होंगे क्योंकि इतने सारे मैच वो लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो कुछ जो आएंगे वो ऑनलाइन चलेंगे, कुछ ऑफलाइन ही का डिसाइड हो जाएगा. लेकिन डिसाइडर मैच और विनर्स मैच ये लोग स्ट्रीम करने वाले हैं, और कुछ जो पीछे बैकग्राउंड में होते रहेंगे वो नहीं देख सकते अपन. वो तो रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा, वैसा वाला सीन है. अभी शायद ये एसके वर्सेस चेसमैक दिखा रहे हैं डायरेक्ट. किसको वोट करना है, एसके या चेसमैक? चेसमैक को कर रहा मैं. ओके, कुरु और केंजी है उसमें. राक्षस भाई तुम तो एसके को करोगे ना? And it's a little bit difficult. Let's take a little bit of a closer look at SK Gaming then. भाई कुरु और केंजी है तो फिर तो करना पड़ेगा चेसमैक, लेकिन एसके को मिले 67% वोट. वाओ. इसने इनके ही उसने बोला था भाई, वो कौन है वो कैनी ब्रॉल स्टार्स करके आया, उसका भी मैं देख के आया अभी प्रेडिक्शन सारे. डायरेक्ट स्टेज पे हो रहा भाई. हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ. Yeah, that's the thing. Well, let's take a little bit of a closer look at Chasmat Gaming EA now, and it's more of the same. The start of the year, they've been doing decent, right? But definitely towards the end, they've picked up, and I think it's thanks to that roster change once more. We see IC really did pick things up. The confidence that guy was exuding on Twitter, on some of the social medias about coming in and trying to take down the Titans of Crazy Raccoon in that region. I mean, he had me convinced, but sadly couldn't pull it off. अब ये हेयर स्टाइल करने का मतलब लॉजिक क्या? पूरे सबके सब एक ही हेयर स्टाइल भाई, अम्ब्रेला कट भाई.
छतरी कट करके घूम रहा है भाई सबके सब। हाँ भाई, सिर्फ एक के बाल का कलर अलग है, बाकी सबको सेम दिख रहे हैं। ओके चलो, ये अच्छा चीज किया इन लोगों ने कि सिर्फ 3 का डिसाइडर है, बेस्ट ऑफ 3, नहीं तो बेस्ट ऑफ 5 बहुत लंबा खिंच जाता है भाई। वैसे भी 16 मैचेस होने हैं। बहुत मैच है भाई, मैं तो देख के पगला गया। नहीं पूरे नहीं दिखाएंगे ना ये लोग, पहले ही बोल दिया उसने। रेकनिंग और इसका देखो ना, टीम फ्लैश नहीं आ रहा है, वो ऑफलाइन चल रहा है। मैच ऐसे ही हो जाएगा और फिर बता देंगे कौन जीता। लेकिन इसमें तो अपना एडवांटेज तो चला ही गया, प्री प्रेडिक्शन करते तो अपन को पॉइंट मिलते। वो तो है, नहीं सबके थोड़ी मिलते। अगर जीतते तो मिलते ना, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैं पहले प्री प्रेडिक्शन भी सोच रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि जैसे कि जो विनर का मैच होगा वो तो इनके ऊपर ही डिपेंडेड है ना पूरा, कि अगर ये लोग हार गए, चेस मैच हार गई, तो विनर मैच तो वैसे ही हार गए अपन, अगर अपन ने चेस मैच को होल्ड करा। बहुत सारे मैच वैसे 1000 तो बहुत इजी हो जाएंगे, इनके एमवीपी चूज करके भी हो जाएंगे भाई 1000 तो। हाँ, सिर्फ 1000 है कि कल 2000 हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? भाई अपने डुअल को वोट करना प्लीज। ये डुअल कौन है भाई? है डुअल को वोट करना, ये क्या है? कोई टीम का नाम है क्या डुअल? क्या है ये डुअल? डिस्कॉर्ड पे क्या हो रही है? बातें हो रही हैं। बस कर भाई, कुछ जाएगा। हाँ डुअल क्या है भाई? अपने डुअल को वोट करना प्लीज। MGR गेमिंग कहना क्या चाहते हो? सुधारो भाई, अंग्रेजी भी सुधारो। डुअल क्या पढ़ूं इसको, कैसे पढ़ूं? DUAL डुअल हो गया, और क्या होगा? लेकिन समझ में नहीं आया ना भाई, अपने डुअल को वोट करना प्लीज। डुअल क्या है ये? किस चीज डुअल की बात हो रही है? और ये कल रिवॉर्ड बढ़ जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं शायद। अरे वोट करने का ऑप्शन आ गया। RCN उसको फ्लैश को करो, फ्लैश जीतेगा। ठीक है भाई, लो भाई फ्लैश को कर दिया। 50 है भाई, 51-49 हो गया। खतरनाक चल रहा है भाई। RCN 49, Flash 51. They're just so far in form, and as you said, players, teams, they've been telling us that they are scared of this roster and how on form they are at the moment. In terms of public, they're going to agree with us. 68%. मैं तो वोट करने नहीं कर पाया क्योंकि लॉगिन अभी किया। वाओ, कभी भी चांस है भाई, अभी दूसरा वाला चल रहा है। बाकी तो MVP बस चूज करो तब भी हो जाएगा। इजी है भाई, 1000 पॉइंट तो बहुत इजी है। अरे इनको मैच दिखाओगे नहीं तो पूरे रात भर निकल जाएगा, इतने मैचेस हैं। खत्म करो, इतना क्या टाइम पास चल रहा भाई। शूटिंग स्टार। अरे 50-50 चल रहा भाई इनका तो, खत्म होने ऊपर नीचे ही नहीं जा रहा। RCN टीम फ्लैश is going to be very helpful at getting that blue star, so I like it being out of the way as well. Mazy ban is going to be quite interesting, to be honest. Not necessarily one of my go-tos, but we will also see the Nani and the Piper we discussed previously. Yeah, that's the thing. I'm not really sure about this Meg first. भाई इनको भी मोर्टिस से डर लगता है भाई, मोर्टिस बैन कर देते हैं लोग। And I feel like it's being overplayed a little bit at the moment. I like that Mandy Band though, the long range that she can. ये बात है, दोनों टीम ने अलग-अलग ब्रॉलर चूज किए हैं भाई। उस हिसाब से ब्रॉलर लेने वाले होंगे, इसलिए ऐसे उन्होंने चूज करके बैन किया है। मैं भी हिस्सा लेने का सोच रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, अब तो मौका नहीं है अगले वाले में ट्राई करना। ठीक है, पहले इन गेम वाला तो क्वालीफाई कर ले भाई।
sometimes bring her out of that mech. ओ इस पे भी दिख रहा है किसने मैग लिया है वो देखो। Yeah, definitely. I mean, if you get her out of the इस mech, पे भी दिख रहा है, well, किधर I पे mean, the दिख रहा nice है? thing is that at least she doesn't go अरे down, उस right? प्लेयर So के नीचे take दिख her रहा है ना उसकी down, so स्क्रीन don't पे। get a couple extra ओ stars. But at the same time, suddenly अच्छा, उससे you पीछे are going कहीं to be दिख able to रहा है। pressure your opponent so much, build up so much control because अभी दिखाएंगे it's मैं going to be वापस। like a lane हाँ that's देखो like, मैग I बेल wouldn't और even say मैक्स half लिया a है। brawler playing on it, like maybe 30% of a brawler. And yeah, you want to make sure you उधर keep पे her देखो healthy, keep her आरटी well लिया fed, हुआ है, but we 8 do बिट see लिया the हुआ है 8 और बिट लास्ट और वाले टिक चूज कर रहा है। the टिक screen लिया है, real टिक दिख quick. गया मेरे We को। see the RT, we see the 8 क्या bit, पीछे we चल रहा है see क्या? also रिफ्रेश मार the दूं एक फटाक से, चलो हाँ रिफ्रेश एक मार देता हूँ। रिफ्रेश मारो। well, Tick here I would say is the most traditional pick out of those. कर दिया I must say as रिफ्रेश। well, look, 8-bit, I've heard good चलो भाई things फुल स्क्रीन कर about रहा him हूँ। coming in bounty, coming in high street. चेस में फुल जीतेगा, I think ऐसा क्या? a solid pick along with the RT as well. आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। And the amplification from 8-bit super, it's going to be a lot of damage coming down, and I don't see Meg really being able to push into that when she has to get to that close range unless we see a bit of और शुरू हो गया। All right, a phase shifter. ऑफिशियल भी खड़े हैं भाई उनके सर पे। Sees that blue star, and that's going to be a bit of an artificial lead. भाई ये तो For बहुत SK एडवांस कर Gaming दिया, early ये तो on, गियर वेयर भी single दिखा kill रहे हैं run, कौन सा third गियर लिया phase है। around. बढ़िया है, आगे चल के जो लोग इसी से इंस्पायर होते हैं ना कि यार ये वाला लेंगे, वो वाला लेंगे, उनको अभी तो पता हो क्या लिया क्या नहीं लिया। मतलब इस बार का वर्ल्ड एसके का फाइनल्स कॉम्प तो भाई, बहुत बेकार लग रहा है। इस बार का वर्ल्ड फाइनल्स तगड़ा करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्किन अच्छी आनी चाहिए भाई, तगड़ा हो या ना। नल्ली स्किन देंगे भाई, मजा नहीं आएगा। पिछली वाली बहुत ही बेकार। तारा की वाइट अच्छी थी। फर्स्ट वाली आई थी वो सही आई थी, बढ़िया थी वो, उसको अभी मैं वो यूज करता हूँ डिफॉल्ट। एनजी और पूरो तो उसी के हैं, जेटा के। सब जेटा पूरी अलग ही हो गई, सब अलग अलग हैं। फिर भी प्लेयर तो जीटा का ही है। भाई चैट का ऑप्शन आ रहा है पिन चूज करने का, वाह भाई। करो ना फिर, क्या करेंगे। अच्छी वाला है, ताली बजा रहा हूँ अभी। ये 29% लोगों ने ये वाला यूज किया भाई, जो मैं अभी स्पैम कर रहा हूँ, हार्ट वाला। 29% लोगों ने वो वाला हार्ट वाला कर भाई साहब। कितना भी यूज कर सकते हैं। हाँ स्पैम कर सकते हो, उससे 5 पॉइंट मिलते हैं भाई। पूरा एडवांस किए जा रहे हैं। 5 तो देंगे ना। हाँ एक राउंड का एक बार का 5। स्पैम तुम कितने बार भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये तो जीत गए 1 स्टार लेके। ओए 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 240 एचपी। लेकिन वो तो मैक का छोटा वाला भी आ जाता है। छोटा वाला था। तारा की नल्ली है भाई। पिछली बार कौन सी मिली थी? तो तारा वाली मिली थी। इससे अच्छा तारा सुतारिया दे देते भाई सबको, खुश हो जाते बच्चे। फिर लेके भाग गया भाई वो, फिर ब्लू स्टार लेके भाग गया वो। भाई एक किल नहीं हुआ भाई, हम तो घुस जाते भाई, भले कुछ ना हो रहा हो, घुसो मारो पीटो। हाँ भाई भाई नहीं पहुंच पाया। आलू टिक्की भाई फुल। केंजी जो है पहुंच गया, बिल्कुल घुस गया। मार मार केंजी, मार के आना नल्ले। रीलोड स्पीड इसकी बहुत कम है मारना भाई। बंद कर देते हैं भाई ये लोग। वो टिक ने मारना ही बंद कर दिया, 3 रीलोड आए जब मारा। मैं तो भाई फुल स्पैम करता रहता हूँ जब तक रीलोड हो जाएगा। मैग टूट गई, मैग मरने वाली है शायद। हाँ हाँ बहुत गई, खत्म। बस अभी पीछे जाएंगे। हो गया, समझ गया भाई। ये लोग नहीं खेलते भाई, पुश नहीं करते, पीछे चल जाएंगे, सबसे सब पीछे चल जाएंगे। वो देखो आलू टिक्की ने अपना डिफेंस पोजीशन ले लिया। ओपे भाई अनब्रेकेबल बॉल पे तो भाई स्कोर बहुत पता। उसने उसको वो तोड़ दिया, लेकिन उससे है ऑलरेडी 8 बिट का चार्ज।
इसने सुपर बचा रखा है, अब देखो दिया 8 बिट ही सुपर, मरेगा मुझे लग रहा है। वो तो टेलीपोर्ट कर लेगा। उस पे वो है ना बेल का मार्क है इसलिए। ये गया। आरटी सुपर ही यूज नहीं कर रहा भाई। लोग नहीं यूज करते। एक स्टार, एक फुल हील हो गया। गए गए गया गए गया, गए। खत्म। हार गए हार गए हार गए हार गए, जीत गया पहला मैच। एसके विंस। जी जी, पहला एक सेट सेट। गया। अरे ऐसे खत्म हो गया मैच तो फिर तो हो गया। 49,396 लोग ये गिला जो है, क्या बोलना जी, स्वैग वाले ग्लासेस यूज कर रहे हैं। खत्म हो गया, अब हटा दिए। अब एक और आएगा तब चालू होगा। वैसे मजा आता है भाई। गोल्डी भाई ये फालतू में नल्ला बोल रहा है, मैंने इसको कुछ बोला नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, अब ठीक है। को बोल तेरे से, अरे राज बोल रहा है विवेक ऑन फायर को, तेरे से जब भी सही बात करता हूँ तो तू गाली देता है, इससे अच्छा ना करूँ। हाँ तो मत करो ना भाई, जबरदस्ती थोड़ी है, ये भी अच्छा, बढ़िया है इनका भाई। कोच है वो नहीं है ये। ना ना, देख नहीं रहा उनको पीछे से। नहीं नहीं, कोच है उसका वो नल्ला। हालांकि वो लोग ऑफिशियल्स भी आते हैं बीच में, अगर बुलाते हैं तो ऑफिशियल्स भी आते हैं। ये इनका कोच है कि प्लेयर ही है भाई? कौन वो? एक्स्ट्रा प्लेयर, सही लग रहा है ये तो। एक्स्ट्रा प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर। हाँ। जीटा में भी तो खेलते थे ना एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे वो लोग। केंजी को तो वहीं रखते थे। अब रेवेनेंट को भी भाई इंडिया के प्लेयर खिलाने चाहिए, वो खिलाते ही नहीं है साला। वो आया था, पीछे चला गया ऑफिशियल वापस। भाई मैं होता तो ना चाहता। अबे आए chaos नहीं जीता है इनको। Kuro on the other side of things was the main man over on Chazmak Gaming East Asia with the 2 kills, 154 Yes. DPS, so not the most out of his team, but it's the kills that matter in bounty. देख ले भाई, इधर भी ओपी लगाने से कुछ नहीं होता। इसने ओपी लगा रखा है लेकिन ट्रिपल 0 किल्स, सबसे कम डैमेज उसी का है, फिर भी उसी टीम भाई को हॉट जीत जोन आ गए। गया। अबे बात, ये तो फिर भी ठीक है ये वाला मैप। वो वाला मैप भाई, वो नल्ला जो आता है, सबसे बेकार मैप वही लगता है। हाँ भाई, हॉट जोन ही बेकार है भाई, हटा ही दो भाई मोड ही। लोग वोट क्यों नहीं कराते हैं? पिछले बार क्या हटाया था, सीज तो हटाया था इन लोगों ने, बोले सीज को सबसे ज्यादा वोट मिले थे कि हटाओ हटाओ हटाओ। अब बोले उसको हटा दिए तो बोले ना ना ना, वापस लेके आओ भाई, वापस लेके आओ। परसों मेरे को तू बोल रहा था, फिर मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया। बढ़िया, तुम लोग का टाइम पास चलता रहता भाई। 2.5 GB का नेट रिचार्ज करा दो गोल्डी भाई, ताकि मैं टूर्नामेंट देख सकूं। भाई तुम्हारे 30 रुपए थे ना, 30 रुपए में कितना रिचार्ज हो जाता है? मुझे क्या पता। 30 रुपए में 2 बार हो जाएगा रिचार्ज, शायद अबे 1-1.5 भाई GB जब वाले। अबे भाई गोल्डी भाई जब बोलते हैं तो मेरे ईयरफोन हिलने लगते हैं, यो 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 यो। तो आवाज कम कर ले। डिस्कॉर्ड का यही तो फायदा है, जिसकी चाहो उसकी, जितनी चाहो उतनी वॉइस कर सकते हैं, कम ज्यादा। भाई लेकिन यार $50 बैंड है। गोल्डी भाई कुछ बोलो। ये लो ये लो। अब नहीं वाइब्रेट कर रहे। ये तो फास्ट फास्ट क्यों चलने लगी? अबे भाई ये मुझे समझ में इधर राज का से लड़ाई क्यों चला करता है, कभी मेरे से लड़ाई, कभी किसी और से लड़ाई। बोर हो जाता है भाई मेरे को ये मैच भी लग रहा है कि एसके जीतेगा। बारले बहुत तगड़ा पिक लग रहा है। देखो 61% वोट मिला था क्या उसको। जरूरत थी, बोनी नहीं लेना चाहिए।
लेकिन बॉनी जंप करके बादले को मार सकती है ना अगर उसके पास हीलिंग गैजेट होगा तो। ये तो जंप भी तो आनी चाहिए, बहुत देर में आता है भाई उसका जंप। अच्छा प्लेयर है तो फिर कर लेगा, वैसे भी स्पोर्ट्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 4.5 शॉट में आता है आजकल। भाई Spam बायरन लिया है कितना भाई। ओपी है बे, 3 शॉट मारने पे सुपर चार्ज आता था उसका। एक सेकंड अभी भी इसकी हो रहा है। हाँ कम कर रहा हूँ इसकी वॉइस। अभी क्या मैंने कर भी रहे हैं? मैंने भी किया, आपकी बहुत ज्यादा आ रही थी। प्रीमो लिया है भाई। हारना है तो सीधे से बता दो ना। बस स्पीड नहीं आ रही है। हाँ आ गई। मैं डिस्कॉर्ड पे मैं आ रही है डिस्कॉर्ड पे गाना गाने। अच्छा अच्छा गाओ गाओ, सुने तुम्हारा कौन गाना हो रहा है? सुनेंगे। और राजू खाएगा काजू। हाँ भाई डिस्कॉर्ड कौन सा मोड आई। चाहिए, बास्केट बॉल या डुअल? बास्केट बॉल सही है भाई, डुअल से अच्छा तो बास्केट बॉल है, मजा आता है खेलने में, वो थोड़ा चैलेंजिंग तो लगता है। अरे भाई प्रीमो की तो धुन दी इन लोगों ने। खत्म हो गया भाई मैच, खत्म मैं बता रहा हूँ। बोल तो दिया भाई, प्रीमो लिया वैसे ही मैच खत्म हो गया। प्रीमो खाली सुपर फीड कर रहा है और कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा इन्हें पहली हार मान ली, बोले हो गया भाई हम तो जा रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी कर जाए, इतने सारे मैच कौन देखेगा। खत्म भाई खत्म, बॉनी तो चार्ज ही नहीं कर पा रही। अरे बोला मैं भाई, नहीं भाई कर क्या पाई, बेवकूफ कैसे बंदा है भाई, अगर सुपर चार्ज हो गया तो बचा के रख लेता भाई। बॉनी 300 हेल्थ में कूद गया। टैलेंट है भाई यश जैसा। अबे इनको कौन खिला दिया इतना बढ़िया, यहाँ तक कैसे पहुंच गए। प्रीमियर जो लिया क्या नल्ले टीम है बे, ये वही जीटा वाली है समझे, जो वर्ल्ड फाइनल्स में पहुंची थी और जीत भी गई थी। पता नहीं कैसे जीत गई थी भाई। और वो छोड़ो, ये वो भी जीत चुके हैं, स्नैपड्रैगन वाले जो सीरीज चलती है वो भी जीत चुके हैं। भाई प्रीमो पैम को नहीं मार पा रहा। अरे वो यूज कर रही ना वो स्क्रैपर वाली, तो उसकी वो स्टक कर लेती है अटैक, इसलिए नहीं मार पा रहा। किसी को भी नहीं मार पा रहा भाई, खड़े भी नहीं हो पा रहे लोग। भाई खत्म हो गया भाई। कर दिया है, पैम ने पूरा मेल्ट कर दिया। देखो लास्ट चांस बचा उनके पास, आगे अगर जाना है तो। मैं तो बोल रहा हूँ झंडा निकाल लेता हूँ, मैं तो सफेद झंडा स्पैम कर रहा हूँ भाई। भाई हार मान ली भाई, हार मान ली भाई, तुम खत्म कर दो मैच। सरेंडर, एक सिलेंडर। इस बार थोड़ा इन लोगों ने मिड कर लिया और ये खत्म हो रहा है। सुपर आने तक वेट करना पड़ेगा इनको, बस अब जीत सकते हैं। ओ भाई बार्ले ने सही गैजेट लिया था। अरे भाई ये तो शॉर्ट ही डॉज नहीं कर पा रहा। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया मैच। वाह भाई, अबे प्रीमो से अच्छा तो सैम ले लेते भाई, सैम मार देता इससे अच्छा। अरे भाई इसमें प्रीमो लेने का लॉजिक ही नहीं है मेरे भाई। और उसने उसको बॉनी ने उसको नहीं मारा। अबे भाई क्या चल रहा है? बॉनी ने वहां 300 हेल्थ वाले उसको बायरन को नहीं मारा भाई। मैं तो सफेद झंडे स्पैम कर रहा भाई, इनको हारना ही है तो मैं क्या बोलूं भाई। देख रहा खड़े होके कि भाई ये मारेगा। 26% लोग अब स्पैम कर रहे हैं वाला इमोट। अबे कितने सारे स्पैम हो गए। तो फिर भी ये लोग का चांस है भाई, 78% कर लिया इन्होंने। क्या बंदे हैं ये। रह रहा हूँ भाई। भाई बोनी नल्ली भाई, फिर 300 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100। ओह क्या कमबैक होगा।
क्या लगता है कमबैक होगा? ना भाई, प्रीमो को गुस्सा हो गया भाई। अरे प्रीमो तो गुच्चा हो गया, गुच्चा। ये तो आ रहा था भाई, आया ही नहीं। ये डिस्कॉर्ड ही नहीं आया। to try to make it to a third set in this series, even things out, and that would be a really अरे बेचारी स्क्रैप सकर यूज कर करके मार दे रही भाई वो तो। अरे गोल्डी बॉय, क्या इन लोगों ने अपने बालों पे मोबिल लगा रखा है क्या? इतने चिकने कैसे हैं? ऐसे ही रहते हैं, जेल लगा लगा के घूम रहे हैं। नहीं पा रही भाई। अरे 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 देख रहे हो, दो तो स्लो अटैकर्स हैं पहली बात तो उनकी टीम में। एक तो बॉनी, वो उसका अटैक भी बहुत स्लो जाता है। फिर ये मैजी, वो भी उसका स्लो, इतना स्लो कि भाई बाजू में मारेगी तो नहीं पड़ेगा। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। चलिए भाई झंडा मैं फहरा देता हूँ कि हार गए भाई, हार गए। हैं ये प्रीमो कहाँ उछल के आया है? उसके पास तो कोई चांस भी बनता है। अबे क्या बॉट खेल रहे हैं क्या? खत्म हो गया भाई। ऑटो में भी खेलूंगा तो इससे अच्छा खेल लूंगा भाई मैं। खत्म हो गया भाई मैच। चलो एमवीपी दिखा दो भाई। Chasmac Gaming EA coming into this one looking strong. Don't think they've proven a point there. definitely not an underwhelming performance. खत्म ही हो गया भाई, खतरनाक। It was a bit of a chaotic series for them. I don't think the झाड़ू कट की वजह से नहीं जीत पाए लोग। उनकी आँख के सामने बाल आ गए तो दिख नहीं रहा, तो उनको क्या सिलेक्ट कर लिया। ये देखो अभी तक उसके बाल सामने आ रहा है भाई, चश्मे के सामने से तो हटा ले। अरे अरे पीछे जो कोच बना है उसके बाल देखो कहाँ तक आ रहे हैं, बिल्कुल नाक तक पहुंच रहे भाई उसके बाल तो। इनके तो पिक ही समझ में नहीं आए भाई मेरे को। दो तो स्लो अटैकर ही थे और एक क्लोज रेंजर, कहाँ घंटे ही कुछ हो पाता। And the East Asian region in general is that their heads don't go down. They're going to be coming back even stronger than that in the elimination bracket. But for SK Gaming, on top of the world, one more game to qualify. Of a Chasmac going to need 2 in a row now. And even if SK do lose, they've got another chance in the back. Yeah, definitely so. And I mean, अब पता नहीं फ्लैश जीती होगी कि नहीं भाई, दोनों ही प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा भाई स्पोर्ट्स में देखो कभी भी ब्रॉलर बिना स्किन के नहीं दिखता है किसी भी बंदे का, अगर देखो पहले से आज तक नहीं दिखा। सैलरी मिलती है भाई सबको। सैलरी? अरे भाई इनको फ्री में मिल जाएंगे, सब क्रिएटर्स हैं, उनको अपना यहीं से स्पॉन्सर मिलता है भाई कि अच्छा देखो वो अच्छी स्किन है, फ्री प्रमोशन है भाई, ऐसे ही दे देते हैं एक स्किन पे। कभी नहीं देखा, मैं कभी नहीं देखा कोई स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसे मतलब बिना स्किन के खेल रहा हो। वो तो खेल भी नहीं सकते ना, खेल ही नहीं सकते ना, उनका बिजनेस कहाँ से आता है? ब्रॉल स्टार्स का स्किन से आता है। वो जानबूझ के दिखवाने के लिए भी देते हैं। चलो भाई एमवीपी सिलेक्ट कर लो। एमवीपी आ गया, वोट कर दो। और वो किसने लिया था? प्रीमो किसने लिया था? भाई 3% वोट आया। हाँ भाई उसी को वोट दे रहा हूँ भाई, सबसे नल्ला खेलने वाले को देना है मुझे। इतनी जल्दी अगर मैच खत्म करना था तो क्या ही बात है, मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब जीटा जो है, जीटा जबरदस्ती अपने प्लेयर्स को बोलती है लंबा खेलो, नहीं तो इनके तो दम नहीं इतना लंबा खेले। वहीं अगर जीटा का मैच हो रहा होता तो अभी तो पूरे लास्ट तक खींच के लेके जाते, उसमें भी टाई ब्रेकर तक। खतरनाक लोग हैं भाई। अरे एक भी प्रेडिक्शन सही हुआ है तो भाई मतलब सीधा 200-300 पॉइंट है भाई। 140 पॉइंट तो हो ही गए, खत्म हो गया। अच्छा उनका मैच चल रहा है अभी तो अरे तो उन्हीं का दिखा दो, नल्ले हैं भाई लोग, उन्हीं के लोगों का दिखा दो भाई।
mean, all three players looked very convincing at that स्पेक्टेट as तो कर ही well. सकते There हैं, was इधर some नहीं है तो क्या hiccups हुआ, from that स्टेज पे team नहीं है तो at क्या हुआ। Gamescom. It was a little bit hit or miss for a few of them, but today they just look better. They look very, very good, confident, comfortable, and I think we should be going down to an MVP now to see who is, according to the community, playing the best for SK Gaming Chaos. that game. Let's see who it's going to be. कितना It ends बोलते हैं up बे लोग, being, कैसे we should बोलते see हैं तुम Rise छोटे मुंह Chaos, से। and I mean, the one with the most LAN experience, I think it's एक fair तो to वो say, नकली स्माइल वाले को ले आया भाई। Yeah, as I mentioned earlier, he हाँ यार, qualified वो for 3 टेडी। World Finals फेक in भाई, a row. फेक हैं This is the सब। first time he doesn't qualify पैसा for मिल World रहा है इसलिए Finals. वो Luckily मुस्कुराया for जा रहा है। SLCQ this year. कूरू There's के a बाल saving देखो बे, grace, and झाड़ू जैसा लग definitely रहा is है। showing that he very much अरे seems to छतरी be कट here बोलते हैं because उसको, he अम्ब्रेला wants to कट। get that 4 in a row. Yeah, I mean, everybody wants to be to ए World भाई वो Finals. नहीं होता, That's why गोल्डन they're here. Obviously, रिट्रीवर्स there's के some बाल ऐसे ही consolation होते cash हैं बे anyway. If you सर पे, don't make it, you still और get some पीठ money पे for भी। playing at this event anyway. But हाँ everybody तो क्या गिफ्ट बात कर है। दे golden एक। tickets. Who wouldn't want those? Let's be real. But 15,000 का had आता है, a लाओ little 15,000 दो, मैं look भी at, कुरियर I believe करवाता। the off-streak तो game गिफ्ट second का मतलब SK क्या हुआ बे? versus TBD. Obviously, तो we're still गिफ्ट waiting तो for the नहीं teams खरीदना होगा तुझे क्या लगता है to यहाँ भोपाल में ये decide कुत्ते नहीं what's मिलते? going on, and we're actually into the नहीं game now. नहीं, यहाँ पे अलग Straight किस्म के over, get मिलते हैं into the लखनऊ action. में। It's Raconic लखनऊ versus में Team जो है, Flash. जो कुत्ते होते हैं हाँ। वो हंसते हैं। JC on the right-hand side. अच्छा अच्छा He's अच्छा। gonna survive that encounter. फिर अब ऊपर से फ्री में चाहिए होगा तो पिथौरागढ़ जाके नहीं ले लेंगे Are on the left-hand side. डीवी भाई से। He's in a great position. He has TP as well, which as a कुछ gem ना लो carrier भाई, उससे लेंगे। अरे वो क्या दिखा बात रहे है, हैं दिखा रहे हैं। बोलते अरे हैं। और वो इधर देख लो भाई, मैच दिखा रहा है भाई, देख लो भाई, मैच देख लो भाई। and getting हाँ kills मैच देख लो भाई। and right. It is gonna be आरसीएन वर्सेस फ्लैश। Shohei that gets a kill on the left-hand और side. से जीत वो रहे decide- हैं। भाई Right now, अच्छा, लास्ट ही दो चल मैच रहे हैं। बचे हैं। लास्ट ही मतलब बचा, दो लास्ट ही राउंड बचा। बचे Yeah, हैं। Sunstorm definitely helped them get out of spawn, and Oh, now they're come pushing back. towards these couple of gems. But it's not Buster who wants them. He wants to be in Christian's face, trying to retrieve those 8. आरसीएन This might have जीत been रही है 9th, अभी। though, for Iconic. Gadget's still in hand, Come and that's a back bit हो रहा है worrying. The धीरे drag धीरे। forwards and the shots should follow up as कहाँ well. हो रहा है? खत्म। That done. 10 in the count. और मार दिया। Now starting 10 the- जेम्स मार दे, चिपका दे। Match point, but he's slowed हाँ down. स्लो तो किया लेकिन मार नहीं He'll be able to पाएगा। heal, but ओके Sans has हील got करने के to लिए डाल दिया उधर। Yeah, that is ओके सर काम really खत्म। good timing for that super. Christian is still है बच गया। 3 seconds अरे left. मार दिया, नहीं टेलीपोर्ट मार लिया, मार दे एक शॉट एक। But no follow-up. Unfortunately, just short. That's gonna be a match point. ये भी प्रिडिक्शन गई भाई, मेरे को लग I रहा mean, है। it was great build-up play there coming out of ए Team Flash. भाई, You know, फ्लैश को the root किया तुम लोगों ने sands, फिर। all of the, you know, trying to stop them. एक शॉट का बचा तो बंदा, एक शॉट का। The whole तो इसमें तो duration. फ्लैश को ही जीतना था बे। फ्लैश बहुत बढ़िया खेलती है, अगर ये 2-0 होना चाहिए था ये भी। देखो अभी तो मौका है। भाई रोजा बहुत खतरनाक हो गई है भाई, जब से वो हाँ सुपर भाई। ट्रेट आया है। हाँ भाई, उसको अब जैसे वो बुल जैसा कर दिया है, जैसे उसको मारोगे तो उसकी सुपर चार्ज होती है, वो बहुत गलत बात है भाई। ऊपर से वो क्या कहते हैं कि ग्रास में उसको वो भी मिलती है 300 हेल्थ एक स्टार पावर से। 200 मिलती है। हाँ 200-300 वही चीज बहुत एडवांटेज है बेरोजा को। दो मुक्के में मार ही दिया भाई उसने लगभग। कौआ बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। खेला भाई। मार कौए, निकलना है तेरे को। नहीं निकल गया। पाएगा खत्म। भाई रोजा भाई। मार रोजा को नल्ले भाई, इनकी खुद का सुपर में यूज नहीं कर पा रहे भाई। क्या कर रहा है कौए? वो मिल गए, खींच जेम्स मिल गए। भाई ले गया। हो गया, अब वो नीचे भाग जाएगा बस्टर। गया। अब तो जीत सकते हैं। अब फाइनल राउंड भाई। अबे ए भाई, कूदे। बस्टर कर दिया, स्लो डाउन कर दिया तो उसने जीत उसको। गया। बढ़िया भाई। लास्ट राउंड जो जीतेगा वो फाइनल मतलब डिसाइडर राउंड तक जाएगा। एसके में जाएगा, एसके के साथ। No effects whatsoever directly into a bush. It seems a bit weird. I won't lie, but at the end of the day, double match point. They still have a chance. Yo, pull. One will be heading to elimination, and one will be heading to the final bracket. केक खाना भाई। Double match point. And Shizuku is going to be first block. तो वैसे भी आते लोग 4 गैजेट कर एडवांटेज आ दिए। जाता है भाई, स्टार्टिंग में ये एडवांटेज ले लेते हैं। 4 गैजेट भाई, आजकल तो कितना मारेगा, खींच के ले जाएगा भाई वो। Yeah, well, I mean that's an improvement in itself. Christian now
Just trying to get things started. Slow down there from JXCR, and he does get the shots through. Another super going to be popped there. Nice stuff from him. भाई रोजा है भाई, वो घुस के मार रही है भाई। अबे बस्टर का सुपर देखने ही नहीं मिला, कब मार रहा है अपना सुपर? अभी तो यूज किया था भाई, फिर खींच लिया। मार मार मार, एक शॉट का था वो। वैसे वो टेलीपोर्ट मार लेता, लेकिन फिर भी हो गया, फंस गया बेचारा, फंस गया, गया बस्टर गया, हो गया। उठा उठा, क्यूब उठा ले। खत्म खत्म इनका। अरे वाह, अरे सैंडी आ गई भाई। भाई ले गए, ले भाई क्या कमबैक है भाई, कमबैक तो है भाई। वही चीज है। पीछे भागो, फुल पीछे भागो। अरे भाई रुकना ही नहीं है, जो रुकना है पीछे भागो। बढ़िया भाई, क्या जीते हैं भाई साहब, क्या बात है, मजा आ गया देख के, मैं मजा आ गया। ये होता है भाई मैच, भाग रहे थे साला पिछले मैच में तो। स्नीक अटैक कर दिया, सैंडी ने स्नीक अटैक कर दिया भाई। सैंडी के ऊपर ही तो पूरा मैच टिका हुआ था, उसके सुपर में तो सब चीज कर सकते थे वो लोग। कैरी कर दिया, सैंडी ने कैरी कर दिया गैजेट मार के। बढ़िया बढ़िया खेली भाई। अब होगा एसके वर्सेस टीम फ्लैश 5 मिनट में। जब तक बकरा कर ले आओ, जाओ। देखते रहिए। ए 75 पॉइंट्स वहां से मिल गए। ये अगला मैच किसका है? इन्हीं का दिखाएंगे या किसी और चीज को दिखाएंगे? इन्हीं का दिखाएंगे। इन्हीं का है एसके वर्सेस फ्लैश। स्टेज पे आएंगे भाई अब तो। गोल्ड तक पहुंच गया भाई, हमें गोल्ड मिला है। In our off-stream match number 1, we still have plenty more to come, and here we are gonna have a quick look at our results. संडे को खाना, अरे यार that brings Team Flash into भाई, अब रिवॉर्ड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 5 दे के बोलते हैं कि भाई डेली का रिवॉर्ड है, डेली रिवॉर्ड 5 जेम्स दे दो, वो भी चले। 5 कॉइंस देते हैं भाई। बहुत देखेंगे भाई, 1-1-0 अगर इनने बढ़ाया तो सब देखेंगे and we know for sure that one of those two teams is going to be going home after that match. Yeah, sad to see they only just got here. It would be disappointing to say goodbye to either one of those teams because both of them looks pretty good. I mean, Chasmakie took a bit of a disappointing loss against SK Gaming, but that Reconic team, I feel like they should have taken that one home there over Team Flash, and obviously. अरे भाई इसको हटाओ स्टेज से भाई, कौन लेकर जाता है इसको? Play to recover them at the end because that was a big moment, but they are going to be facing off against SK Gaming. गोल्डी भाई डिस्कॉर्ड पिक पे कौन सा जानवर है जिसके ऊपर आप बैठे हो? I mean, regardless. तो एक जरा आंखें खोल के देख, दिख जाएगा। They will be playing against Group C when it comes to tomorrow's matches. So you really do want to have that first seed. It's going to put you in a better position. You'll be facing the second seed of Group C. So in theory, the lesser team. Now in practice, you know, Brawl is a very day-by-day game. Everything can happen. दुबई की फोटो है वो, और उस दुबई में जाने से पहले, उससे जस्ट एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, फिर भी मैं चला गया था दुबई। क्या एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहिए। बारिश का टाइम था, तो एक तो वैसे इतनी अच्छी रोड होती है इंडिया की कि क्या ही बताएं। वो तो फिर भी ठीक है, बारिश में तो गड्ढा ही नहीं दिखता है। अरे वो तो ठीक है, फिर भी ठीक है। उस गड्ढे के बाजू में काली गैया हुई थी, काली गैया थी, ऊपर से बाइक उचकी है। वाह वाह, मजा आ गया था देख। वो भी महान गैया जो है, वो उसको लगने के बाद वो अपनी पूंछ उठा के भाग गई। लेकिन उसको, मुझे ये जानना है कि उसको इतना बारिश में उस गड्ढे के बाजू में क्यों बैठना था? अबे मेरे को ये समझ में आता, बारिश होती है लोग सीवर का ढक्कन क्यों खोल देते हैं बे? ताकि पानी अंदर चल जाए। जाएगा भाई। किसको चूज करना, किसको? अरे किसको? फ्लैश एसके 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 भाई 87। अबे 100 दिखा रहा मेरे को। हाँ 87 हो गया अभी।
नहीं दुबई अंदर में से डूब अगर गए। टायर अबे दुबई में एक्सीडेंट नहीं हुआ बे, दुबई में तो लाइसेंस ही नहीं है मेरे पास चलाने के लिए। बिना लाइसेंस के चलाते हाँ हैं भाई, बर्थ फॉरेन सर्टिफिकेट कंट्री के। में अगर एक्सीडेंट हुआ तो भाई बहुत खतरनाक सीन होता है। Well, let's take a little bit of a look at the matchup then. SK are going to be अरे वो returning बता रहा on था stage. जापान में अगर गलती से भी अगर साइकिल भी टच हो गई ना, 25 लाख रुपए ले लिए तो उससे। 25 लाख भाई, इतने में तो बंदा यहाँ घर लेके गाड़ी लेके ऑडी लेके घूमेगा भाई। ऑडी 25 वो लाख में सबसे कहाँ आती महंगी है? गाड़ी पता है कहाँ है? मतलब अगर आपको 5 लाख की भी गाड़ी लेनी है तो सिंगापुर में जाओ, वहाँ आपको 93 की पड़ेगी भाई वो गाड़ी, क्योंकि पहले उनको 88 लाख का वो लेना पड़ता है कार लेने के लिए। बाजी सिंगापुर में सबको एसी फ्री मिलता है भाई, मैं सोच रहा हूँ सिंगापुर चल जाता हूँ, एक एसी फ्री मिलेंगे। वहाँ फिर जाके बिग एसी करेंगे भाई। ये गेम अभी भी चलता है। हाँ भाई चलता है भाई, ऐसा ही है। अरे वोट चाहिए तो जाके वोट कर लो भाई। चलेगा तो चांद तक, नहीं तो रात तक। बे 5 ब्लिंक कौन देता है बे? मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ, मैं तो गोल्डी भाई की स्ट्रीम देख रहा। तो 5 ब्लिंग, वही तो बोल रहा हूँ, 1-1 0 बढ़ाना पड़ेगा। 5 ब्लिंक की जगह 500 दे देंगे, इनका क्या जाएगा? पाकिस्तान जाओ ना। 50 भी दे देंगे। अरे भाई पाकिस्तान में चला भी जाऊं, लेकिन मुझे बजमी खेलने का इतना शौक नहीं है मेरे भाई। रियल लाइफ में वो भी तुम बता रहे हो बजमी खेलना है साला, मोबाइल उसमें तो एक तो तुम्हें पता ही है हमारे टीममेट कितने नल्ले होते, रिवाइव भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए नहीं जाना। मैं गया हुआ हूँ सिंगापुर, बढ़िया भाई बढ़िया फिर है। एक झाड़ू आ गई भाई, एक झाड़ू फिर आ गई। बच्चा किसका हो गया भाई? अबे 100 ब्लिंक तो देता फ्लैश की टीम में भाई 100 ब्लिंक देता। अरे भाई 5 दे के भी ऐसा बताते बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। 100 देते तो बोलते भाई जैकपॉट रिवॉर्ड है। ये एसके के पीछे जो लड़की बनी है ये कौन है? फ्री एसी तो नहीं मिला। अरे वहां रहने वालों को फ्री एसी मिलता है, तुम जाओगे लेके आ जाओगे एसी, ये कौन सा लॉजिक है भाई तुम्हारा? वहां जो रहते हैं वहां अगर तुम घर लोगे तो चाहे वो बिल्डर हो चाहे कोई हो, उसको देना पड़ेगा फ्री एसी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ सब्सिडी मिलती है, वहां पे एसी की सब्सिडी मिलती है, वो भी 100%। मतलब जितने का एसी उतने का तुम्हें पैसा दे देंगे, तो सीधे सीधे एसी लगा देंगे आके। बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ के लोगों को रिटेन करके रखने के लिए वहाँ पे रहे बंदे, कहीं कंट्री छोड़ के ना भग जाए, इसलिए उनने वहाँ पे एसी कंपलसरी कर रखा है। घर में तुम्हें कुछ मिले ना मिले, एसी जरूर मिलेगा। इसके पीछे ही बिजनेस होगा एसी देने के पीछे, बताऊं क्या? बिजली का बिल ज्यादा आता होगा वहाँ पे। हाउ मेनी MFS डिड SK गेमिंग विन इन 2023? मंथली फाइनल्स कितने बार जीती है SK? हेलो, मंथली फाइनल्स कितने बार जीती थी भाई? 0 बार, 0 0 0 0 करेक्ट है, 0 कर दिया भाई, 0 चाहिए जवाब। भाई मैं 2 बार करा, मेरे को लगा 2 बार तो जीती ही होगी, 0 बार जीती है भाई, शर्म भी नहीं आती। मैं भी 2 ही बोला अभी। अगर 2 बार जीती होती तो यहाँ ये थोड़ी होती वो उसमें लास्ट चांस क्वालिफायर्स में। अरे भाई नल्ली है मतलब भाई बिल्कुल। वहां पर तो गरीब के भी मजे होते होंगे, गरीब के लिए उन्होंने ऑलरेडी लगा रखा भाई। सिटी में तुम्हें एक भी गरीब करते हुए मिल गया, उसको 10 साल की कैद है, समझ रहे हो? पैसे नहीं मांग सकते वहां पे घूमते फिरते। और हाँ, चिंगम बैन है भाई पूरी कंट्री में, च्विंगम नहीं लेके जा घूम सकते। खाना तो दूर की लेके नहीं घूम सकते, च्विंगम भी बैन है सिंगापुर में। क्या बात। जो उनका कहना है कि लोग खाते हैं यहाँ, ये तो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, नहीं तो ट्रेन इनकी सीट के नीचे चिपका देते हैं। हमको करवाना ही नहीं भाई ये। तुम हमारे यहाँ हो भाई, एक दूसरे के बाल में चिपका देते इधर। अबे अजीबोगरीब, हर कंट्री में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब रूल होते हैं भाई। अब जैसे उधर नॉर्थ कोरिया ही है भाई।
अरे वो तो छोड़ ही दो, तो कंट्री अजीब है भाई। ऐसे फ्रांस में आप रात के 11 बजे के बाद टॉयलेट का फ्लश नहीं कर सकते। सोचो, मतलब अगर किसी को बहुत जोर की आई होगी तो हक के आ जाएगा, लेकिन धो नहीं सकता। वहाँ के वो बंद हो जाते होंगे ना, सीवर बंद कर देते होंगे। नहीं, सीवर वाली बात ही नहीं। उनका कहना है कि रात के 11 बजे के बाद ज्यादातर अच्छे लोग जो वो सो जाते हैं और फ्लश करके करते हैं तो आवाज बहुत आती है, जिससे उनकी नींद खराब होगी, इसलिए हम बंद नहीं करते अभी। वाह भाई, पे कैसी आवाज आती है यार। बुड़ बुड़ विल बुड़ विन बुड़ दिस बुड़ मैच। बुड़ 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 बुड़। EMG कर रहा हूँ मैं वापस भाई। चलो भाई, चेस मैच कर दिया हमने भी। 60 नहीं 73% वोट, 72 हो गया। चेस मैच ने ड्राइव को बहुत गंदा वहां पर मारा पेड़ बहुत। तोड़ना भी मना है, मतलब फल भी नहीं तोड़ सकते। अरे तो भाई वही बता रहा हूँ, ऐसे ही सारे बहुत सारी कंट्री जहाँ पे हर कुछ ही रूल है भाई, कुछ भी रूल है। हाँ बाकी, लेकिन हाँ यश, तू कितना हकता होगा? क्या भाई? कितना हक लेता है? मैं हाँ 300-400 ग्राम और कितना? अरे 1 आध किलो हक भाई। वहां जा, कनाडा जा भाई, तू कनाडा जा। वहां पे एक कैसे कंपनी है, जाऊँ? स्टार्टअप खुली हुई है। वो 1 किलो हग्गू मुत्तू के वो तुझे देती है कितने, वो कितने में उसमें $200 कुछ। भाई टिकट करवाओ तुरंत मेरी, मैं नंगा जा रहा हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि उनको क्या फायदा है हग्गू मुत्तू लेके, तो भाई उससे बनती है वो मीथेन गैस बनती है अपने हग्गू मुत्तू से, तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं नल्ले। सोच रहे हो, बायोगैस बनती है, बायोगैस के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं नल्ले। बोले हम तो तुमको $200 देंगे और बेचेंगे $1000 में, $800 का हमें भी फायदा है। लेकिन ये बिजनेस सही है भाई, खाते जाओ हकते जाओ, खाते जाओ हकते जाओ। $200 समझ रहे हो भाई, $200 पूरी फैमिली मिलके है भाई, हगेगी। तगड़ा बिजनेस है। बोले क्या भाई कर रहा मुझे है? तो जाना जॉब चल पड़ेगा, रही है, मुझे तो जाना लेकिन पड़ेगा, पूपा मुझे की तो आवाज जाना क्यों आ रही है? पड़ेगा। अरे यही तो जॉब है। मुझे जाना पड़ेगा, मेरे लिए सही है। हगने जाएगा भाई किसी। भाई रोज हगा करूंगा, $100 भेज दिया करूंगा इंडिया, कुछ ना कुछ तो वैसे फायदा होगा ही। आएंगे सिर्फ कितने, 10% तो वैसे ही कट जाएंगे, $90 तो वो बचे, 100 के 90 मिलेंगे सर। कुछ ना कुछ तो फायदा ही है, करियर सेट। चालू करो बे, क्या कर रहे हो? अबे ये लोग दिखाते नहीं है मैच, ये सब कोई नाटक क्वेश्चन आया ज्यादा तो कर जल्दी जवाब देना। दे तो दिया, आया तो था कि कितने मंथली फाइनल जीती थी, आंसर था 0। अगर इसने तुम 2 किया है ना। देखोगे तो मिल जाएगा। वो तो भाई किसी ने किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई, अगर सही आंसर चाहिए तो। अगली बार कोई और देगा, और क्या। अगली नहीं बार भाई, यश को आराम से बोलेंगे हो भाई। जाएंगे। क्या मैं नाम तो गलत है देख भाई? ही रहा हूँ। ममेशी 002 9J भाई, अजय नाम होता है भाई, ममेशी नहीं होता है। मोमोनोस अबे के इसके होता तो मान बाल भी से लेते। थे बे। अरे भाई क्या हेयर स्टाइल करके रखते हैं, अरे सब के सब एक ही जैसे हेयर स्टाइल कैसे कर लेते हैं ये झाड़ू कट इतनी फेमस है भाई। शर्म नहीं आती है टैलेंट है भाई। ये सब कोरिया के हैं लगता है मुझे, ये सब साउथ साले कोरिया। ऑक्टोपस खाने वाले हैं भाई, ऑक्टोपस हेयर स्टाइल। ऑक्टोपस खाओ, रबर रबर रबरी रबरी। Again, the drafts have been really impressive, and I'm kind of feeling that they've got a bit of an edge in that respect. It's great to look at stats, but I think what it comes अबे down to is मर्सिडीज your का लोगो performance बना है on the बे day एसके की टी and शर्ट kind पे। of how you handle हाँ तो yourself स्पॉन्सर है, थम्स डाउन दिखा रहा है भाई, आए के और back at their performances. It's हाँ, hard to अपने really टीममेट्स को say दिखा what रहा the है। worst month was. I mean, it was obviously बोले ये दोनों नल्ले हैं। nonetheless, a grand final appearance in every monthly. इतना मुझे talent भाई है सबसे भाई। Best performance. सबसे बढ़िया टीम मुझे उसकी लगती है भाई, But I guess the क्या swing नाम है? March against Rising Sun on a 3-0 scoreline. अरे वो कौन है, वो उधर पे खेलता है? नहीं नहीं, इधर से जिस टीम में ये है
region which has been notorious for being, अरे वो जो बहुत एग्रेसिव हुआ था, क्या नाम है भाई? we get so many people STMN. attend those qualifiers. Tyrant. Incredibly हाँ, उसकी टीम में भाई KFC स्पॉन्सर्ड है भाई। KFC मतलब खाने पीने का इंतजाम हो गया। फिर वोडाफोन का स्पॉन्सर है तो इंटरनेट वगैरह का इंतजाम हो गया। फिर एक लुफ्थांसा जो है वो जो फ्लाइट वगैरह उड़ाती है उसका ट्रेवल का इंतजाम हो गया। और एक कोई सी होटल चेन की कंपनी है लोकल वाली, वो भी है है, वो तो ट्राइब की टीम है। वो ट्राइब अलग है, उनके पास भी KFC, लेकिन मैं उसकी बता रहा हूँ, उसके में भाई सब कुछ है, रहने खाने पीने घूमने सबका इंतजाम हो गया। करना क्या जिंदगी में भाई? बोले भाई एक काम करो, पैसे मत दो हमें, बस पूरे लाइफ टाइम के लिए फ्री दे दो ये चीजें कि हाँ भाई जहाँ जाओगे चलो हमारी फ्लाइट में फ्री। भाई मेरे को तो मर्सिडीज चाहिए। वाह भाई। इतना भी नहीं होता, वो बोलेंगे हाँ ठीक है एक दिन के लिए रेंट पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। एक ही दिन में सत्या पीट दूंगा मैं जी वैगन की। ऐसे उधर हाँ तो चले जाना, दुबई चले जा, एक दिन के लिए मिल जाएगी, फरारी मिल जाएगी। वो बात अलग है कि एक दिन का किराया 1.5 लाख रुपए। तो पैसा नहीं खर्च करना ना, 1.5 लाख रुपए नहीं है। हाँ तो फिर किसी शेख के घर के बाहर जाके खड़े होकर रोने लगना भाई, अरे थोड़ी देर के लिए चलाने दे दो, थोड़ी देर के लिए। हबीबी जी वैगन दे देती। हालांकि तुम चलाने को तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी, उनने वहां पे बना रखे हैं रेगिस्तान के बीच में। 3 साल से पुराने गाड़ी रखते ही नहीं ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, यहाँ लोग 20-20 साल पुरानी गाड़ी चलाते। ये हमारे पास ही बैठा हुआ है जो फॉर्च्यूनर 20 साल की पुरानी चला रहा है। हाँ 3 साल होती है, भले कितनी अच्छी गाड़ी हो, बोले कबाड़ में डालो, हो गया 3 साल। मतलब क्या होता है 3 साल में? तो हमारा गाड़ी के सीट का कवर नहीं निकालते। दुबई में पोल्यूशन कम है क्या? नहीं, तो फिर क्यों ऐसा? उनका कहना है कि हम रहते रहे अमीर लोग, हमारे पास तेल के कुएं हैं, हमारे अपनी अमीरी दिखाना है। तो एक भी कार ऐसी नहीं दिखनी चाहिए जिसको देख के लगे कि भाई ये कार बहुत पुरानी टाइप की है, मतलब यहाँ के लोग जो है खर्चा नहीं कर रहे, इसलिए वो रूल है। ऊपर से अगर तुम्हारी गाड़ी के ऊपर 1 हफ्ते से ज्यादा अगर धूल जमी हुई है और किसी ने शिकायत कर दी तो गाड़ी तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, वापस भी नहीं करेंगे। ऊपर से तुम्हें 10,000 दिरहम का जुर्माना भी देना पड़ेगा। बाप रे बाप, कुछ अलग ही सिस्टम है। मतलब गाड़ी बिल्कुल धो धा के रखो, नहीं तो रखो ही मत। रोज तो गाड़ी नहीं धुल सकते भाई, रोज नहीं धुल सकते, बहुत मेहनत लगती है गाड़ी उसके लिए बंदे रखो, उनका कहना है पैसे दे के बंदे रखो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन गाड़ी चमचमाती दिखनी चाहिए। भाई इतना तो नहीं हो सकता, रोज कौन देगा? क्या लगता है भाई कौन जीतेगा? 3 बंदे, उसके पीछे एक और बंदा क्यों खड़ा रहता है? एक्स्ट्रा प्लेयर होगा या फिर कोच हो सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्लेयर ही है। पर BMW वाले ये लोग को पैसे दिए हैं क्या? BMW नहीं, सबसे पहले बात तो मर्सिडीज का लोगो है, सेकेंडली पैसे नहीं। हाँ स्पॉन्सर तो हो ही जाता है, बड़ी टीम जितनी होगी। और अपन को लगता है जैसे भाई ये सिर्फ ब्रॉसर्स खेलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ई स्पोर्ट्स ऑर्ग है तो दूसरी टीम्स भी खेलती होंगी। अबे मेघ ले आया बे। मैं गलत पिक है भाई। लेकिन नानी जो है वो दिक्कत दे रहा है। मैक बहुत गलत पिक है। योशी खड़े होकर कर क्या रहा है? मिड कवर कर। अरे वो लेके गया है। अच्छा सुपर यूज किया हुआ है। हाँ मैं सोच रहा हूँ खड़े होकर कर क्या रहा भाई ये। अबे भाई जब से ईद का वो मिथिक और एपिक गियर आया है बहुत मुश्किल हो गया। ओह भाई वहां जाके मार रहा होगा उस पे। हाँ 5-5 डैमेज दे रहा है ना सेफ। वो टेलीपोर्ट कर लिया। मैं भी यही करता हूँ भाई, हमेशा वही रखता हूँ मैं इसलिए। लेकिन ज्यादा डैमेज है भाई, बोनी इतना ज्यादा डैमेज देके चली गई। बोनी बहुत डैमेज देती है। ईव तो निकल ही नहीं पा रही। और खुद ही तो भाई खत्म है इनकी करियर। हो गया 1 मिनट बचा है बस, खुद ही मार देगी ये लोग ऊपर आएंगे तो।
You can jump in and create some more space. Again, get अरे बेचारा हील ही नहीं कर पा रहा भाई योशी। लो भाई कर दिया जंप, हो गया खत्म। 37 33। समझ में नहीं आया, मेक का कुछ उतना समझ में नहीं आया पूरे मैच। अरे मैग होल्ड कर रही है, कुछ नहीं कर रही। मैग का काम होल्ड करना है, मिड से नहीं आने देना। बस अब इनकी बारी है भाई डैमेज देने की, नहीं तो नहीं हो पाता। अबे उधर रफ्स नहीं मार दिया भाई, हो गया, खत्म कर दिया है। 6% बचा। ओ भाई 6%, बस ये तो चक्की खत्म कर देगी। कूदेगी वो नहीं 20 सेकंड में। कम ऑन 20 सेकंड, मौका है अभी भी। जाओ सब मिलके मारो। कुछ ब्रॉलर्स तो बिल्कुल गायब ही हो गए स्पोर्ट्स से। इस टू कोल्ट बिल्कुल मतलब गायब से हो गए। खत्म भाई। कोई नहीं हिल रहा भाई, जैसे मैच खत्म हो गया। तुम लोग के कितने पॉइंट्स हुए बोलो? मेरे 285, 285। मेरे 245, क्योंकि मैंने वो गलत हो गया था। भाई इतने सारे मैचेस, सबके एमवीपी सिलेक्ट करो, वैसे ही जीत जाओगे। हाँ भाई। Again, it was such a fantastic matchup earlier today. They looked so strong, but they just didn't quite land the mark. I want to see a couple more TPs from Yoshi, a bit more aggressive position as well on that safe, and this is looking already quite a lot better. सही है ईव, लेकिन उसको जाने नहीं दे रहे ना आगे। अब गई देख। वो वाले वाटर पे जाना पड़ेगा जब ही कुछ होगा, जहाँ रफ्स है ना अभी। इसने जंप वाला गैजेट नहीं लिया है क्या? टेलीपोर्ट कर लिया उसने। ओ बढ़िया भाई, 10% डैमेज दे गया। ओ 15% डैमेज दे के आ गया भाई बंदा, और क्या चाहिए। कॉलेट ने बढ़िया करा भाई, पूरा और दीवार तोड़ दी। वो ये लेकिन वो है ना उधर, वो मार देगा। भाई नानी बहुत डैमेज करता है। ओ ये भाई तीन चिपका गया भाई। अरे वाह क्या बात है। 39%। 11% तुम्हारा है। और इसके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं भाई, सब वन शॉट मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर दिया। ओनली 20। अबे एमवीपी सिलेक्ट किया होता तब भी 100 हो गए होते। अभी कैसे कैसे मर गए नल्ला भाई। 29 हेल्थ के साथ वो आई, फिर भी मर गया। इस सच तो ऑटो में मार लेता भाई, तब भी बच जाता। अबे मैग ने भी हक दिया भाई, उसको बनना ही नहीं चाहिए था बड़ा वाला भाई। वो कॉलेज कितना हील हो गई थी भाई उससे। अबे स्ट्रीम क्यों बफर कर रही मेरे 22 15%। कॉलेज अबे मार देती भाई, सुपर क्यों नहीं मारा? 5% बचता ज्यादा। फालतू लंबा खींचते भाई ये लोग, कुछ ज्यादा ही सेफ खेलने लगते हैं। मार दे भाई जाके, पड़ जाएगी सुपर तो। मारती नहीं है भाई सुपर। Now we've got ourselves a set, haven't we? Fantastic stuff. A great retaliation there from SK Gaming under pressure. And they handle themselves very, very well. But will they do so again to lock this? ये टूर्नामेंट जितने दिन चलेगा, कल और चलेगा। The first set can really be a difference maker here. That valuable momentum that it brings in what is a best of 3. So crucial to land this, but I loved what Yoshi was doing, more so on the peep side this time round, keeping that pressure on the back lines. Team Flash, they're going in very aggressive, and Jay already out of mech. Again, Mameshi very low on that left-hand side as well, and Chaos finds the shots continuously. So this peep, though, could be the perfect thing. Oh, that's perfection from Suzuki. उसने वहाँ पे अपना वो डाल दिया, निकलने नहीं दिया उसने पीप को। खौफ तो है भाई, खौफ तो है। वही तो है जो डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा है उनके वहाँ जाके। उड़ के जाता है। खौफ है भाई, 2 गैजेट तो यूज हो गए रफ्स के।
रक्कस भैया का नेट खत्म हो गया। ये स्किन बहुत तगड़ी है भाई नानी। अरे पॉनी को छोड़ दिए, नीचे नल्ले है भाई, छोड़ खत्म तो सकते हैं, कर छोड़ दो। सकते हैं। अरे बहुत डैमेज करती है वो अकेले, वो भी बड़ी, वो छोटी होती गई है वो। ये क्या हुआ? अच्छा डबल दिखा रहे। भाई दे रहा, नानी भी दे रहा वहाँ नीचे, दे मिला मिला के देख रहे हो उसने तो पॉनी। भाई फाड़ दी नानी ने। अरे भाई पॉनी चिपकाए जा रही है, अब जाके मरी। भाई मैग आ गई, लेकिन इनने आया ही नहीं भाई, ये डरते हैं भाई, आते ही नहीं। मैग आ सकती थी पूरा आगे। अरे नानी देखो वहाँ डैमेज दिए जा रहा है, टेलीपोर्ट हो गया, मर गया बेचारा। 43 पे है, 52 पे है। ये वाला राउंड बहुत तगड़ा चल रहा है भाई, ऐसा लगा जीटे के मैच चल रहे हैं भाई। वोनी को सुपर दिया मतलब हार गए भाई सब। बॉडी को बहुत ज्यादा पिंच किया जा रहा है। अगर नानी को क्योंकि सुपर वो मिला damage कर सकती भाई, है ना, इसलिए। टीपी होके चला जाएगा। 10% डैमेज तो दे ही देगा नानी। हो गया, गया क्या गया shot मैच miss कर रहा है ये? खत्म, मैच खत्म, मैच खत्म, खत्म मैच गया, वो पहुंच गया उधर, खत्म मैच। हो गया, जीत गए, जीत गई गए। भाई, एसके जीत गई। खत्म भाई, टेलीपोर्ट कर लिया, हो गया भाई, काम ही खत्म हो गया। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। कॉलेट तो ओपी है, कॉलेट ओपी है भाई, पूरे मैच का एमवीपी नानी था भाई। वो नल्ला है भाई। मुझे तो वही अच्छा लगता है भाई, मैं तो हमेशा वही रखता हूँ, टेलीपोर्ट। एक तो वो रख लो शील्ड वाला डैमेज जो ले लेता है उसको स्टार पावर में, और दूसरा रखो इसको टेलीपोर्ट को एज अ गैजेट, खत्म भाई। उसको वो जो एसपी है ना, वो दूसरी वाली, वो उसमें नॉकआउट में काम आती है, बाकी किसी भी मोड में काम नहीं आती ज्यादा। नॉकआउट में दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं ना, इसलिए। रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स का मैच होगा क्या? वो तो क्वालिफाई होंगे शायद से पहले वो तो जा रहे हैं, वो तो पहले ही जीते हुए हैं। है ग्रुप सी में है। ओके, तो मजा आएगा, तो मजा आएगा रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स का मैच देखने में। एसटीएमएन भी है, एसटीएमएन ई स्पोर्ट और क्लैश भी है। एसटीएमएन में तो बॉबी खेलेगा, बॉबी दे, और नावी भी है, और रिजेक्ट स्कारलेट और मार्कोस गेमिंग सब है भाई। तो आज है कि कल है? आज ही है शायद। एसटीएमएन ये आज के मैच है, डे 1 लिखा तो है ऊपर, डे 1 ही लिखा है, इसलिए आज के मैच है ये सारे। एमवीपी कौन है अभी? कहाँ से होगा एमवीपी? अभी तो पहला सेट था, अभी तो 2 सेट हैं। अगर एक और लगातार जीत गया तो बात अलग है। क्या होगा? तो भाई चलेगा, हाँ आराम से चलेगा भाई, 8 बजे तक तो चलेगा ही। वो तो अच्छा हुआ इन लोगों ने बेस्ट ऑफ 3 कर दिया, बेस्ट ऑफ 5 होता तो भाई फिर तो लंबा, बहुत ही लंबा, रात के 1-1:30 बजा देते ये लोग। वो खुद ही नहीं कर पाते भाई एक दिन में तो। अबे मामेशी 002 बालों का स्टाइल यार अलग ही है कुछ। A quieter game, I would say, for Shizuku here, but in all honesty, did not have the easiest matchups. I think a fresh start इनो से कुछ ज्यादा ही एक्सपायर हो गया है। And they need to रंगोकू कट करा रखा है क्या इसमें? because if they don't, they will हाँ सही बोला, सही पकड़े हैं। पर रंगोकू लग नहीं रहा है, बजट फ्रेंडली रंगोकू, ये बजट फ्रेंडली रंगोकू है, सस्ता वाला रंगोकू है बे, सस्ता वाला भाई रंगोकू। बजट फ्रेंडली रंगोकू। नहीं 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 नहीं, बजट फ्रेंडली कोई चीज नहीं होती। तो सस्ता रंगोकू बोल लो। बस कर भाई, कितने सेटअप करेंगे लोग, हो गया भाई। अरे बस भाई, भाई बस मैच करो भाई। दिखाओ यार। बाजू बाजू में खड़े हैं दोनों, एक दूसरे ऐसे डिसाइड कर लो, अच्छा सिक्का वहीं उछाल लो, अंदर उछालने की जरूरत ही नहीं भाई, जल्दी से चालू कर दो।
हेड्स है, हम लेंगे बोले तुम क्या लोगे, एक पाइपर ले लो, एक बैली ले लो, पैम ले लो, तुम्हारा हो गया। मेरा जो है भाई मैक्स दे दो, मॉर्टिस दे दो, और चलो ब्रॉक दे दो, हो गया मेरा। Yeah, definitely so. Also very OG ideas. I mean, Max Gene, that's like 2020 stuff, you know? Like, I love it. I think Gene is in a bit of a tough spot. अरे at भाई the बेल moment. ले रहा है। Max, still good, but definitely not as good as it once was. So it is an off-meta team that Team Flash are bringing in, but it might also इसमें भी just be नानी the बढ़िया comfort रहेगी zone, भाई, bringing लेकिन back बैन brawlers they know they shine on, even though they might not be मेरे को the रिचार्ज shadow करवा देना गोल्डी भाई। worked यहाँ here पे कौन सा रिचार्ज traditionally. करवा देना? Synergy between Max and Gene is just as good as it was before. Just the brawlers aren't as strong in the current meta. But if they're more comfortable on that, rather than anything else, or if that's their decision to just, you know, stick to something they know they can make work, it might be the best moment to do something like that. Well, SK draft RT is their final pick to the Bonnie of Team Flash, and I've got to say, you know, against this Max, it's going to be गोल्डी very भाई को difficult 8 बिट to खेले land तो those shots जमाना हो with the गया। Bell, with the Brock, and that could be a potential advantage then if they get this right. Bonnie, of course, fantastic at securing those final kills right when भाई it इन matters लोगों most, के ना है, and giving yourself रैंक back वही ने the अपने round इंटरव्यू or में कहा potentially था the game as well. Maybe कि ये even a लोग second हाइपर चार्ज को point. ऐसा बनाना But चाहते हैं कि Team पूरा Flash गेम have चेंज हो to have जाए, something जिससे like that in their तब और arsenal क्या here. करेंगे। The long-ranged affair is not चिस्यू वाली necessarily एक जगह से going to be मारेगी for तो Max सीधे or वहां तक Gene, जाएगा but शॉट, इतना बड़ा survivability बूम। absolutely will be that speed. And those मैंडी का heals will be करियर very, खत्म very भाई, important. An early अगर play शेदी there के from साथ OP ऐसा with कुछ the है। rocket fuels we thoroughly expected. It just provides such a great channel और to अपना get फेंकेगा तो straight मिसाइल into the flow. छूटेंगी। Look at that. My word, ये एक Chaos बार मार Intel दिया तो are तुम्हारे making पीछे a जाके चिपकेगी medium of that. भाई, Yeah, तुम कुछ भी placing कर a लो। mistake अरे there. I think they could ये have अरे taken अरे that अरे shot क्या into the wall, है but the bounce भाई, was क्या चल रहा है? lethal. उसको थम्स डाउन दिखा रहा भाई। Just looking to make it a quick one. I अरे mean, भाई that's बीमिंग अबे कर रहे भाई हैं आए बहुत केओस भी गंदी। टॉक्सिक है भाई, you आए still have केओस a भी whole lot to टॉक्सिक play है भाई for, बहुत। but you're already giving away a round to खत्म हो SK. गया भाई, Again, मैच Team ही Flash खत्म are हो much गया। more capable एक ही वो तो लोग और भी मैंने जीत ध्यान ही नहीं दिया भाई क्या हुआ। really the Gene's वो fault लोग because बीमिंग all of the इसलिए कर रहे हैं कि इन सबके पास रेंज है, उसके पास रेंज the नहीं bell है। shot that was onto the ऐसा Max नहीं है भाई, to उसने take पता down. नहीं कुछ It तुक्के में is मार दिया complicated, शायद। it is going to be tough, but how do you recover from there? I mean, that's got to be one of the fastest rounds वो of दिखाएंगे, अभी knockout रुक we've जा, ever seen, and अभी रिप्ले में Team Flash now दिखाएंगे। are slowing the pace down, but sure to pick it up soon if Suzuki अब can एक और get प्लेयर मिल गया। this. अब गलती से भाई, गलती से अब टीम फ्लैश जीत जाए, मजा आ जाएगा भाई, एक और मूवमेंट बन जाएगा भाई। कमान भाई टीम फ्लैश, हम तुमको सपोर्ट करता है, हम टीम फ्लैश को सपोर्ट कर रहे टायरेंट हैं खुश हो भाई। रहा होगा भाई देख देख के, मजा आ रहा होगा टायरेंट। टायरेंट की तरह चिल्लाते हो इनमें से कोई Yeah, जीत that के। damage is brutal, but the magic buffs help compensate a little bit. A kill onto IKEA. अरे भाई ब्रॉक के पास इतना ज्यादा एरिया कंट्रोल कर रहा है वो। हक दिए भाई, हक दिए। अभी लोग सी दिखाएंगे, मॉड दिए दिखाओ यार, तुम लोग भी दिखाओ, थम्स दिखाओ यार, मजा तो आया थोड़ा। बैंटर करो भाई, बैंटर करो। हो अरे गया पीछे से खत्म। आके लग गया भाई उसको, आगे से नहीं लगा तो। Let's see whether we might see a champion moment for Team Flash here. Phase shift onto Chaos, good taps as well, but it does place there. भाई सोचो जीन आरटी को खींचे और आरटी सुपर यूज कर ले भाई। For X9J all alone here, and it should be an easy clear up here for SK, a champion. और है भाई, खत्म। And that game goes the way Last. of SK. लास्ट ये भी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई, तूने दिखाया क्यों भाई, अभी हार जाते। अरे भाई You need to prevent that from happening. पुलाव खा लो भाई I लोग, think the पुलाव। Max, as you mentioned, is going to be Flash. dodging those shots, but you kind of want to make it to max Flash. super. If you go down Flash way भाई before noob that, है। kind of look again at the HP situation. That's going to be straight back towards spawn because you're too low HP to stay in position. And Come back, I they think come that back. Bell trick shot actually connected, but he did manage to heal up in time to not make that lethal. Yeah, honestly, these reverse polarities are insane from Chaos. A big tap, a follow-up mark as well, and SK are really keeping the pressure on as they have to. They are one game away. अरे देखो इसकी चेंज हो गई। हाँ, ग्लिच हो गया, एम्यूलेटर में ग्लिच हो गया। और हमको मना करते हैं, देखो शर्म नहीं आती इन लोग को, खुद इम्यूलेटर चला रहे हैं भाई नल्ले, खुद ब्रॉसर वाले इम्यूलेटर चला रहे हैं भाई। खत्म।
एक्सक्लूसिव बेल स्किन दिखती हुई। नू बेस्टे पर जीत गया। तो नहीं कह सकते, खेल तो बढ़िया ही रहे हैं। स्केलेटन बेल भाई, हैलोवीन का आइडिया दे दिया इन लोगों को तुम लोगों ने। मैं तो पहले ही डाल के रखा भाई, एक्सक्लूसिव स्किन गलती से अनलॉक हो गई थी मेरी। देख लो एक्सक्लूसिव स्किन है, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही थी, देख लो सबके पास है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। स्केलेटन बेल है यार भाई, वो 149 जेम्स का और एक किडनी का, ज्यादा महंगा नहीं है। But the speed available as well. If Team Flash time this right, they can survive on. Now it comes in. The aggressiveness might show itself. Chaos under a lot of scrutiny here, but he's tapping hard. बेल को खींचेंगे भाई। वो अबे आज क्यों खींच लिया? वाह क्या बात, खत्म हो गया भाई। चलो आरटी को क्यों खींचा सुपर के साथ, वो भी भाई, इससे अच्छा ये चीयर पिंस दे दें सारी, चीयर पिंस दे दें सारी, वो तो ऑलरेडी दी हुई है तो सही सारी। इन गेम दे दें अगेन, इनके पास नहीं है। नहीं ना देंगे, पहले वो बोलते हैं कि भाई एक्सक्लूसिव, फिर बोलते हैं नहीं उतार देंगे हम, फिर से खरीद लेना भाई घंटे की एक्सक्लूसिव। What a fitting end there for Chaos, the birthday boy. I mean, what an amazing final moment. वाह, Chaos का बर्थडे भी आज। Left, right and center already, and we're still किसका बर्थडे आज? Chaos from SK. They just Oh my looked so God. calm and collected. They really did. And just taking their time with things. These reverse polarities from Chaos. I cannot wait to go back and watch through the VOD. Getting so much early value. It placed Team Flash right on those backlines early on, and they just were not able to collect themselves. They seemed a bit flustered from things, and you know, SK just struck while the iron was hot. नींद आ रही है। 1v2, yeah, wow. Impressive stuff, and a little hug from Pedro there as well. Just showing his appreciation. Happy to not MVP का नहीं है ना? another draft here as they can close it out in 2. Stats wise, I mean, not much to say here. You know, the lowest skills for SK is higher than the highest skills for Team 380 Flash. points हो गए Usually that भाई। kind of says the story, especially when it comes down to a game more like knockout. मेरे पास नहीं है। Kills are gonna be ऑस्ट्रेलिया आपका ये सब टूर्नामेंट पुन्नन आ गया MVP। हाय Chaos। I've lost all faith in humanity. 67% वोट मिले एक Chaos को, अकेले उसी के पास सारे वोट है भाई, डबल डिजिट में। 480 पॉइंट तो अभी हो गए, खत्म हो गया भाई। I mean, they are the team to be in this group. They are the number 1 seed for good reason. But again, you just don't know अब how वो वाला भी मेरे मैच को दिखाएंगे समझ नहीं शायद। आता। when it comes to being back on the world stage. इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैच का दिखा मैच चल सकते रहा हैं। है। हाँ, इतनी जल्दी खत्म हो गया, दिखा ही सकते हैं। That is always a very good question. I think we have an interview on the way. Trav, let's hear it. इंटरव्यू दिखा रहे हैं तो टाइम पास बैठ के। पता नहीं भाई, जो बॉबी भी है वो यूट्यूब पे अच्छा, जो ये तो अभी स्ट्रीम का करता है है। वहाँ स्ट्रीम करता है। फ्री वाला नहीं है, अभी हो रहा है लाइव। How do you feel about the complete dominance you've just shown? We worked really hard these last months. We know that this weekend is when we fix the whole year that we didn't do what we had क्यों to गोल्डी do. भाई? And yeah, we gained confidence. We worked hard. We know that we had to do what we had to do. and, आवाज नहीं जा रही it क्या just मेरी? ended insane. बोलना Yeah, I mean, it must be a bit weird for you not going अरे वो directly to जो World जैसे Finals after बॉबी भी year ऐसा है, in, ये year out of यूट्यूब just पे स्ट्रीम domination नहीं from करता, you ये and the ट्विच पे different करता है। SK मैंने इससे squads that पूछा कि you've तुम been क्यों with नहीं over the करते हो years. यूट्यूब You पे know, स्ट्रीम, तो कह रहा was यूट्यूब इज there any समथिंग sort of वियर्ड। preparation or was there more पता नहीं nerves कोई coming into गंदा this than कर there would be रिएक्शन ही at दे the रहा था, risk ये of not भूल making गया मैं, worlds कम से yet कम another 3 time? हफ्ते पुरानी Yeah, बात we है। know that this weekend is everything तो for सबके us. टर्म्स एंड कंडीशन We अलग have होते been हैं। interview. We know what this. अगर what मैं this तुझे बता दूं, अगर मैं उसमें पार्टनर बन जाऊं so hard that ट्विच we- पे, I think we are तो उनकी एक कंडीशन ये है कि यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं कर सकता मैं। With the amount of roster changes you've done over the ट्विच year, पे it's been पार्टनर होगा quite फिर difficult तो। for you in the start. हाँ तो पार्टनर होगा ही, तो तुझे क्या लगता है पैसे कहाँ से कमा रहा है? And you guys as well. I think OP has kind of given you what you needed to be able to बहुत पैसा push कमा through रहे भाई ये towards the end लोग। of the year. अगर मैं ही मान लो उसमें बन जाता हूँ पार्टनर ट्विच पे, तो मैं नहीं कर सकता स्ट्रीम। अगर करता हूँ गलती से और उनको पता चल जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से वो जो
जितना पैसा कमाए होंगे उनने दिए होंगे उस टाइम पीरियड में जिसमें मैं यूट्यूब कर रहा था, तो उसको वो भी भरना पड़ेगा वापस। नहीं भरा तो क्या कर लेंगे? लीगल केस। ओ भाई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखा है। अगर तुम बोलो नहीं नहीं हम तो करेंगे, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। Making it to day 2 is a big thing for them. Back over to the casters to resume the games. Great stuff there from Pedro. Great to get inside the mind of a team, which again, you know, going into this one, we had some reservations on. भाई इसकी फेक स्माइल ही बंद नहीं होती भाई कभी। Proved everyone wrong here today, I think so. मुझे तो ऐसा लगता है कोई टपक भी जाएगा तो उधर भी जाएगा फेक स्माइल लेके आएगा। कोई बात नहीं, टपक गया, बहुत बुरा आदमी था लेकिन टपक गया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। I mean, just not much to worry about at that point. A breeze for them here in Group A. Yeah, and on the world stage, that's no easy feat, I can assure you. Well, we've got our MVP as well lining up for you guys, as voted for over at event.brawlstars.com. भाई इसका मुंह देखो भाई अभी। Surely it's उसने chaos. टी-शर्ट पहन रखी है, इसके में सारे वो डॉलर्स बने हुए हैं। एक Yeah, chaos। very much deserved. What else can I say? Just played really solid. It's, you know, the reason he is so valuable to that team is going to be in that LAN experience. He's just incredibly consistent. I can't recall a single match where Icos underperformed at the LAN event. Like, didn't win all of them, definitely not, but always at least solid. And it's really nice to have those sort of rocks in your team, especially when you have two players that are a little bit less consistent. I mean, Yosh definitely has had some history with consistency being an issue. And then, of course, OP being a bit more new and not entirely, you know, amongst the best players in the world just yet. But he has that potential. So having that rock in IKEOS, I think is just so phenomenal for them. Yeah, and you know, OP is only going to grow with more and more experience on stage, and that is such an exciting prospect for me because of his playstyle. He's so aggressive, but you kind of have to be a bit more refined in your approach when you are under such scrutiny. I mean, one wrong slip here and there, and it can be the difference between making those world finals or exiting at this stage in the tournaments, and no one wants to go home without making those world finals. And even then, is, you know, defeat can be approached by different teams in different ways, you know, and coming back the following years stronger can अभी भी 2 मिनट है it यार। can also be the demise of some people in the pro scene, and देखो just बैठ being के able to इसको stand the heat, आगे भाई। that's a What was What Chuck was before Chuck Star Agree Park? more. And in all honesty, when it comes to OP ट्रेन specifically, ड्राइवर था ना, I ऑर्केस्ट्रा remember a couple years ago, you know, कंडक्टर था। running into Lena in some small community हैं events ये क्या है भाई? and गेम thinking, he's gonna डेवलपर, be huge. शेफ, Joker, फुटबॉल he's gonna be the प्लेयर। next Lena. ऑर्केस्ट्रा He might कंडक्टर है be आंसर। the next Lena. He might be the next Joker here for EMEA. Yeah, I remember distinctly back when he was playing with बोलने में एक Blue, जन्म you know, लग he गया always अभी। had that potential as well, and of course we've had a match played off stream as well. We're going to take a look at some of the highlights of that in just a moment, but you know, I'm very keen to see what our next matchup is going to be in that respect, because ultimately, you know, it's going to be sadly ये one team स्टार exiting the पार्क है competition. क्या? Yeah, मुझे absolutely. तो आज तक It's यही नहीं पता brutal. चला। Every time here स्टार in पार्क the वो है PSC, जहाँ I पे also makes a little बंदों को bit ले जाके compared एक्सपेरिमेंट to किया this जाता है उनके year साथ। worth of work for those teams. असलियत में And क्या by ऐसी the लगे? looks of it, अरे CMG नहीं, here taking the एक first set. अच्छा ये Oh, बनाया हुआ है, नाटक है। कंसेप्ट बनाया हुआ है कि मतलब वहाँ पे हाँ। we'll have the scores स्टार up पार्क for जो you जाता है वो in लौट के नहीं आ just पाता। a second. Spoiler alert. Spoil me. I wanna be spoiled. और ये कहाँ का मैच दिखा रहे हैं? Big one, I've got to say. Replay है। The Reconic Esports took the win. No way. अरे ये सब तो देखे हुए हैं हम लोग के। Yeah. That स्पेक्टेटर is देखो भाई। shocking. I mean, CMG, they definitely came in as a favorite. Make it out of this group. Not necessarily first, 61 but definitely spectator, like, you know, with 62. SK as favorites of this group, and then potentially favorites to qualify for the World Finals. I mean, they have a world champion and a second place world champion, and I'm not talking about 3 years ago. I'm talking about last year. So that's recent stuff where they were the best players in the world, and that has gotta hurt for क्या them. चेस में हार गई I'm gonna क्या be हुआ? honest, I have underestimated Reconic Esports in this competition. Same. Looking through my predictions and looking at the possibilities that RCN anything जीत could गई। possibly be, they were not really on my radar. आरसीएन जीत गई 2-1 से। हाँ आ गया 2-1 से जीत गई। To day 2, and this is a fantastic turnaround in the competition. It just goes to show that you cannot take anything. कितने पॉइंट्स हो गए गोल्ड यार? 523।
South America are going to surprise some मेरे people. Fight 490 And how right was he? What a result. अरे भाई for Iconic राक्षस कह रहा था Esports. That वीसी is पे आ रहा हूँ, आया fantastic for नहीं। them. I'm gonna make you a bit sad or upset. Not कहने की sure- बात है not sure भाई। yet, but do you know whose radar? क्या तो this team गाना was? गाऊंगा It is जिंगा not लाला mine, it is को actually लाला Team Masters. Trav Oh, that had it on his I wanna radar hear in the it. monthly finals. We were there like, who is Reconic? You know, it was like, oh, they're so good, they're gonna win, and they did win a monthly final, seemingly out of nowhere. But it seems like they were able to just keep up with that potential, keep raising the standards. Who will win and this right match, now, RCN or they're gonna Flash? be, in a very, very good spot here for this क्या group. इसको करना है I have a बताओ। reservation simply because of the course of the year, you know, going up against Delta Fate time and time again, and realistically only getting that grand finals win against them once. They just were not able to really break through, and as the number 2 seed, लग रहा है they had RCN some जीत motivation जाएगी to भाई। pull भाई back आप। a little bit to अभी see किया how ही नहीं, they fare, ये but 1.5 मिनट है my अभी। word, they're excelling. जल्दी The बोलो question is, you know, on the stage now, भाई। RCN पे मेरा फील आ रहा है, मैं RCN लगा देता हूँ। really is RCN को और सीरीज जीती है 62% पिछला भी। 62% वोट मिला भाई RCN को। at the same time, मैंने RCN लगा दिया मैंने भी फिलहाल। RCN they कर have दिया got भाई to make do and make better on their results, and it's going to be a real testament to whichever team is able to break through and make day 2 now, because this is where the heat cannot be greater. And it's going to be a repeat, because that was the off-stream opening match, Reconic versus Team Flash. It was Reconic that ended up, sorry, Flash अबे that लोग ended काम up की winning चीजें that कम one, दिखाते but हैं, so बकवास incredibly ज्यादा narrowly. दिखाते Came हैं। down to a double match point. Also तुरंत close थोड़ी आ जाते हैं in the बंदे finals खेलने here. के लिए। So खा पी के पड़े रहते हैं, बुलाते हैं उनको, अरे चलो चलो तुम्हारा मैच आ गया। बोला अच्छा अच्छा चलो भाई, आता हूँ टट्टी भड़ाका करके। by Reconic, I mean, they were looking better to my books. एक And तो उसकी right टी now, शर्ट ही मैं considering देखता that जा रहा हूँ, जब भी Reconic, मैं they're देख रहा हूँ off उसको। a win. They're going to have, you know, a bit more of a positive attitude. That Team Flash that just got absolutely slammed by SK. I would say that Reconic, they're my favorites getting into this one. I've got to agree. You know, if Suzuki hadn't have come in when he did on double swoosh and just land those shots the way he did, it was a beautiful, beautiful turnaround. Incredible. इसने भी टी शर्ट वो वाली पहन रखी है, पिन लगा रखी है अपनी वो वाली। I mean, it was that daylight robbery moment, wasn't it, in the competition so far? But you know, now the question ये is, स्नैपलेक्स तो मनीषा भाभी ला रहा है। हाँ वही तो है। नाम देखो बे, स्नैपलेक्स नहाते समय सोचा था कल। RHZJXCR भाई, इसको पढ़ूंगे कैसे? इतना खतरनाक नाम कौन रखता है? अल्लाह ये ढल्ला बोलेंगे इसको से। अरे फिर से दिखा रहे रेंगोकू कट। अरे हर टीम में एक रेंगोकू है भाई। फिर आ गया भाई। ये बहुत गंदा लगता है मेरे को ये। अबे इसके बाल तो अलग ही क्रीम कलर के हैं यार। Yeah, as you mentioned, a world champion in Memeshi, but he didn't have the greatest year in 2022. So hoping to see a bit of a comeback here today. Wow. या हमको ऐसे लग रहा है गंदे कट, और वहाँ पे उनको लड़कियां मरती होंगी, बोले वाह क्या कट है, वाह व्हाट अ कट। पूरा तेजी से खेले। अबे वन पीस में सांजी आ गया। वन पीस में सांजी नहीं है वो, रेंगोकू है। अच्छा वाला वो भी। तो क्या उसके भी बाल येलो थे तो हम लोग मैच करे दे रहे हैं, वरना तो टट्टी कहते हैं इसको। वो भी तो पीली होती है। ये भालू की तरह। ये हल्दी भाई एक तो अलग ही लेवल पे है, एक तो अलग ही बनना पड़ा है। एक ने अपने बाल करवा रखे पर्पल। हाँ तो तूने उसको निंजा को नहीं देखा है क्या? देख रखा है ना, क्यों नहीं देखा? हाँ तो उसी के बाल तो पीले हैं, वो पीले बोल रहा हूँ, पर्पल है। उसने बाद में फिर ब्लू करवा लिया भाई, ब्लू। निंजा ने पूरे ब्लू बाल करवा रखे हैं। अबे स्काउट के बाल भी तो ऐसे ही थे एक समय पे। एक सेकंड, ये निंजा से स्काउट कहाँ से? कौन सा निंजा की बात कर रहा हूँ मैं, जरा बताना। जो इसमें था ब्रॉल स्टार्स में। बस रहने दो, हो गया भाई, रहने दो, नहीं बात करनी, रहने दें, धन्यवाद। मजाक कर रहा था मैं, छोड़िए।
all year round. मैं बात कर रहा हूँ प्रो प्लेयर की, ये बात कर रहा है स्काउट की। भाई निंजा ट्विच का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्ट्रीमर की बात कर रहा हूँ मैं दुनिया में। उसके बाद श्राउड आता है। लोग श्राउड को पहले बाद में जानते होंगे, श्राउड से पहले निंजा आता है। वो उसको छोड़ के बराबरी कर रहा है स्काउट से। वाह भाई साहब, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ भाई। Much hangs in the balance on this matchup. I think I'm gonna split. I think that despite Reconic भाई इसने आरे जेड पढ़ा है भाई, अपन ने आरे चेस पढ़ा है। I am liking what I'm seeing today. I mean, I'm liking the drafts as well. Like I said, I was very surprised. अरे इन्हें टीम से निकल ली। एक तो JCX करके खेल रहा था, वही टॉक्सिक आ गया खेलने। In the current meta, but I feel like this could be incredibly close, especially if Team Flash really dig deep. We haven't really seen, except for that first match, those big pop-off. ये भी ठीक है भाई। भाई नेल पॉलिश लगा रखी उसने काले कलर की। किसने? अरे जो है ना वो रेड टीम का सबसे साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला सबसे। हाँ भाई। ओए शौक बड़ी चीज। रेंगू को नाम इन चोमटियों लोगों के साथ कंपेयर मत करो। अच्छा तो बोले रेंगू को उठ के वापस जाएगा, बोलेगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। वो तो मर गया भाई, उसका छोटा भाई जो है वो कुछ करे शायद आगे चल के। वही तो बोल रहा हूँ, वो तो उसका तो भाई था ही कितने एपिसोड में खत्म हो गया भाई। वो तो आया दिखाया और 2-4 एपिसोड में खत्म। डीमन स्लेयर उसका एनिमेशन नहीं बजट कर पा रही थी, बहुत महंगा एनिमेशन था उसका। अरे वो छोड़ो, जुजुत्सु काइसन में जो 2 मेन कैरेक्टर है ना, उसके कुछ क्रिएटर्स उनसे जलते हैं, बोलते हैं यार ये क्या ही बना दिया हमने। पूछे क्यों भाई? बोलते हैं यार इनको पहले ही हमने इतना ज्यादा ओपी बना दिया कि अब हम उसको कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब इससे आजा और क्या करें, क्या बनाए इसके ऊपर। पहले ही कुछ ज्यादा ही पहले हमने उसको ओवर पावर कर दिया। पहले हमको धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए था। वो जो तो मरी गया। As Reconic respond, Otis being their first and always a great brawler, especially with the rise up that we've seen in terms of the tank meta that is upon us now, and just a bit of an insurance policy for what may be to come from Team Flash. 8 bit and, I would suggest Otis consider heavily whether they try and match it with it. Gonna go with the bell. बल्ले बल्ले That kind of mid-control brawler, but this could be dangerous. पैम स्मैश पे अच्छी रहेगी पैम या फिर ऐश। in that mid there, you know, if you get the hit and CP's back, it's still going to bounce onto that turret, and if he's just stood around it or his teammates, which usually is because that वो चाहिए इसमें भाई। Bell's a good shout, and as he said, Otis for future prevention, you know, against tanks. क्या नाम उसका? With how strong they are. जीनी। I still don't doubt that they'll be able to do something against that Otis, even if they did go attack. They're going to go with the जी Penny, तो कोई ले रहा। अबे दोनों टीम ने स्टू बैन कर रखा है। and they're going to bring in the Maisie as well. And I mean, जल्दी आ गई भाई। अच्छा मिड है ना इसमें, not इसलिए convinced by Maisie at the moment. It's been played a lot in scrims. I've been watching all these teams with. अरे चीपू भैया आ गए भाई। And it always seems to be saying defeat. चेपू भैया हिला देंगे भाई। चेपू भैया। चेपू भैया का वाला गैजेट बड़ा खतरनाक है। स्लो डाउन वाला इसलिए तो ऊपर लिया से है 4 मिड ब्लॉक कर ऊपर देगा। से 4 भाई बहुत दिक्कत हो जाती है 4 गैजेट के साथ तो। मैं तो नॉकआउट खेल रहा था, हार ही नहीं रहा एक भी मैच। Across various regions, primarily we're seeing in terms of the scrims at least, you know, South America and East Asia generally kind of going and gravitating towards that a bit more within the APAC region as a कौन सी whole. टीम थी अपनी? RCN थी ना, Again, RCN it को can भरा have था। those great moments, but sometimes those shots just don't land, and that's a bit of wasted time and some valuable chance to heal on your opposition's side. As we go in, let's see who has the high ground. भाई एक तो 8 बिट ऊपर से बीच में स्लो हो गया भाई, वो हिल ही नहीं पा रहा भाई। गया क्या होगा बेचारे का भाई, एक तो 8 बिट है वो। उसका भाई जब तक वो नहीं आ पाएगा ना सुपर, जब तक कुछ नहीं होगा। एक और स्लो उसके मुंह पे सामने दे दिया भाई। अब अच्छा खेल पाएगा। अरे फिर फंस गया, स्लो में फंस गया। अब तो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, अब दिक्कत नहीं। Now Christian trying to find the pinch, trying to Saloon find the 8 angle, bit. can't quite manage it.
Suzuki on the left as well, being kept at bay as Toxic is doing a वायरस नहीं खेल रहा भाई, ये fantastic सलून खेल रहा है, वायरस separating खेलना out team चाहिए। clash, but it's not resulting in gems, and that's where वायरस तो बहुत एक्सक्लूसिव में आ जाता है। the Mace comes in, Rio gets the kill, muted out though, it should be होगा। defended भाई खत्म। much higher in health. Now टेलीपोर्ट कर लिया, बढ़िया। what a great defense there from Toxic. I mean, that was amazing. I mean, the play Okay, from Rio okay. to अब start. कहाँ टेलीपोर्ट करेगा? खत्म। Managed to keep a hold of it. 3 gems on the head of Toxic. सुपर आएगी ना, अब सुपर से कर सकता है। And I find that a bit disappointing at the moment. Another ऊपर super 4 वो सेकंड भाई की क्या बहुत जल्दी फेंका है। भाई, नहीं तो गया गेम। kill and blow again. खत्म हो गया, खत्म हो गया गेम, खत्म हो गया। On their side, but the पिटाई हो गई सबकी। flash through gets it done for Flash. खत्म भाई। And countdown starts. हो गया, टेलीपोर्ट मार के भाग जाएगा नीचे। Fantastic play there. खत्म अभी किया। तो मारेगा, मार के खेलेगा अभी। अभी तो एरिया कंट्रोल करेगा थोड़ा थोड़ा। बस अब तो उन्होंने खत्म कर दिया, टीममेट नहीं खत्म कर दिया। They really are. I mean, that is अरे भाई टीममेट ने मार दिया भाई। it was very 50-50 in the जीत गए भाई, फ्लैश अब जीत अपन गई। सपोर्ट गलत टीम कर रहे हैं भाई। kind of at a certain point, Bale decided, okay, I've got to go. अरे पहला मैच है, रुको अभी। In a tough spot down that lane. मतलब ज्यादा मैच जीत गई। You know, double supered with his teammate, and then there's only one अरे shot लाइक cycle करो यार, again, तुम so लोग क्या it's कर रहे हो? difficult, लाइक but करो। This 8-bit mid is so controlling. वाह भाई। लाइक करो यार। आज 20 लाइक करने हैं हम लोग। भाई मैंने इसकी देखी भाई स्ट्रीम, बोलता ही नहीं है भाई, तो कुछ। तो कोई आएगा तो बोलूंगा ना, कोई आता ही नहीं है भाई। वाह भाई। किससे बोलने लगूं मैं, ये बोलूं हेलो यार उसकी स्क्रीन फिर से ग्लिच हो गई। ग्लिच हो गई, हाँ पेनी की ग्लिच हो गई। स्केलेटन Yeah, Mameshi just trying to Penny. keep Ryohei in the mix as well. They want him in this position. Gets hit 3 times in a row. Beautiful shots from Christian. भाई इनको अपना एम्यूलेटर बना लेना चाहिए भाई, खुद का बनाते ही नहीं है। वाह, मार्क होने के बाद कौन टीपी करता है? Down the right side, that's going to absolutely destroy Suzuki. Gets him down. Ryohei's going to go in dash for the super. फ्लैश मारो, आपका 3 सेकंड पीछे चल रहा है। And Reconic in control. अरे भाई पेनी को मेल्ट कर दिया Like स्क्विक ने। Hard Rock Mine, losing control can be so costly and very challenging to retake. A mark there just वे सुपर रख दी भाई स्वीप Suzuki, में। when it does land, Toxic will clear up the scraps. Consecutive taps onto Mameshi. हो गया। And the cheat cartridge is not timed. हाँ मार साले को, तोड़ दिया तोड़ दिया। गया। Reese might be thinking about it. स्लो भी कर दिया भाई। जाओ, पाएंगे उन्हें इधर। उठाने की दम नहीं है भाई इनकी। Lost time from the mid for themselves. नहीं उठा मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। हो गया, मार दिया, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। उठा लिया। Countdown, Toxic's going to follow, and that makes it a 2v2. बहुत बढ़िया भाई। To fight for these gems, but Reconic डबल स्लो लगा हुआ है भाई बेल का। control of these gems here. 90 हो गया स्लो। Nestek's going to pop maybe. भाई 8 बिट स्लो हुआ, दो फिर से स्लो हो गई। Gets hit by the अबे फिर से हो गया, अबे दोनों हो गए। things out in game 2. वही बोल रहा हूँ, आपको पीछे चल रहा है, What we wanted. We पीछे चल रहा है भाई, पीछे चल रहा है। रिफ्रेश मार लो एक बार। are getting our wish granted. Some मार good लिया, मार learnings लिया। there from Reconic. Just taking सर का रेड बिट पैनी का ये कौन सा स्किन है? अरे एक्सक्लूसिव स्किन है भाई, इम्यूलेटर ओनली। to Team Flash. And this could be a bit of a turnaround. मैं बोल रहा था इनको खुद का एम्यूलेटर बना लेना चाहिए भाई। जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है इनको इम्यूलेटर बनाने की। This time round, early consecutive hits from तो Christian. ये खुद ही सपोर्ट ही नहीं करना चाहता ना इम्यूलेटर प्लेयर को। आपने वो ट्राई किया गूगल प्ले गेम्स जो आया है बीटा वाला? Obviously slow and sluggish. Christian वो उस पे पीसी वाला। very careful. Mameshi हाँ। 20 Christian. हाँ देखा था। I'm loving this battle. लेकिन उसमें अभी कोई गेम अच्छे नहीं आए, इसलिए मैंने नहीं खेला। हाँ वो तो वही बात हो गई ना, वो जो क्या बोलना चाहिए, जब से वो ये आया ना क्लाउड गेमिंग की तरह है, बिल्कुल नल्ले गेम आते हैं उसमें। अब जैसे जियो का क्लाउड गेमिंग बहुत पहले आ रखा है। अरे ओटिस क्या डोमिनेट कर रहा है। तो ओटिस है भाई। Very clutch. वो अपनी लेन होल्ड करके बैठा है, डोमिनेट क्या होता है बस। Shots continue to land. किल तो मिले नहीं उसको Appreciating कि Christian. दूसरी साइड पोर्ट कर पाए। It matters most. वो किसी को आने ही नहीं ऊपर भाई। ये पेनी की रेंज उससे कम है भाई ओटिस से। And Toxic has got to find. Yeah, now he can clear up the lane. But actually, भाई देखो पहली बात तो ये है, कितना भी डोमिनेट कर ले, जैम ग्रैब है भाई, जैम से मतलब है। 8 बिट के जैम्स देखो तुम तो, 9 तो वैसे ही होगा उस पे। ले हो गए, पूरे खत्म हो गए भाई, गया वो तो गया, टेलीपोर्ट मार लिया, हो गया खत्म। खत्म भाई मैच। अरे इसका नेट नहीं चल रहा, खड़ा हुआ है। अरे भाई 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 क्या कर रहा है? and he will go down. Might have to check. अरे वो भी मारो 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 मारो, 3 सेकंड मार दे, मारो।
अबे खड़ा था भाई। Who needs 3 players when you've got 2 who are as good as these guys are? They managed to win the game anyway, and that's the set along with it. That means so much in a best of 3. नहीं नहीं भाई चल रहा था। मैच कराओ भाई, ऐसा थोड़ी चलता है। Well, I can see the referee going over towards Team Flash, but I क्या don't हो think गया? they're going to थप्पड़ crumble with the दिखा रहा है, result, कह रहे but हैं clearly कुकू a bit of हमारा। connection issue towards the end. I mean, अरे how भाई often do you ever see रीमैच that कराओ happen? भाई, You हारते know, तो when बोलते the team रीमैच have to कराओ, come अब भी कराओ together ना भाई in the रीमैच। moment of crisis and still prevail. I mean, अर्चिन वाले को बोल देना such a चाहिए, नहीं यार ऐसा गलत है यार, रीमैच करा लो। हम तो 2-3 हार गए भाई, ये तो गलत। just came in clutch. हम तो जानबूझ के हार गए, हमने सोचा दया कर देते हैं यार, रीमैच तो होना ही है। Provided so much भाई यार space and जेटा to के do so मैचेस against देखने में this इसलिए group, मजा आता है that क्योंकि ये is लोग no लंबा easy खींचते feat हैं, ये लोग बस whatsoever. And खत्म he's कर able देते to हैं keep that जल्दी। pressure on for और pretty ये much तो the हाइपर हो गए। entirety of the match. अबे भाई नल्लेगिरी देख रहे हो, 360 हेल्थ थी उसकी, 360 हेल्थ ओनली, एक डैमेज पड़ता मैच वहां रुक जाता। ऊपर से वो बंदा वैसे ही ऑफलाइन था, यूज कर ही नहीं पा रहा था वो मेजी। वैसे रीमैच करवा देते फिर उस टाइम पे तो वो, लेकिन फिर भी भाई Who will win this match? STMN या Clash? STMN भाई, STMN Bobby। 73% क्लैश भी जीत सकता है, ये मत सोचो क्लैश हल्की टीम है। पता है हल्की तो कोई टीम नहीं है जो यहाँ तक पहुंच गई है। पिछली बार क्लैश ने क्या डोमिनेट किया था, मजा आ गया था देख के। क्या कमबैक था उनका हॉट जोन में। और 11 बंदे उड़का दिया भाई इसने। अबे उनका डैमेज कितना कम है भाई, सबके डैमेज कम। सबसे ज्यादा डैमेज क्रिश्चियन का है, 374। क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिस्टियन रोनाल्डो। Fantastic job of just ensuring that those gems did not hit the ground and that the set was going to be over there and then. And now Team Flash ahead, but as we know, Raconic are a team that do fight back. They can find it within themselves to bring that energy back where it needs to be. भाई फिर हॉट जोन है, वो भी बहुत घटिया वाला है। हेलो moon_white व्हाट्सएप कौन सा है, स्टीमन कर दिया ना भाई। I don't. लाइक कोरबेट, लाइक कोरबेट। That's that. I mean, बहुत घटिया है भाई। personally, I think Flash are taking this. You think? Yeah, I आगे mean, आप देखो अब आया ट्रिपल थ्रोअर लेके भी सपोर्ट जीत टीम, सकते हैं। dislike it. अब जो आया वो सपोर्ट टीम वाला है। अबे एक मिनट, ये जो सस्ता रेंगोकू है इसने हेडफोन्स उतारे लेकिन उसके अंदर इसने कान में दोनों तरफ लीड लगा रखी थी। इन गेम के लिए अलग है। अरे सुन, एक जो लगा अंदर रखा है वो इन गेम वॉइस के लिए, और जो ऊपर लगा रखा है वो टीममेट से बात करने के लिए। ऊपर से इतने बड़े लगाने का फायदा ये है कि आजू बाजू की नॉइस नहीं आती। वो तो पता ही होगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC। अभी तो नॉइज नहीं होगी क्योंकि अभी क्राउड नहीं है। बात वो नहीं है, वो तो पहले से तैयारी, ऊपर से बाजू बाजू में बोलते हैं तो आवाज सुनाई देती ना। अपोनेंट टीम वाला भी अगर बात करेगा तो जम चिल्ला, अरे मार साले मार, डिस्टर्ब होगा, इसलिए ले लगा देते हैं। उधर नहीं चिल्लाते ऐसा, जैसे अपन चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये नहीं चिल्लाते इतना। चिल्लाते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो, वो टायरेंट चिल्लाता तो है नल्ला, इतनी जम चिल्लाता वो। अरे वो एक दो नल्लों को छोड़ के भाई सब पैसिव खेलते हैं भाई। अबे घंटा चिल्लाते, बता दे मेरे को एक क्लिप। वो तो वर्ल्ड फाइनल्स में चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरी की चीज है। ये चिल्ला रहे क्या, इनके कॉम्स देख ले भाई। I agree. I think they've had better अरे days for भाई sure. ऐसे चिल्ला के बॉबी तो ऐसा चिल्लाता है कि what the fuck you doing ऐसा कर करके Should have won that, mate. Just to मुंह win. फाड़ता रहता है अपना। Definitely easy for us to say on the casting desk for sure. But you know, I think that for me, Raconic have already impressed me because I wasn't expecting too much from them against the heat of others in their group, and the fact that they've proven me wrong. ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभी अगर उस नल्ले को लाके खड़ा करेंगे इधर भी, उसको जैसे अपने स्माइल दिखाना भाई, बोल जरा वो तो समझ ले पहले, इसमें भी स्माइल दिखाना है। आप बहुत घटिया कमेंट्री करते हैं, उसमें भी स्माइल दिखाना। हाउ मेनी मंथली फाइनल्स डिड टीम फ्लैश विन इन 2023? टीम फ्लैश कितना जीती है भाई? सबसे कम ही जीती होगी, 2 ही जीती होगी। मैं कर रहा हूँ 2, और द आंसर इज 5 जीती है, फिर भी क्वालीफाई नहीं है।
their wings, isn't it? हाँ भाई, भाई 5 जीत गई। मैंने भी 5 करा अब। ये देखो 5 जीत 13% लोग के किए हैं, 5 किसी को नहीं पता था। 45% लोग तो 2 ही किए हैं। सीधी सी तो बात 5 है। जीती है तो पहुंची कैसे नहीं, क्या बात कर रहे हैं लोग। I'm really looking forward later to seeing how India fare as well. Revenant Esports are very much on my radar. Has some great results despite losing overall against Tribe Gaming. अब इसने वो बैच लगा रखा है, देख वो ट्रॉफी वाला। हाँ देखा, मैं देखा ना। They've got some real accomplishments, some real talent. टी-शर्ट देख भाई तू, कितनी कलाकारी करके बनाई गई है। इसने नॉर्मल पहनी हुई है, वाइट। इसने वाइट पहन रखी, लेकिन उसके ऊपर ब्रॉलर्स बने हैं। उसने टकले ने, उस टकले की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ टकला है भाई, कौन टकला है? अरे इसके सर पे बहुत कम बाल हैं। इसने ये स्टाइल वैसी रखी है। स्टाइल है भाई वो। बस कट करवा रखा है इसने। Yeah, no, I agree. I mean, obviously, a couple of the South American Buzz teams have cut. got those. मतलब कुछ इसको समझ में नहीं आया तो बोलता हाँ आई एग्री। Bit of a help in hand, obviously. हमारा रॉन तो हार गया, Team Queso. गलत हुआ। Top on another team, and why not at this point? Why not? It seems like he's helping them out. अरे भाई तारपीन की क्या महक आ रही है मेरे कमरे तक। यार इसकी वाह भाई, नशे भाई, हर चीज के नशे। वाह। अब तो एक काम करना, पुरानी कोई स्प्रे बोतल पड़ी होगी उसमें भर ले, लगा लिया कर जाते जाते। अरे नहीं वो वो तो जो पेंट के नशे कर भाई, पेंट के डब्बे के। अबे वही तो बता रहा हूँ, वो जो लोहे में पेंट हो रहा है मेरे विंडो पे बाहर की तरफ, वो क्या कहते हैं, अब हर साल पेंट होता है एक बार, तो उसमें तारपीन की बोतल जब भी खुलती है बहुत चीज में लाती है बे, मेरे कमरे तक आती है। वही सूंघता रहता हूँ दिन में, और उससे भाई थोड़ा थोड़ा लगता भी है यार कि आंखें बंद हो रही हैं। वाह, जब ज्यादा मात्रा में सूंघो बोतल में। अच्छा अच्छा, बढ़िया मुंह ही बढ़िया डाल लेना तू बोतल में। बढ़िया। नशे हो तो ऐसे हो ना ना भाई। मेथेन गैस क्या बता रहे थे? मीथेन भूल गया मैं तो। स्कूल जाइए, स्कूल। इसलिए बोलते हैं भाई, हाँ भाई स्कूल जा भाई। भाई वो ये गैस मुझे कभी याद नहीं रहने वाली, चाहे मैं जाऊं ना जाऊं। अच्छा एक बात याद बता, रहेगी भाई, याद भाई। घर में तेरे जो कुकिंग गैस है उसकी कौन सी गैस है? नहीं पता भाई मेरे को। वाह भाई, अच्छा कौन सा तभी। सिलेंडर आता है? नहीं सिलेंडर नहीं आता, वही मिट्टी का तेल डाल के चूल्हा जलाता है, ये अब समझ में आया, इसलिए मिट्टी तेल है। एचपी की गैस आती है, बस वही एचपी वाली गैस बोलते वाह हैं। वाह वाह, एचपी की गैस आती है, ठीक है भाई। सही बात है, एचपी की गैस आती है भाई साहब। अरे यार आती है उत्तर प्रदेश में, एचपी की कंपनी है। ये लो आ गया, रेंगोकू आ गया तुम्हारा। अरे हाँ, उस सीन में आ रहता है जब रेंगोकू की एंट्री हो रही होती है, तो फिर आता है वो और वो खा रहा होता है रामेन। सारे वर्कर्स के लिए भी पैक कराता है जो ट्रेन बना रहे होते हैं। The greenest thumb क्या होता है भाई? गोल्डी भाई बता सकते हैं अंग्रेजी तो? गूगल पे सर्च करके। ग्रीनेस्ट थंब का मतलब वो उसको जैम का रेफरेंस देके पूछ रहा है कि मतलब कौन सा सबसे ज्यादा खर्च करता है जेम्स में। कितना ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन। तुमके नॉर्मल इंग्लिश जोड़ के उसको देखने जाओगे तो सोचोगे अरे हरा कलर का थंब किसका होता है भाई, वो जैम से रिलेट करके पूछ रहा है भाई। आपके स्वीटेस्ट टूथ का मतलब ये थोड़ी किस दांत में कीड़े हैं। कौन सबसे मीठा बोलता है? नहीं वो यही मतलब उसको कौन खाएगा।
और ये क्या अक्टूबर 7 और 8 Players are already on the stage. We fixed that little technical issue we saw at the end of Hard Rock Mine, right? For Team Flash standing still at the end, so we're just fixing that in the background. But we shortly be getting into the मैच draft. स्टार्ट करो फिर बक बक करने लग गए। वो यही तो बता रहा है कि हम क्यों नहीं कर रहे थे जी, वो खड़ा रह गया था बेचारा बंदा, हमने फिक्स कर दिया। तुम्हारा वर्ल्ड स्टेज में ऐसा होता है, सोचो तो हमारा तो नॉर्मल इतने दूर बैठ के कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हमारा बंदा तो चलता ही नहीं है, वाईफाई एरर दिखा रहे खड़ा रह जाता है। यहाँ भाई एक बार वाईफाई नहीं दिखाता, दिखाएगा भी तो लोग दिखाएंगे नहीं खुद की बेइज्जती। दिख तो गया, और क्या चाहिए, जो बंदा खड़ा रह गया और कैसे दिखेगा। लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। Just because tanks are strong, Gale's strong. That's just how it works. And obviously Launchpad straight into the zone with a tank. अभी भाई नेक्स्ट अपडेट आए कुछ होगा थोड़ी, बस स्किन्स दे देंगे, नया ब्रॉल पास दे देंगे, क्लब लीग चेंजेस, बस 2 नए ब्रॉलर। Absolutely so. Rosa as well, I think, could have a great place here. And it's not banned out. We'll see. And speak of the devil. I just know. Yeah, exactly. I mean, this is why we're here. I mean, the band's been Cordelius. बार्ली बैंड नहीं है भाई। 10 counters, by the way. Cordelius, Macy, as well as थ्रोअर ही बैन नहीं है, थ्रोअर खेल सकते हैं That is a भाई। great starting hand. You've got to consider as well with Hypercharge out of the Sprout mix. अच्छा है इस मैप पे, रिको पता कोई है लेगा थ्रोअर नहीं। क्यों नहीं बैन किया होगा, क्योंकि मॉर्टिस खेलेंगे भाई फिर। नहीं खेलता भाई मॉर्टिस। I really like that. It's quite खेलते हैं भाई। in South America. Sometimes they combine it with a PAM for additional healing and just kind of TP everything onto अगर the किसी side. को लेना होता थ्रोअर तो वो फिर मॉर्टिस बैन करता। Let's see what they want कोई to लेगा ही do नहीं with थ्रोअर, the तो second pick. कोई बैन ही I नहीं mean, the किया। thing is, last time they played Team Flash, first game in the group off, we watched the last set on the stream. The Grey was kind of their downfall. Just TPing into the wrong places, the wrong opponents. आरसीएन के चीको पिक कौन अच्छे खेलेगा? हैं भाई। It's what चीको TP'd them देखते हैं directly कौन into खेलेगा Sandy. So I चीको। think it's a great नहीं role, but खेलेंगे it's just रिको। gotta be utilised right. Tara's क्यों? looking in as well from अच्छा तो Christian है as वो। well. I mean, एचपी की गैस, हाँ भाई एचपी की गैस भाई। आती है, गैस सिलेंडर के अंदर एचपी की गैस है इसकी। I think it can kind of work. I mean, you've got कॉम्पिटिटिव में रिको नहीं खेलते, खेलेंगे तो पता नहीं। बहुत बार देखा है सैट टेम्पो को खेलते हुए, बहुत खेलता है वो। हैं? बॉबी खेलता है। एल प्रीमो अरे भाई साहब, प्रो प्लेयर आए फिर से सुपर फील्ड। रोसा, वाह भाई। भाई डबल टैंक शैली ले ले, मैं तो बोलता हूँ भाई शैली ले ले। कॉलेट भी ले सकता है, शैली ले ले भाई। बम 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 एम्बर ले खत्म। भाई, एम्बर भी अच्छा है, वो पूरा एरिया कंट्रोल करने के लिए। उसकी जो नया वो आया है वो ये देखो कॉलेट में बोला ना ना। डबल टैंक है तो कॉलेट भाई 3 बार में तो पुचुक 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 हेल्थ पूरी पहुंचा देगा 1000-2000 से। It's going to be very much, if the tank's going to overwhelm, they're going to be perfectly fine. Keep them in spawn, keep that. भाई लेकिन ये डबल टैंक क्यों लिए हैं, क्या ही कर लेंगे, मेरे को तो समझ नहीं। Regardless with that single projectile of collect. कॉलेट का अगर सुपर आ गया और पुश बैक है उसके पास, ये तो घर छोड़ छोड़ के आएगी उसको सबको, बोले आओ चलो घर छोड़ दें तुमको। प्रीमो तो समझ में आता है कि कूद के आउट जोन पहुंच जाएगा, रोजा क्या करेगी। सुपर यूज करके रोजा आएगी। उनकी पुशेस पे रहेगी ना। अरे रोजा उनकी पुशेस पे रहेगी, कंट्रोल लेगी। अरे घंटा कंट्रोल लेगी भाई। तारा भाई आने ये खत्म हो गया भाई, एल प्रीमो खत्म हो गया। Yeah, immediately having that pinch as well. I mean, he's got his अरे भाई, question where we're going to प्रीमो कूदा बाद में पहले खत्म हुआ। shield coming through. He's gonna use the shield. Oh, jump's going to be missed, but they might still be able to get it. The throw over the shoulder straight into Mameshi. I like that, but the TP from Chris. रोजा लेन होल्ड कर रही भाई है। क्या खेला ग्रे। But Flash has still got the lead. भाई ग्रे के डबल किल देंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कुटाई और ये वाले तो पहुंच ही नहीं पा रहे। अकेले वही सामान ले रही है, घुसने ही नहीं दे रही भाई। अच्छा खेल रही है रोजा, इसलिए तारा आ गई है। हाँ फाइनली ये जंप किया, अब उसके ऊपर सुपर यूज करेगा और अरे भाई फेंक फेंक के मार रहा हो तो। चलो फिर भी वाह भाई, दीवार में सुपर मारी कॉलेट। ऑटो ऑटो भाई, ऑटो एम आगे दिया भाई कॉलेट ने। खत्म 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 कर दिया भाई, रोसा ने खत्म कर दिया, कुटाई कर दी भाई कुटाई। अरे वाह भाई, जीत सकती है। मौका 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 मौका।
क्या कर रहा अच्छा है लग खड़ा? ही नहीं। अच्छा अरे उधर वाले पे खड़ा हो। ये क्या था? पोलेट के जी जी, ऊपर और गेल के ऊपर। बढ़िया, मार 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 मार, उसको मत खड़े होने दे, क्या कर रहा है? जी जी, जीत जीत गए गई लोग। भाई, जीत गई, जीत गई। प्रीमो भाई भाई, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। खत्म। अरे मैं तो ये बटन दबाना ही भूल गया, रुको यार, 5 पॉइंट तो ले ले। 9200 भाई, बहुत सही। तुम्हारा पीछे चल रहा है। वाला गैजेट लिया भाई उसने, 10 सेकंड पीछे समझदारी चल रहा दिखाई। था। जॉर्ड गेम प्ले, हाँ भाई, जोड़ों का दर्द गेम प्ले। अबे स्किन उसकी चली गई, एश प्रीमो की। एल एल स्केलेटन ईमो। हर मैच में हो रहा है भाई ये अब तो। अरे तो एल उसमें एलगाटो अबे एरा ग्रे में की तो भी गई करते भाई, तो फिर भी ग्रे की भी नहीं है भाई, वो तो फेंके जा रहा है इसको, लेकिन फिर भी मार दिया है, क्वालिटी ने मार दिया। भाई ये अकेले ही सब बग कुटाई कर दे रही है। हाँ रोजा अच्छा खेल रही है भाई। हार गए वाला तो। देखो अब बॉल आ गई है ना, अब देखो, हाँ अरे वो बॉल सुपर गई। चार्ज हो जा रहा है ना बार बार उसका, रोजा का, इसलिए नहीं मार पा रहे। ऊपर से हीलिंग वाली आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। भाई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता रोजा का, इसलिए खत्म, बोला था खत्म। भाई सेली ले लो। सेली भाई बम 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 दे जाती भाई। ऊपर से हाइपर चार्ज भी है उस पे। हाइपर चार्ज ब्रॉलर नहीं खेला ना अभी तक किसी ने। हाइपर अच्छा, चार्ज हाँ, बैन है, इसलिए सेली नहीं लिया होगा भाई। हाइपर चार्ज बैन है। भी नहीं लिया। हाइपर चार्ज बैन है, मजा हाँ, क्या नहीं है खेल हाँ, सकते। हाइपर चार्ज वाले ब्रॉलर बैन। जब भी शैली नहीं लिया भाई, तो शैली ले। क्या और इसलिए भी भाई वो लिए डबल टैंक। लेकिन वर्ल्ड फाइनल्स में अलाउड रहेगा, वर्ल्ड फाइनल्स में अलाउड रहेगा। ये भाई सोचो चक आ जाता फिर ये होता तो चक खेलते ना ये लोग। एक दो तो खेल ही खेल सकते। सकते हैं चक। फाइनली ये देखो इनने चेंज किया पोजीशन। अरे भाई पुश बैक क्यों नहीं ले रखा है इन लोगों ने, क्या नल्ले हैं भाई। चक तो बेकार बना देंगे ना। हक दी भाई, कॉलेज हक दी, खत्म मैच। पुश बैक नहीं लेते भाई, क्या बंदे हैं। टैंक को बाहर छोड़ के आने का, जब तक वो वापस आएगा उसकी 3 बार फिर धुलाई करती है, एक और बार सुपर चार्ज हो जाए इतनी देर में भाई। लॉजिक नहीं समझ में आता भाई मेरे को तो। इनको तो प्रीमो ही पीट दे रहा है। इस बार ये लोग लीड में है, बढ़िया कंट्रोल लिया हुआ है, कि जिन लोगों ने अपना लाइनअप चेंज कर लिया है। बढ़िया भाई, कॉलेट उधर बेच के बढ़िया कर। लेकिन ये भी इनने भी चेंज कर लिया, बोले ऐसा क्या, हम भी चेंज कर लेते। लेकिन नहीं, बचा इस नहीं, बार टाइम नहीं नहीं बचा, टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं बचा, टाइम नहीं बचा, नल्ले। जीत गए भाई ग्रे ऑलमोस्ट थक दिया। चलो भाई फाइनल सेट। डैमेज पर सेकंड देखेंगे मतलब मजा आएगा। रोजा का होगा सबसे ज्यादा, रोजा या कॉलेज। डैमेज पर सेकंड देखना है। कोई रिको क्यों नहीं लिया, वो तो बैन भी नहीं था भाई। चॉइस होती है, लोगों को पसंद आता है कहीं। चॉइस किया तो टैंक कैसे काउंटर करते हैं, और वैसे भी उन लोगों ने तो टैंक्स खेलने का कोशिश किया। वो अच्छा भी खेल रहे भाई, टैंक लेके भी अच्छा खेल रहे वो तो। अच्छा खेले थे, रोजा अच्छा खेली थी, प्रीमो उतना कुछ खास। लेकिन रोजा अच्छा तभी तक चली थी जब तक क्वालिटी साइड, सबसे नल्ला क्वालिटी साइड है है, तो पिटाई कर गेल कर क्या रहा है। हाँ वो रेंगोकू ना, अरे भाई इसके बाल टट्टी से कलर गया, नहीं खेल पाएगा भाई ये कर क्या रहा है ये गेल, कुछ कर ही नहीं रहा है। बेकार। लेकिन भाई प्रीमो तो ये वैसा ही खेला है गोल्डी भाई। क्या नाम था उसका, एल लुचाडोर पुश करते समय खेल रहे थे, उतना कुछ खास नहीं खेला इसने प्रीमो। भाई ये हगा गेल, गेल लेना ही नहीं चाहिए था, फर्स्ट पिक गेल लिया। रोजा ने कैरी किया था, रोजा ने कैरी किया था। ये देख देख खड़ा हुआ है भाई गेल। ये गेल ओ भाई 674, 674 का भाई साहब डीपीएस।
आज एग्जैक्ट क्या वो खेल रहा था? रोजा नहीं रोजा नहीं खेल रहा था, कॉलेट नल्ले कॉलेट कॉलेट खेल रहा था। कॉलेट अरे भूल तीनों गया ने, लेकिन तीनों ने 8-8 मारे भाई, बढ़िया खेले भाई टीम। उनका लोएस्ट डैमेज भी इनसे कम है भाई, तो 320 भाई 320 यार है। प्रीमो को देखो बे, प्रीमो कितना नल्ला खेला है, 3 किल। किल के लिए थोड़ी खेल रहा था प्रीमो, खड़े तो होने होल्ड के करने के लिए लिए खेल खेल रहा रहा था था। प्रीमो उतना कुछ अच्छा नहीं खेला और गेम भी हल्का है। चलो भाई, लॉन्ग रेंज फाइट देखने के लिए रेडी हो जाइए। कौन सा अच्छा रे बाउंटी तब नॉकआउट देखने में अच्छा, और इसमें मजा आता है। तुम कौन कौन सा भाई बैन इनने जब करते से और बाउंटी क्या क्या लिमिटेड लेते? किया है ना, बंदे बहुत होल्ड करते हैं भाई बाउंटी में। It's a tough map as well, you know, if you find yourself stuck in those back lines and against भाई potential पहले तो टिक बैन किक होगा, भी जाता था भाई टिक बाउंटी बैन में, होगा। 70-80 स्टार भी जाता था जब मजा आता था। हाँ जिसमें भाई अब पुश तो कर करके 30 पर मारते हो रहते गया। थे ना, अब तो ऐसा है कि ये स्टार लेके आ गए, ब्लू स्टार, बोले काम खत्म भाई, छोड़ो क्या ही लड़ना है। तुम 20 और 20 स्टार्स ही लिमिट है, लेकिन गोल्डी भाई इस पे देखिएगा टिक बैन होगा और इस बार टिक पे उसको वो नर्फ भी भाई मिला मैं है, बैन जीरो करूंगा जीरो। मोर्टिस और वो मैक्स को। मोर्टिस तो बैन हो गया मॉर्टिस कि वो, बैन है, कि जो मैक्स सबसे पहले बैन जाके है। वो ले आता है भाई, सबसे आगे पहले जाके लेके आ जाता है। देखो मैक्स टिक ले भी लो, बैन है भाई। मैक्स ले लो भाई, मैक्स ले लो। ब्लू स्टार मिल जाएगा तो एक लीड मिल जाती है भाई। आरटी भी बैन है भाई, क्या ही कहते मिस्टर पी खेल सकते हैं, मिस्टर पी हाँ बढ़िया है। नहीं, बढ़िया है। अरे मेजी देखना इस मैंने मचाएगी जो लेगा। नहीं लेंगे मेजी, नहीं लेगा भाई, कोई नहीं लेगा मेरी। लॉन्ग रेंज फाइट है इसमें। भले ही तुम वो, भले ही हो सकता है कोई बढ़िया प्लेयर हो तो कॉल्ट ले सकता है, डिपेंडिंग। ये उसका भी सुपर चार्ज है, हाइपर चार्ज, तो नहीं लेने वाला कोई। अभी मेजी मैं हार गई, कौन है ये? फ्लैश हारेगी। मैंडी, अरे मैंडी बोल रहा था मैं, हाँ मेजी नहीं मैंडी भूल जाता हूँ। मैंडी तो नहीं खेलेंगे इतने कॉम्पिटिटिव स्टेज में खेलते। बॉनी भी अच्छी चॉइस है। अच्छा, मैं बार बॉनी बोल अच्छी देता हूँ, चॉइस मेजी है, मैंडी लेकिन खेलेंगे। उसका सुपर चार्ज होने का बहुत कम टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें। और वैसे भी अब फ्लैश जो है उसको नहीं लेना चाहिए बॉनी के लिए, इसके टीम में 2 स्लो अटैकर्स हो जाएंगे फिर। टैंक आने वाला है कोई रेकॉनिक का, हाँ पक्का कि बायरन आ गया। पैम आने वाली है, मेरे को लग रहा है पैम। पहले 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 तो ब्लॉक नहीं है ना, पहले ले सकते हैं। अरे गोल्डी भाई रफ्सा है भाई। अरे गोल्डी भाई बोलो भाई। अरे मैं मेजी नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था मैंडी लेनी चाहिए थी मेजी की जगह। मैं मेजी नहीं मैंडी बोल रहा था। भाई गया रफ्स, रफ्स यूज नहीं कर सकता अब सैंड भाई। पेनी का स्प्लैश पड़ेगा, एक बार में मर जाएगा भाई। ये तो फाइनल सेट है, जो जीतेगा वो जीत जाएगा। ऐसे मैच देखने में मजा आती है, उन्हें पिक्स अच्छी हो। ये लोग भी खींच रहे हैं भाई लंबा, ऐसा नहीं कि वन साइडेड हो रहा है। हेलो moon_yt once again, हेलो हेलो। अरे भाई फिर ये लोग नल्ला वाला एमुलेटर क्यों यूज करते हैं, शर्म नहीं आती? ओ भाई ले गया ब्लू स्टार ले गया। ओ भाई किल भी ले गया। हक दिया। हो गया भाई, अब इनको तो होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, खत्म भी लो भाई। फ्लैश का तो ही गया और उसने वो लिया हुआ भाई, खींच लिया गई भाई पैनी, वाह भाई दीवार के आर पार खींच लिया। और एक तो इसने प्रमोशन लिया हुआ है, हेल्थ बढ़ाई चला जा रहा भाई इन लोगों की। ये घंटा मर रहे हैं इनसे ये लोग।
देखना 9000 हेल्थ होने वाली है। अबे दो तो हीलर ही है टीम में। बायरन को भाई पूरा वही कर दिया। वो बायरन ने मार दिया। हाँ हील मार लिया ना उसने खुद को। अरे बायरन ने मार भी दिए थे भाई 2 शॉट लगातार। एक और मार दिया, एक और मार दिया, एक और मार दिया, गया खत्म भाई। बायरन खतरनाक है भाई। ये ले देख बिना स्किन के दिख रहे हैं भाई 2 बंदे तो देख। हाँ दो बायरन बंदे और बिना स्किन रफ के। टीपी करके मार दे भाई, नानी को मार सकता है। ये इतना पुश नहीं करते ये लोग, ये तो वही है ना, बचा के रखते हैं लोग। इसमें तो 2 ही स्टार है, वो तो मार सकता है चाहे तो। फिर भी उनका ये सोचना है काय के लिए पुश करना जब लीड में है। देखा नहीं वो से एक ब्लू स्टार से जीत गई टीम भाई, एक ब्लू स्टार की वजह से, 1 पॉइंट से। बहुत नाइस भाई साहब। भाई पेनी का खेली बहुत है गंदा भाई। हाल हुआ है। पेनी बहुत बेकार खेली है। अरे भाई मौका कहाँ दिया, उसकी इतनी रेंज ही नहीं है जितनी बायरन की रेंज है भाई। कुटाई की थी बायरन ने। बायरन ने 2 चांटे दिए, वो मर गई भाई। How many accounts are there Brawl Stars? मेरे पास एक ही अकाउंट है। I only use one account. I never use more than one account in any game. कोई सा गेम जो ना हो मैं उसमें अकाउंट ज्यादा रखता ही नहीं भाई, मेरे को याद ही नहीं रहते। हाँ याद ही नहीं रहता पासवर्ड, दूसरा कहाँ से याद रखूंगा। सिर्फ एक ही गेम ऐसा है जिसमें मेरे एक से ज्यादा अकाउंट है, वो भी इसलिए क्योंकि वो गेम बैन हो गया था। सोचो, बीजीएमआई। नहीं तो मेरा वो 4 साल वाला पुराना अकाउंट ही होता, लेकिन वो गेम ही बैन हो गया। बीजीएमआई सबको हाँ पता है पबजी। BGMI। लेकिन नहीं सही है, अच्छा है का नया अकाउंट बना लिया। वाला भी तो भूल ही गया। मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पासवर्ड का। अरे पासवर्ड की वो है ही नहीं, उनने वो गेम बैन कर दिया, उसके बाद फिर वो आईडी मेरी हैक हो गई थी ना। कौन सा गेम? अरे पबजी। It's just a night and day difference for Team Flash here so far, but let's see. Raconic have got some time here. अबे Flash जीत रही है। It is notoriously a map where when you are in your spawn, you have some. अरे पुलपुल सॉरी किसको बोलता है? It's gonna be. I'm sorry if you're asking for yourself. Kane missed there from Christian. They've got to continue the assault, but Toxic on the left-hand side. आए भाई बायरन के 3 शॉट आए। Continues. We haven't seen anything from भाई Raconic बायरन yet. बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने बोला ये 3 शॉट में ही सुपर मिल जाती इनको है। पुश करना पड़ेगा, अब कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ फाइनली उसने उसका टबो तोड़ दिया, कुछ चैनल नहीं कर तोड़ सकते दिया। लोग। गया भाई, गया ग्रे नल्ला भाई, टेलीपोर्ट यूज ही नहीं किया। पिन यूज कर रहा भाई वो, अब चिपकेगा ना जो मर जाएगा। घूमे जा रहा है भाई। अरे तो दूसरी स्टार पावर यूज किया होगा ना, दूसरी स्टार पावर लिया होगा इसलिए जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा डैमेज मिलेगा। अबे स्टैंड बैक पे मार, बाजू में खड़े हो गए। 18 to 5. It's going to be Team Flash tying things up. It's double match point. भाई क्या चल रहा है? पिछला मैच पूरा इनने डोमिनेट करा, ये मैच इनने डोमिनेट करा। अब लास्ट तक खींच रहे हैं भाई, लास्ट आ गया है, अब जो जीतेगा वो जीत जाएगा। Give me your UID। अच्छा पलपल से बात हो रही है भाई, पलपल भैया बताओ, बात करो। You could not write this better. What a way to decide it. It comes down to one game. One team's 2023 journey ends here. The other will proceed to day 2 as the number 2 seed in this Group A. My, oh my, what a time to get this right. Yeah, we'll splash straight through those sandbags, and this blue star is so desirable. Splash even got through. ले गया भाई ब्लू स्टार, ले ग्रे गया। गलत लेन में खेल रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ कर ही नहीं पा रहा वो। ग्रे को नानी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। After the last game, if they don't seem ग्रे like और it on मेसी the- का बढ़िया लगता है They've gotta be अगर in होता their तो, mental. लेकिन Toxic करेंगे will नहीं ये as लोग। well, but Reese will tank the peep and Penny turret down. This is where just भाई इसको पैनी को टर्रेट भी दे रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? उसने टर्रेट बाहर खींच दिया भाई। नानी जो है बारॉन पे जा रहा है बार बार। अब उसकी हेल्थ सबसे कम है। रफ नानी को मार सकता है।
हाँ वो सैंडबैग ये लेन गलत खेल रहे हैं भाई। बायरन मेजी को मार सकता है और रफ नानी को और ग्रे पेनी को। अरे बार बच रहा है बायरन, 2 बार बच गया। हिल मार खींच लिया। गया ले गए भाई, ले गए। हो गया, अब नहीं आने वाले पीछे। अब ये लोग पीछे वाह खेल भाई, हक दिया, पीठ भी हक दिया उसने। अब तो पीछे खेलेंगे वो। हो गया। वॉल से नहीं रहना था, वॉल पे पास नहीं रहना था, वॉल के पास रह गलत किया। भाई हार रहे हैं ये लोग। वो कौन है, आरसीएन हार सकती है अभी भी। हाँ बहुत लो है, लेकिन बायरन ने हील मोड कर देगा। टेलीपोर्ट मार दिया। जी 2 की लीड हो गई। मार दिया, दोनों ने क्रिएट कर लिया एक दूसरे का। लेकिन 2 की लीड हो गई ना। 12 सेकेंड। नानी के पास ऊपर है। 8 7 6 5 4 3 2 1 और टेलीपोर्ट मार गया। जी जीत गए। आरसीएन जीत गई। जब ब्रॉलर्स अटैक में रहे तब तक पेनी ने अटैक नहीं किया है भाई। ये फीलिंग तो आया भाई, प्रेडिक्शन तो आया। ओ भाई गैस छोड़ी जा रही है। यही तो गैस भरी होती है गैस सिलेंडर में, एचपी की गैस। यही तो है भाई, इसी से तो खाना पकता है। हाँ बस जाके तू आग लगा दे, आग लगा दो उसमें। अरे बताओ तो कौन सी बढ़ती है? मीथेन गैस रहती है भाई, गैस सिलेंडर। तो बायोगैस क्या होती है फिर? ये बायोगैस बायोफ्यूल यूज करके बनाई जाती है, जिसमें हम होते हैं गोबर, खाद और वो अर्थ वॉर्म्स यूज करके। चिकून भाई 670 पॉइंट हो गए। चिकून क्या भाई? हो ही गया आज तो आप लोगों के। वो तो होना ही है, उसमें क्या है। अगर नहीं भी होता तब भी एमवीपी चूज करके ही हो जाता भाई। आरएचजे को दे रहा हूँ भाई मैं तो। को कर रहा हूँ भाई, मैं भी आरएचजे को दिया। लेकिन सबसे ज्यादा वो टॉक्सिक को दिया है। टॉक्सिक ही पसंद है भाई ब्रॉल स्टार वालों को सालों। डीप था ये, डीप नहीं डीप। 1-2 गेम और देखूंगा तो मेरा तो हो ही जाएगा। कितना हो गया? 775 हो गया। हेलो परवीन, मेरा नाम है बड़ी हाथ पैर तोड़कर दे दो मुंह में चड्डी। हाँ दे देंगे, तुम्हारे मुंह में चड्डी दे देंगे भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह में चड्डी दे देंगे। लेकिन कौन सी चाहिए, लक्स कोजी चलेगी या अमूल माचो? बड़े आराम से। अरे अमूल माचो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, बड़े आराम से चल जाएगी। हाँ भाई बड़े आराम से सीधे मुंह के अंदर। अमूल माचो पहीन के नाचो। हार गई, जीत गई आरसीएम, जीत गई। और क्या, ओनली रेड कलर क्या है? तुम्हें बुल फोबिया है? रेड कलर देख के तुम भागना शुरू कर देते हो। कुछ भी बोलो, मजा तो आता है भाई, देखने में ज्यादा मजा आता है खेलने से। लैग वैग भी तो नहीं होता इनका, तो देखने में तो मजा आएगा ही। हाँ भाई हम लोग को तो लैग होता है, पर सब टीम में खेल रहे हैं, 3v3 खेल रहे हैं भाई, मजा तो आना ही है। मैं तो यही बोल रहा था, अगर अपन जीतते भी है इंडिया में से कोई भी, अगर वो विश्व जीतता है तो उसको बोलना चाहिए भाई हमारे इंडिया में सर्वर लगा दो। कौन जीता वो कोर्ट्स, कौन जीता कब पता चलेगा? ब्रॉल स्टार्स वाले कब वीडियो डालेंगे? पैसा नहीं कमाना क्या इन लोग? सर वाले वीडियो डालेंगे। हाँ मतलब ब्रॉल स्टार वाले तो भाई नॉन मोनेटाइज वीडियो डालते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन थोड़ी होता है। मतलब वो लोग डालेंगे कि ये लोग जीते हैं, लोग की विशेष। हाँ ना ऐसा कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्रिएटर्स को दे दिया 5-5 दे देना भाई, हमने तुमको पकड़ा दिए, बस काम खत्म। वो तुम यूज करो या तुम पड़ोसी को दो। हर क्रिएटर को 5? हाँ तो हैं ही कितने क्रिएटर, गिन के बता दे। एसके जीतेगा मेरे को लग रहा है।
हाँ 10-5 मिनट हाँ उम्मीद तो एसटी की ही लग रही है भाई मुझे, फीलिंग तो एसटी वाली आ रही है। उसकी अब नहीं तो कोई चाहिए। और ही गेम है, ये गेम ही नहीं है। चेसमैक यही है गेमिंग यही है वर्सेस वीएन ई स्पोर्टिंग। यही है डिसाइडर मैच दिखा तो रहा है। But today just wasn't the day. They didn't look like Chazmak Gaming EA against रुको SK जरा to यार, start खाने things का off, कुछ and I think लेके from आता there हूँ। obviously we didn't see हाँ मेरे लिए भी ले आना, ठीक है। just gone. Yeah, tough day. आवाज नहीं आ रही भाई बीसी से। हाँ कैसे आएगी, हाँ चलो किक करो भाई, वीएस को किक कर दो। बैन ही कर नहीं दो भाई यार, उसके कान खराब है, बैन कर दो। इनको गाली बैंड पता है, इनको म्यूटेड कुछ नहीं पता भाई। नहीं मेरे उसमें है ही नहीं ऑप्शन भाई, चेस मैक वर्सेस वीएन ई स्पोर्ट। यार इसमें तो पहले ही चेस मैक भाई, एसटीएम वर्सेस क्लैश। अरे अपन को तो इनने करा लिया था एसटीएमएन वर्सेस क्लैश, तो दिखा वो क्यों तो नहीं रहे करा winner लिया। कौन है? अरे भाई वो तो करा लिया था। देखो कुछ बता रहे हैं। हु विल विन दिस मैच, सीएमजी वर्सेस वीएन। भाई मैं कर रहा हूँ भाई मैं। वीएन ई स्पोर्टिंग को तो मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। अब पता नहीं अच्छी टीम हो तो नो आइडिया, बट मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ भाई, तो चेस मैक ही कर देना। 42% है वीएन का और चेसमैक का 58। ये वीएन का मतलब वियतनाम तो नहीं है, वियतनाम ई स्पोर्टिंग। कुछ भी हो सकता है भाई। I feel like, you know, watching STMN specifically in the scrimming process, they are on fire at the moment. I mean, they're looking like my personal favorite. I think in my predictions, you know, looking for my prep, I think I put down Chazmak and STMN. But, you know, ultimately, you've got to look ahead as well into Group D, which is where they will... बीच में पापा आ जा रहा है, इसलिए आधा तो मिस हो गया। तो क्या हुआ, एमवीपी चूज करो और टीम चूज करो, काम खत्म। 780 हो गया बे, मैं तो देखा ही, ध्यान ही नहीं दिया। 780 तो वैसे ही हो गया। अगले 2 मैच में तो हमारा खत्म हो गया। गेस करो मैं क्या लेके आया हूँ। चिप्स मांग रहा है भाई। अबे आलू भुजिया और रोटी। पहले तो टॉयलेट से बाहर निकल भाई। आलू भुजिया और रोटी, आलू भुजिया एंड रोटी। मिट्टी मिट्टी खा रहा है ये। वाह भाई, इतना बड़ा आदमी हो गया, लेकिन अभी तक भी बेचारा मिट्टी खा लेता है। मैंने स्प्राइट देखी, स्प्राइट भाई बाहर रखी है फ्रिज के। अबे फ्रूटी कोई कैसे पी सकता है भाई, बहुत बेकार लगती है। उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगने लगा भाई। पहले बचपन में फिर भी अच्छा लगता था, अब तो ऐसा लगता है पता नहीं इसमें क्या मिला दिया है। फ्रूटी नहीं है ब्रो, माजा है। फ्रूटी तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर भी फ्रूटी माजा भाई, बॉडी फ्लेक्स कर रहा भाई। इंडिया टीम में 4-4 बंदे आते, सब टीम में 4-4 आते, लेकिन ये अगर तुम लोग को याद हो, उनकी टीम जो आती जीटा वालों की, उनकी टीम में कोई नहीं आता कोच वोच। वो तो अकेले आते, अकेले निकल लेते भाई। अकेले आते, अकेले खेलते, अकेले जीतते, अकेले चले जाते। अब जरूर उनकी टीम वो वाली चला अलग हो गई है, तो अब तो कोच आता है उनकी टीम में। अरे वो लाइट वाइट बंद करके खेल रहे थे भाई, उस दिन तो देखे थे ना। उस दिन मैं बता रहा हूँ, उन्हें लाइट बंद करती है, एक से बोल दिया था पैसे भेज दे उनको, काम खत्म भाई। उससे पहले हार रहे थे, फिर जैसी लाइट बंद हुई भाई, लाइट बंद करके साल। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, उनकी डीलिंग चल रही थी, बोले जा पैसे भेज दे, बोले हाथ से ले लेना। भाई देखो ई स्पोर्ट्स खेलना तो टैब में खेलने की आदत डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मोबाइल से कुछ नहीं होता। वहाँ देखो टैबलेट पकड़ा दिया, अब तुम सोचो वहाँ जाके मैं तो मोबाइल खेलने की आदत है, भैया मेरे को मोबाइल दे दो, बोलेंगे ना 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 टैब पे खेलना पड़ेगा, फिर तो वैसे ही हार जाएगा बंदा। बोले उसको तो प्रैक्टिस ही नहीं खेलने की टैबलेट में। पर्सनल डिवाइस होंगे इन सबके। ना 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 ना, देखो ना सबके एक जैसे कैसे पर्सनल डिवाइस हो सकते हैं? जो स्पॉन्सर होते हैं वही देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बीजीएमआई देख लो, आईक्यू वाले स्पॉन्सर किया तो सबको आईक्यू में ही खेलना पड़ता है। अभी तो लैन में भी वापस, अभी जो लैन होने वाला है उसके भी डिवाइस बताया नहीं किसमें खिलाएंगे।
I would say weird the play style is, but they do just run. They just run at you, and it works. It works. That's how they roll. Max speeds, tanks, anything that gets. वहाँ तो एप्पल पे एप्पल नहीं चलते, वैसे उसका डिसएडवांटेज भी होता है कुछ प्लेयर्स को, लेकिन स्पेशल परमिशन लेके वो लोग खेल लेते हैं आईफोन वगैरह। You know, again, Mavis and Nob, I've got to say and reiterate just how dangerous those two are on the aggressive. The Carl picks, टेबल पे इतनी धूल आ रखी है भाई साहब, things can be won and lost, and you know it's going to be such an enjoyable match. Regardless, you know, Toast as well, really great in terms of control. You've got to have some of that, as Rama is on the side of VNE Sporting as well. I think we've got ourselves a very, very close matchup on our hands here. And he's an absolute skyscraper as well. Look how far the camera had to pan up to get to his face. Tall guy. ब्रॉसर का स्पॉन्सर सैमसंग है, मोस्टली वही करता, लेकिन टैबलेट देख के तो ऐसा फीलिंग आ रही कि ये एप्पल के हैं। आईपैड ही है, iPad. एप्पल के आईपैड ही है। It was amazing to watch. लोगो दिख रहा था Really, उसको really उसमें। was, and they've got to give a shout out to Toast as well. Had a bit of a tough layover coming here, and you know, it was held up by about 6 hours. But I said, you know, चेसमैक के प्लेयर जो बीच वाला खड़ा है ना, उसके हाथ में था तो दिखा। He was really, really अरे happy वो with how कोरियन things were, कंपनी है and ना, let's get stuck in. Look Samsung at that separation, 58% siding with Chasmac Gaming NA to the 42% This way. of BN Esporting on Sure. event.brawlstars.com. कोरियन वैसे ही ब्रॉल स्टार्स बहुत लोग पैसा शूटिंग खर्च स्टार करते से हैं। ही स्टार्ट हो रहा है भाई, To get stuck in, and this जहाँ one's खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। It's going to be so exciting to watch how the mindsets of both teams are, their approach, their kind of strategy coming into this one, and do they want to keep some cards in their back pocket? I was chatting with Fade as well, and you know, 8-bit clearly very much on the minds of North America as a whole at the moment, and there's kind of more control-based ideas. Of course, Toast, you know, very much championing the B pick, and combining B with that tank, taking away some of the counter could potentially be on the cards for Chasmac Gaming NA here as well. Yeah, that's the thing. You just never know what these guys are going to play. Their drafts are usually so strong. And that's just an NA speciality. You know, drafting is their forte, and now getting into it, we won't be seeing that Meg considering बल्ले it's बल्ले, sad to see for Arc at least because you know he तो was लेगा जो इसमें चांस तो है। Stabel coming in first. Chasmac Gaming NA going to pick that up. हाँ, Great ये लो भाई। return from VNE Sporting. मैंडी नहीं खेलता यार, कोई मैंडी देखने का मन करता है, Yeah, कोई we've seen खेलता ही so नहीं। much grey today, and it just ऐसे मैप में क्या ही मैंडी खेलेंगे। I'll say for me, that tells me that Chasmac Gaming NA have done their homework. नहीं मतलब You know, जैसे making sure they are able to be वो हो inside the गया minds of out in VNE the Sporting in open। terms of their draft, and that's उन a सब great में band कोई to have कुछ नहीं alongside the खेलता। EAP and the RT. इसमें खेल सकते हैं मैंडी, लेकिन भाई कॉम्पी में बहुत पिटाई होगी मैंडी। I really do like that. It's a तू kind of खड़ा रहेगा इन जगह, अच्छी तेरी है। बहुत पिटाई होगी। long range. अगर is मैंडी all gonna be about अच्छी है तो finding फिर that बहुत combination. Damn. I mean, that brawler in the current meta at the moment is just so strong. And Bit, there is bit. the from Chasmac as well. I फिर mean, तो बात चीपू भैया ले ले भाई। here are in each other's mind. Gene going to come in for the heels on top of things, but you know the Fang, especially, you know, it's going to be marked up by the Bell, which might not be the अभी greatest lunch things for करूँगा VNE थोड़ी Sports. देर। They've got to have one final brawler to round this off. yeah, and I think at the same time as क्या ले well. सकती है ये वीएन की टीम लास्ट? He's going to be able to do a lot. टीम को ही ले सकती है, The damage is going to be so या फिर थ्रोअर ले सकती है। to get into when he's पैम भी ले सकती है, पैम। बस वाह भाई, adds a bit of HP, you know, you're going to be pretty good as a Fang. बहुत अच्छे बंदों ने छोड़ दिया भाई स्पोर्ट्स, जैसे नॉन हो गया, ब्राइटमैन हो गया। I still like Chasmac's अच्छा ये वीएन स्पोर्टिंग भाई, इन्हें नाम चेंज कर लिया अपने टीम का। और इससे जो पहली बार नाम जैसे सुन रहा हूँ, उन्होंने टीम का नाम चेंज कर लिया फिर से। नॉब भी सुना हुआ लग रहा था भाई, नॉब पिछली बार भी खेला था। हाँ वही बोल रहा हूँ, इन्होंने नाम चेंज कर लिया टीम का। on Shooting Star. I remember so many times watching the BSC monthly finals in North America. Ash Clutch would always be in the नॉब बढ़िया खेला था पिछली बार। मेरा क्या कंप्लीट हो पाएगा, ओनली 400 पॉइंट्स हुए हैं, तो कल भी है भाई। और अभी भी मैच बहुत सारे हैं, सिर्फ एमवीपी चूज कर और घर चले जा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। भाई ये गस की स्किन चाहिए भाई, वो वाली चैंपियनशिप वाली बहुत तगड़ी स्किन है भाई। ये ब्लिंक में थोड़ी अवेलेबल है। के मारता है भाई। अरे 149 जेम्स की है और अब आती भी नहीं है। वाह वाह भाई, क्या मारा, गैजेट प्लस सुपर भाई। अभी ये कौन यूज करता है? 8-बिट ने ये क्यों यूज करा है? ये कौन वाली स्टार पावर ले ली इसने? बड़े करने वाली ले ली भाई, इनकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग है। कुटाई भाई कुटाई।
अरे इनकी फैंग स्ट्रेटेजी को वो मार है करना कि था। ये यहाँ खड़े होके एट मारेंगे बिट उस ज्यादा साइड ही डैमेज खेलेगा। पड़ेगा। हाँ, यहाँ से खड़े होके मारेंगे तो ज्यादा डैमेज पड़ेगा, इसलिए लिया है। अबे भाई हक दिया जीत। गलत टीम ले ली भाई, मेरे को लगा। इस मैप पे खेल सकते थे थ्रोअर अरे भाई अनब्रेकेबल वॉल्स की वजह से। भाई इतने वो लोग है ही नहीं उधर, पीछे ही इतने चले गए लोग तो पिन पूरा को ही। स्पैम कर रहे हैं कि बेचारा पिन हैंग हो गई भाई। हाँ, मेरे में भी लैग होके चल रहा है। He might have clipped the wall there and not got the full lunge directly on the players, or was it a bounce around, but has another super. बहुत मुश्किल है भाई CMG का जीतना। फैंग आ गया भाई, हो गया भाई, वापस चला गया मार के। बहुत लो, बहुत लो। ए भाई गया। कुटाई भाई कुटाई। गस अगर फैंग को शील्ड दे, गस अगर फैंग को शील्ड दे तो बहुत हार्ड है। कम हो गया भाई। दे नहीं रहा। अबे गस क्या ही खेल रहा है भाई। I was appreciating that Rama was getting super because Fang can sometimes be a loose pair of hands here if you're not bringing in that utility. I'm loving the combination with the Gus. Every time it provided them value and they came out with the थ्री फिंगर खेलते हैं भाई ये लोग सब। chance to respond to this, and this comp still has very much some legs in this matchup. भाई ये लोग फिंगर पे क्या रखा? बचा ही नहीं पा रहे हैं भाई। Looking for a pinch from Rama now, but RBM's keeping it back. Nice supers there. कुटाई 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 कुटाई। चलो ट्रेड हो गया। क्यों खींचा उसको? फैंग को खींचना चाहिए। भाई शील्ड ले लिया, बच गया। 5-5 हो गया, लेकिन इनके पास वो है ब्लू स्टार है। फैंग इसको खींच लेगा। बढ़िया भाई, गया, किल 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 मिल गया। आने देना भाई, बेल आने नहीं दे रही, खुद के ट्रैप में आने ही नहीं दे रही बेल भाई, क्या कर। और लास्टली बचा रही कि अगर गलती से आ गए नीचे तक अब करेगा ये टेलीपोर्ट। अरे ये जो पहले खेल रहा है ना, इसको शायद मैंने कहीं देखा है, मैं इसको शायद जानता हूँ पहले से। अरे सबको जानते हैं भाई। भाई 4 गैजेट थे बेल के पास, 3 लगा दिए उसने, एक पहले यूज हो गया। चैनल भी waiting for their opportunity. The TP's there, but he's just going to have no help. अबे यार कैसा नाम रख के चैट क्या नल्ला है भाई। चलो फिर भी किल तो मिल गया नॉट इन ब्रॉल स्टार्स। क्या बोल रहा है ये चैट पे? भाई। जीन ने पुश किया लेकिन कोई मतलब नहीं। एंड लेट्स यू प्ले Among Us and not 6 in Brawl Stars. हाँ, in Among Us you can play up to 15 players, but in Brawl Stars you can not even play more than 3. That is the case, bro. Can't actually expect each game to be fought more than 5 to 6 people. भाई इन लोगों को क्या हो जाता है एकदम से भाई, एकदम से वो जीत जाते हैं, एकदम से ये जीत हारने जाते लगते हैं, अचानक से जीतने लगते हैं। स्ट्रेटजी पर चल जाती ना। पहले हार के टेस्ट करते हैं भाई लोग। आईपैड पे खेल रहे हैं भाई, उसमें एप्पल लिखा है। भाई साहब मैच फिनिश पूरी। अरे भाई क्या उसके मुंह के सामने से ले गया भाई वो। मार 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 गया गया गया। देख मनु वायरस 8 बिट देख। ये टेलीपोर्ट करके मार देगा। गया भाई गया गया। बच गया बच गया भाई साहब। ग्रे के पास सुपर है ना, ग्रे के पास सुपर है तो। अरे कुछ नहीं हुआ। ये लोग सुपर यूज नहीं करते। और खींच लिया, फाइनली खींच लिया भाई। भाई क्या खींचा है। पिछले वाला तो हक दिया था, इस बार कर लिया। अब इन लोग भाई एडमिट क्या कर रहा है। वो यही करेगा, वो पीछे से ही खेलेंगे जो पिछली बार उनको समझ गया ना, जैसे जीते थे वैसे ही खेलेंगे।
maybe तो it's लेना कोरोना ही दे वायरस दे। हो गया है भाई। position as last time. Maybe he just wants to set it up, but he's actually going to go for the walking cane. हाँ वो खींच पकड़ लिया। लिया बेल Don't ने। hate it. Maybe still has some in hand as well, and I think he does. Eventually goes down. TP's there. Super's there from अरे Gus. बेल भाई 4 गया। गैजेट ले सकता था। अब नहीं जीतेंगे, अब उनने दीवार तोड़ दी वो वाली। इनको फैन पोजीशन के चेंज पास करनी भी पड़ेगी। सुपर है, ग्रे के पास भी सुपर है, सबके पास सुपर है। गश ने अगर फैंग को सुपर दी और फैंग ने हाँ। सुपर यूज करी तो गए भाई तो थी। 1v3 हो सकता है आराम से। नाइस अगर पोजीशन जीत चेंज। ने गैजेट 25 सेकेंड भाई। ग्रे को भी शील्ड देता है तो भी भाई एक तो मर ही जाए। अरे भाई कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग। भाई जाओ, अभी मौका है। मुंह पे लास्ट में क्या ही करोगे। गए भाई सब। बच गए। जीत गए भाई ये लोग, जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए भाई। नल्ले लोग हैं भाई, इतने लास्ट तक क्यों इंतजार करते हैं। अरे खत्म। लेकिन इन लोगों ने 8-बिट को सुपर क्यों दे दी? अगर 8-बिट की सुपर ना गार्ड कर पाती तो फिर अबे जीत तो जाते। कैसे नहीं देंगे। फैंग ने जब सुपर यूज करी, जब आ गई 8 बिट की सुपर, जब मारा उसने 8 बिट ने उसको। हाँ, जी आते जी। हुए भी तो गोली लगती है। आते हुए भी तो बहुत गोली time लगती है लगाते फैंग हैं को। ये कौन बोला भाई। टाइम का ये लो राज है क्या? हाँ। काजू काजू। आएगा क्या ये अब मेरे 400 ही हुए हैं, कंप्लीट हो पाएगा क्या? जो हाँ नहीं हो हुआ। जाएगा। आधा तो मिस ही कर दिया मैंने। अरे अभी आधा तो भाई आधे मैच भी नहीं खत्म हुए। कहाँ हुए हैं। अभी तो बी ग्रुप अभी चल रहा है, तो फिर ग्रुप- सी और फिर ग्रुप डी। बी चालू हुआ है। अभी तो 100-200 मैचेस होंगे भाई। From Shazmac Gaming NA, so it's really nice here. The replays coming in, maybe we will see it, but that was just beautifully played, especially from behind. Like CMG were अभी in that first reject game, और they'd Marcos lost, but they gaming. had to win 2 in a row, and it just worked for them. Yeah, they were able to start to see through the timings of what VN Esporting were trying to achieve there and stopped going in alone and played तो much बाल better को जा रहा है as a भाई। team. And just a lot of the players here, again, with so many stars to hand, it's a wonder that VN Esporting didn't turn this around. Yeah, it really is. I mean, that was the second game where they managed to kind of get going. Beautiful pull from Fade again. क्या He खींचा missed था a भाई few ये तो। throughout the set, but he just gets the pull, I think, वो there. सही था। सीट मारा है भाई। उससे पिछले राउंड में तो हक दिया था उसने। Shazmac. It really was. And, क्या and घसीटा अभी मैंने भाई तो उसको, वो तो वो- घर से बुला लिया, इधर आ भाई तू मर चुका। you know, to have बुल that को additional सपोर्ट किया है। knockback from the lamp blower, rather. बुल को सपोर्ट किया। That's quite a daring thing to have अबे वो to लाल hand वाले and को। to have those vengeful spirits instead. क्यों? अबे Bit of a tough one there. नाम The ऐसे ही। one takedown for him, कुछ but नया ऐसे सा ही लगा भाई, इसमें। इसलिए तो पॉइंट नहीं बढ़ रहे भाई तेरे। But RBM with 6, Fade with 5. नहीं ऐसे तूने भी किया है ना ये वाला? कौन सा वाला? चेस में को अबे सपोर्ट चेस- कर रहे हैं भाई हम तो। हाँ। अरे भाई में। पुलपुल भाई की प्लानिंग फिर देखो। आ गया ये चैट डुअलिंग देखो। बीटर। पुलपुल की प्लानिंग देखो भाई चैट पे। पहले ने जिधर बीच में ट्रैप बिछाया था 8 बिट को, उस पर खड़ा हो जाना चाहिए था। फिर जैसे ही फैंग उस पर सुपर करता वो स्लो डाउन हो जाता और 8 बिट टेलीपोर्ट कर लेता और उसे टीममेट्स मार देते फैंग को। आपकी प्लानिंग बढ़िया है, लेकिन ये बहुत स्लो खेलते हैं ये बंदे। आप देख ही सकते हो 20 सेकंड बचे थे और ये लोग हार रहे थे, फिर भी भाई आखिरी तक उनने कुछ स्ट्रेटजी बनाई नहीं भाई, लास्ट में गए। और वो अगर कुछ भी देख लो, फुग्गा बॉय हमारा अगर खुद यूज ना करता अपना सुपर, इनको दे भाई देता ले लिया। फैंग को। पैम का काउंटर ले लिया भाई कॉर्डिंग। बढ़िया भाई। हाँ तो भाई देखो, फुग्गा बॉय ने खुद के ऊपर यूज किया है यार, गस ने खुद के ऊपर सुपर यूज कर लिया। इससे बढ़िया किसी अटैकर को दे देता, वो मार पीट के इनको निकाल देता, खत्म ही हो जाता। उसने खुद के ऊपर यूज कर लिया सुपर, बोले मैं अपना ही ऊपर नया यूज टीम का करूंगा। नाम क्या है? पूरा नल्ला है भाई। नल्ली नहीं है भाई, ये पूरी ओल्ड टीम है। देखो ना, रामा हुआ, नॉब हुआ, ये लोग खेलते तो थे, कुछ अलग टीम के नाम से खेलते थे ये लोग, लेकिन हाँ रामा और नॉब को तो जानता हूँ मैं। हम वही लोग तो बोल पहले रहा हूँ। जब याद करी करते थे पॉइंट्स। और ये तो पिछले बार का वो हार गए थे, मंथली फाइनल्स हारे थे ये लोग तो, रामा और ये नॉब वाली टीम। कोई पर नहीं खेल रहा लेकिन आज। पैन है, अबे अभी एम्स नया बैन नहीं नहीं खेल है। सकता। एम्स ले सकते हैं भाई, 2 टैंक के उधर।
चेसमैक एम अच्छा ले हाँ, सकती है। हाइपर चार्ज पर के पास भी तो है। नहीं भी होता तब भी नहीं खेल सकते थे। भाई मॉर्टिस हैं? कुटाई भाई कुटाई। भाई एम्स ले ले एम्स। Hope for VN Esporting that they're going to be able to go on the aggressive and get some value for it, or that could be costly. मेरे हिसाब से उसने इसलिए मोटिस लिया ताकि ये लोग थ्रू ना लें। ओटिस ओटिस ले लिया भाई, गया मॉर्टिस। पेटी है भाई मॉर्टिस की। भाई मॉर्टिस किसके ऊपर जाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। देखो कॉर्डिलियस के पास भी गैजेट एक होता किल नहीं है, मिलेगा भाई मॉर्टिस को, एक किल म्यूट कर देगा कॉर्डिलियस, म्यूट कर देगा, ठीक है। बस्टर जो है इनपुट की जगह आउटपुट वाला ले लेगा, फिर दूर फेंकने वाला जो गैजेट है उस वही फेंक देगा उसको दूर उठा के। अरे भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है मॉर्टिस का। भाई बस्टर एक साथ तीनों को खींचेगा। कॉर्डिलियस एक को ले जाएगा, कॉर्डिलियस एक को वो ऊपर से ले जाएगा, एक को वो म्यूट कर देगा ओटिस। हाँ भाई देखते हैं क्या होता है भाई। मस्टर मार ही देगा, एक को तो मस्टर मार देगा। नो भाई भाई खत्म हो गया भाई मोटिस, हाथी खत्म हो गया भाई। क्या नल्ला बन भाई। खत्म। सही है सही है सही है। क्या लिया ये? रोसा भाई, रोसा भाई साहब, रोसा भाई, रोसा ओपी। कॉर्डिलियस को भाई रोजा के पास गैजेट होगा ग्रास बनाने वाला भी, देखना पूरा ग्रास कर रही है। बना तो दी क्या, घासी तो बना रही है भाई। रोसा कुटाई कर रही है। कॉर्डिलियस ने क्या लिया है, कौन सा गैजेट लिया है? हाँ अब करा भाई। भाई कुटाई कर गई रोसा, तो खत्म कर गई रोसा। ले गया रोसा को ले गया, वो खत्म हो गया। लेकिन इनका वीएन जीत रही भाई, वीएन जीत रही। अरे भाई कैसे जीत गई, हक दिए भाई ये लोग। क्या दिया भाई, रोसा चेली 3 लोगों को टपका रही है, वो देखो फिर आ गई। लो फिर कुटाई। कॉर्डिलियस नहीं कर रहा, सही कर रहा जो करना चाहिए था। ये लो खत्म। मॉर्टिस ने कुटाई खाली भाई। ये लो भाई, क्या ही बोलूं। जिस दिन मैं खेलने लग गया भाई, जब मानूंगा मैं प्रो। इसमें लेकिन मोटिस का इतना रोल नहीं था, रोसा ने जो कुटाई कर दी इनको लो कर दिया था ना, इस वजह से मोटिस को किल मिल गए। लेकिन कॉर्डिलियस को शैडो रेल्म में ले जाना चाहिए था रोजा को। अरे उसको ले जाना चाहिए भाई, जैसे ही आए वैसे ही ले जाना चाहिए। एक ब्रॉलर तो वैसे ही कम हो जाएगा। रोजा को ले जाना चाहिए क्योंकि देख पहले लोग कंट्रोल ले लेते हैं ना, तो बस इधर ही बैठे रहना चाहिए कॉर्डिलियस को। इसको लेके जाना चाहिए, देख लेके ही नहीं जा रहा। देख ले गया। अब लेके गया है भाई, मर गया, कुटाई खा ली मर गया। अबे छी भाई, क्या नल्ला है भाई। अब ठीक है भाई रोजा। बल्कि वहां तो वो सुपर यूज भी नहीं कर सकती तो कुटाई खा रहा भाई वो। गया मॉर्टिस, ले गया। इस बार अच्छा खेल रहे हैं ना ये लोग, देख इस बार सही। इस बार बिल्कुल नहीं, गेट कीपिंग कर दी है, आने ही नहीं दे रहे उस साइड। अब मॉर्टिस को म्यूट करना पड़ेगा। हो गया, खत्म कर दिया भाई, खत्म हो गया भाई। ये वो करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी देखते हैं भाई, पहले हारते हैं जान की। हाँ चेसमैक का कुछ ऐसा ही, क्योंकि ट्राइब के हर बार हारी, फिर उसने कम बैक किया ट्राइब के साथ। खत्म हो गया। देखो 2 डैमेज कर रहा है भाई। अरे भाई 2 तो म्यूट करने वाले ही हैं, 2 तो भाई खत्म ही कर देंगे। रोसा सुपर पे सुपर कर रहे हैं पैम के सामने बस। तो रोसा का तो वही फंडा है, एक बार सुपर मिली तो इतना कुटाई कर देती कि दूसरा सुपर वहीं पे चार्ज हो जाता है। और आजकल तो कुटाई खाएगी तो भी सुपर चार्ज होता है, तो वैसे ही हो जाता है। हाँ कुटाई खाया भी नहीं तो उससे भी कुटाई खाने पे भी उसकी सुपर चार्ज होता है। घटिया मोटिस है भाई, कहाँ से सुपर मारा है, एक को भी कनेक्ट नहीं हुआ। बढ़िया, बहुत बढ़िया पुल किया, नाइस किल मिल गया। बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, जीत गई भाई। पैम की ना सुपर है, बस्टर उसको वापस हटा देगा।
शील्ड लगा लेगा अभी बस। ले गया बस्टर ले गया उसको। बेचारी पैम मार ही नहीं पा रही भाई, जब भी मारती वो शील्ड लगा ये देता कॉम है। बढ़िया लगा बे, ये कॉम खेल सकते हैं किसी भी ब्रॉलर के साथ। अरे अरे क्यों गेट कीपिंग करो, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, आपको टाई होगी भाई। हक दिया लग रहा है। ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, वो ले गया उसको, ले गया रोसा को ले गया। ओटिस के पास म्यूट नहीं है, कुछ नहीं कर सकता ओटिस। मिल गया गए भाई, खत्म हो गया, मतलब तीसरा वाला फिर गए चलेगा। भाई गए। वैसा अभी भी अरे है, भाई, अभी भी मौका है। रोजा कर बहुत कर अच्छा कर खेल वन रही है। होने वाला है मेरे को हो लग गया रहा हो गया, ले गया ये, ले गया उसको। आ गई, नेविगेट कीपिंग कर ली फिर से। हेल्प कर उसकी ना, नहीं मार पाया। रोसा आ गई भाई, जिंदा हो गया। खत्म हो गया यार, थर्ड स्टेज फिर खेलना पड़ेगा। कॉर्डिलियस ने हक दिया। खत्म, थर्ड सेट इज इनकमिंग। कॉर्डिलियस बेकार खेला भाई। हाँ भाई, उसने कभी भी रोजा को शैडो रेन में होल्ड ही नहीं किया, वो बस मरता गया। या तो उसने उस रोजा को मारा एक दो बार बस। इन लोग के पास तो कम्युनिकेशन भी है कि कहाँ कौन जा रहा है, फिर भी ये लोग हक दे रहे हैं भाई। तब भी भाई सोचो यार, जो लोग नहीं करते वो लोग कितना बढ़िया खेलते हैं। कॉर्डिलियस को बताना चाहिए ना कि मैं इधर ले जा रहा हूँ, इधर आ गई रोजा, इधर आ गई, ये करा वो करा। वो और उंगली के बेस की ग्रास में छिपी हुई है और कॉर्डिलियस मार नहीं रहा भाई। वो अलग है भाई। हाँ तो वो यूज भी नहीं कर सकती अपना सुपर, तो कुटाई खा रहा भाई। हाँ भाई, कुछ देखो इसी की वजह से कुटाई खाई है भाई। बहुत अच्छी सेकंड रोजा राउंड की, इनने 10 बढ़िया साल होल्ड किया था, बाद लेकिन भाई एक बार वहां से गेट कीपिंग हटी फिर तो भाई लुढ़क जाते हैं लोग। रोजा पूरा बेस के अंदर घुस के मारती। मॉर्टिस ने भी देखना ये ट्रिपल वाइप किया है इधर। हाँ वो भी बहुत अच्छा था। Maybe इसका। मतलब जहाँ मॉर्टिस नहीं खेल सकते वहाँ भी इसने बढ़िया खेला भाई मॉर्टिस। उसने मॉर्टिस बस्टर के लिए ही लिया होगा भाई। 12 किल किए मॉर्टिस ने, 12 किल मॉर्टिस और 8 किल रोसा। बढ़िया खेला फेड क्या खेल रहा था भाई? अरे फेड क्या वो खेल रहा होगा, भूल गया मैं। और बस्टर खेल रहा होगा, बस्टर बस्टर। अच्छा 619 का डैमेज पर सेकंड। बस्टर है ना, तो एक बार में 2 लोगों को खींच रहा था ना वो, तो एक बार में डबल अरे डैमेज। सिर्फ उसने काम नहीं किया भाई, सिर्फ कॉर्डिलियस की वजह से आ रहे। लेकिन भाई कुछ भी कहो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बढ़िया है। फर्स्ट राउंड में सीएनजी ने हक दिया, इसलिए हार गए। Very close game, so back and forward, and it's just all of the games we've seen today have been so evenly matched. Yeah, and I feel like this will be no different, but the draft here, it's going to be बस्टर बहुत अच्छी पिक थी, बस्टर भी बढ़िया था भाई, और उनकी साइड से रोसा भी बढ़िया था। सिर्फ एक प्लेयर की कमी की वजह से वहां पे उनने जब गेट कीपिंग हटी तो भाई फिर तो रोसा ने घुस घुस के पिटाई करी है। रोसा ने पिटाई करके लो किया है और मॉर्टिस ने फिनिश किया है। बोल रहे हैं हम नहीं खेलेंगे तो तुमको तो खेलने ही नहीं देंगे भाई। इनके पास वो विन था ना, इनके पास पहला पिक था इसलिए। अरे फिर से कॉर्डिलेस, सब नल्ले हैं भाई ये लोग, नल्ले लोग हैं भाई, नहीं चाहिए, नहीं है हो रहा तुमसे। कोई और खेल रहा है, टोस्ट खेल रहा है इस बार। टोस्ट खेल वही रहा तो था क्या खेल, पहले? हाँ वही तो खेल रहा है, वही तो अच्छा खेल वो रहा है। टोस्टर डांस वही है। टोस्टर डांस का यूट्यूब चैनल भी, इसका साइड टेम्पो से 36 का आंकड़ा है। साइड टेम्पो ऐसे को भाव भी नहीं देता होगा भाई। लेकिन 36 का आंकड़ा साइड टेम्पो टेम्पो में बैठा के भेज देता है इसको, बोले जा जा घूमी करके। शैली से भाई, शैली से घसीट के मारा था पिछली बार साइड टेम्पो ने। ये बोलता अभी इसमें शैली बैन है ना, नहीं तो भाई रोजा लेते ही नहीं ये लोग।
सर्ज अगर कोई खेलेगा तो बढ़िया है इस मैप पे। लेकिन रोजा के काउंटर भी बहुत कम है भाई। जब से उसको वो मिला है तब से, वरना हाँ पहले भाई, तो जब से तो भाई क्या ही कूट रही है वो, हर मैप में कूट सकती है, इसमें कहाँ से। इस मैप में लियोन भी बहुत अच्छा है भाई। एक तो ऊपर से स्पीड, ऊपर से हील मिलती है ऊपर से। क्रो बढ़िया है भाई इस मैप में। क्रो तो बैन लियोन है। का काउंटर क्रो है। वो ले ले भाई, वो ले ले। वो नहीं लेते भाई ये लोग। वो नहीं खेलेंगे ये लोग, क्योंकि माइंस हर बंदा देख लेता है और माइंस हर बंदा नहीं जाता फिर उस माइंस पे, तो क्या फायदा लेने। इसलिए तो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम को अब आदत नहीं है वो सारी स्ट्रेटजीज की, तो जो उनके सामने ऐसी कोई खेलता ही नहीं है। वो जीटा भाई, जीटा से एग्जांपल लो, देखो भाई प्यार है भाई। जीटा का एग्जांपल देखो। इस वाले में थोड़ा नॉर्मल मजा आ रहा है, क्योंकि पता है इसमें देखो ये लोग जो ब्रॉलर बैन करते हैं वो भी बैन है, और बाकी जो ब्रॉलर जैसे वो हो गए शेली कोल्ट, ये सब भी बैन है क्योंकि इन पे हाइपर चार्ज आ गया है। चीपू भैया स्क्विक आ गया। स्क्विक को तो खुद ही बैन कर देना चाहिए भाई। अभी देखो जॉक्स 2 खेलेगा, रामा जॉक्स 2 खेलेगा। ये भी नर्ड खेलेगा शायद, नर्ड्स 2 खेल सकता है। हाँ शायद, तो मजा आएगी अगर जॉक्स 2 रहेगा तो फिर थोड़ा मतलब वो रहेगा देखने में। देखते हैं, हेडलेस राइडर तो बेकार है। इससे तो अच्छा ही है भाई, जॉक्स 2 से तो अच्छा ही है हेडलेस राइडर भाई। लेकिन जॉक ये तो छिपकली है भाई, नल्ली छिपकली लगती है ये भाई। मुझे वो लगता अबे है तो विग खेल रहा है भाई, सबसे सस्ती स्किन खेल रहा है भाई। भाई सबसे सस्ती खेल रहा है नल्ला। वो भी गोश्त खेल रहा है, वो भी गोश्त खेल रहा है। उनसे तगड़ी तो ये खेल रहे हैं भाई सीएमजी वाले। वायरस 8-bit ओनी ओटिस और ये कॉर्डिलियस नया वाला। ताली बजाओ। अरे भाई मिस कर दिए 5 पॉइंट। भाई ये गैजेट कहाँ डाला है स्क्विक ने? लोग का तो हो ही अरे जीत गए बे सीएमजी। 8-bit जब भी जेम कैरियर होता है ना, जब बहुत मुश्किल होता है भाई अपोनेंट को। टेलीपोर्ट मार लेता है ना मौका काम है बोलेगा। हाँ बोलना भाई, खेल गया भाई। बोल भाई राज बोल। इन लोगों ने आप लोग का कितना पॉइंट हो गया? 800। मेरा कितना हो गया? 810। जीनी भी नहीं लिया भाई लोगों ने। जी जी भाई, मैच पॉइंट। जीनी भी नहीं इस मैप में जीन बेकार है, बेकार है, बहुत बेकार है इस मैप में जीन। सेंजी के पास कोई लास्ट में विजन वाला है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, किल मिल रहा है। ये राज तो सबको क्या दे रहा है चैट में? चुम्मिया। अबे तारा बेकार है। तारा सुता दिया। कोई भाव ही नहीं दे रहा भाई तारा को। साइड से निकले उसने, अब भाव देना पड़ेगा ना भाई, कॉर्डिलेस आने ही नहीं दे रहा। कॉर्डिलेस सब पिटने वाला है। ये कौन ऊपर आने वाली है कॉर्डिलियस के पास बेकार गैजेट कूदने वाला। अबे अच्छा है वो। क्यों अच्छा है? अच्छा है भाई। मैं ज्यादातर वही यूज करा करता हूँ, देखा नहीं। मैं तो कूदने वाला ही रखता हूँ। देख सुपर आ गई, अब लेके जाएगा। हाँ वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। बोल रहा हूँ भाई, हो गया। तारा के सामने उसको नहीं चल रही, इनको वापस चेंज करनी पड़ेगी अपनी। अरे यार रे भाई, अबे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, ये जो टोस्टा पोस्टा है, ये दूसरा मार दिया मार दिया नहीं कर रहा। दूसरा एसपी क्यों नहीं यूज कर रहा है? हाँ नहीं कुछ हो सकता है स्ट्रेटजी और लोग वो इसलिए ताकि वो दूसरों को भी डैमेज मिले एक्स्ट्रा, क्योंकि बड़ा हो जाता है ना। जेम दे के आया भाई, कोरियर करके आया है भाई कॉर्डिलियस। हो गया, हार गए।
अरे कॉर्डेलियस सीधे कूद गया उनकी वॉल से। उसको सोचा कि स्कू को मार दूंगा एक शॉट में। खत्म हो गया। मैच पॉइंट का मैच पॉइंट आ गया भाई। फाइनल गेम पॉइंट अब तो भाई। From across the world in different regions, in different sub-regions are facing out, and how close it is. It's really entertaining. Brawl Stars. भाई ये कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं चल गया। गिटार बज रहा भाई, गिटार। किसका था ये गिटार? राज का। ओ इसने फिर पोजीशन चेंज कर ली भाई। तारा इधर आ गई। भाई यही करते रहेंगे भाई आधे मैच में तो। तारा फिर इधर आ गई, आ गई, फिर तारा इधर आ गई। बोले ये इधर आ गया, हम भी इधर आ जा रहे हैं। तारा ने गैजेट यूज करा ना भाई, ये कॉर्डिलियस की पेटी है। Yeah, I mean, he just wants something. He just wants something out of this. Nice shots coming in from Fado, gets them low. Should be able to take out. अबे क्या सोच के जंप कर रहा है इधर उधर? तारा का सबसे हार्ड काउंटर कौन सा है? इम्स। तारा का काउंटर रोजा ही है और क्या? एम्स है भाई। मैं भी वही सोच ही रहा था क्योंकि वो एक शॉट में तीनों पपेट को ले लेगी। हाँ ना, तो इम्स। अरे कोई भी स्प्रेडर है, कोई भी स्प्रेडर उसको अटैक करके उड़ा सकता है। इवन पोक को भी मार के उड़ा सकता है भाई। मार देगी तारा को इस मैप में। पोको भी नहीं दिखता भाई अभी स्पोर्ट्स में बिल्कुल। बायरॉन जब से बनाई है उसने अपनी प्लेस। आ गया भाई, आ तो गया। देख रहा हूँ इसका गैजेट। किसका? ओटिस ने गैजेट कितनी देर बाद यूज करा भाई? हाँ कर रहा था बीच में, लेकिन वो घास में फेंक रहा था ना, इसलिए दिख नहीं रहा था। अच्छा खेल रहे भाई इस बार, देख सकते हैं। अबे कहाँ जा रहा है कितने? मर गया था भाई, बच गया। तारा के पास सुपर है। खानी पड़ेगी वो तो किसी ना किसी को। खा ली भाई। अबे फिर दे के आ गया भाई ये ओटिस। आने वाली है तारा की सुपर वापस। मार दिया, तारा पिट गई। ये भी पिट गए भाई, ये भी पिट गए सब। वो भी कुटाई हो गई, तो कुटाई हो गई, कुटाई हो गई। हो गया, हार गए, हार गए, हार गए। वीएन जीत गई। ये वीएन विंस। जी जी। क्या भाई यार, 8-बिट ने हक दिया लास्ट में। 8-बिट ने जो टट्टी करी है भाई। गिटार बजाओ भाई राज भाई, तुम्हारी टीम जीत गई भाई। भाई 8-बिट बहुत टट्टी भाई। इसकी वजह से एक और मैच देखना पड़ेगा अब। I've got them down as being a heavy contender for this group, but that was a very strong opening statement from VN Esporting. Yeah, it really was. I mean, even from Chazmak, it was a strong opening statement, right? It looked good regardless. Replays coming through though, and I mean, you know, Chazmak, they started कितना टाइम हो गया? अरे 5 बज रहे हैं। अरे ये बिना स्पीड के 8-बिट कुछ नहीं है भाई। ये पता नहीं क्यों एसपी, ये घटिया वाली एसपी ले रहा था। और भाई नल्ला देखा गया भी कहाँ? क्विक से लड़ रहा है। वो बच जाएगी जब तक एंड होगा। हम लोगों के लिए जब तक अभी जो नेक्स्ट मैच होगा फिनिश होते होते 5 तो बज ही जाएंगे। देखना पड़ेगा भाई। एमवीपी तो आया। वीएन को देखो कैसे सेलिब्रेट कर रही थी। करेगी ना ये भाई, उसको लास्ट चांस क्वालीफायर के फाइनल में पहुंच गया भाई। आरबीएम के 10 किल रामा को मिलेंगे भाई। रामा को 38% भाई। 35 भाई काम यहाँ यूज कर रहा है रामा। भूख लग रही भाई, भूख लग रही है। कितना खाएगा? अबे किसी को भी कर सकता है भाई राज, इसमें तो किसी को भी कर सकता है। किसी को भी करो भाई। We kind of expected it to be a bit questionable, a bit hit or miss, and they just played so well. If they can take down Chazmak NA, तो वो टेडी कहाँ गए? any team here.
Yeah, you know, so many teams, you know, coming in saying एडी that को they were पीछे so भेज much दिया। looking forward to seeing the region's clashes. I was just looking for the forward पेट वाइन नहीं देते बंदा 10 से, मुंह वैसा का वैसे ही रह गया उसका। really, really important point when it comes down to the kind of the first पूरा early यही LAN करें। experiences. We've got a हाँ question भाई players मेरी are पीछे तरह तो इंटरव्यू है। ले रहा होगा बैठ के वो। and VN Esporting looked very, very good. पीछे I've got to इंटरव्यू say, दे रहा you know, होगा। as we mentioned coming into this दे one, रहा their performances kind of fluctuate a lot along the लेने way. की They're तो not बात the most छोड़ो। consistent of teams, but when it matters, they do bring home. अबे आज हो क्या रहा है भाई, कोई सी भी Surely, CMG at the back of जीत ही the नहीं box, रही। plays no. Rama, as always, gets the सीएमजी last हग word. रही है आज हग, He always does. क्योंकि उसमें That boy, 8 we're gonna बिट see के some पास goals सुपर on बहुत Twitter अच्छी soon, I है। feel. You'll underestimate him. I mean स्टार पावर। I mean, we've got to expect a tweet. अबे ये We've got to टोस्ट expect a tweet इंडियन from जैसा that नहीं man. लग I रहा। mean, he really does deserve to tweet at this point because that was a really good game. And I mean, he's दोस्त तो proven इंडियन himself. जैसा लग रहा है, रामा भी तो इंडियन ही लगता है बहुत Europe could still ज्यादा। bring it to NA. नाम भी उसका रामा है। Yeah, I mean, for me, you know, just demonstrating that. Ooh, 2-1. STMN जीत गई। Again, another third and final set matchup. क्या ड्रामा तो खेल का नाम। तो अपने को 100 पॉइंट तो वहीं से मिल गए। Exactly what we wanted, everything that we अभी नहीं मिले, हाँ, अभी नहीं नौ आए, पाँच। अब आएंगे। Yeah, I mean, that अब आ जाएंगे, वही तो बोल रहा हूँ। great game as well. वैसे ही 1000 हो गए बस अपने। तो हो ही गया भाई, I फिर want to तो see what's 1000 going down. First set, we'll see which way it did go. Obviously, really हाईलाइट उसका- दिखा रहे from both these teams, but Clash just could not quite get it done. Latam उसका were भी scared MVP of- चूज करने दो भाई हमें। very scared of Latam. That's the thing. It's भाई, इसमें भी अभी प्रो भी की नहीं स्किन देखो, दिखाया स्केलेटन गया वाली। है। in these games. अरे सब वही भाई, We were scared. अपनी तरह ये लोग भी इमुलेटर चला रहे हैं, बोलते हैं ये इमुलेटर मत यूज करो, भाई, तो सब यूज सब कर है। रहे हैं। ये तो नकली इम्यूलेटर है, इसमें तो सबकी स्किन ग्लिच हो गई। And it's STMN versus VN. Oh, and I mean, you know, Bobby was always वो very प्लेयर keen बोलेगा to भाई, get his मैंने तो hands इतने onto मुश्किल से VN खरीदी ये स्किन, That तुम was, हमको I think, इतना if memory घटिया serves दिखा रहे हो। correct, the first two teams that were drawn in Group B, and Bobby was celebrating, and then it turned into जो sheer प्लेयर win, आइकन didn't दिया it? है ना, But इतना खास again, नहीं you है। know, I'm so thrilled to see that all the teams so far today 1000 पे है are प्लेयर really Yeah. आइकन तो। वही This तो बोल रहा हूँ, number one खास seed, नहीं अरे है। देख भाई, अगर तू रिवॉर्ड के लिए देख रहा तो ये रिवॉर्ड के लिए इतना कुछ है नहीं। रिवॉर्ड के लिए अगर देखना है तो वर्ल्ड फाइनल्स देखना है। number 1 and 2 seeds will हाँ go भाई through रिवॉर्ड phase के and लिए मत देख, गेम उसमें प्ले भी सिर्फ देखने में स्किन मजा। मिलती है, scary in terms of the stats, and this is what's going to make the next उसमें भी round सिर्फ of this स्किन मिलेगी। so crucial. बाकी तो सब यही रहेगा, I mean, कॉइन that's वाइन। how much seeds mean. अरे भाई Sense दिक्कत और of एक ये आध सबको यही पिन मिल जाता है मिलेगी फिर। बस। Come on, like कौन सी बड़ी absolutely यूनिक nobody चीज wants बीच to का be तो मिलती ले है। ही नहीं पाया था, वो So you've पिछले got का to get पिछले number वाला one, वर्ल्ड and then फाइनल if reject the favourites in that group get number one, then you're going to be fine. कुछ ही But पॉइंट्स let's के be लिए रह real, गया था they'll मैं। probably get C2, and if you win the group, they'll probably face them anyway. I mean, the way today is going, JC का स्किन। anything can happen. do rejects make day 2 at this rate? That's the question, and that's what I mean. The LCQ is ये bringing रेज so many क्विट लिया unpredictable qualities in और today. अभी I होने love वाला it. I है don't know what to think anymore. वाला रेज क्विट तो नल्ली है भाई, There's no बिल्कुल predictions. 30 Nobody स्किन can एकदम। predict what's happened today. I feel like my predictions have just gone 49 terrible. जेम की भी हो तो मजा आए भाई वो। And then this is a कौन सी rarity. रेज This is a क्विट rarity स्किन आ that गई? they'll ever do terrible. Never रेज mind क्विट mid तारा। It's the predictions master, Rain, come to an end. अच्छा I वो mean, वाली। surely not, right? Surely not. Well, our next matchup will be STMN versus VN Esporting. Let's start first with STMN. Yeah, किसको Samus करना है? Bobby STMN को ही करेंगे Shah और is the किसको? squad of STMN. Really strong roster. And I mean, I have my headphones on. They cancel out sound, and I could बताओ hear गोल्डी भाई shouting किसको करें? when they won. I wasn't sure. स्टैमिना ही दबाएगा STMN। Bear in mind, it could have been either them or STMN Clash, but I heard some shouting, STMN। and clearly STMN reigns supreme. Onto किसको the stage now करें? they come. Sans, STMN Bobby, कर दिया भाई and STMN, Shah. 83% भाई They've always STMN। got a new बड़े jersey. क्या? No matter what event it is, they've got something new on, and I'm liking पॉइंट these तो ones मिले at ही the नहीं moment. भाई अपने। They just गेम they had such a 925 back and ही है forth मेरे with को। Luminosity in their region. आएगा, नल्ले लोग सो रहे होंगे। Tribe Gaming NA. In their respective sub-regions, नहीं भी आएंगे तो इस वाले में जो भी MVP होगा भाई उसको सिलेक्ट करके भी 100 हो जाएंगे। they didn't manage to make it happen. ये Luminosity मोटा went लड़का कौन है? forwards to the World Finals and they हैं? had to come मोटा again लड़का and कौन है? try qualify through this. But if they can पूरा beat जिम Clash, वाला लड़का लग रहा है they भाई। can probably beat a STMN। lot of the teams in this tournament. जिम Oh, टिकट my वर्ल्ड words, फाइनल्स की incoming. ट्रॉफी के रखी है ना। इसमें। Love that VN एक Esporting दे देंगे already सबको showed जो us they can जीतेगा। beat NA, but can they beat बीच the में वर्ल्ड फाइनल में जो other पिका side चीज of मिलता है the ना, NA पिका चीज देता है ना वो sub-regions? टेडी बेटी बियर। That is gonna be जोर a से whole बोल new भाई, challenge. कितनी I would धीरे say, आवाज आ रही है you know, इसकी। according to most people, STMN is gonna be Hello? rated मैं a बड़ा bit आता हूँ। higher हाँ। than CMG NA, despite बीच not ही having बीच में the वो लोग easiest फेंकते हैं ना year this वो year. टेडी का वो STMN, बच्चे they're लोग जो still a सामने बैठे रहते हैं उन लोग को fantastic देते हैं। team, and हाँ, पिका चीज। people love goodies, to land. हम्म। The Demons, हाँ, मेरे they को भी बैठना performed उधर। really well वहाँ under उस pressure. जाने के लिए वहाँ के टिकट का
का चार्ज जितना है ना, उतने में तू हम लोगों को भी टेडी दे देगा और 10 टेडी फिर भी बच जाएंगे तेरे।
especially after that victory against Clash. ऐसे राजगुरु I में mean, the thing फ्री with में VN esporting भाड़ा दे is, देगा towards the end of this year, they haven't looked as great. बताना They मैं started राज off very all right. deep They deep got deep to the first तो month, तेरे they को दे देगा got third, fourth in Feb, second in March. But from there was definitely a downhill slope for them throughout the monthly finals. They started to drop off, they started to not even qualify, and that's the issues they had. Obviously, they had to climb back through SPS, back through the last monthlies to be able to इन make लोगों को it तो to एक this दूसरे को ऐड position. करना पड़ता And I होगा mean, भाई, you know, there was even a chance of them making तब worlds. तो ये which was फ्रेंडली बना a पाते big होंगे. ask, but they almost did it. STMN, on the other hand, they did get some wins. नहीं जरूरी नहीं है, They definitely did. And कोड कोई भी बना के दे दिया, फिर वो जिसने कोड बनाया वो छोड़ देता, वो टीम तो बनी रहती है. perform really well, and they certainly do. They do tend to get stuck at that top 4. They got 4th place at MSI. खतरनाक लग रहे हैं भाई SK1 वाले तो. मार देंगे अगर हार गए तो. लास्ट वाले को देखना, वही मेन प्लेयर लग रहा है मेरा. भाई बड़ियल को देख. नहीं नहीं भाई, ये तो नया प्लेयर है, ये जो आया नया प्लेयर है, इनकी टीम में थोड़ी खेलता था. साइड वाला है ना जो फर्स्ट में खड़ा है, वो तो पुरानी है. हाँ वही बोल रहा हूँ, ये जो बॉडी बिल्डर जिसको बोल रहा है ना, वो नया प्लेयर है. मतलब हमने नहीं देखा है, होगा बहुत पुराना ही भले, नहीं हमने नहीं देखा. It's like the group of death by far. STMN, VN esporting. क्या नाम है इसका? नाम क्या है? दिखाएंगे. Sans, नाम तो सुना हुआ है. अबे वो खेल ही नहीं रहा जो पहले खेलता था. I think that STMN and VN Esports come from very different places as well. STMN, their roster has उसकी जगह जार खेल रहा है, जार. जार तो खेला हुआ है पहले ही, भी उसमें मंची फाइनल भी खेला था ना बॉबी के पीछे, ये खेलता था पहले. The exact same team. VN Esporting not quite the same story there. They are अगर उसमें कुछ होता है तो फिर वो वापस खेल लेगा, ऐसा भी तो है, टीम में ही तो है वो. for the most part of the year with some very slight changes. भाई खर्चा तो करते हैं ये लोग. From A&R really, but now under VN's colors they do look solid. They are a threat. A lot of teams scrimming them have had some tough results. चाहे तो LCQ भी ये लोग घर से करा सकते थे. In the previous match, honestly, I didn't think they were going to take it. With the start CMG ये टूर्नामेंट हो कहाँ रहा है रे? had lots of momentum, and yet कौन से somehow जगह में हो रहा है? ये जहाँ होने वाला है वहीं हो रहा है. उसमें ही हो रहा होगा. final set as well. And that नहीं नहीं उधर नहीं हो रहा है, जहाँ वर्ल्ड फाइनल्स होने वाला है शायद वहीं पे हो रहा है. on land nearly as much as I wish I had, and right now they are impressing me. इधर हो रहा है लैंड इस बार, शायद उधर हो रहा है स्विट्जरलैंड या फिर ऐसा कुछ सुना था, स्वीडन वगैरह. STMN, but they might want to, you know, not start behind this time around because the clutches they got in match 1. I don't know. सेम मैप आ रहे हैं भाई, मैप ही चेंज नहीं कर रहे ये लोग. Yeah, I mean that's the thing, right? It's और difficult वॉल for तो है VN ना. esporting here, I feel, because STMN they've got to be the अबे favorites. सेफ जोन है They're not. पहले तो. Chasmac NA were probably the favorites in the first one as well. Heist But safe managed to zone. prevail. They looked very good whilst doing हाइस्ट well. भी चेंज नहीं कर रहे ना, But जैसे the कि thing has to be कबूम the best कैनियन ones. हो The गया first LAN event we've actually या फिर seen कोई दूसरा मैप हो of गया. them playing with the whole roster. You know, they finished 4th in SPS. They were playing with KC. KC's a great player, but it's just not the same as playing with your own roster. Who will win this We match? question some क्या nerves. कौन? We question the nerves of Chessmac या We've Clash? never even seen his face before. We Clash question- भाई. बताओ भाई. Okay, maybe Clash, he's a bit of a nervous Clash. guy, 'cause that's usually what it is. Chessmac आज नहीं चल रही भाई. Professionally. 50-50 है भाई, खतरनाक. Well, surprised me so heavily. And honestly, I think this might वैसे be तो हमारा हो गया भाई, हमारा तो हो ही गया है. हाँ भाई हो गया हमारा, होने वाला है. पिछले मैच के पॉइंट ही नहीं दिए इन्होंने, नहीं तो हो जाता पहले. And it was hard to just get to meet him in the first place, you know. He was hiding a little bit, but he is building up some confidence. फिर आ गया भाई and ये. that can be very deadly. अबे So, yeah, यार. SCMN, they are going to have to be careful in this matchup. भाई ये for इंडिया में आएगा तो sure, क्या होगा इसका? because this could absolutely swing. पता नहीं भाई, अगर ये इंडिया में आया और मेरे को स्पेशल गेस्ट भी बुलाया ना, चीफ गेस्ट भी बुलाया मेरे को, तो मैं नहीं जा रहा भाई. that one of the two NA teams is out for sure. ये डेट पे गया है, ऐसे हंस रहा है भाई. So that is ऐसे ही जा scary रहा है. for everyone from NA. So yeah, cross your fingers because भाई कुछ like चीजें it's ठीक है भाई, last थोड़ा week, you know, लाइटली हंस रहा है, ठीक है. plenty हर of चीज hope में ही हंसना है भाई for इसको. SCMN, and they could be doing NA a huge favor because that would potentially give the possibility of 2 NA teams moving forward to day 2. Predictions wise, it's not quite as even as I would like to see it for this matchup. Now, I think Stamina is a favorite.
इनको असली में भी ब्रॉल स्टार में ये हीस्ट रेड कर देनी चाहिए रेड I टीम think की 60-40 would be pretty accurate for this matchup. Not 83-17. That's crazy. Absolutely crazy. But yeah, I agree. STMN are probably the favourites coming into this one. I think regardless of VN Esporting's first performance, obviously STMN pulled something pretty similar out the bag, managed to take down Clash, who are a very strong team. And LATAM have proved that recently as well, you know, through Nouns Esports in EU, dominating that SBS qualifier. Clash clearly had their work cut out for them, being in a region with them all year long. We're moving on then. Brock is going to be the first pick on Safe Zone. Bans are looking like Groma, 8-Bit and Bonnie from the side of STMN. VN Esporting going to ban out the Cordelius, the Piper and the Fang. We're back over to STMN for 2 picks now. Yeah, the Brock is a very old school pick here on Safe Zone. Pretty much always been good, if not one of the best first picks, depending on the meta. Just the wall break is great. Brock is going to be one of the highest tiers on Safe as well. And when you're a sharpshooter and you have that extra trait, it's going to be fantastic. Much more damage than Bell, for instance. Bell is going to have many चालू तो तब तो कुछ बोले क्या बोले इसमें यश चला गया क्या खाना लेने गया वो फिर से इसलिए शाम को it's a good opportunity to get some भागने गया होगा extra भाई damage, a little bit Jesse style in that way. Eve, I'm not as much of a fan of. It will do good. डैरल पहली बार दिखाई देते हुए Sure, but something like a शायद रिवर के थ्रू जाएगा ना वो अगर इसलिए। मैं खेलता है इधर caring too रखा। much about the Eve hatchlings. It's just कौन pretty कौन much two सपोर्ट shots करता है there. मुझे All three of them are आम चिल्लाते कोई वहां नहीं जाके करता राक्षस 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 वो लोग भी सोचते हैं राक्षस इन लोग को पहुंचना इंग्लिश बहुत नहीं बड़ी आती बात है भाई उधर तक really. And the जीतना color I तो do दूर की like, बात though. It's some good potential damage on safe. पहुंचने पे भी तुम लोग करोड़पति बन गए होते भाई क्योंकि तुम्हारे स्पॉन्सर ही इतने होते कम से कम हर टीम में जो नल्ली भी खेलती हो भाई उसके कम से कम 2 तो स्पॉन्सर हैं ही The Colette is a very good last pick. Daryl and Carl can be, you know, swept up pretty easily. But इनकी नाइकी स्पॉन्सर है STMN की एसटीएम टी की शर्ट भी नाइक की है भाई with the Colette, with the Brock, with the Daryl, if they get anywhere इन near लोग that का same टी शर्ट चेंज हो गया ना पहले तो ये नहीं था absolutely हाँ चेंज है बॉबी It's देखता है भाई just so सब much DPS on that comp, and especially, you know, Carl's gonna be able to sweep up a lot of those opponents. If he picks पहले कुछ चलो भाई स्टार्ट होते हुए येलो टाइप का था spot. Rama gonna be opening up the walls. वीएन की स्ट्रीम वो टीम ज्यादा वो दिख रही है भाई अच्छी Vantage point that हाँ, बात तो सही लेकिन है उसने कॉलेज लिया ना सैंस ने तो डेरिल कुछ नहीं कर सकता up in the mid and देखो ना उसने ऑलरेडी डैमेज दे दिया 8% तो वैसे ही कम हो गया stay behind safe. डेरिल सुपर ही चार्ज करता रह जाएगा भाई Super कुछ is नहीं gonna कर connect सकता and find डेरिल the kills, or does find a kill of his own. Not quite in range. देखो of सुपर ही anyone नहीं है just उस पे yet. खत्म हो सुपर दिया गया। जा रहा है On Bobby, but eventually does go उल्टा सुपर दिया जा रहा है अबे भाई हग दिया बे so far in favor of SDMN. गेंद तो हग अब रहा इसको ईव को मारने के लिए भी सुपर लगेगा भाई बिना सुपर के नहीं मार पाएगा ईव को देखो Try to start snowballing a little bit. तो है ही है Kill he gets is gonna अब इधर आने के लिए उसका सुपर ही नहीं बचा है and सेफ तक आएगा कैसे low HP, probably not gonna be able to आएगा भी तो भाई एचपी नहीं is on his face. Yeah, I mean, एचपी पहले फुल करो फिर आओ जब तक उसकी सुपर आ गई ईव को सुपर दे दी वो मर भी गया भाई काल को तो छोड़ सकते हैं काल इतना डैमेज नहीं देगा डेरिल आ गया डेरिल को भेज दिया बाहर काल भी दे रहा है डैमेज Sans low HP, but still able Nice. to get a nice crossfire set up with Bobby. Carl can भाई डैमेज तो दिए जा रहे हैं लोग दोनों ही that one Zart full अब उससे हो गया सुपर चार्ज हो गया डेरिल लुढ़क के आने वाला है bit before going in. The कम बहुत से कम damage 20% देगा 20% तो कम से कम दे के जाएगा that Daryl अरे है उसका लेकिन वहाँ पे हग दिया डेरिल as well. Don't think that was ideal. ये भी हक दिया भाई ये क्या सुपर यूज करके गया ब्रॉक Can definitely deal more than that. But VN Esporting still very much in the running. That super will deal a ton of damage on the safe. The lead expanding in favor of इसमें STM and Nub ईस्ट में तो कॉलेज को बैन कर देना चाहिए भाई कोई भी मैप That's going to be lots of damage coming through on the safe, but is it enough? भाई 4000 बचा नहीं मार दिया हाँ मार खत्म दिया अकेले जी कॉलेज को अकेले छोड़ के आया करते कि वो बिना सुपर जी चाहिए दो छब्बीस तो मार रही थी एक शॉट वे बीच में ऐड आ गया बे Yeah, definitely was some room there for हैं? things to turn around. बे अरे गोल्डी स्ट्रीम का पे डाल देख दिया। रहा है Just won a couple स्ट्रीम of स्ट्रीम counters left and right.
especially towards the end. That could have been a different story, but it was close. It is Stamina, regardless. They will be picking up game number 1, starting off the series with a little bit of momentum, and that's always going to be very nice. Off the bat, अबे वो स्टीवन को वाला खेलने वाला लड़का पीछे से देख रहा है। हाँ वो तो ऐसा ही है। वो खेल क्यों नहीं रहा? एक्स्ट्रा टीम मेंबर है ना, 4-4 रखते हैं सब। ओह तो वो अगर इनमें से कोई अच्छा नहीं खेलेगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा नहीं खेलेगा या कुछ हो गया मैच के टाइम पे 30-80 आ गई तो फिर हाँ ये वाला मैं तो गया, डैरिल आ गया इधर। हाँ भाई क्या रोल करा है डैरिल ने भाई, कितनी दूर से आया। ये बहुत दिक्कत दे रही है भाई इनको। उसके बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे देखो भाई क्या छलांग मारी इसने, ब्रॉक जीतती। चार पांच तो बच्चे हैं। ये तो बिना उनको सुपर मारे ही मारे जा रही है कॉलेट तो। एक दूसरे को मार दिया इनने। हगी है ये, उन्हें हगा है भाई भाई। 40% हो गया इनका, मार सकती। खत्म है। अब ये नहीं स्पोर्टिंग खत्म ये वाला, ये तो नहीं जीत रही भाई। क्वालिटी इनके पास है, वो भी 20% बचा है। खत्म 16 छोड़ दो खत्म हो गया। चल अरे थम्स डाउन दिखा भी दिया भाई। सांस कौन है? सांस अच्छा नया वाला है। हाँ बोल रहा दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगा के बोल रहा भाई। गिटार अब हारा तो भाई, अब तो भाई गया भाई, करियर खत्म है। Getting into their second match of the day. They do still have some time to come back, but not a lot of room of mistake. Best of 3s are brutal, and we've seen lots of teams leave very, very quickly. Yeah, that's the thing. I mean, teams are dropping like flies at the moment, and you know, neither of these teams want to be dropping down to that lower bracket. Whoever progresses from Clash versus Chazmak is not going to be a comfortable opponent for either of these, whether that's a restart, a replay, should I say, a rematch. Lots of reads there, but for Viennese, भाई ये लोग पुशबैक वाला क्यों नहीं रखते? मेरे को समझ में नहीं आता। वो शील्ड इसलिए रखते ताकि मरे ना सुपर यूज करते टाइम। हेलो ई बोले महीने का कितना कमा लेते हो? सच कहना, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम सीरियस। यूट्यूब से आते हैं 300 रुपया, और ये मजाक नहीं कर रहा। तुम जाके सोशल ब्लेड पे देख लेना, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है? और क्या ये कौन है? भाई ये तो बहुत लंबा चलेगा, रात तक चलेगा 12 बजे तक ये। कितने बजे अभी? 3 घंटे में ये लोग यहाँ 2 AB और खत्म करने वाले हैं ना। COD बचेगा, खत्म थोड़ी होगा अभी तो। वो बचा है ना, क्या बचा है? विनर मैच ही चल रहा है, खत्म। वही तो बोल रहा हूँ, 3 घंटे और मान लो। 5, 3, 8 ज्यादा 9 बजे तक चलेगा। क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 कर रहे हैं ना ये लोग। बेस्ट ऑफ 5 कर रहे होते तो दिक्कत थी। Very curious what the approach is going to be like. You can always try to bring in something more aggressive too. Not necessarily the easiest map to do so, in all fairness. So you have to be really careful. But our bands are as well as Mag and Bunny on the side of Stamina. First pick Piper. What STMN want. Vienna Esporting, they banned the Nani, which I feel like is a little bit of a risk to ban Nani, but not Piper as well, because that Piper
to stamina. बुलाओ भाई, ये इसको Unless this देखनी is थी what they भाई. were hoping for and they're ready for it. It's going to be a Fang as well as a Mandy, Mandy Shandy. joining कौन आ us. गई? VN Esporting. एंडी मैंडी मैंडी शेंडी. Yeah, I mean, the Fang I was expecting, the Mandy maybe not so. I still think it's Piper's the better sharpshooter, and they banned out a lot of the rest. You know, Brock's banned out, Nani's banned out, even Eve to be able to tank some of these Piper shots. It's not what you expect whatsoever. But Buster's gonna come in. Buster. CMN there, trying to face off against भाई that Fang. गई मैंडी. Obviously does have quite a lot of HP. She's जैसे ही able वो to यूज tank करेगी quite a वैसे ही lot of बस्टर shots शील्ड लगा दे. if lunged on by that Fang as well, should be fine. But it's not really got the best synergy with Piper. सुपर तो कोई काम की नहीं है मैंडी की. Range work, the same as Mandy will be doing. But then Jean's gonna वो come in, मैंडी pull का into the Buster, सुपर will be वो a nasty बस्टर combo. वापस Yeah, I कर think सकता the है. Gene here हाँ is हाँ कर really सकता है, मैंने important खुद because करा है it's भाई. kind अबे of their win भाई. factor, right? Besides that Gene, the उससे Buster मर is भी gonna गई थी play भाई, very खुद ही मैंडी मर गई defensively, kind उससे. of waiting for the Fang to go in because he's not कर really दिया भाई able बड़ा to वाला. close the gap on such an पीछे open map, वापस. at least not easily. मतलब unless there's जाता है some तो वो sort of छोटे setup. शॉट I में ही think है, the लेकिन Team Pool डैमेज can be उतना ही पड़ता है. exactly that. छोटे VN शॉट वाला ही Esporting पड़ता है need to डैमेज. be very, very mindful with their final pick. They have the chance now to give stamina a taste of their own. बस्टर ब्यूटीफुल. मतलब सारे शार्पशूटर का काउंटर बस्टर ही है. That was brutal was at Colette. It's going to be a beat नहीं, here. उसके पास कोई खड़ा रहना चाहिए सुपर चार्ज करने के लिए बार बार. हाँ हाँ I'm जीन not वगैरह sure ले if सकते B हैं ना, इसलिए तो really उसने जीन has लिया है. fallen off recently. Now, I feel like without the hypercharge brawlers, it might कोई भी be just a healer ले little bit सकते हैं better बस्टर के because a साथ. lot of tank counters have been removed that you would kind of want. So options are a little bit more हीलर के लिए देखा जाए तो जीन से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि बढ़िया अटैकिंग भी है, पुल भी कर लेता है और 400 की हीलिंग देते ही रहता है. seeing it as much. हाँ लगातार भाई नॉन स्टॉप. अभी मैं आपको कॉल करता हूँ 10 मिनट बाद. ठीक है. अच्छा ठीक है ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद कॉल करिए मुझे और 1 करोड़ रुपए भेज देना, भूलना मत आप. ओके ओके श्वेता जी, ओके ओके. ठीक है श्वेता जी, ठीक. अरे भाई नेचर में कॉल कर दिया था अचानक से, Because if you जाना get पड़ गया. हाँ वो तो मनु ने बता ही दिया था, हग्गू करने गए. is gone. It's just so much damage. इसको कैसे पता From बे? the Buster and Nob is gonna go वहाँ कैमरा लगा रखा है, कैमरा लगाया भाई. देखा सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा भाई. connection with that. क्या. क्या देख लिया कैमरा लगाए तो बोलना मनु. It's pretty much gonna be a कैसा बोलूं. तो भाई फिर भाई राज को ज्यादा इंटरेस्ट है, राज को ज्यादा इंटरेस्ट है भाई. he's teasing it. अबे सुनो तो फिर तुमने फ्रांस तक जाने की जरूरत ही नहीं, फिर तुमने आईफिल टावर तो देख ही लिया. आईफिल टावर नहीं दिखा भाई, पिछवाड़े में डला हुआ देखा था भाई. क्या बड़ा सा बिल्कुल गुफा दिखी थी, काली सी बिल्कुल गुफा, अंधेरे में बिल्कुल. काली अरे मार गुफा नहीं दिया, भाई, पीछे डला हुआ दिखा था. फैंग ने कूट दिया भाई. भाग दिया. हाँ फैंग ने 1000 हेल्थ में कुटाई कर दे. So crazy. कुल्लड़ पिज्जा देख I गए thought तो. surely things were going wrong. अबे वो जीन ने पुल भी हक दिया. They get away. हाँ वो तो है ही. एसटीएमएन वाले. They want to use all that utility now either. The Fang might ओ want to भाई क्या साहब. दिया है भाई, पाइपर ने क्या दिया है भाई मैंडी. give away too much. Now the Piper Super wouldn't say that's the biggest threat here. God. आ गया भाई, Definitely don't आ गया, हो गया. मार मार मार, अरे फिनिश तो कर जाता उसको. back. So absolutely perfect here. Cannot really- सुपर और दे दी भाई, वापस दे दी सुपर फैंग को. However, the wall break is going to be there. That's going क्या to. चल रहा है भाई? अरे वीएन और एसटीएमएन का अभी तक खत्म ही नहीं हुआ. वाह भाई. Let's see who's going to take it home in this first game of knockout. Yeah, Sam's got his super there, thanks to Zara and Bobby being in his radius, getting that Bobby Jean super खेल रहा है, off, he okay. can start to push up a little bit, but still not that much as Fang's there. He's waiting to pounce on his teammates, and obviously without him helping and without him defending, there's the pull-up, and Rama even used his super too. He didn't even get anything from जी it. बढ़िया भाई. अल्लाह फैंग भाई. The shields there from भाई Sam's सैंस well बहुत doesn't अच्छा really खेलता है do टैंक. too much, but at पता नहीं least it कैसा allows him खेल to रहा है get up closer to the Mandy, claim this bush, and obviously Zar still waiting down below to pounce onto Mebius when he gets a chance too. अभी भी हो That सकता है was भाई. brutal, losing that super from the Fang that was their win condition. खत्म भाई, ने सुपर उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया. Much that Nup can do, and I have to agree with you. तीन लोग आ रहे हैं मुंह पे. Haven't really seen too much from it. बी को देखा. पाइपर तो भाई, पाइपर मुंह पे आ गई भाई उड़ के. At some point with her super, but अरे सांस भैया को भेजो भाई, खड़ जाओ उसके ऊपर, इतना वजन मत रख भाई, टूट जाएगा, पूरी सांस निकल जाएगी उसकी. अरे risky pick here, not delivering so far. जिम वाला लड़का It's बहुत not अच्छा over है. just yet. अबे ये कौन था ई नाम से चैट में?
are gonna need to give everything they got. पहले भाई ये भाई थम्स डाउन ही दिखाया जा रहा है। कौन सायांस हाँ दिखाया जा रहा है भाई हर गेम में। मेंटली वो कर रहा है। ये पिन आपके भी लैग हो रहा है क्या साइड में जो चल रहा है? हाँ पीछे यार लोग भेज रहे हैं वो पिन, लैग तो नहीं है। और ऊपर से इनके सर्वर से आप उम्मीद भी क्या करते हो? भाई खत्म। क्यों ट्राई कर रहा है? सीसी क्यों दे रहा है ये? मरना भाई। सुपर दे रहा है भाई, सुपर दे जाएगा सबको, सबको सुपर दिए उसने आधी आधी। लास्ट ये वाला राउंड जीत गया तो हो गया ना, क्वालिफायर हो जाएंगे लोग। मैं जीत ही गया भाई, क्या ही कर लेगा। अब बहुत बढ़िया पुल, अरे भाग गया, भाग गया, खींचने के बाद भाग गया भाई। ओ भाई मैंडी की सुपर देखी, हो गई कुटाई, हो गई कुटाई, हो गई कुटाई, हो गई। बी गई, बी बी आजा भाई। फैंग के छोटे जूते नहीं मार दिया भाई। ओ बच गया भाई स्पीड की वजह से। देखा बस लगा दी। कुटाई कुटाई। अरे फैंग को क्यों खींच रहे हैं, दूसरे ब्राउज़र को क्यों नहीं खींच रहे? कोई दिख ही नहीं रहा ना उसको, जो दिख रहा उसको ही खींचेगा। अबे मेन तो बी है। खींच, अबे नल्ला खींचा भी तो किसको खींचा उसने? ना भाई ये लोग गलती कर रहे हैं भाई, बस्टर की शील्ड यूज करनी ही नहीं चाहिए। भाई गस्टर की शील्ड तो फायदा ही नहीं करती। बस्टर की शील्ड वेस्ट कर रहे हैं लोग बार बार और चार्ज करने के लिए वो बार बार कवर में खड़ा हो जाता है। बॉबी को बार बार चार्ज आ गया, खींच ले, नाइस, गए 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 गया फिर से दिखाने लगा। देखा फिर से थम्स डाउन आ गया, फिर थम्स डाउन आ गया। मर गया, मर गया। क्या टॉक्सिक बंदा है भाई। सब तो बीमिंग कर रहा कहते थे। हंस रहा है साला, मीठी मीठी हंसी आ रही है साले। अबे भाई क्या हंस रहा है भाई, इसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता भाई, नहीं तो लपड़ ही दे देगा। बोले अभी चौक स्लैम दूंगा बे, WWE चला दूंगा इधर पे। अबे चड्डी पे अंडरटेकर मेरा मामा लगता है। अबे थम्स डाउन दिखाने के बाद हैंडशेक करने में थोड़ा वो नहीं होता क्या? क्यों बोल रहे हो? वो तो पिन है भाई, पिन है इसलिए दिखा रहा हूं। तो ठीक है भाई, गेम में उसने अच्छा खेला, बात पता। मैंडी की दोनों सुपर उसने हटा दी भाई सील लगा। वो मैंडी को ही बीमिंग कर रहा था वो, बाकी किसी को नहीं करी। 1000 पॉइंट तो हो गए। आया क्या MVP का? आया क्या? MVP नहीं है, उसके बिना भी तो 1000 हो ही गए। अब कहाँ जाएंगे, पॉइंट्स बढ़ेंगे थोड़ी। MVP कौन है? कोई भी चूज करो भाई, मिल गया MVP तो कोई भी चूज करो, क्या ही फर्क पड़ता है। और 100 तो मिल रही है आपको। The leaderboard. Bobby, a little bit of a quiet game, but you don't always need to be so loud. When you're winning, you're winning, and I'm sure he'll be happy with that performance regardless. भाई MVP बॉबी कर दिया मैंने तो। बॉबी तो बहुत चिल खेलता भाई, एकदम चिल, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से भाई, करते रहो। बोल तो रहा हूँ भाई मैं, वो तो इसका सांस भाई ज्यादा चक रहा।
I'm not going to अब start क्या by करने asking जा how रहे हो you गोली feel. I भाई? think गेम that's kind of खेलने? pretty obvious at this point. But let's हाँ, take a देख step रहा है back ना a भाई। bit to when the groups were drawn because बट अभी Yeah, देखें true, यही man. खेलने दो भाई, to be facing against VN मैं Esports आता हूँ and it's 5-10 such a मिनट crucial में, stage in the competition. म्यूट चल रहूंगा भाग मैं नहीं तो। जा रहा है। I'll ask, why were you so keen to play ना them? भाई यार नहीं जा I mean, Rama's just my good friend. I mean, we Girlfriend talk से back and बातें। forth a little bit of trash. हाँ But हाँ भाई भाई ये सही तूने बात, सही बोला भाई। पूजा पूजा। So it's cool to have the हाँ opportunity to पूजा go up पूजा against सही him बात। in such a big stage. पूजा You भट्ट। looked, I mean, this is the most convincing I've seen you guys look. Looking at your scrims as well, I kind of feel like you are the team to beat at the moment. So talk us through the बड़ा गले preparation मेरी process बात because तेरा obviously, डल्ला है, you know, it's a tough आगे place नहीं to हो be सकता। in the LCQ. You know, you're glimpses away from the World Finals now. What have you guys been doing in the background? Just what we normally do. We come a week early. We आगे get our बोल scrims दिया तो फिर going. We सर्वर play से Brawl बैन Stars मिल all day for जाएगा। 5 straight days. But we got some maps that we liked, especially Safe Zone. I feel like we've never lost that ever. So we just worked to our weaknesses, let our strengths come to us, and it all worked out well. Yeah, it was super convincing, honestly, from my side. Bring us back to the monthly finals. You know, the only team you've ever lost to is Luminosity Gaming. Let's talk about that for just a minute. You got 2 grand final wins against them, but they were the thorn in your side. So कल कितने how बजे has से? that process, you know, come in terms of कल भी वही learning from you टाइम। guys? We've kind of just realized what our Dude. main weaknesses, and we try our कल best कौन to कौन सी work टीम against it. खेलेंगी? I mean, they're 3 very इनमें से जो जीतेंगी वही एक दूसरे से लड़ेंगी। We kind of figured out what we're bad at देखेंगे after कल losing कौन them so सी many times, and we worked अब towards it. देख ही Now तो it's रहे for हैं। the better. बोला तो सही फ्री We'll see. कंटेंट Coming है। into tomorrow, got to quickly ask any teams that you're worried about in Group D that you will end up facing. I mean, I don't want to face Reject. For obvious reasons, they're super good, and Navi's like our family, so I don't want to go up against them either. But, I mean, if we do, we're going to have to take one of them out, so... And finally, quick shout-outs. Anyone you want to give a quick word to? Shout out to my भाई mom, का कहना है shout कि out to हम my रिजेक्ट brother, से लड़ना and नहीं shout out चाहते, to अच्छी you टीम for है coming here. और ना भी तो फैमिली की तरह है भाई, इसलिए उससे नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अब फिर भी लास्ट में उनको हरा के अगर हमें पहुंचना पड़ा तो लड़ेंगे। बढ़िया भाई बढ़िया। अरे ये इसको भेज दिया भाई मेन स्टेज पे, पीछे भेजा उसको। A little bit disappointing for them, but they said maybe it's for the better at the end of the day. Let's take a look at the MVP of that last game then, and it was Sands, and I do think he played well. He played beautifully. I believe he was on that Buster, right? He played that भाई flawlessly with उसको इतना बड़ा कर दिया है जी, फ्रेम में भी नहीं आ रहा भाई। देखना सेंस को इतना बड़ा कर दिया जी, फ्रेम में ही नहीं आ पा रहा। खाली है। चलो भाई अभी तक तो ये चलेगा, पानी की बोतल लेके आता हूँ, गर्मी बहुत है, पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ। Yeah, definitely so. And I mean, we should get an update. 2-0 to Clash is not what I expected to see when that popped up. That is massive. Chazmak NA out of the competition. तो गोल्डी भाई तो नहीं है यहाँ पे खैर। और बताइए गाइस कैसा लग रहा है आपको? स्क्रीन देखने में ज़्यादा मजा नहीं आ रहा होगा? तेरा नल्ले। Latam's day so far. Just with Dad? upset and big surprises. तेरा I mean, Chazmak definitely अबे वो coming in as बिल्ली। a favorite here, but a lot of भाई। people have been warning us, don't underestimate Latam. And right now, they are definitely performing. South America can be very proud. It's really unfortunate for NA because Chazmak, I mean, they're amazing guys, amazing team. They've had a great year as well, but their run is going to be ended here. And the Mr. P Latam special coming out twice and winning in both field goal and in goal arm Gulcher. That is huge. You know, we always question. Oh my God! Oh my God! मैं Manu Jod के साथ Mr. P in a tank meta. How does that work? Manu Jod इतने बड़े I यूट्यूबर, don't know. The thing with Latam, Big and I had this fan, big conversation AC with, जिनके सामने some fail of हो the जाते coaches as well. हैं। Sometimes you just don't see their draft coming because it doesn't make sense Big to us. fan और big But it makes AC sense को to तो वो them. लात And मार when के you're not भगा ready देते for हैं। it, even though it might not Guys, be like a hello hyper meta guys, welcome to my YouTube optimized channel. comp, you're not Today prepared I'm for it. playing And that sometimes Brawl can be enough to Stars. just destabilize you. And हम लोग आज Brawl Stars खेलने 2-0. 2-0, that's impressive. I mean, Clash are a fantastic team, but right now, I think that they're even beyond that from that result. It was also a 2-1 that they lost against Stamina, so they kept it close against Stamina too, and we saw how hot Stamina were today, so everything is possible at this point. It had genuinely been devastating if Clash didn't make it. But
Chasmak NA, 3 monthly final wins is more than most teams at this point have. It's just that they were in a region with Tribe Gaming NA and they just dominate their region. I mean, it was 3-3, right? Complete split. It was just where they placed when they didn't manage to win it. And that's what Tribe did that little bit better. It's so sad to see them go out of competition and completely out of this year. Because, you know, it's their last dance. It's every team's last dance if they don't make it through. 2 ही मिनट का टाइम है, गोल्डी भाई गए पानी में, लेकिन वोट करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक पॉइंट्स हो ही चुके हैं। No one is mentally prepared to leave after 2 matches. Like, you're thinking that, like, even if it doesn't go right, you're going to day 2 and it doesn't go right, you know? It's really, really tough, but it is the name of the game. I mean, Brawl Stars, it is cute and, you know, like, I don't want to say a children's game, but, like, it's appropriate for children. However, esports, brutal. Like, honestly, you want to cry sometimes, and this is one of those days for some of those teams, and I'm sure some pros have today, but it's the name of the game. Welcome to Brawl Esports. Well, Chasmak are out and Clash are in to this next phase of the round. 2 for Kodog and Adinho are the roster from Clash. First time we're going to be seeing them on stage. They had 2 games off and they really wanted to see themselves play on stream, so they came in today. Clash have made big moves throughout this year. Second to only Nouns Esports. Now, obviously, they were Zestra a lot of the year, then they were FA Mini Peckers, and now they're Nouns. They came second in 4 monthly finals, only managed to win 1, and that was the last one. It set them up perfectly for this event, I will say as well. They qualified for every single monthly final this year. Clash are looking fierce, but their opposition, VNA Clash, very strong team as well, coming from a bit of a different perspective here in EMEA. It was चलो VN रख if they देते हैं। would even qualify here for LCQ in the first place. They had a phenomenal start of the year, but then slowed down a little हमें bit. क्या स्पेंड किया जा रहा है? Great performances in the first 2-3 months. वो कोड लैंग्वेज है गोल्डी भाई। Without even qualifying, luckily they were able to save वो it. जंगली लोग होते हैं, वो सब ऐसे ही प्यार में बातें करते हैं, कुई पुई रुई डुई। मतलब खुद ही मान रहा है कि तू जंगली है। अरे अच्छा, ये ANR था इनका नाम पहले। हाँ, भूल गया था मैं भी। हाँ, वही अनार। क्वेश्चन ही आ गया भाई। भूल ही गए भाई अनार को तुम लोग। वही बोल रहे हैं, देखी हुई टीम है, खेली हुई है। That was a convincing win. It was a 2-0, right? Yeah, so, I mean, that says a statement coming in. They will win. Clash have some very strong stats on the board in their region. I mean, like looking around, like the kind of rank 3 in terms of like the overall scene of the players here. And as we mentioned earlier already today, VNE Sporting not necessarily so much, but this is what I've noticed from watching the EMEA region. Who filter the bracket to set percentage? What at the bottom? SK Gaming. Really impressive performance. VNE Sporting, I think they had a fantastic run against Chasmak. I really like what they were bringing to the table. The question is now, can they continue the reign of keeping EMEA on top despite those statistics? Yeah, I think what's a big difference here, if you look at previous years, is that the teams that were dominant in their regions usually was because there wasn't the most competition, and then they kind of struggled in like global events because they weren't used to being challenged all that much. But somehow this year, we're getting a very different perspective. I mean, most of the teams that are even out, that didn't make it in Group A, or even Chasmak here, they are incredibly strong. And some of the teams were a lot of I'm sure a lot of people here and pro players kind of expected to, you know, go out quietly. I'm looking at Reconic, for example. Performed वो चला गया, पता नहीं कहीं गया होगा। नाइट्रो दिला दो ना गोल्डी भाई, फ्री क्रेडिट कार्ड कैसे बनाते हैं, फेक क्रेडिट कार्ड। देखो, क्रेडिट कार्ड तुम बना सकते हो, लेकिन उसमें 100 क्रेडिट कार्ड नंबर बनेंगे, ठीक है? उसमें से 1 या 2 ही ऐसे हैं जो काम करेंगे। अरे भाई फिर क्या है? अरे लेकिन सुनो, मैं यूज कर चुका हूँ। नहीं फ्री ट्रायल आया इस बार फिर से। अरे हाँ भाई, फ्री ट्रायल जो एक बार यूज कर चुका होता ना, उसके में अगर वो वापस से मैं डालूंगा, बोलेगा ऑलरेडी यूज्ड। हर बार यूज नहीं कर सकते। अब ऐसे करूंगा क्या उसका? सारे फीचर तो ऐसे ही हैं अपने पास।
the lone wolf in that regard with the most BSC World Finals experience to date, and I think that statistic says quite a great deal. But yeah, going back to 2019, Space Station Gaming BR, you know, who can forget those matchups there? Wonderful stuff there in Korea. ये आपको हाइप स्क्वाड बैलेंस कैसे मिल रखा है स्क्वाड पे? The team, great amount of experience. We know that this is सिलेक्ट करना होता है जाके, to get rowdy, and they will not be afraid to show it. सिलेक्ट करना पड़ता है. कहाँ पर? They find themselves falling behind. They're probably just going to start to shout loud. सेटिंग्स में जाओ अपनी. अब स्क्रीन नहीं दिखेगी तुम लोगों को, रुक जाओ जरा, बता रहे हैं. अरे खुलना भाई, क्या हो गया? And that has got to be a little bit of a concern for VN Esporting, who like to bring all those aggressive ideas to the table, but let's be honest, it's much easier to do so and more यूजर सेटिंग्स में गया, successful to do so when you're ahead in the game. उसमें नीचे आते जा बिल्कुल, यहाँ व्हाट्स न्यू, फिर मार्च, फिर एक होगा हाइप स्क्वाड, उस पे जाके फिर 3 मिलेंगे तुझे. 3 में से कोई एक अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू आंसर. कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछता है वो कि अच्छा तुम लाइफ में कैसे हो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसमें सिलेक्ट करोगे, उस हिसाब से वो तुम्हारा स्क्वाड सिलेक्ट कर देगा. सिंपल है. I would maybe even favor Clash just a little bit in this matchup. I think certainly coming into it, they've got a great advantage. Balanced person. You know, I got to be honest, in my predictions, I put down STMN and VN Esporting. I changed my mind last night. You know, just chatting some of the players backstage, and I kind of like felt that VN Esporting, yeah, they could defy the statistics and come out with a win here. But लेकिन बहुत दिक्कत है नेक्स्ट वाली की. आ गया, यही तो बंदा है. क्लैश में आ गए क्या? I did have down to make day 2. That for me says a great deal. I think Clash could turn this into a victory here. अबे अब तो सब बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, पहले तो कोरियन आ रहे थे, अब सब बॉडी बिल्डर आ रहे हैं. themselves too quickly. Bring all that aggression, no doubt is going to be needed against a team like Clash. क्या राक्षस भाई, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? Most importantly, get that lead and then you can afford to play with in that regard. आलू गोभी मटर. क्या हुआ अभी तक, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, लोग आ ही रहे हैं, बुला रहे हैं, अभी सेटअप चल रहा है. अरे भाई यार बहुत मजा आता है. And they got a set of stamina too, which स्क्वाड पे वो wasn't करने even में really that close from making happen. क्या करने में? हाँ वो I want to say Clash, हैं? which is VN like Activity. on paper, you know, they've been ले एक और better form. I'm looking at Clash right now. The scrims, sure, VN maybe look better. मैंने फिर मिस कर दिया. आप बहुत लेजेंड हैं भाई. यू आर अ लेजेंड माय ब्रो. इसी बात पे हम आपके लिए बस एक ही चीज कहेंगे. Crow and Rosa also. Both sides do not want to be facing off against that tanky brute. The Ruffs is the first idea. The mark. I think it's a great starting hand. Ultimately, it doesn't commit too much to any idea. It's just there to serve to really enhance the comp in its overall form, which, depending upon what VN Esporting do next, could then make a big difference maker here. Yeah, it's an interesting first pick here because, like, it doesn't really counter anything like too much. Like, I don't feel like it's going to be determining the draft all that much for VN. If they had ideas, they can still probably just stick with them. But yeah, it's also not going to get hard countered too much. So it's kind of both ways, right? And I like that vagueness, which is something we used to see a little bit more. We see a little bit less now, where you kind of want to go for some of those heady hitters, even if you will get countered. You used to see tons of like Spike first picks now. I mean, Spike is banned today, of course, but it's a similar vibe you get with the Ruffs. Now, 8-Bit and Otis are brothers we are seeing quite a bit at the moment. They were away from the meta for just a couple months, but they're really back now. Otis gonna be great at shutting down those tanks, and of course 8-Bit just very versatile across the board. The Piper is scary because I heard a lot of things from the Piper in Latam, whether it was for Nouns or for Clash. They know how to play Piper. It was certainly for Nouns in the SPS, but nonetheless, this is a region which know how to pack a punch with their shots, and they're going to bring in the Cordelius as
well. And I was going to mention that the Otis is there for VN Esports because they're kind of predicting tanks potentially. They can't afford not to, have that broader secure. But Clash deviate away from that. तुम्हारा जोक सुन के मर गया भाई. Placing that Otis in a little bit of a tough spot for me. Ultimately, the Cordelius matchup's probably going to be जिंदगी में भाई क्या ही रखा है. माँ बाप से प्यार करो, खाने से प्यार करो, गर्लफ्रेंड है तो उससे भी प्यार करो. बीबी है तो तो फिर भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना वो आप एक्सपीरियंस मतलब फिर प्यार मत करो. पापा आ गया था फिर से. अरे सच्ची बता रहा हूँ, देखो माँ बाप से प्यार करो, खाने से प्यार करो, ठीक है, जानवरों से प्यार करो, गर्लफ्रेंड से भी प्यार करो, लेकिन अगर बीवी है तो गर्लफ्रेंड से प्यार मत करो. सिंपल. तो आपका क्या सिस्टम है? सिस्टम है भाई. सिस्टम फाड़ देंगे. चालू हो गया. बस है फिर गुंडा. ये बस की कोई गुंडे जैसी स्किन आनी चाहिए ना. देखो फिर बिना स्किन के खेल रहा है भाई. जैसे कोई गुंडे जैसी स्किन आनी चाहिए. ओटिस भी बिना स्किन के खेल रहा है. गुंडे जैसी स्किन है तो सही, बॉस वाली है तो सही. अरे दो टपका दिए भाई, क्या बात है. बज ने टपका दिया उसको, और बज ने एक और चिपका दिया. क्लैश के सामने ए मनु तेरे को तू बता ये वीएन कौन सी पहले क्या नाम था वीएन तू बता. क्या बता भाई क्या नाम था. मैं भूल गया. ये एएनआर है भाई. एएनआर अनार 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 नाम चेंज करके आ गई. अरे स्पॉन्सर मिल गया होगा ना इन्हें, तो नहीं तो खुद नाम रख रखा था. पोमीग्रेनेट क्या कहते हैं अनार को इंग्लिश में? पोमीग्रेनेट. पोमीग्रेनेट. रोम गांडे. खाना ही नहीं भाई, खाना ही नहीं है अनार. सब निकल बनाना खाएंगे भाई, एप्पल खाएंगे, अनार नहीं खाएंगे. कितना खतरनाक नाम. जीत ही गया भाई. 7 हो गए लेकिन उनके भी भाई. एक ही चाहिए उस साइड आया, लेकिन ये काउंटर नहीं जा पाएंगे. खत्म हो गया. इनको 2 उठाने पड़ेंगे जेम, तब तो काउंटडाउन में जा पाएंगे. क्योंकि वो उठाएगा काउंटडाउन खत्म हो जाएगा. फिर उठाएगा, फिर काउंटडाउन शुरू होगा, फिर बंद हो जाएगा. भाई पाइपर भाई 170 एचपी. 2 जेम उठाने पड़ेंगे भाई, पुश करके. उठा उठा उठा. मार मार मार. हाँ ना चालू हो गया. कॉर्डेलियस तो 8 बिट के साथ रियल में भी है भाई. क्या सुपर यूज करा भाई. What a game from Clash. I love how they're not the team with the buzz, and yet they're the more aggressive team. Like, they don't have any tanks. They don't even have the most aggressive brawler. क्या खा रहे हो गोल्डी भाई? नमकीन खा रहा हूँ. Usually is more of a defensive brawler, you keep the tanks at bay and all that. वैसे तो बिस्किट भी रखा है. क्रैक जैक, स्वीट भी, सॉल्टी भी, नॉन स्पॉन्सर्ड. In position to flank and just cause some mayhem in the back line of VN. Great value there though for Mabius. Finds both Tufa and Adino, but those gems all sitting in the mid as everyone knows that this early game is the best way to play the timer down. देखो अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरे को भूख नहीं लगती, लेकिन मैं सिर्फ बैठ के अगर देख रहा हूँ ना तो मेरे को भूख लगने लगती है. या तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं.
space to break. He's got it now, so it's going to be a lot better now. Powered up as well, so this is where the tides may shift. Lots of gems still for VN Esporting. Rama is going to be tough to take down. A good super there from Karadog. Gets to heal off the mushrooms as well. Dinho will go down, but not before getting the trade. Oh, it's messy, but Karadog gets a kill. No way he gets out of there, though. No, going to be forced to use a gadget. But we'll get the kill, we'll get the gems back. However, having gems is not really going to be ideal on the buzz. And it is chaotic, it is messy, it is all over the place. Super not really going to connect there from Dinho. Shadow Realm again for Nob. Karadog trying to close the gap, trying to beat that problem in their back line. He's not really able to get that connection though. Gems-wise, it is close. VN Esporting still in a very small lead, but control, it's all Clash right now. Nob goes in. Great takedown there for VN. GG's. They're going to be running away with it. A team wipe and Clash have got to get back in this game, and I don't think there's going to be much time to do it. Tuva can jump straight in to the Lion's Den, but he probably won't come out. There's one takedown. There's a chance. Again, the gap is so far apart. There's no way the Clash can turn this around, and we are all tied up in the first set. Very well played by VN Esporting. It looked like it was getting a little bit tough, but at the moment they सैटरडे को जो ही जो होना था ये टूर्नामेंट were able to take कल भी है भाई position, get that ना हमेशा सैटरडे संडे को ही होगा वर्ल्ड फाइनल्स भी सैटरडे संडे को ही होंगे of all players. That's what they needed. Let's see if they can replicate that success. खाना खा in लो our final friends. game of Gem Grab for this Group B, or if it's going to be Clash to close it out. Couple of words being exchanged from Clash to the referee, but we'll play on regardless. For now, Nob going in onto Adino and does find the pickup. Damage gear helping him out there as well. Surviving on 1,700 in the meanwhile. 2 gems with Rama, 3 in the mid now. Split Pretty just a much little constant bit, ping but card. nonetheless, there's 5 for VN Esporting and Nob. Not done yet. Fantastic work for a squad at just the चल वाला जो right आता है time, giving VN Esporting a very good starting क्या hand क्या here. क्या Yeah, seemed to ये तो रीस्टार्ट होने चाहिए बंदा ऑफलाइन हो गया Karadog are currently अबे रीस्टार्ट करो बे touchscreen in their spawn, and we are coming back to us for just a second. Is I think this game will Hello. be replayed. We'll have to see if anything happens about the previous game, but चलो बंद कर दिया मैच रीस्टार्ट होगा मैच But yeah, seems that like there were some issues here. I didn't spot anything in the Hello. previous game personally, but हाँ बोलना मेरा हो गया ये At that moment in time, I saw towards the end some discussion. ठीक But, ठीक अरे कुछ in बोलिए the ना match कोई itself, I didn't really kind of see इतनी देर से बोल ही तो रहे हैं obviously some word from the admin side as we kind of reset through the कौन सी through the नमकीन match खा रहे हो from the, भाई they have to probably I imagine kind of read through go through the draft जाके स्ट्रीम में देख ले भाई 3 बार बोल दिया कौन सा खा रहा है so that is it's just very close. I mean, for me, अरे Nob भाई, is सुनाई matching नहीं दिया। everything that Kyodog brings to the table as Kyodog is matching what Nob brings to the table. It's just again when you see these players go head to head, it's just so amazing to watch and go down the mechanics and the timings of everything. And, you know, they are the 2 players that for भाई me are आपका so far मैकेनिक्स into गया the तेल series, लेना खुद के all आप on the sides of each ब्रॉस other. आके मैकेनिक को बुलाइए वो सर्वर ठीक करे तब बंदे खेल पाए Just tiny आपका moments सर्वर of का मैकेनिक को बुलाइए वो ठीक करेगा अभी is what's costing the नल्ला सर्वर है आपका and I think both teams लैंड में तो चल नहीं पा रहा and it's why this is so entertaining. I feel like both teams are better at reading the other than at covering their own mistakes. So they read that there's a mistake on the enemy side, so they manage to sneak up, push up, whether it's the buzz that goes in the back line or forgot the name of the brawler for a second, Cordelius, that pushes up. They spot the mistakes of their opponents that lets them push up, but then there's an opening on their side, and it's just so back and forth and so entertaining. And so far, it's really hard to tell both teams apart. I feel like both teams have absolute merit at going further in this series because they're playing out of their minds. Yeah, they really are. I think for me from Clash, I want to see just a little bit more of that kind of aggressive style that they need to have in that mid to be able to break things open, because if they don't do that early on,
we've seen how dangerous Nob can be, and it's got to be a massive concern for Clash. वाह भाई राजदीप की लाइन पर्पल बोल रहा है That just gives more credit over to VN Esporting because that's kind of what they're doing. प्यार किया तो डरना क्या Just give themselves the best possible ये start. सब बीमारियां फैल रही है आपस में एक दूसरे के वायरस है भाई वायरस है spawn side as they possibly can, and it seems like Clash is इंडोर still की क्या बात बीमारी कर रहे हैं ये लोग फैल रही है भाई in the background. So again, we'll get back to the match as soon as those queries have been resolved. तो सर्वर नहीं चल रहा लैन में नहीं चल रहा बताओ This actually might not be that much of a bad thing. They did obviously kind of get that first or the second game rather in the pocket. अच्छा है भाई प्लेयर का पीओवी नहीं दिखाते नहीं तो इनकी 12 बज जाती Back that defeat to STMN, it just gives them a bit more अभी time इनकी to धुल जाती है recover इनके their गेम की mental. For Clash as well, definitely going to have to keep up with that aggressiveness because it's not an easy thing to do. If you turn your back on VN Esporting, you will get burnt. Yeah, I could not agree more. I mean, it is a team that this year, and that was a little bit of their signature move, especially in the beginning of the year, where a lot of people were there like, okay, well, I mean, we know Mebius and not from like FA Kozaki that never really performed, you know. They knew Rama, of course, from like Chasmac and Craze and all that before. But it was a bit odd, you know, that he was separated from his teammates. No one really knew how they were going to succeed. Like, it's not like anyone was known as like a mechanical god at the time in the Chasmac now Zeta roster. So a lot of questions about that team, and yet slowly but surely they were doing some big damage to some of the biggest teams in EMEA. So yeah, you always got to be careful. Well, whilst the teams continue to get things ready in the मत खा background, रोज एक ही खाना खाने बोर हो गया question तो corner. तो पतला हो जाऊंगा ना Welcome to Question Corner with Ark and Trab. पर्पल We're रिलेट कर देगा drawing मेरी some बात से questions from the वो hat बिहार at में रहता है random and answering them for your live. We have no idea what it's going to be, but I think it's going to be pretty fun. You're going to draw for me? Let's get underway. Let's get underway. Right, first question. Most motivating thing to hear from your coach after you lost a game? Well, I don't lose games. Of course. I mean, of course. So it never would get heard or said, oh, my word. We haven't got a coach either. Probably you only fail when you stop trying. I like something a bit more straightforward, personally. Just win. That works. Drop a just will, and that would be my professional advice. Right, there you go. Things you describe Brawl Stars with, but not your partner. Oof. Personally, I'd say one of them has a mute button, and I won't tell you which one. Wow. Wow. We went there. Pick up line to use when you want to date a Brawl Stars player. Okay, I think I might have one. It's going to be controversial. Okay, I'm just the caster. I'm no player. But when I shoot my shot with you, I don't miss. I'm like Hyra. In which month did Clash win their only monthly finals? घंटा नहीं पता अभी तुम लोग के लिए बता देता हूँ करेक्ट आंसर इज अगस्त अगस्त से चूज कर लो भाई 40 पॉइंट ले लो Probably Q, rage, lose, repeat. भाई किसी को पता ही नहीं है क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज ये लोग Absolutely. It's a fast-paced 3 versus 3. कहाँ से पता होगा तो लिस्ट लेके थोड़ी बैठता है हर टीम की वही तो बोल रहा हूँ One of them has quite a lot of gold in the bank account. And it's Brawl Stars. Well, that's the hat done. So we are done. Hope you enjoyed the responses, and see you in the next one. Welcome back to the last chance qualifier where we are about to pick up again with the continuation of Clash versus VN. मिस हो गया क्वेश्चन मिस हो गया क्वेश्चन अभी तो बताया था आगे हम कर दो Much happier, so just kind of gearing up and getting ready to go once again. Yeah, we'll still have to wait for confirmation. BGIS का क्या हुआ भाई? We are at in the match. तो देखता नहीं हूँ. Started and what was affected. ये मन्नू से पूछ रहा हूँ We'll मैं. keep you guys up to date as always. It's our job, so we take it very seriously. Exactly that, and again, for what is such a close matchup, I It's just kind of see what follows on from this. I want to see it go to a third and final set. I think it has to at this stage of the competition. This is such a crucial point in time now for both of these two teams. Looks like as well picking up from that third game in that first set as well for the most part for now, but we'll just get that confirmed in just a minute. For me, I mean, so much on the line here.
one team will go home and one team will proceed to day 2 with the number 2 seed from Group B. So everything to play for, everything to get right, and just, you just cannot skip a beat at this point in the competition. Yeah, got to keep into account as well with this conversation earlier. What's on the line here? Well, I mean, as you said, either you're going to be second seed of Group B, either you're going to be home. Obviously, home is by far the worst option here, but being second seed is still very scary because you might face reject that, haven't played yet, but they are heavy favorites to take first seed in Group D. So, scary stuff here, really. STMN, they got it good by just winning their 2 first matches of the day. That means that, first of all, they don't have to play a third match today, which, I mean, it's nice. It makes it easier. Secondly, they take first seed, so potentially dodging a bullet and dodging reject later on. But as we know, I mean, today, expect the unexpected. You can already see there, Chasmat Gaming NA did not make it through. They have gone home. They've exited the 2023 season, as have Chasmat Gaming, East Asia. It's just been a lot of upsets happening throughout the groups as we've been going through, and I just don't know what to expect moving forwards a lot of the time. Some of the things that we've kind of expected to see have come to fruition, but others not so much. Yeah, no, I mean, there's definitely been some surprises. I think what has been the most awesome, really, I think is going to be the easiest word to describe it, is just how good everyone has played today. There were a couple letdowns. I think Chasmac was probably, both Chasmac teams, honestly, were probably the biggest disappointments across the board, especially East Asia. I feel like people just had more expectations coming from them. But besides from that, Team Flash performed really solidly today, even though they didn't make it. Reconic. How, now Clash as well was a 2-0 against Chasmac. We've had a lot of those just very solid. भाई इसको सामने हटाओ भाई, कितना बोलेगा, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई इनटेक. इतनी देर में तो बाजार से जाकर नया वायर लेके आके कनेक्ट कर देता भाई मैं. Some of the groups might be just very predictable so far. I mean, I don't think many people have predicted everything right. Like, I would be shocked if someone predicted everything right so far. नींद आ रही भाई, सही बोल रहा भाई, नींद आने लगी अब तो. Throughout the teams and the rosters in this tournament, we've got 4 world champions. Well, 2 are already out. That is just, to me, mind-blowing. It tells me the game has changed. In previous years, you look back through the regions and you kind of say, well, this team are just not going to stand a chance when it comes down to the competitive setting in this environment. That is not the case. Girlfriend के साथ. Have never been closer. The matchups have never been cleaner, in my opinion. And it really is an exciting time to be in Brawl Esports. Yeah, in a way, I think the level that we see today is really not far from like what we saw in World Finals last year before. And it's crazy to think that this is LCQ. We already got like 8 teams qualified for Worlds. So the 8 best teams in the world, they're not even here. And we are at a very similar level to Worlds last year. Just saying how quickly and how much the scene improves and how much the players learn from each other. When a player performs really well at an event, everyone else is watching, everyone else is learning. When there's a comm that does really well, whether it's in Scrim or at an event, people learn, and very quickly. भाई कितना बोलेंगे, जितना बड़बड़ करेगा. मैच दिखा रहा हो तो ठीक भाई, वरना जाए यार. The entire scene just grows with it, and it's something we can demonstrate literally from LCQ. Seeing again a team like Reconic that kind of like. अबे इतनी देर में तो मैं नया वाईफाई लगवा देता यार. No one expected them to perform in their region, which is considered as like not the most competitive region in the first place, and now they are performing at a global scale. And I think that is going to टाइम पास चल रहा है, टाइम पास. Towards what we think we know about. वो भी इसको सामने काहे छोड़ गए, इसको लेके जाओ भाई. It brings the underdog teams up before the world finals to a point where you just have no idea. ये देखो भाई मेरे को पता रहा है राजे. What I'm hearing is that VN Esporting have taken that first set, and that will explain why there was so much time spent backstage trying to figure out what was and wasn't. So it's been looked into, it's been confirmed. That game will stand, and VN Esporting will take that first set. Okay, दे दिया. क्लैश को पॉइंट नहीं दिया गया, भले तुम ऑफलाइन हो गए हो, मर गए हो. ब्रोसर वालों का कहना है बाढ़ में जाओ.
तुम्हारा नेट गया, तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम्हारी किस्मत खराब है, अपने सर पे मटका फोड़ लो, हम तुम्हारा पॉइंट तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है भाई, बढ़िया भाई। नेट तो क्लैश का गया था, किसका गया था? क्लैश का गया था ना। तो क्या हुआ, क्लैश के साथ रीमैच नहीं हुआ क्या? नहीं, उनने बोले तुम हार गए तो हार गए, उससे हमें मतलब नहीं, तुम्हारा ऑफलाइन हो गया तो इसमें हम क्या करें। ये तो पूरा वन साइडेड है। So crucial now to reset their mental and to go us into this next match fresh. It's going to be split for Hot Zone, as I've said already today. It is that tough map where it can be अबे very क्या चल रहा है भाई? अबे भाई क्लैश का नेट किया था, पूरे मैच खड़े रहे वो लोग, उनको रीमैच भी नहीं दिया भाई इन लोगों ने, कह रहे तुम लोग हार गए फाइनल। हैं, ऐसा हुआ? हाँ, और क्या बे, पूरे मैच खड़े रहे, 5 जेम्स मतलब इकट्ठा किए पाइपर ने, तब तक वो लोग खड़े ही रहे भाई। तो स्कैम है। ठीक है भाई, उनका डिसीजन है, अब क्या ही कर सकते। पूरे कम से कम 20 सेकंड खड़े रहे हैं वो लोग, यार ये गलत है। अब डिसीजन के इनका ई-स्पोर्ट भी तो नल्ला हो गया, इससे पता लगा लो। अब हरा दिया ना अगर क्लैश में, जब मजा आएगा। फिर तो ये फिर से चिल्लाएगा भाई। तूफान नाम का, तूफान ला देगा। बना रहा है ये इजी विन लोग को मिल गई बिना कुछ करे तेरे प्लेटफॉर्म। Who will win this match? ED या HMB? ईडी कौन है, एचएमबी कौन है भाई? HMB तो हम्बल लग रही है, हम्बल ठीक है। हम्बल और डेटोस एफए, हम्बल हुई भाई, हम्बल को जानते हैं भाई। हाँ 74%, 75% रूट हम्बल को मिला है। अगले उसमें रेवेनेंट है भाई, मजा आएगा। Revenant Esports. Yeah, Rico's nice. I feel like it's kind of dropped off a bit. Potentially with the Tara can break as well, open that mid area, but Rico can really have a strong chokehold. And there गोली भाई आपने वो देखी है तारे जमीन पर? pick. It was previously the first pick in other matches. तारे आसमान में ही देखे मैंने तो। Relatively decent, but नहीं वो पिक्चर क्यों छेड़ता है भाई, बेचारे को क्यों छेड़ता है? maybe even vision gear as well might give a देखा हुआ है भाई। side lane, but I mean it's me, you know, it's no surprise. इंसान हस्ती, पता है मेरे को एक बार छेड़ा, मेरे को क्या बोला, तेरी इतनी गंदी आर्ट बनाऊंगा तेरी मम्मी भी तेरे को वो कर देगी डिसॉल्व। नहीं भूल गया counter to it, as we do see Edgar being a direct answer, but the Gale will provide डिसोन कर देगी। हाँ डिसोन, अब याद आया, तेरी मम्मी भी तेरे को डिसोन कर देगी। Also to have a choice between that and कितनी गंदी आर्ट बनाऊंगा जब मैं कोई चाह रही हूँ। instantly there is that springboard in for Nob, but a very quick response, a walking cane connection from Kyle. फाइनली स्टार्ट तो हो गए हैं। वो रिको लिया है भाई। रिको के लिए कोई काम का नहीं है भाई। अरे भाई उधर डांसिंग चल रही है प्रीमो और तारा की। भाई मेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं बे। ये तो शर्त है कि मेरे बाल यहाँ पे सबसे बड़े होंगे तुम लोगों में से। कितने बड़े हैं तेरे बता? तेरे से ज्यादा बड़े मेरे होंगे भाई। कान के नीचे तक। भाई रोसा कुटाई नहीं कर पा रहे भाई ये लोग। भाई रोजा है भाई। 6 महीने हो गए कम हो गया भाई, वो कितने टेलीपोर्ट यूज करा जब जाके मार पाया, वो भी 94 एक्स बचा। रिको इसलिए नहीं लेते बंदे भाई, मतलब ही नहीं है कुछ। भाई ये अनार इतनी अच्छी कब से खेलने लग गई बे। अच्छी खेलती थी, अच्छी तो खेलती थी वो। ये तो स्पॉन्सर मिला भाई। स्पॉन्सर छोड़ो, इसलिए तो हम जानते हैं उसको, नहीं तो थोड़ी पता होता कि अच्छा कौन अनार खेलती अच्छा थी, इसलिए तो पता है। मनु सोना टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा।
बताओ मनु सोना। कौन सा टूर्नामेंट भाई? की टूर्नामेंट की बात कर? रेफरी भाई, रेफरी खड़ा कर दिए भाई लोगों ने। बोले ऐसे कैसे तुमको बंद हो जाता, देखता हूँ मैं। It does seem like it could be a potentially likely prospect if Clash do not make some adaptations here. Let's see what those adaptations are. Well, the wall break is going to be helpful, ले ले I मनु सोना, suppose. हिस्सा ले ले। Is that enough? 'Cause आज there's still जिस 2 टीम players को in that वोट zone. कर रहा उसकी अपोनेंट टीम जीत रही है। हाँ भाई, ये तो हर बार का है भाई इसका। Rama eventually might go down. क्या भाई, हमारा तो हो भी गया खत्म। And it is just a trade at the हाँ, end. हम 2 तो for जीत गए, 4 लेकिन to इसकी be अलग बात है for ना। 1K, but no, ये it's जिसको gonna वोट hit करता for है वो much नहीं जीत। harder than that. And it हाँ, ये did तो just उल्टा ही not चलता play है अभी इसका किसको तो। वोट करा इसने? And you अभी किसको वोट किया इसने, पूछो। VQLS को वोट किया होगा ना। ही decision because not इसलिए only VN जीत रही है। for VN Esports सब इसी की गलती है भाई। right side, but there are अबे gonna be some छी भाई, gambles left. रिको ने सुपर यूज करी, गेल ने उसको चिपका दिया भाई। To kill onto 2, fine. It's still खत्म a हो गया भाई, trade at मैच the end of the खत्म। day. So no one's even QLS getting is the out। right side. VN Esports so close to the वैसे भाई, मैच और हो रोजा गया। को नहीं मार पा रहे भाई। An immovable object in that instance and bought so much time for his कौन squad. सा खाना भी खा लिया लेकिन कौन सा ऊपर हो, 2 बार सुपर यूज करता तब भी उसकी 10% हेल्थ बच जा रही है भाई। The final 10%. Maybe it has got super. All 3 मनु members तूने are खाना on खा the लिया? zone, and that is going कब to be से खा लिया भाई? surely VN Esports क्या continue खाया था? through to day 2 as the number पुलाव 1 बोला तो seed. था। Clashes 2023. भाई इसने हाथ भी नहीं मिलाया, भाग गया। देख रहे हो? मैं बोला भाई तुम वो यहाँ पे that were there since 2019. बिना हाथ मिलाए भाग गए। चले देखो, गए, बिना हाथ मिलाए चले गए वो। एक बंदा सिर्फ हाथ मिलाया, बाकी दोनों भाग गए भाई। देख रहे हो? ओ भाई ओ, मजा आ गया। यही तो है भाई, टूफा हर जगह मूवमेंट क्रिएट करके जाता है भाई साहब। They're not what they were hoping for when it comes to बोला नल्ला है भाई, नल्ला नल्ला स्टार है ये, समझ रहे हो? इससे प्रूफ होता है ब्रॉल स्टार्स इन नल्ला स्टार। पहले वाले में जब इनका गेम नहीं चल रहा तब भी उन लोगों को पॉइंट दे दिया, VN वालों को, इन लोगों ने, नल्ले लोगों ने। seed. स्पोर्ट टीम का नल्ला है भाई, कोई जरूरत नहीं है भेजने की, डिलीट करो They सब लोग। will be facing at the end of the day. भाई लिटरली वो हाथ हाथ नहीं मिलाते क्या दोनों बंदे, ऐसे ही निकल लिए। बोले तुम जाओ भाड़ में, हमको खेलना ही नहीं भाई। To that point is वो तो तीसरा बंदा थोड़ा सभ्य था तो बोला भाई मिला लेता हूँ, टीम की बदनामी हो जाएगी। वरना भाई कोई वैल्यू नहीं है भाई। मुंह पे उनके बिना कुछ किए हाथ वाथ मिलाए निकल लिया, भाड़ में जाने तो। नहीं मिलाना चाहिए था भाई, तब मजा आता। वो भी नहीं मिला था ना, चला जाता तब मजा आता। उसने थोड़ा सोचा भाई ये लोग तो निकल गए, अब मैं चलो मिला ही लेता हूँ। और बल्कि उनकी टीम से बंदा हाथ मिलाने आया इतने आगे तक कि हाँ भाई मिला लो, उसके सामने से चला गया, बोले नहीं मिलाऊंगा। टूफा को दूंगा मैं वोट, MVP इज टूफा भाई, टूफा इज MVP भाई। ऐसे कैसे जीता 422 DPS to भाई? his name. And honestly, I gotta say, that set looks very टूफा को convincing 3-4% for me from कितना VN मिला? Esports. They look like the 3%. communication was really on point. And suffering that defeat earlier as well, I did worry about them coming into this one and how they were going to approach it, because it didn't look like for me that they were quite in the game in the moment, but they were टूफा और कायो डॉग जो थे ना, दोनों पुराने प्लेयर हैं, वो दोनों भाई, बिना नॉर्मली हाथ मिला तो निकल लिए। अंगूठा दिखा रखा है weak for that final set कि for उसमें Clash. भी I PFP में think भी the great अंगूठा दिखा रहा है ये frustration तो। wasn't it, to be honest, because they got countered so hard. Like he had nothing. जब उनकी टीम से जो बंदा हाथ मिलाने आया था और जब उसने नहीं मिलाया था तो फिर वो अपने बाल सही करने लगा दोबारा, जब उसने हाथ नहीं मिलाया था तो अपने बालों पे हाथ वो तो मार के एक्टिंग ऊपर कर रहा करता है। था कि मैं पहले बंदे से हाथ मिला रहा हूँ। There's tanks in its face. It's not gonna be doing a whole lot. भाई ये राइजिंग सन भी बढ़िया खेलती है But let's see who the रेवेन्यू MVP हार is सकती है। gonna be ये ब्रॉस वाला गद्दारी कर रहे हैं। match. अरे है ही नल्ला स्टार, मैं बोल रहा हूँ तुम मानते नहीं हो। नल्ला स्टार इज नल्ला स्टार ऑलवेज। और यार टूटना भाई फोटो ई स्पोर्ट्स में लैग कर गया गेम, कितनी शर्म की बात है बे। लैग कर गया वो तो ठीक है, उनने रीस्टार्ट भी नहीं कराया, वो भी आधे घंटे लगा दिए। उतने देर में तो भाई उन खिलवा देते थे। वो ऊपर से डिसीजन आया होगा ना, इसलिए ऊपर के डिसीजन का वेट कर रहे होंगे। ऊपर से डिसीजन आता है भाई, ऊपर से, कभी नीचे से डिसीजन नहीं आ रहा है। ऊपर से भी डिसीजन आने के बाद भी इनने क्या सोचे कि भाई नहीं 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 काम करते हैं,
अगर ऐसा करेंगे कि भाई अपनी बदनामी हो जाएगी कि हमारा गेम खराब हो गया था, इन्हीं के ऊपर डाल लो, बोले नहीं नहीं हमारा डिसीजन सही है, एकदम मस्त चल रहा था गेम, तुम्हारी गलती की वजह से तुम हार गए। और ऊपर से नल्ले को उसको खड़ा कर दिया रेफरी को, ठीक है भाई। रेफरी को इसलिए खड़ा करके बोले आप दिखाओ कहाँ लैग कर रहा है। अरे पहले से ही करना चाहिए ना खड़ा, भाई नल्ले हैं ना ये लोग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए हर समय। वो तो ऑन ही रहती है, तभी तो वहाँ पे व्यू कर पा रहे हैं। तो फिर उन लोग को लैग हो रहा, तो ये सब तो उन लोग को पता ही होना चाहिए ना कि अरे भाई ब्राउज़र खुद क्यों मानेगा कि उनका लैग कर रहा है, बता मुझे। उनका तो नुकसान है मानने में। भाई फिर से वीएन और एसटीएमएन का मैच है भाई, फिर एसटीएमएन 2-0 करते हैं। अबे कॉल भी देखो मेरे में कौन सा आया अभी जस्ट, माय सर्कल स्कैम। हाँ तो बोले आप अभी कार जीते हैं, बोले एक काम कर वो कार बेच दे, टायर मुझे दे देना बस। टायर एक वो वर्मा जी रहते हैं मध्य प्रदेश में, उनके यहाँ जाना चाहिए, देखिए भाई। हाँ भाई टायर मैं लूंगा। मेरे पास तो आया था एक बार कि सर आप स्कॉर्पियो जीत गए हैं, थैंक यू। बोले सर आप स्कॉर्पियो जीत गए, आप तो कुछ इमोशन दिखा रहे हैं। मैंने एक काम करो आप वो कार बेच दो, पैसे मुझे दे देना। सर आप तो मजाक समझ रहे हैं, ये कर रहे हो। मतलब आप बेच दो ना, अच्छा करो, उसमें से 10 लाख आप रख लेना, बाकी मुझे दे दो। भैया ने फोन ही काट दिया, बोले इसको नहीं बना सकता यार, छोड़ो किसी और को पकड़ता हूँ। ये सब स्कैम क्या करते हैं ओल्डी भाई? मैंने तो आज तक इन लोग से बात नहीं की, मैं कॉल करूं। स्कैम क्या करते हैं? अभी तुम जीत जाओगे फिर बोलेंगे वेरी गुड, अब आपसे हम बाद में एक और बार कॉल करके डिटेल ले लेंगे, आपको गिफ्ट कहाँ भेजना है, ये गाड़ी कहाँ भेजनी है। और गिफ्ट देने के नाम पे बोल देंगे अरे सर रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा गाड़ी का 30,000 रुपये तो भरने पड़ेंगे कम से कम। देखिए आप 20 लाख की गाड़ी है सर, 30,000 तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इतना तो आप भर ही सकते हैं। ये सब ओटीपी नहीं मांगते हैं क्या? ना वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट दे देते हैं। ये बड़ा वाला स्कैम है, छोटे वाले स्कैम के लिए ओटीपी मांगा जाता है। With PSG Esports, he was a man who was able to go all the distance, joining forces with Sergeant Clash and Prashant, and again bringing it back around to the Snapdragon Pro series. I was so impressed with how they were able to gain a set against Tribe Gaming, and they gained a set against Help Me, who was a huge contender, worthy of taking the whole thing all the way, and they were able to stand the heat. And I think today, when things come down to it, they might well be able to do the same again. Revenant Esports. We'll have to see what kind of performance they will bring out today. They are looking strong for sure, and definitely a little bit of भाई ये कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते होंगे भाई, दो लोग एक दूसरे को गाली बकते होंगे, तीसरे को समझ ही नहीं आता। बोलता तुम्हारी माँ की जय हो जय हो। Grand final appearances from both sides for Rising Sun. It was 4 grand final appearances for them, and that भाई पहली बार खिला रहे हैं इन लोगों को, नहीं तो पहली बार स्टेज पे खेल रहे हैं। हाँ अबे मोमोज बेचने वाला क्यों आ जाता है हर मैच में? कोई ना कोई फोन बेचने वाला। अबे भाई शक्ल लगती है मोमोज जैसी। आरएनटी में चाइनीज चेस्ट आ गए। हाँ तो पहले से ही हैं वो, तो सिर्फ गिनती के 2 इंडियंस हैं। नाम की इंडियन और के भाई साला सब वो प्लेयर भर रखे इंटरनेशनल। इसको जितनी हंसी आ रही है भाई, इतना क्या कौन सा जोक मार दिया, हमें भी सुनाओ, हम भी हंसेंगे। Both of the teams, though, it's very isolated into their own region, and I mean, the only time we've seen Revenant come out of their region this year, Rising Sun haven't really done anything like that, is Masters, and as you say, they played well, didn't manage to get any wins on the board, but gave up a good fight against both Tribe NA and Help Me, and that goes to show something, because Help Me wasn't a normal roster, but it was built up of champions. Yeah. And like, that's the thing, if you're able to get a set off them and play well throughout the games, and then Tribe, who actually went and got 2nd place, it's a good performance in my eyes. And I think this is going to be a pretty even matchup. I'm not really favouring either of these teams.
I just think it's going to be pretty even. Two Brawl very Stars में best isolated teams, as you Brawl say, Pass in their कौन own सा था? regions. Haven't really seen them branch out that much. पता I नहीं. think they're just pretty similar in terms of skill. So I'm going to differ. I really feel like Revenant might take this one. I mean, for those at home that don't know, and everyone, let's be honest, because we've been backstage chatting to the players. मुझे तो बज वाला अच्छा The लगता है. coaching staff for Jurassic Rising Sun did say Splash. that if they do make day 2, Jurassic Splash. Faith. सबसे बढ़िया ब्रॉलर जो आया है जिसने सबको डोमिनेट किया है ब्रॉल पास में आके वो कॉर्डिलियस ही है भाई. Not having any faith in his team. हाँ भाई उससे तगड़ा ब्रॉलर तो आया ही नहीं भाई. A bit questionable, but at the same time, I think क्या ही डोमिनेट किया था भाई उसने I think that goes 30-40 without दिन तो. saying, but I do think that Rising Sun have उसके the चक्कर में experience, बहुत especially लोगों ने since फिर CKO's से been गेम खेलना to चालू quite a कर few दिया भाई. events. It kind of mirrored on the other side with the response, but at the same time, response at LAN. I don't mean to call him out. I don't mean to call him out, कोई कुछ बोलता ही नहीं है. but it's not great. Oh, okay. मैं तो उनके YouTube पे जाके देख रहा था Okay. ब्रॉल स्टार्स वालों के, जब वो उस टाइम पे हारे थे मस्त गालियां चल रही थी भाई नीचे उसमें. For me, I think what we can say at the very least is looking back throughout the course. उनको चीटर यूट्यूब पीटर. से तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई. मोनेटाइजेशन ही नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता. You know, Chazmak गाइस होता भी तब भी कौन सा फर्क पड़ रहा वाला उनको. from East Asia. I think they are definitely the big talking points to be said, and you know, expect the unexpected. मोनेटाइज होता तो सुपर चैट कर करके गाली देते भाई. Here, anything can happen. अरे भाई उन नए मैनेजर को देखियो ब्रॉल स्टार्स कम्युनिटी के मार दियो. And if it goes to that third and final मार दो जाके मार दियो. ब्रॉल टॉक में तो आया था ना वही है. potentially that final नुल्ला draft. भाई. And from what I've heard, you know, Nulla. in the background, the India region Nullu have है, a pretty nullu. decent handle on that drop. I mean, I was watching ओला back पता the नहीं South क्यों छोड़ African दी. Masters as well. Sargent had such an amazing tournament. He really was landing that mark, and if he gets that support today with his team, I think Revenant have got a very वर्ल्ड good चैंपियनशिप shot. दिसंबर पे Rising नहीं Sun भाई is definitely going to put नवंबर them through में. their paces, and we're going to see very early on how they handle that kind of pressure. इस मंथ एलसीयू खत्म होगा, अगले मंथ सीधे उसी टाइम पे ये भी रहेगा. दिवाली का सीजन रहेगा, लेकिन इससे पहले खत्म हो चुका होगा ये. दिवाली के दिन स्ट्रीम करते हैं क्या गोल्डी बार? यस, हम सब दिन स्ट्रीम करते हैं. रात में करते हैं दिवाली में. हाँ किए थे. इस बार करेंगे कि पटाखे फोड़ते हैं आप? पटाखे पटाखे तो मैं वैसे भी नहीं फोड़ता. इस बार भी फिर मतलब होगी रात में भी 8 बजे. तो होती है 8 बजे नहीं होती उस दिन, 9 साढ़े 9 बजे होती है. आधे घंटे के लिए आता हूँ बस. मैं तो नहीं फोड़ता पटाखे. होली में स्ट्रीम करते हो क्या? देखो ऐसा है, अगर मैं घर से बाहर नहीं गया हूँ और मेरे पास पीसी और इंटरनेट है तो फिर दिन चाहे कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्ट्रीम करता हूँ. लेकिन अगर मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा है तो फिर मैं नहीं करता. क्यों मनु पटाखे लगाता है? और क्या भाई. ये तो इतने जलाता है कि मोहल्ले भर के भी आके इतना जलाता हूँ, इतना पुड़ता है. अरे रस्सी बम से क्रिकेट खेलते हैं भाई. बढ़िया बढ़िया. कोई मजा ही नहीं आता भाई तो पटाखे लगाने में. इधर आ भाई तू. मजा नहीं आया तो बता. उम्र हो गई है बेचारे की, क्या करेगा. अरे भाई मैं लौंडा लफाड़ी रही हूँ ना, अकेले क्या दगाऊं जाके पटाखे? क्या जाऊँ एक रस्सी बम पकड़ के अकेले दगा के आ जाऊँ? अरे तेरे तो दोस्त होंगे खूब बढ़िया. और क्या भाई, क्रिकेट कैसे खेलेंगे फिर रस्सी बम? कितने जला देते हो पटाखे? क्या कितने के जला डाल दो पटाखे? भाई सब दोस्त लाते हैं तो होंगे कम से कम 4-5-6 हजार के. Very dangerous. Obviously getting Mr. P out of the way from those LATAM games that Clash managed to win against Jazzmat, because out of absolutely nowhere that game, Piper, Nanny and Tick अनार और चक्री तो भूल ही जाओ भाई. वो तो कोई वो कौन जलाता है बे? वो कौन जलाता है? स्काई शॉट्स वगैरह चलाओ बढ़िया.
Natalie goes very well into स्काई खुद शॉट तो भी नहीं जला भाई, हुआ। रस्सी बम भाई लाते स्काई हैं, शॉट लड़ भी अच्छी लाते लगती हैं, है, वो जो बुलेट रस्सी बम लाते आता हैं। है, first pick here on shooting कौन से बुलेट ग्रीन के वाला? छोटी सी वो होती है, one बुलेट। bit and Meg gonna हाँ, come out बुलेट as छोटी well. वाली। We've seen हाँ, VNE और sporting नहीं themselves ग्रीन for वाला नहीं, एक आता है जो championing सफेद that रस्सी ball में and होता है, shooting वो star as भाई well. ग्रीन So वाले से it भी can बेहतर। have some good results and some good pushback दीवार हिल potential, जाती है but इस पे रख also के very चलाओ। vulnerable at the same time, also in very low कभी damage मटके के outputs नीचे रख के when फोड़ा है outside पटाखा? of Mecha 4. अरे भाई हमने Chance टीन now के for डब्बा Revenant फोड़ to दिया था पूरा respond. भाई। Certainly मैंने countering बाल्टी the के Meg नीचे is रख gonna के be फोड़ा high रस्सी up बम, और in उससे that बहुत regard. ज्यादा मतलब I हिल mean, जाती है वो, ultimately, I जहाँ भी wouldn't रखो necessarily उसको, वो बहुत mind me मजबूत under आता है the यहाँ पे, circumstances. लोकल में Not normally मिलता my है, kind of go-to brawler for shooting star, but जलाना मना होता है उसे। भाई हर Bell साल gonna एक come टीन out का as डब्बा well. फूटता Will है be इधर। able to mark up and have a similar approach. So कल certainly भी रॉयल much की more स्ट्रीम effective when in Mech 4. करेंगे। Lola coming in as well. And it's a टॉप pair that टाइगर have लगा to दो not एसजे want to be पीछे। having the Lola and be playing into a Bell. So it's quite a nice combo for ये him. कौन सा अरे भाई, फटाका है भाई? अरे फुलझड़ी की बात कर रहा है विवेक, इसकी बात पे ना जा। रॉकेट वॉकेट लगाता है, ना भाई, रॉकेट की जगह नहीं। रॉकेट नहीं मजा आती है, लेकिन रॉकेट जो बड़े वाले आते हैं वो बोतल में रख के जाने में मजा आती है। स्काई शॉट में मजा आता है, रॉकेट में मजा नहीं। स्काई शॉट इधर उधर नहीं जाता ना, सीधा ऊपर जाता है, रॉकेट तो इधर उधर घुस जाता है। इसी में तो मजा है, एक बार रॉकेट जलाया, छत पे घुस गया जहाँ पे पूजा हो रही थी बैठ के, वहीं तक गया साला। आधे घंटे से लोग सेटअप ही कर रहे हैं भाई, कितना टाइम लगाते हैं। लेकिन भाई अब मजा नहीं आती यार, पिछले साल नहीं जलाया था, पिछले साल भी मजा नहीं आई थी, पिछले साल के पटाखे अभी भी रखे होंगे। चलो फाइनली शकल देख लो भाई सार्जेंट की और प्रशांत की। मजा नहीं आता भाई, होली में मजा नहीं आता, होली में बोरिंग लगता है। होली दिवाली सब ऐसे ही, सब सड़ा दिवाली बढ़िया लगती है भाई। फाइनली रेवेनेंट की एक्चुअल टीम खेल रही, जो पूरा खेलती है मंथली फाइनल्स। अबे भाई स्केलेटन जीन गया भाई। आरटी को भगा दिया। Bear in mind, different meow from the one we've been seeing all year long in Europe. So we'll see if they're able to pull this through. But they do have a. अबे जीन सही कैसे हो गया? ये कौन सा हैक था? यही तो, अबे यही तो रेवेनेंट है। अरे पहले उसका वो स्किन आ गई थी जो ग्लिच में आती है। फ्रेश मार लिए होंगे भाई, आरटी बहुत लो है। वो 2 बार लो हो चुका है, फिर उसके अधीन कर दिया उसने। गया, मिल गया किल। कौन गया? अच्छा क्रो गया। वो उड़ के आएगा। अरे खींच ही लिया भाई, उड़ के जाएगा। तो मार मार मार, वो स्लो हो गई। मैक्स with this ego in front of him. Freeze frame, Shaw still available as well. Sergeant's avoided nicely in response. Trying to work for another pull, but jump comes in. Meow's going to go for it, and that seems a little bit over aggressive for me. So close भाई to क्रो क्या कर रहा है? किल पे किल मिल रहा है। मार मार मार, क्या कर रहा है? मैक को मार स्लो में। ओ जी, हाँ भाई, रिस्पॉन्स तो खींच के मार रहा है भाई। रिस्पॉन्स का एक भी पुल नहीं मिस हो रहा भाई। तो आके भी तो एक ही जगह बैठ रहा हो नल्ला। खींचेगा ही वहां से। अबे गिव अप ही कर दिया है इनने तो। बोले हम नहीं आ रहे। अगली बार पोजीशन चेंज। ये मानो तो फिंगर स्लिप यूज करते हैं क्या गेम खेलते समय? तो स्केलेटन बन गया था, तो मैं ऑलरेडी एक्सक्लूसिव स्किन अपलोड कर चुका हूँ भाई। इनसे पहले हमारे पास वो स्किन थी, इनके पास तो अभी आई है, हमने ही बेची है 2 रुपए में। फिंगर स्लिप से ज्यादा अच्छा तो पाउडर होता है, थोड़ा थोड़ा लगा लो, पूरी स्क्रीन भागती है चुप चुप चुप। खींच खींच खींच, मार दे दोनों लोग। अरे मर गया भाई, खुद ही मर गया। बहुत लो है, मार दे। एक शॉट में 65 हेल्थ में है, 65 हेल्थ। मारे, अब तो हील है पूरा।
सर्जेंट अच्छा खेल रहा है भाई। इंस्टिंक्ट कहाँ गया? पीछे खड़ा है। pushing up, waiting for them to obviously return up to the mid to be able to make use of that. And the same there as well. CZK gets pulled in. Toolbox going to be dropped. 200 on response and he survives it out. But Prashant on the right, looking quite low, but Meow can't aggress with any help. Yeah, great body blocking as well. Pro को सुपर मिली तो लोला गई भाई। Now the heals as well, just keeping Prashant in the mix, swapping lanes over to the left-hand side. Sergeant finds a tap onto Troy. Lane change कर लिया। Only find Troy. Meow is able to फायदा नहीं होता ना कुछ। जब मनु की स्ट्रीम पे हम लोग एक दूसरे की गालियां देते थे लोला का नाम ले लेके। आगे उठ के और मार दिया भाई, मार दिया, ट्रेड हो गया उधर। 70% वाली भाई, पुश करो, जाओ। बहुत लो है, बहुत लो है। फुल कर लिया ना। जी जी, बढ़िया पुल भाई, बढ़िया पुल। उड़ के आने वाला, उड़ के आएगा, उड़ के आएगा नल्ला। इंतजार कर रहा था वो इनके आने का। एक और किल मिल गया हमको, एक और किल, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, गया। अबे भाई ये रिस्पॉन्स के पास वाली पिन है, ये जीत चुका है फाइनल्स। कौन सी टीम से खेलता है पहले? ये उसके साथ खेलता होगा। कौन था वो? स्पेन एलसी के साथ। उसके टाइम की पिन लग रही है ये तो। ये देखो, ये पिन बुला लिया, बोले राइजिंग सन वाले बुला लिया अब रेफरी को। बोला हमारा नहीं चल रहा। भाई तुम लोग मत कराओ यार टूर्नामेंट, तुम्हारे बस की नहीं है भाई। ब्रॉल वालों, नल्लो सालों, गोबर। ये देखो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है राइजिंग को। तेज शर्म करो भाई। भाई इसने एक भी पुल मिस नहीं किया रिस्पॉन्स। हाँ, रिस्पॉन्स ने एक भी पुल मिस नहीं किया। Again, that trade was quite important. It could have gone another way, let's be honest. But again, it's great to see. मरा भी नहीं है शायद भाई। Between these two teams, I mean, it's kind of fun because like I've seen बहुत बेदली मरा है। this year. I've spent a lot of time in Singapore. अरे मरा ही नहीं है शायद। And it's just great to see. भाई अब ये बैठ के फिर आधा घंटा टाइम पास करेंगे जी यार। हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अरे भाई तुमको वैसे भी पॉइंट उसी को जीत देना है जो जीत गया है। तुम दूसरे को रीस्टार्ट तो कराओगे नहीं, तो चुपचाप से दूसरा राउंड लगाओ, खत्म करो। बोल दो भाई तुम नल्ले थे, नल्ले हो, नल्ले रहोगे। अब कहीं ये ना हो जाए कि हाँ इन लोगों को वो कर देंगे, क्या कहते हैं, इन लोग को रीमैच करवाएंगे इन लोग का। घंटा नहीं करा रहे, जान खा जाएगा भाई। फ्लैश आके भाई धमाका कर देगा। वो भी टूफा है भाई, वो तो इतना अग्रेसिव खेलता है वो तो। टूफा के अंदर तक मारेगा इस लोग। अरे वो अभी वो चल रहा है ना, क्या नाम है उसका, वो कोचिंग में मार दिया बच्चे ने जाके, चप्पल ही चप्पल मारी टीचर को। अरे हाँ पीडब्ल्यू वाला, हाँ फिजिक्स वाला वैसे आती है भी स्टेज पे मारेगा। इस स्टेज पे आके इन दोनों को मारेगा। इन दोनों को मारे ना मारे, वो टेडी को जरूर मार के जाना, मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर मार के जाना भाई। उसका मुंह सीधा कर देना तू। चप्पल भी रुपानी की बैठेंगे। Going into the next set, they've got to bring that same mentality forwards and actually kind of vamp it up a little bit more in terms of a gear. भाई स्टार्ट कर दिया इनने। Which will be our second set for Hot Zone. It's Revenant Esports 1 set to the 0 of Rising Sun. Yeah, and as we said earlier, it's very unforgiving this map. It doesn't really give a lot of room unless you भाई राजदीप भी सबसे पीछे रह गया है भाई। I think it's one of those maps if Revenant get ahead maybe in the first राजदीप नल्ला है, नल्ला ही रहेगा। पहले दिन ही हो जाते हैं सबके पॉइंट्स भाई, आधे मैच में ही हो जाते हैं। इसके भाई 2 दिन में भी नहीं हो पाते हैं पूरे। एक काम करना है सिर्फ जीत के, सिर्फ और सिर्फ टीम कैसे भी सिलेक्ट कर दो, एमवीपी चूज करो, 100 पॉइंट लो, घर जाओ ना भाई। उसमें भी नहीं हो पा रहा इसका। मैच भी नहीं देखना है भाई, जरूरत ही नहीं है मैच देखने की तो। Hello, AP88 Brawl is wipeout permanent. We usually get 4 mods to choose, but this time 3 for replacing C is not wipeout. Wipeout is इस सीजन के लिए परमानेंट है ना, आई गेस।
Yes. वाइप आउट तो परमानेंट है. Yeah, it's gonna be permanent AP88 Brawl. For this season, we know about that thing. Don't know about the future expect, but yeah, for this season it is gonna be there. Wipeout. सीज भी परमानेंट है अभी के लिए इस सीजन को. हाँ, पहले सिर्फ 4 ही मोड हो रहा था, अब तो 6 कर दी कम से कम. अरे भाई भाई 7 वो हो गए आज तो. हाइस आज को तो तो भाई हटाया गया वो चक की वजह से। स्प्लिट और एक और कोई सा 2 हॉट जोन के मैप चल रहे हैं भाई अभी तो. भाई राइजिंग सन वाले कर क्या रहे हैं? हाथ पैर क्यों जोड़ रहा है वो बैठ के? हारने वाले हैं. बोल रहा नहीं नहीं प्लीज 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 ये वाला ब्रॉलर मत ले, ये वाला ले 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 ये ले 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 मैं बोल रहा हूँ मैं. भाई फिर बार ले लिया यार. मॉर्टिस ले ले भाई. कौन बचा लास्ट पिक रिस्पॉन्स? मॉर्टिस बैन है. अनु भाई उन लोगों ने बैन कर दिया था क्योंकि उनको थ्रोअर लेना था इसलिए. अबे भाई मॉर्टिस बैन जैसी बारले बहुत जैसी जैसी कोई नहीं. आज तुम्हारे कितने हुए? ये कोई पूछने वाली बात होती है? ऐसे गंदे सवाल नहीं पूछे जाते. गले पे नमक छिड़क रहा है भाई. वे पाइपर कौन लेता है पाइपर इसमें? Piper's not what I would have gone for at all. I mean, I don't know if they're trying to take a long-range battle down the sides, but if they lose control, अरे भाई जहर नाम चैट में आईटी वाले नल्ले हैं भाई, सोए जा रहे हैं अब से. फीडबैक मांग रहे हैं, जो चीज तुमने कंप्लीट नहीं करी मैं उसको फीडबैक तुमको क्या ही दूंगा. नल्ले हो थोड़े से. पहले वो कंप्लीट करो फिर फीडबैक मांगना. Who will welcome to the stream? Extremely dissatisfied. दे दिया फीडबैक. ये कौन है भाई? एपेक्स आर डब्ल्यू फ्री पैम 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 दे दे दे. बहुत मुश्किल लग रहा है भाई ये वाला. This Jesse against Piper is not going to be surely going the way of Meow, and it's down to CZK and Troy to make the move. Troy jumps in on the aggressive. This is the first sign of it that we've really seen on this left-hand side, and he does win the interaction. 8% की लीड है. नहीं अब कम हो मैं गई. क्या कॉर्डिलियस को मार देगी क्या पैम? वो हील करता रहता है वही तो सुपर है. हाँ भाई पाइपर गलत पिक है भाई. किसी को नहीं मार सकती पाइपर. उसको तोड़ना पड़ेगा वो. हार मान ली क्या भाई ने? रिस्पॉन्स तो स्पिन करने लग गया. वेट कर रहा होगा वो उसका वॉल तोड़ने का. टूटी वॉल अब कुछ हो सकता है. अरे वाह भाई, क्या निशाने मारे भाई. पाइपर ओपी भाई साहब. सर्जेंट है भाई, इंडिया का बेस्ट प्लेयर भाई. The cleanest of breaks from Sergeant, but nonetheless it will provide some value. अब थोड़ी लीड में आ सकते हैं लोग. तेरे को पता है पाइपर कौन है? बेस्ट पाइपर मैं कौन इंडिया है? का बेस्ट प्लेयर बोला भाई. हाँ इंडिया का बोला ना तू. वर्ल्ड में कौन है? मेरे को क्या एक सेकंड. पहले तो क्राइंगमैन था, अब पता नहीं कौन है. जब वो स्पोर्ट्स खेलता रहा तब वो 1v3 करता रहा पाइपर से. अब पता नहीं भाई कौन है. अब तो नहीं खेलता स्पोर्ट्स. और लेस तो पीट रहा बैठ के नीचे उसको, मतलब ऊपर नहीं आने दे रहा भाई. डांस चल रहा भाई उनका. Yeah, this is the thing. The objective is being played out. CZK now on his own takes the lead for Rising Sun, and these shots have got to land for response. One there, but finds nothing onto Meow. हाँ भाई आ गया. कौन जीत रहा है? As well, there's so much noise on the stage, and it's because Rising Sun have just completely dominated their competition. Now at 90%, they should be able to secure this game. I mean, it's a good end and a good start from Rising Sun, but I just don't know what this comp is from Revenant. It's really disappointing, I feel. Like, in the position they were after that first set, really good. They looked good, dominating, in fact. And then they draft Piper. And I mean, Piper might be good, might be able to open the map. Unbreakable walls. And when Barley establishes himself up top, you can't really do that much. It just feels like it was a wasted lead that they've had.
Yeah, Piper's in a good spot, regardless, but I would never draft her here. I mean, if Revenant can get better control and make a cleaner break and open up the right-hand side, it might be able to do something. But it wasn't the brawler pick for me in terms of the draft, and that might prove costly for Revenant here as Rising Sun gaining their momentum and possibly taking this to a third and final set. If things continue this way, they are playing this very, very slow, but neither side is dipping their मेरी तो इतनी हेल्थ होती, मैं तो पैम लेके खड़ा ही रहता, तो मैं मर ना जाऊं। 10-20% तो हो ही जाते। 9,000 हेल्थ है भाई, क्या कर रहा है? इतना क्या डरना भाई, बी तो बीच में मार ही रही है। आ ही नहीं रहा कोई। बार्ले की वजह से कोई नहीं जा रहा। तो बार्ली 3 जगह थोड़ी मार देगा, तो ये ऑलरेडी वो बार बार फेंक ही रहा है ना, रुक थोड़ी रहा, वो भी नॉन स्टॉप फेंके जा रहा है। फाइट स्टार्ट हो गई। Revenant are starting to vamp things up, and that's going to encourage a response now. Rattled Hive coming out for a response. It's got to find something, and it does. EZK falls with the help there as well of his teammates. That's a valuable pickup. Sergeant going to break his own side first, and then try to obtain yet another super off the back of things. Troy, though, in that spot. There's going to be Mama's Squeeze as a star power there, keeping him low. He keeps going inside the healing station, so he's got to be cautious. What a takedown, though. Meow falls. Sergeant now slotting into a bit of a अरे defensive भाई, position, but needs to break on this right सिर्फ side. बार्ले जिता रहा है। He's gonna get it. Just about take some of the walls. शीस्टम है कर रहा शीस्टम। Only a slither of HP for Sergeant over that left as well, and it was a good jump in the end, but Response is getting hit pretty hard now. Unbreakable wall है ना इसलिए। Just deleted instantly, and now it's अनब्रेकेबल वॉल लाने का कोई वो नहीं था, मतलब ब्रॉल स्टार्स में। भाई थ्रोअर के लिए लाया। थ्रोअर से लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो कौन ही थ्रोअर यूज कर रहा है? था भाई, कोई भी मार देता था थ्रोअर। जब से आई है तब से भाई बहुत दिन हो गए। वाह भाई, कुटाई भाई कुटाई। सर्जेंट एक ही जगह सुपर यूज कर रहा है। अच्छा, जो वो चाहता नहीं ना, जो वहाँ खड़े हो उसको मौका नहीं देना चाहता। किसी को वहाँ टिकना नहीं देना चाहता। भाई पैम ने क्या मारा है भाई? अबे बार्ले स्पिन कर रहा था अभी। वो तो नीचे तूने देखा नहीं क्या, कॉर्डिलेस और पाइपर डांस कर रहे थे नीचे खड़े होके। Rising Sun gave themselves a glimmer, but that is slowly diminishing, and the momentum is with Revenant at this present moment in time. But again, Uma is a sponsor. It is a risky draft for them, and one that could go south quickly. Rising Sun, though, have got to be much more aggressive in these early outsets. Utilize that medical. अबे यार, देखो अलावा बांध रखा है उसने। Yeah, this is much more what I'm expecting to ये see. विवेक बोल रहा है गेम का आवाज बढ़ाओ। But as quickly as that, Troy falls and leaves it in a 3 versus 2. गेम का आवाज बढ़ा देंगे, फिर तुम बोलोगे बहुत जा रहा है। BGMI थोड़ी देर में तो फुटस्टेप सुनेगा। To praise him, I feel, and even following it with more shots. Beautiful stuff from Sergeant. Response doesn't even seem to be playing at this point, just praising his teammate the whole time. Troy gonna come in though, and they're gonna get the realm against. वाह भाई, खुद के प्लेयर पे मार दिए। From Sergeant yet again, and this guy's not missing. That is the setup. भाई बहुत बढ़िया इनने कमबैक किया, देख रहे हो 50 लीड ले ली वे। वॉल के उधर मार दिया यार। पाइपर लेगी सर्जेंट ने। जैसे तारीफ करी वैसे टपक गया भाई। पुल कह रहा है सर्वर में कुछ भेजा है उसने। लेट्स सी। अरे भाई बेजिंग मीडिया में किसी इंडियन ने कॉल्ड की स्किन बनाई है। ओ भाई सही तो है यार, अच्छी लग रही है। हार गई ऑलरेडी भाई। आएगी नहीं लेकिन हाँ मौका है अभी भी, 1.5 मिनट है भाई, हो गया सबको मारिए। मनु गोल्डी भाई के सर्वर का मीडिया चक्कर। एक कोल्ड की क्या स्किन बनाई है बढ़िया।
65% for Rising Sun. There's little in this. अबे घटोत्कच की स्किन है ये तो। भाई बंदे खड़े नहीं होते भाई। ओल्ड महाराज नाम नहीं आएगी भाई, कुछ भी कर लेते हैं। नहीं आएगी भाई। चाइना के अभी कोई ऑक्टोपस खाते हुए बना रहा था, वो जरूर आ गई। वैसे भी स्टिंग भागड़ खा रहे हैं। हार रही है ना आरएनटी, जीत गई। हाँ जीत रही है भाई, 85% हो गया। 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 वो जीत गई। खत्म। 2-0 हरा दिए भाई। भाई इन्हीं को खिलाओ भाई, तुम लोग इनको क्यों नहीं खिलाते हो भाई? ओरिजिनल टीम को खिलाते नहीं है उसमें भाई, वर्ल्ड फाइनल्स वगैरह स्टेज पे। इस बार खिलाएंगे शायद। जैगुआर स्पॉन्सर कर रखा है भाई। जैगुआर? अबे साले नल्ले, पूमा है वो, पूमा। नल्ला भाई। जैगुआर बोला था भाई मैंने, तुम पूमा जानता था मैं तो कोई बोलेगा हाँ हाँ सही बात है जैगुआर, तो पूमा बोल दिए। तमन्ना था गोल्डी भाई। नहीं समझना भाई। भाई ये तो गले वाले मिल रहे हैं। जैगुआर लोग तो खुद ही पहली बार मिले हैं अपने टीममेट से, वही तो वो बोल रहा है, इट्स लाइक अ रीयूनियन टू द टीममेट्स। अब ये क्या बना दिया पर्पल भैया? अरे इसने नहीं बनाया, किसी बंदे ने बनाया इंडिया। हाँ नाम क्या होगा इसका? महाराजा कोल्ड बता रहा है पर्पल। हाँ भाई वैसे डाल सकता है वो तो, इसमें हो सकता आ भी जाए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। घटोत्कच डाल सकता है भाई, घटोत्कच कोल्ड उसमें भी तो है। MLB में हीरो है भाई, वहीं से इंस्पायर्ड लग रही है भाई मेरे को। किसको देना चाहोगे भाई? सार्जेंट को दे दो। यस वही जीत रहे हैं। सार्जेंट 46%, 48% हो गया भाई। 18 किल किए हैं भाई बंदे ने, 18 किल। 296 का DPS लेके भाई वो। मैं तो बोल रहा था कि पाइपर घटिया है भाई, 18 किल कर दिए। कौन खेल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात भी भाई यार मेरे टेबल पे इतनी धूल आती है। गोल्डी भाई आपके टेबल पे धूल आती है ज्यादा, ही नहीं आती है? आती है, अभी तो पोछा था, वही तो बोल रहा हूँ, कितनी धूल आ गई, पोछ लेता हूँ। और क्या किया था? बहुत आती है क्या? और क्या? मजे की बात तो है कि इतनी ज्यादा आती है कि अगर एक दिन पोछ भी दो तो दूसरे दिन उतनी धूल होती है। हाँ सेम 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 मेरे यहाँ भी। मैं बस पोछता हूँ और उसके बस 2-3 घंटे बाद उतनी धूल आ गई। और गलती से अगर 1-2 दिन नहीं पहुंचा ना, और बाहर चल जाता हूँ कभी तो फिर बंद ही रहता है, कोई आता नहीं। जाला नहीं ऊपर ऐसी धूल में, ऐसे जैसे वो पुराने जमाने में कार के ऊपर नहीं पीछे डिजाइन बना देते थे। सच बता रहा हूँ नाम वाम लिख के, इतना ज्यादा धूल जम जाती है भाई। ये लोग ना ग्रिफ्ट खेलते हैं। ग्रिफ्ट तो खेल सकते हैं, ये सब मैम खेला करते हैं बस। ये बस वही 10 टॉप 10 ब्रॉलर ही खेलते हैं भाई बस। जो भी मेटा वेटा में चल रहा हूँ वही चलता रहता है बस, घिसते रहते हैं बैठ के। ये दिख रहा है कुछ नया, लू खेला था भाई बंदे। हाँ मैंने भी वो गौर किया लेकिन बोला नहीं था। धूल तो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि
यश पाद मारता है। अच्छा, इतनी जम से पाद मारता है कि वहां तो धूल होती है, यहाँ तक धूल होती है। भाई यार मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी रात को रोज मैं साफ करता हूँ अपनी टेबल, ठीक है, और वो टेबल फिर उसके बाद सुबह देखता हूँ उतनी ही धूल जितनी मैंने रात को साफ की थी वापस आ गई है। रोज करना पड़ता है। तो रूम में खिड़की है? हाँ ना, हाँ तो बस आनी है वो तो धूल। लेकिन खिड़की बंद रहती है 24/7, कभी नहीं खुलती है। हवा कहाँ से आती है हमारे रूम में? दरवाजा खुला एसी है रहता भाई, है। नवाब जादे अमीर है लोग भाई। भाई, अमीर लोग भाई। Who will win this match? भाई रेवेनेंट, भाई रेवेनेंट को चुपचाप से उठा के रेवेनेंट को वोट करने का, इतना क्या सोचने का भाई। Place Revenant Esports back into another match today. I know it was so weird to see because I kind of came into तो this इधर AC पर्पल कम कर कितने दिया। पॉइंट्स हुए LATAM भाई? teams ये पर्पल कितने पॉइंट्स हो गए? उसके तो 1000 हो ही गए होंगे अब तो। कितने मैच हो गए भाई? अब और तो क्या 1000 हो ही गए होंगे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता 1000 ना हुए हो। especially, and I think Raconic doing well has made us fear Datos that little bit more. Because coming into this, if Raconic hadn't done well, I'd be like, okay. चलो भाई मुत्तु I'm a स्वामी से little bit मिल के confused आता that हूँ। Datos has been able to be humble and that they'd be able to beat Revenant Esports. मुत्तु स्वामी में Really आ shown that गया हूँ। this region today. They've done the region proud so far, and let's see how Dazzles will fare. But statistically very similar. I mean, very वाह similar. भाई, अब Dazzles नहाने had जा रहा so नंदा। much success मैं in तो that रात में LATAM नहाता हूँ region, and, 10 बजे, same for तो तू Revenant, मेरे को भी नीला I बोलेगा think फिर pretty तो। much identical when it comes down हो to गए things. 1000 पिछले We'll मैच take a में। look in a bit of a closer detail. First and foremost, that's Revenant गाइस, Esports हमने versus गोल्डी भाई का Manchester चैनल हैक United कर on दिया the है। stage, of हाँ course. गाइस, Response, अगला Sergeant मॉडरेटर Clash मैं हूँ and Prashant और अगले Cody ओनर Moderator. मनु भाई है। riding high off the back of their मॉडरेटर हूँ भाई, victory of Rising मॉडरेटर। Sun and looking to keep things मैं clean मॉडरेटर and हूँ। continue forwards. If they win this matchup, they will be the मनु number one सोना seed going चुम्मी। in to day 2. I mean, Revenant have been a और भाई dominant force दूसरा over ओनर in मन्नू that है। region. 50% They really are इनकम such मेरी a होगी strong आज से। team. It's और बताओ, a little bit worrying how well they were playing in that first one because I think this is सब going to be बढ़िया a चल रहा very है। equal, even matchup between these two teams. But Revenant have been playing in their region extremely well all year long. अबे यार over चलो there in सब India. लोग And, स्पैम you know, I करते हैं mentioned, it's a चैट में very, हैशटैग अभी अभी तो very, पीछे गए थे, वापस आ भी गए। underappreciated हाँ region. हाँ, When they went to आओ Masters in स्पैम SPS, करें। they performed well. They just didn't manage to क्या? get the scores on the हैशटैग board. सुसु, 3-1 against Help Me and 3-1 against Tribe Gaming NA. That's Eh? commendable in itself. Because those हैशटैग teams, सुसु। they're built of champions on the side of Help Me. They might not have ये been नल्ले the काम मैं नहीं team करता भाई। that's usually playing, but अरे they भाई were तो फिर incredibly आग good. किसको And then you आएंगे? have, obviously, हम क्या Doritos सोचेंगे? F अबे is एक one घंटे really, तक कौन really आता है strong राज? team in that South America West region. Dangerously so as well. They've been playing really, really well all कह रहा मैं आ year रही है long. एक And I think घंटे they're में। a team who we feared a bit लगेगा more अभी because ना of भाई, Iconic's लगने में तो success in एक this घंटा लगेगा। competition. But overall, I think we would गेम have मेरा feared them तरह a तक little bit कहता more है। anyway, just because they managed to get so many good अबे results throughout the पानी year. नहीं आया है बे इन लोगों के लिए। Yeah, so far we've seen all sorts of things happen, but I'm not gonna lie, I wasn't necessarily वो साला कौन सा expecting, पानी है? नाली का पानी दे रहे हैं। वो कहाँ है इसका लेबल? Neither I. हाँ भाई मैं भी सोचा, मेरे को लग रहा है ये बार बार इसी बोतल भर भर हर स्पोर्ट्स प्लेयर को पिला रहे I हैं। just didn't think they would, if they were to, make it forward, it would be through the winners match because, like, I don't know what happened. अबे with वही Zalbo. बॉटल I'd लाए हैं, love बाकी to ये have तो some लाए ही details around that. But that must have been crazy because a 2-0, that's quite a statement. And I mean, I learned it from भोजन करना है, their coach, चार्ज भी देना है tweeting, मोबाइल। just like GG's humble 2-0. That was वाह so, like, भाई। they seem like तो to गाइस expect आप it लोग almost, देख ही you know what I सकते हैं mean? गोल्डी भाई का चैनल हैक हो And चुका I है। definitely did not, and I think a lot of people और at ये home कैसा didn't लग रहा है either. आप सबको? So a bit of a surprise here, and that makes me really want to see them play मजा आ better, रही because है। नाली का पानी। we've seen them in some global events before. They played at Masters. Well, we watched their first match today as well. We know they're really, really good. I think they're a very fresh twist on like the Indian scene as well, because it's been a scene that like struggled a little bit to develop, or at least mingle with the other regions. कैसे They're बोले looking बन good, and I want to see how this match कैसे goes. बोले Because बंटी क्या? Dalos, I've only कुछ really seen them नहीं just भाई। dominate through their region. अरे अरे I want to see how ऐसे they match कैसे? against Revenant. Yeah, that's the thing. In previous हाथ years, we तो नहीं haven't धोए had this ना भाई? sub-region split. It hasn't been क्या? LATAM West and LATAM East. It's been हाथ तो नहीं clash and धोए? zest every single year. ना All भाई, their ऐसे गंदे काम नहीं respective करता मैं। teams. You know, those two teams make it from LATAM every single year, year in, year out. So we haven't had a chance to look deeper सीधे into नहा this के आ region जाओ, and see what else खत्म, they've got to धोने ही offer. नहीं And I think हाथ। that's exactly what Raconic have showed us already today, and what Datos मैं can तो show us now. करते Bit करते of ही धो deeper लेता हूँ, look उसी into में फिर उसके बाद LATAम. किसी से हाथ मिला लेता हूँ। क्या हाथ धो में लेता हूँ? करते करते क्या धो लेता हूँ? Performing about as well as Clash do at the moment, but
from quite a lot of अरे people's point of तो view, it would क्या be ही that बताया kind of 3 and 4 in Latin. क्या वो धो के आ जाता, हाथ तो धो ले, उसको धो के क्या करेगा? भाई क्या बोल रहे हो यार? पैर की बात कर रहा हूँ मैं, पैर की। हाँ तो पैर तो अपना धोते रहते हैं अपना एक मेरे को तो मजा नहीं आता बिना पैर धोए भाई, पैर धो लो बस ठंडा ठंडा पैर हो जाता है भाई, मजा आ जाता है। But that would be a huge story for the region. Because, I mean, we've seen all kinds of things casting that region. We were like the main casters for SA West. And we've seen things that like we probably wish we could unsee. क्या घुमा के ला But रहे at the same time, right now, on a global setting, it is paying off. Revenant And some of the Esports. doubts maybe about like the split of that region in particular. Like, अब तो अभी ये लोग सिर्फ- पानी की बोतल लेके आए, the regions were the way they were अभी ये before, लोग पानी की बोतल लेके आए, उसके ऊपर रैप वही लेबल ही नहीं था भाई। तो लेवल क्यों लगाएंगे? उनके साथ स्पॉन्सर ही नहीं है तो क्यों दिखाने का कि हाँ भाई बिस्लरी यूज कर रहे हैं क्या? फाड़ दिए लेबल। I'm really loving it, and Dalos are one of those teams. Revenant Leopard. are one of those teams as well. They really are. लेबल लेबल लेबल। भाई यहाँ तो सिर्फ नाम लेने के ऊपर केस कर देते हैं कंपनी वाले कि हमारा नाम क्यों यूज किया। तुम तो बात कर रहे हो कि वहाँ की बोतल का लेवल लगा के यूज करने की। याद नहीं है वो लगा ले सैया फेविकोल से उसने केस कर दिया, झंडू बाम उस पे केस हो गया कि भाई हमारा नाम कैसे यूज किया, लाओ दो पैसा दो। खाली प्यूमा ने स्पॉन्सर कर रखा है जो। तो नहीं बहुत है भाई, एक मंथली फाइनल जीतने के 10 लाख रुपए मिलते हैं और क्या चाहिए। अबे इंडिया की टीम ने स्पॉन्सर कर रखा है, वही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 2 ही और गए जो ब्रॉल स्टार खेलती है इंडिया से। बढ़िया। ये गोल्डी भाई अब इतना फ्री होके चेयर पे बैठता है, आपको डर नहीं लगता कि चेयर गिर जाएगी? यही फर्क पड़ता है, गिरेगी तो कहाँ ही गिरेगी, यहीं ना गिरेगी। मैं तो इस पे एक बार बैठा था, एक तरफ सारा बोझ दे दिया अपना और फिर लेफ्ट हैंड साइड दे दिया, पटाख से गिर गया 360 हम तुम्हारी तरह इतने हल्के नहीं है ना। अरे भाई इंडिया की टीम तो है रेवेनेंट और मार्कोस। Really big here for them, and yes, it's a big correct. chance here for Revenant to strike इसमें hard, but Dallas, they instinct can do कहाँ a है? lot of work here too. Yeah, and the thing is as well, पीछे खड़ा पीछे। I haven't heard much कहाँ about them in पीछे? scrims. Like, I haven't अबे really चौथा heard बंदा नहीं दिख of रहा the क्या teams that तुझे I स्टेज talked to, पे? you know, the NA teams, the EU teams. I haven't ये heard तो छोटा सा है। anything in scrims about them being, oh wow. और You कितना know, बड़ा they're है? really surprising. It's weird to see. ये Like, तो every बच्चा है, event we go to, there's always the instinct team कहाँ that kind है? of breaks through and shows themselves the most in scrims. And this one has been SK. You know, SK with a team who everybody was talking about scrim तो wise. तू नाम माइटी रख ले। तू तू माइटी कहाँ है? People just haven't been तू scrimming भी तो or छोटा haven't been बच्चा है। rating them in those scrims. But इसकी I think इतनी उम्र होगी। it's a good showing that they've just dismantled. E-sport खेलने की क्या उम्र है भाई? उम्र मतलब भाई ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। सारी टीम गलती से, आई मीन किसने स्पॉन्सर किया? टीम किसने स्पॉन्सर किया? पूमा स्पॉन्सर करिए। भाई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, मिलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है। रेवेनेंट तो बड़ी और गए, उसको तो अपने आप ही स्पॉन्सर मिलता है, ढूंढने की जाने की भी जरूरत। रेड कलर की बनी है भाई इसमें चेस्ट तोड़ने के लिए। वही तो मैं बोल रहा था, ये भी आ जानी चाहिए भाई। रेड टीम को रेड चेस्ट, ब्लू टीम को ब्लू चेस्ट। नहीं आएगा भाई, अल्लाह गेम है। बस इधर दिखाने की चीजें है भाई। ये जो इतनी डिटेल दिखाते हैं, ये अपन को घंटा नहीं दिखती भाई मैप में। अरे ये सब दिखा देंगे ना तब तो तेरा गेम खुलेगा भी नहीं, अभी तो तेरा खाली लैग ही हो रहा है। भाई सुनो, ये सब चीजें एक्चुअल में आने वाली हैं और आएंगी। जो PvE की बात हो रही थी, वो अभी आया कहाँ है? PvE आएगा, PvE तब ये सब चीजें होंगी। तब एक टाइप से ज़ूबा जैसा गेम बन जाएगा ये, जो खेला था अपन 3D वाले PvE मोड में, प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट।
हो सकता है। ये घास में जो अपन छुप जाते हैं दिखता नहीं ना, वैसे 3D में इतनी बड़ी बड़ी घासें कर देंगे, बाजू वाला प्लेयर दिखेगा नहीं, अगर विजन है तो ही दिखेगा, वैसा वाला सिस्टम कर देंगे 3D वाला। और फिर तो सबसे ज्यादा काम का तो वो ही होगा भाई, फिर तो वो बस। हाँ तो मैटर चेंज होगा। जैसे अभी वर्टिकल 3D है, एक्चुअल 3D नहीं है गेम, देखा जाए तो वर्टिकल 3D है, हॉरिजॉन्टल 3D नहीं है गेम। हाँ हाँ वही। उसने अपने इंटरव्यू में बोला तो है ना कि भाई हम पीवी के ऊपर पहले ही लाना चाह रहे थे, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की हुई थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं उस तरीके से हम अभी बना नहीं पाए हैं। ऊपर से हमें सारे ब्रॉलर्स के हिसाब से वो पीवी मोड्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए अभी टाइम लगेगा, जिसके लिए टाइम लगेगा भाई। 1 साल तो वो बोल रहे हैं, 1 साल तो मान के चलो, 1 साल से पहले नहीं आ रहा, खुद ही बोल रहा है 1 साल लगेंगे, उसके बाद तो पता नहीं और कितने टाइम उनको लगा ब्रॉलर की भी हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी भाई उस हिसाब से। तो सबसे ऊंचा तो फिर ये होगा अपना वो डग, उसकी गर्दन ही इतनी ऊंची है भाई। डग भी, डग फ्रैंक और डग, वही तो बोल रहा हूँ, डग की तो गर्दन ही इतनी ऊंची है, वो ऊपर से ही देख लेगा भाई। भाई लेकिन फिर जेनेट तो अच्छी लगेगी देखने में। अरे भाई which in the land setting, like not everyone is going to be like the most mechanically able, and I feel like in general जब भी तो बच्चा बुद्धि रह गया। a lot of pros they were saying that Latin अरे तुम नहीं जानते हो भाई, डिस्कॉर्ड पे लोग जेनेट के लिए सिम किया करते हैं, और वो लोगों में नाम ऊपर सबसे ज्यादा यश नाम के व्यक्ति का। नहीं भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है भाई, फिर सर्जेंट ने वो ले ली पाइपर, उठाई होने वाली है भाई। डाटोस डोरिटोस खेल रहा है इसके अंदर, वाह भाई, उनका कॉम्बिनेशन कितना टट्टी लग रहा है डाटोस का भाई। खेलेंगे तो समझ में आएगा भाई, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही लोग पहले जीटा वाले को बोलते थे भाई ये क्या ले लिया, ये तो कोई लेता ही नहीं है, ये तो कोई लेता ही नहीं है, और वो वही लेकर ढलाई करके जाते थे। क्या बोलो, क्या बोल रहे थे? सर्जेंट का फेस भी पहली बार रिवील हुआ है कि पहले से ही था? अबे पहले से था। कब था? अरे जब गोल्डी भाई बताए, तो वो स्ट्रीम भी तो करता है। कहाँ करता है? टूच पे जाके देखिए, टूच पे आप नहीं देखते हैं, लगता है आप कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इनएक्टिव है लग रहा है। हाँ भाई, ट्विच पे कौन ही देखते हैं? ज्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं, गेमर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर ट्विच पर ही करते हैं। ऐसे ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं ट्विच ही पे करते हैं ज्यादा। वैसे इंडिया के कहने के जो नाम मात्र के जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, कहने के जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, वही सिर्फ इस पे बनाते हैं कि यूट्यूब पे थोड़ा इनकम वगैरह अलग से मिल जाता है। इंडिया में तो बस बीजीएमआई बीजीएमआई। हाँ, बीजीएमआई स्पोर्ट्स है, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं भाई इंडिया में। इंडिया इस बार एशिया कप में भाई 100 मेडल जीत गया भाई, कंगारू इतना बेसन भाई साहब। भाई पहली बार। चाइना तो 400 क्रॉस करने वाला है भाई। अरे चाइना से क्या ही बराबरी करो भाई, उसको तो बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। या तो बच्चा पढ़ाई में होशियार होगा, या तो भाई तुमको अगर नहीं करना है पढ़ाई वढ़ाई तो गेम खेलो, वो भी ये वाले गेम नहीं, वो वाले गेम, एथलेटिक्स वाले। हाँ भाई, और इसमें भी आगे है चाइना, ऐसा कुछ ई स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे। वो तो है ही है, चमगादड़ खाने वाले लोग भाई, तो क्योंकि मजबूरी है भाई। जाके चाइना का वो देखो, ज्योग्राफी देखो, नहीं है भाई मजबूरी कैसी, ज्योग्राफी देखो जाके। अभी वही तो बताया, ज्योग्राफी देखो वहाँ जाके समझ जाओगे। उनके यहाँ जो 60% एरिया है वो एक टाइप से ऐसा है जहाँ पे या तो नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, या फिर पूरे डिप्लीट किए जा चुके हैं।
इसलिए जो तिब्बत साइड वाला जो चाइना है ना, वहाँ पे वो तिब्बत वाले लोग बोलते हैं भाई हमको अलग कर दो, हमें अलग देश भेज दो, क्योंकि तुमने यहाँ की रिसोर्स तो पूरे निकाल लिए और उसका डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो। सिर्फ जहाँ पे इनकी जो शंघाई वगैरह है ना, जहाँ पे चाइना की जो कैपिटल्स है, सिर्फ वही तुमको ऐसी लगेगी कि डेवलप है या रिच्ड है। उसके अलावा कहीं पे और वो लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, चाइना वाले खुद ही, क्योंकि उनको पता है रिसोर्स निकाल लिया है। एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, पता है कि इनको। चाइना का जो मुगल एम्पर था, वो क्या नाम है उसका, चाइना का कौन था वो एम्पर, चंगेज खान था, कौन था? हाँ गेंगिस खान, भाई गेंगिस खान। गेंगिस खान जो था उसने एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, ठीक है। तो उसको अगर तुम देखोगे तो एक नॉर्थ चाइना है, एक साउथ चाइना है। जो साउथ चाइना था उस टाइम पे, उसमें मतलब वहाँ पे सब टाइप के मिनरल्स मिलते थे। तो उनने क्या किया, वहाँ पे मिनरल्स निकालने के लिए माइंस वगैरह लगा दी, सब कुछ कर दिया उस टाइम से ही। मतलब जब वो रूलर वाला एम्पायर था, जब लड़ाई भिड़ाई चलती थी वैसा वाला, उस टाइम से उनने वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगा के वहाँ से अपना ये रिसोर्सेज निकालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जो रूलर था उसने बोला भाई अगर किसी दूसरी कंट्री पे मुझे अटैक करना है तो मैं क्या करूंगा। तो उसने जो सीज के साइड है, मतलब जहाँ पे समुद्र है, जो कि अभी जो करंट चाइना की जो शंघाई वगैरह ये सब है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया इनको। तो वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, जो ट्रेडिंग वगैरह हो गई, पोर्ट वगैरह वहाँ बन गए। तो जितनी चाइना है वो तुमको वहाँ डेवलप दिखेगा। उसके अलावा कहीं भी चाइना में कोई रिसोर्स बचा ही नहीं है ना। खाने की ज़मीन बची है क्योंकि उनने पूरा बंजर बना दिया ज़मीन को, तो वहाँ फसल नहीं उगती है, इसलिए मजबूरी में इनको कुत्ता बिल्ली ये सब जो मिलता खा जाते हैं। मजबूरी है भाई, मजा नहीं आता है। बारे में गेंगिस खान के बारे में एक बात है जिसमें बता रहा था, गेंगिस खान की जो बॉडी है वो किसी को पता नहीं कहाँ पे उसको, हाँ वो जानबूझते हैं। हाँ क्योंकि लोगों का कहना ये था, जैसे ओसामा बिन लादेन का नहीं था कि अगर उसको मिल जाएगी, बॉडी मिल जाएगी तो लोग उसको मसीहा बना के बिल्कुल सजा धजा के बिल्कुल बना देंगे कि भैया ये वो है। इस चक्कर में उसकी बॉडी उठा के छुपा दी थी। और वैसे इसमें एक और फैक्ट भी है उसमें कि उनका कहना है कि इसलिए भी छुपा दी कि बाद में उसको जिंदा करेंगे उसकी बॉडी को। ऐसा बोला जाता है, वैसा होगा नहीं होगा वो तो अपनी बात की बात है। अभी भी ये कुछ साइंटिस्ट वो ले आए ना, वो फ्रीज वाला सिस्टम ले आए अभी सही। 25 लाख रुपए में बॉडी फ्रीज हो जाती है सब। क्रायो क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स। अभी से ही वो सिस्टम आ गया भाई। उसको जब दफन किया गया था तो जो लोग ने उस दफन किया था उसको मारने और लोग आए, फिर उसके बाद उनको मारने और लोग आए, फिर उसके बाद जो लास्ट में लोग आए उन्होंने उसको मार लिया। वैसे एक और वीडियो है वो जाके देखना, अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा। उनकी मजबूरी है भाई, उस लाइन के उस साइड जो है बिल्कुल पूरा सन्नाटा है भाई। उनकी खुद की इंटरनल लड़ाई चल रही है, अगर नहीं बता तो चाइना की इंटरनल सिविल वॉर चल रहा है, वो कोई नहीं बताता क्योंकि उनकी न्यूज चैनल पे सबको बैन कर रखा है कि बाहर की न्यूज ना देना है ना लेना है, सब बैन है। उनके इंटरनल सिविल वॉर ही चलता रहता है। जो उस साइड में रहते हैं उनका कहना भाई यहाँ तो तुम कोई डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो, रिसोर्सेज सब निकाल लिए, हमारी सरकार हटा देंगे, उनकी लड़ाई चलती रहती है। और जो इस साइड वाले हैं जो समुद्र के पास रहते हैं, मच्छी भैया खा के जिंदा है, थोड़े बहुत जो रिसोर्स से बचते हैं वो कुत्ता बिल्ली खा जाते हैं भाई। मतलब कितने बंदे लॉयल थे वो लोग कि उन लोगों ने उसको दफन करके फिर उसके बाद खुद को मार दिया। हाँ तो इसलिए ताकि किसी को पता ही न चले कि कहाँ पे है वो। उसको मारा, उसको मारने फिर कोई और आया, फिर उसके बाद कोई और आया मरने, भाई अलग ही है उस कहानी है। तो भाई अलग क्या है, 2-3 बार लोग आए मारने, फिर लास्ट में जो लोग थे उन्होंने खुद को मारा कि किसी को पता न चले बॉडी का। इतना क्या करना भाई। अब मान लो सच में अगर वो जिंदा होने ही वाला होगा तो पता ही नहीं भाई कहाँ जिंदा होने वाला है अंदर ही दफन होके मर जाएगा वो तो। अभी जब मैं बहुत छोटा ना, कितने साल का होऊंगा, 6-7 साल में, बिल्कुल चोमू टाइप का था, तो उसमें बताते थे लोग ऐसे, उसके अंदर वीडियो आती थी टाइटैनोबोआ अभी भी दुनिया में जिंदा है। वो देखा करते
देखता था यार मैं तो अभी भी वो देखता हूँ, क्या आता ना वो व्हाट इफ बढ़िया चैनल भाई, इमेजिनेशन की धज्जियां उड़ा देता है। अच्छा है, अगर ये ऐसा हो तो वैसा होगा तो क्या होगा। यूट्यूब में अगर कुछ मैं टाइम पास के लिए देखता हूँ तो वो खतरनाक चीज व्हाट तो इफ ही भाई देखता अभी, हूँ। सबसे खतरनाक चीज तो अभी भाई वो समुद्र के नीचे और वो एलियन है भाई। ये तो पुरानी बातें हो गई। समुद्र के नीचे एलियन हो या ना हो, लेकिन हाँ सी क्रिएचर्स ऐसे जरूर हैं जिनको ज्यादा दो कैलोरी में भी वो अपना पूरा 1-2 साल निकाल सकते हैं, इतने बड़े होने के बाद भी, क्योंकि उनके यहाँ इतना कम इनटेक है एनर्जी का। और सबसे खतरनाक तो पिरामिड ही है भाई, इजिप्ट में पिरामिड बने तो बने कैसे? खतरनाक चीज है भाई। अबे कैसे बनाएगा तू, इतने पहले से बने हुए हो। अभी भी चाहे ना तू अभी भी नहीं बना सकता नॉलेज पिरामिड। नहीं है, मतलब क्या उनको इंसानों ने नहीं बनाया क्या? देखो एक यही तो लॉजिक नहीं ये पता। कहता है, नहीं एक लॉजिक ये कहता है कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो किसी आउटर स्पेस वाले क्रिएचर ने इनकी हेल्प करी, ठीक है। और ऊपर से अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है भी तो उसको डेवलप करने के लिए वो लॉजिक्स तो चाहिए था। भाई किसी को पता ही नहीं है कैसे पिरामिड क्या कब कैसे क्या हुआ। भाई तो बड़े मजे चल रहे हैं। आई टोल्ड यू वी वुड डू दिस। क्या कहते हैं कि उसके अंदर तो मम्मीज भी होंगी फिर पिरामिड के अंदर तो। वो तो है ही ना, वो तो सब कॉन्सेप्ट है भाई वो सब। कंसेप्ट मम्मी तो मिली है, मम्मीज तो मिली है। इवन इंडिया में, इंडिया की मम्मी पता है कि नहीं? मम्मी मिली है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि इंसान है मम्मी क्या है। अरे इंडिया की मम्मी पता है कि नहीं तुम? भाई ये बताओ पहले तो। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं भाई, जो तिब्बत के पास है एक मम्मी मिली है, एक्चुअल में मम्मी नहीं है, उनका कहना ये है कि जो बुद्ध हुआ करते हैं, जो लामा होते हैं, पत्ता लामा, लामा पता है कि नहीं ये बताओ? लामा पता है जो पोस्ट में अरे Minecraft बुद्धिस्ट में लामा जो मतलब एक टाइप से सेंट समझ लो, बिल्कुल अलग ही रहते हैं, अलग ही खाते पीते हैं, वो जो लाल कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं। दलाई लामा जानते ही होगा ना, दलाई लामा बहुत फेमस है। हाँ, तो ऐसे लाइफ कुछ जो जीते हैं उनको लामास बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी किसी की मिली है जो कि 1200 सेंचुरी से अपने आप को उसने वैसा करके रखा है, लेकिन वो ऐसी डाइट लेते थे, ऐसा मतलब रूटीन फॉलो करते थे कि इतने साल होने के बाद भी अभी भी उनकी बॉडी से हेयर ग्रो करते हैं, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। और उनको अभी रखा गया है तिब्बत में, अगर जाओगे तो वो उसको एक कांच के केस में बैठा के छोड़ दिया है, अगर रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। और अभी भी कैसे बाल ग्रो कर सकते हैं भाई, इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन ग्रो कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि 1200 सेंचुरी में उन्होंने खुद ही ने, जैसे अपन बोलते हैं ना संन्यास लेते हैं लोग, एक्चुअल में संन्यास समाधि लेके अपने आप को वहां बैठा के छोड़ दिया था। और वो तो गलती से एक गुफा में लोग खुदाई कर रहे थे, वहां पे मिल गए, उनको लगा ये मम्मी है। क्या सीन होता होगा यार। मैंने तो पिक्चर देख रखी है दा मम्मी। वो सब तो टाइम पास है, मम्मी तो जिंदा हो भाई गई। ऐसे ही है। लेकिन हाँ, देखिएगा गोल्डी भाई। ये जो अपने यहाँ जो स्पीति वैली है ना, वहाँ पे तो काफी सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो कि लगता ही है भाई एलियन एलियन तो नहीं है। इंडिया की स्पीति वैली एक टाइप से वो है। तो भाई वही है। ऊपर से अपना ये जो है एलियन पे जो है ना, क्या बोलना चाहिए, अमरनाथ के पास वो कौन सा वो है ना, कैलाश पर्वत जो अपन बोलते हैं इसको, कैलाश पर्वत में लोगों का कहना है जो सॉफ्टवेयर है, एक तो ना चाइना अपनी रिसर्च कभी बताता है, ना इंडिया वाले कभी अपनी रिसर्च को बताते हैं। उसका दो रीजन है। कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ नहीं पाता। हाउ मेनी नेम चेंजेस डिड डेटोस एफए गो थ्रू, शिव जी की वजह से। उसके दो रीजन बोलते हैं कि वहां पे इतना ज्यादा वो एक्चुअल में प्रूफ भी हो चुका है कि अगर आप कैलाश पर्वत पे जाओगे ना, और अगर वहां पे सिर्फ 12 घंटे भी रुक गए तो आपकी एज उस स्पीड में बढ़ती है कि एक हफ्ते आप निकाल दिए वहां पे, सिर्फ 12 घंटे में इतने ज्यादा प्रोग्रेस, उतने ज्यादा आपके बाल ग्रो हो जाएंगे, नाखून उस स्पीड में बढ़ चुके होंगे सिर्फ 12 घंटे में। वहां पे आपको टाइम का पता नहीं चलता। सेकेंडली लोगों का कहना है कि वहां पर कुछ ऐसे मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस तरीके से आता है जैसे किसी आउटर स्पेस से आ रहा हो,
वहाँ पर रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट टावर्स या कुछ भी काम नहीं करता है, और लोग उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाते? वहाँ पे इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स है कि भाई बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा हो नीचे, चढ़ना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए आप एवरेस्ट चढ़ सकते हो, लेकिन कैलाश पर्वत आज तक कोई चढ़ के नहीं जा पाया है। चढ़ जाएंगे फ्यूचर में शायद। अब चढ़ने को तो साइंटिस्ट ने टैंक वैंक चढ़ा के क्या नहीं ढूंढ लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां पर ऐसी चीजें हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ तक कि कुछ ऐसे मतलब फैलाई हुई बातें हैं कि वहाँ पे एलियन शिप भी है जिसके अंदर से हमेशा लाइट जलती रहती है और लाइट निकलती रहती है, जो कि चाइना और इंडिया दोनों को मिल चुकी है। लेकिन ना चाइना अपनी रिसर्च कभी शेयर करेगा, ना इंडिया वाले कभी रिसर्च अपनी शेयर करेंगे, नहीं तो क्योंकि लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे अपना अपना तंबू गाड़ने के लिए, हम भी करेंगे। तो चाइना को मतलब क्या कैलाश पर्वत से? क्यों भाई, वहीं की बाउंड्री पे आता है। चाइना बॉर्डर पे है कैलाश पर्वत? अरे मेरे भाई, तुझे तो मतलब यही नहीं पता कि चाइना की बॉर्डर कहाँ तक आती है। देख भाई तू मैप सीख क्या भाई पहले। अच्छा एक बार बता, अरुणाचल, तेरे को तो फिर यही नहीं पता होगा अरुणाचल प्रदेश क्यों मांगते रहते बैठ के? नहीं पता मेरे। अरुणाचल प्रदेश इसलिए मांगते हैं क्योंकि चाइना के पास, जैसे कि मैंने बताया, रिसोर्सेज है नहीं सिर्फ कहने के लिए। उनके पास वाटर रिसोर्सेज भी नहीं है, एक ही है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चाइना से ही निकलती है, ठीक है। लेकिन उनके पास इतना भी रिसोर्स नहीं है कि चाइना वाले ब्रह्मपुत्र नदी को अपने पास रोक पाए। चाइना वालों ने बहुत कोशिश करी थी कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना के चाइना में ही बहाएंगे, हम यहाँ पे पुल बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब ट्राई कर लिया उन्होंने। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ इतना सब करने के बाद सिर्फ 40% पानी ही ब्रह्मपुत्र नदी का वो चाइना वाले रोक पाते हैं। 60% पानी अभी भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है उसमें आता है। इसलिए उस रिसोर्स को पाने के लिए वो बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपने साइड दिखाता रहता है कि चाइना जो है भाई देखो अरुणाचल प्रदेश हमारे में आता है, इस थोड़े दिन में हम इसको अपने अंडर में लेके वहाँ का पानी वानी सब हमारा, खाना पीना सब कुछ ले लेंगे। जम्मू कश्मीर का भी तो चल रहा है भाई। भाई वो तो सब बताया ना, लोग पहले से बोलते ही आ रहे हैं ना कि आखिर अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो इसी चीज के लिए होगा, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, पानी, खाना। अब अमेरिका ही देख लो ना, अमेरिका कोई बहुत बड़ा दिखाते हैं अपने आप को कि भाई हमारे पास ये है वो है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब तो वही है, इंडिया से ज्यादा गरीब वहाँ पे। तो मतलब जो कैलाश पर्वत है वो आधा इंडिया में आधा चाइना में, बॉर्डर पे है वो, किसी एक का नहीं है वो। अच्छा तो मतलब आधा आधा होगा इंडिया चाइना का। और जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो किसका है? किसका है बता ना, किसका है? मुझे नहीं पता ना, किसी का नहीं है वो। नेपाल के अंदर भी आता है वो, नेपाल के साथ साथ चाइना होते हुए पहुंचता है, उसके कुछ हिस्से बिल्कुल लास्ट जो हिस्सा था भूटान, इंडिया में भी आता है। तो कोई पहाड़ किसी एक कंट्री का थोड़ी हो सकता है। हार गई भाई रेवेनेंट वाला। अच्छा अब समझ गया मैं, जैसे चाइना वाले पहाड़ चढ़ के इंडिया आ नहीं सकते, इंडिया वाले पहाड़ चढ़ के उधर चाइना जा नहीं सकते, तो इसलिए कोई किसी ऐसा नहीं है। अरे भाई साहब, तो फिर तो तुम्हें ही नहीं पता सियाचिन क्या है, लेह लद्दाख क्या, फिर तो तुम्हें पता ही नहीं है। सियाचिन में -20 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे अपने सोल्जर्स बैठे रहते हैं, तुम्हें यही नहीं पता। -20 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, उतनी बर्फ में वहाँ पे ड्यूटी लगती है आर्मी फोर्सेस की। पता नहीं क्या क्या जम जाता होगा, क्या क्या जम जाता हो। खाना तो उनने कभी देखा ही नहीं होगा गरम, पानी तो भूल ही जाओ, बर्फ पी के जमाना निकल गया उनका। तो फिर वॉशरूम जाने में भी दिक्कत होती होगी फिर। वाह वाह वाह, मतलब इंडिया के बारे में ही लोगों को पता नहीं है भाई, दूसरा तो छोड़ ही दो। अरे पिट गया, पिटा पिटा पिटा, पिटा। ये स्किन बहुत धांसू है भाई मेक की, नल्ली लगती है मेरे को तो।
खींच खींच खींच, अरे भाई नहीं खींच पाया, रिस्पॉन्स क्या हो गया? चलो 2v1 2v1, मार 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 मार, चलो जी जी। ये वाला तो सॉल्व हो गई मिस्ट्री, बरमूडा ट्रायंगल वाली तो, नहीं तो पहले बरमूडा ट्रायंगल के लिए मर जाते थे बंदे। अरे बरमूडा ट्रायंगल ही है तो कुछ नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल के नीचे लोग पहले बोलते थे अरे अटलांटिस होगी उधर पे, ये है वो है, कुछ नहीं है। ताजमहल में बोलते हैं कुछ कमरे ऐसे हैं जिनको खोलेंगे तो ताजमहल पूरा गिर जाएगा। खोलेंगे तो गिर नहीं जाएगा, वहाँ पे सीक्रेट उनने वो अपनी बॉडीज वगैरह जो है वो दफना रखी, यहाँ तक कि खजाने वगैरह भी पड़े हो तो पता नहीं, लेकिन हाँ इंडिया के जो सिर्फ ऑफिशियल्स हैं सिर्फ उनके परमिशन पे वो खुलती हैं, स्पेशल परमिशन पे। तो फिर मुमताज की बॉडी देखते होंगे वो लोग, खोल ही नहीं सकते, स्पेशल परमिशन में किस चीज को पता है तुमको? सुप्रीम कोर्ट के जो उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा हाईएस्ट अथॉरिटी पे जुडिशरी में, उसके 2 जजेस की परमिशन, भले ही उन वो गवर्नमेंट में कंट्रोलिंग में नहीं आते लेकिन उनको भी है। फिर प्रेसिडेंट की परमिशन, करंट जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा उसकी परमिशन, उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर उसकी परमिशन, और आर्कियोलॉजिकल कोई खोलता ही नहीं है, कोई खोलता ही नहीं है। तो मतलब किसी ने आज तक देखा ही नहीं मुमताज की बॉडी। और क्या करेगा देख के, क्या करेगा देख के, उसमें ही क्या बॉडी है, मम्मी बना के रख दिया होगा, ज़्यादा और ही दिखेगा। और वो देखना है तो फिर तो वो भी है अपना पद्मनाभ मंदिर में जो जिस गेट के सामने वो बने हुए 2 नाग बने हुए हैं, उसमें क्या है? वो खोल नहीं सकते। उनका कहना है कि जैसे वो हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन में नहीं जो गेट में बने हुए थे, वैसे उसके पीछे बड़े सा खजाना हो भी सकता है, लेकिन वो अगर वो खोलने पर उसके पीछे वो नाग भी हो सकते हैं जो उनके पीछे छुपा रखे हैं। That's like a door to hell, हेल का दरवाजा है, नरक का दरवाजा है एक टाइप से, ऐसा बोलते हैं, इसे खोला नहीं। बाकी सारे गेट खोल दिए, बाकी सारे गेट खोल दिए, कम से कम वाह मिथिकल क्रिएचर्स हैं टाइप से, मिथिकल क्रिएचर्स जिनको ऊपर ये सब आर्टिलरीज का कोई यूज नहीं है, वैसा टाइप के। ऐसा इमेजिनरी बोला गया है, लेकिन अब होगा नहीं होगा वो किसको पता है, नहीं पता है। चलेगी है बे। तो भाई 3 गेट खोल दिए, तो उसमें से इतना करोड़ का खजाना मिला है जितने में पूरे वर्ल्ड लोन, क्या वर्ल्ड लोन के साथ साथ वर्ल्ड को भी लोन दे देंगे, इतना है, लेकिन उसको निकाला नहीं है। और ये क्या कहते हैं, बहुत अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं जैसे गाँव में, वो सब क्या करते हैं, नाग मड़ी है वो पता नहीं सब क्या नाटक रहता है। ये भाई सब ऐसा बोलने को तो सोचा जाए तो हाँ हो भी सकते हैं, हाँ क्यों नहीं हो सकते। अब तुम पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? सिंपल सी चीज है, अगर जो पर्ल होता है, मोती जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? अरे मार दिया इसने, वाह नैनी ने उड़ा दिया, गर्दन उड़ा दी। यही नहीं पता मोती किससे बनते हैं भाई, कर भाई। मैं अगर पूछ लूंगा ना किसी से भी अपने टीचर से मोती किससे, तो कुछ नहीं बता पाएंगे। आज तक मोती देखे नहीं देखे भाई? क्या मोती देखे भी है कि नहीं देखे? देखे है ना। अच्छा तो वो मोती ऐसे ही होते हैं, पॉलिश वॉलिश करके चमका दिए जाते हैं? मोती मतलब जो मोती की माला होती है। हाँ मोती तो मोती होते हैं, वो क्या होते हैं, पत्थर होते हैं क्या? नहीं तो क्या होते हैं, क्या होते हैं? हाँ तो कंचे कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं मोती? पत्थर है वो, तो मिलते होंगे कहीं पर, खदान में से निकालते हैं ना, माइंस में से। हाँ माइनिंग करके हो सकता है निकालते हो। और कैसे? वाह वाह, मैं मेरे बताने से अच्छा भाई तू जाके देख ले। ऑयस्टर पता है? ऑयस्टर हाँ जानता हूँ। क्या है अच्छा ऑयस्टर? उनमें से निकलते हैं क्या? हाँ तो क्या है, कोई उसके अंदर अपने आप बन जाते हैं क्या? उसके अंदर रहता है एक जानवर रहता है, एक टाइप से जानवर, जो मछली समझ लो, वो जिंदा होते हैं, ऑयस्टर जिंदा होते हैं।
भूल जाया था यार, कौन था स्टोन एज बॉय में मैंने देखा था, बहुत पुरानी बात है, भूल गया था यार मैं। उस ऑयस्टर के अंदर में से निकलते हैं, और हाँ जितना देखा पुराना है। ऑयस्टर होगा उतने बड़े वो मोती और उतने रेयर मोती वो बनाता है। और वो मोती बनते कैसे हैं, जो समुद्र में जो पानी के अंदर जो सैंड और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हीं के अंदर घूम घूम के घूमते रहते हैं, और उन्हीं के अंदर वो जो कीड़ा मकोड़ा जो भी बोलो, मछली बोलो, जो भी क्रिएचर उसके अंदर रहता है, उसको वो खा खा के अपने लार्वा के थ्रू उसको पॉलिश करते जाता है। और एक टाइप से राउंड स्ट्रक्चर या फिर कई बार वो एक स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, बहुत रेयर है। राउंड बहुत कम होते हैं, एग्जैक्ट राउंड बहुत कम होते हैं, वो पॉलिश करना पड़ता है मोती को, इसलिए वो इतने बढ़िया दिखते हैं, उससे वो मोती बनते हैं। लोग इसकी वो भी फार्मिंग भी करते हैं। क्या करते हैं कि वो ऑयस्टर को ला के पकड़ के जाले के अंदर जो मछली नहीं पकड़ते, फिश नेट, उसमें डाल देते हैं और समुद्र के अंदर डाल के छोड़ देते हैं। तो समुद्र के अंदर खाना तो उनको वैसे ही मिलता रहता है, लेकिन वो भाग सकते नहीं है, वो उसको जाले के अंदर फंसा के रखा हुआ है। हफ्ते महीने में निकालते हैं, उसके अंदर से निकाले वापस वहीं पे जाल के अंदर फंसा के डाल देते हैं समुद्र के अंदर। इस तरीके से मोती निकालते हैं। बिजनेस है भाई, बिजनेस है। और कुछ मोती की कीमत भाई $10,000 तक भी होती है। $10,000 का एक मोती, मतलब 8-10 लाख का एक मोती भाई। हाँ, तो जैसे ही मैंने बताया, तो लॉजिक मैं बता रहा था तुमको नागमणि का। जैसे अब ये जानवर जो है अपने ही लार्वा वगैरह का यूज करके जब एक मोती बना सकता है, तो वो पत्थर, अब वो नागमणि हमने तो देखी नहीं है, तो मणि किसको बोल रहे हैं, कोई पत्थर भी हो सकता है वो, तो वो क्यों नहीं बना सकता? कोई भी क्रिएचर अगर वो अपने पॉइजन है, वो पॉइजन का यूज करके वो तो उसको एज ए सॉलिडिफाइड फॉर्म करके बना देता होगा भाई, होता होगा। जो जिसकी ज्यादा एज हो जाती है, जैसे मैंने कहा ऑयस्टर भी जिसकी ज्यादा एज हो जाती है वो उतना ज्यादा बढ़िया मोती बना लेता है, तो क्यों नहीं बना सकता? नाग वगैरह की एज कोई फिक्स थोड़ी है, और जब तक खाना मिलता रहता है तो जिंदा रहता है। मतलब एक गांव है जो, जहाँ मतलब मेरा गांव है, उसी के अगल बगल में जो एक गांव है उसमें बताते हैं, उसमें तो मैं गया हूँ, मेरी मम्मी का गांव है, वहीं से पापा की शादी हुई थी, तो वहाँ पे जब भी क्या हो तो वहाँ बताते हैं एक कमरा है और उसके अंदर 2 नाग हैं कि उनको पता नहीं, जब अनएजुकेटेड पीपल सब इकट्ठा होंगे, अपना बतियाएंगे बैठ के चौपाटी में, तो कहेंगे ये छादारी नाग है, वो कहेंगे जमीन के अंदर मड़ी है। दोनों नाग काले हैं और तो नाग काले ही होते हैं ऐसे अलग अलग कलर के भी होते हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं। हाँ तो होंगे, बताते हैं इतने बड़े हैं कि मतलब ये समझिए कि आधा किलोमीटर। हेलो बाउन, कैसे हो? ये सब बताया करते हैं नाटक, तो मैंने सोचा कि असलियत में ऐसा होता होगा। हाँ तो ऐसा भाई हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे जो दादाजी थे ना, वो बोलते हैं कि भाई कि हमने एक बार ऐसा सांप देखा था, मतलब जैसे एनाकोंडा नहीं होते तो मोटे मोटे बड़े बड़े, और वो भी उसी टाइम बोल रहे थे जब एनाकोंडा मूवी चल रही थी, बोलते अरे ये तो हमने देखा हुआ है, मतलब अपने इंडिया में कहाँ से आ गया ऐसा सांप इतना मोटा? बोला इससे बड़ा मोटा, इससे डबल ट्रिपल मोटा हमने देखे थे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम सपना देख रहे हैं कि असली में देख रहे हैं। बोले एक बार हम रात में उठे, मतलब 4-5 बजे, ज्यादातर पुराने लोगों की उठने की आदत होती थी ना, 4-5 बजे उठ के गए, कुएं पे गए, नहाए धोए और आ गए। बोले हम ऐसे ही आ रहे थे, 5 बजे अंधेरा मतलब खत्म ही होने वाला था। एक सांप, जैसे हमने सोचा रस्सी है इतनी मोटी सी, किसी ने छोड़ दी, हमको लगा कि पेड़ होगा, हम छला उस पर चढ़ गए तो वो हिलने लगा। बोले अब देख रहे हैं तो वो हिले जा रहा, चले जा रहा, रुक ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो भाई जब वो निकल गया तो देखे तो इतना मोटा वो जमीन पे निशान बन गया। बाद में हमको समझ में आया कि हम सपना नहीं देख रहे, तो शायद सच्ची में यहाँ पे सांप आप निकला, वो भी इतना बड़ा मोटा था। बोले हम बुलाए 1-2 लोगों को, बोले भैया बहुत पुराना सांप होगा, ये होगा, जमीन से निकला होगा, चला गया वापस। फिर लोग बोलते अगर उसके ऊपर ना एक काम करते, इतना पुराना सांप था, उसके ऊपर तुम कपड़ा डाल देते तो सोने का बन जाता। ऐसा आप सेम एक्सपीरियंस मेरी मम्मी बताती हैं कि उनके साथ हुआ। कह रही थी कि रात में 10-11 बज रहे थे, हम मतलब गए थे इधर उधर पार्टी में, जब वो थी स्टूडेंट, तो बता रही थी कि हम अपनी मम्मी साथ गए थे, मतलब मेरी नानी साथ गए, नहीं तो वो कितने साल की होंगे, 10-12 साल की थी। तो बताई थी हम गए, अब हमारी आदत थी तेज भाग के जल्दी घर पहुंचना है।
तो उसमें मेरी अम्मी तेज भाग रही थी, तो उसके अंदर आती है कि बहुत बड़ा सांप था, मतलब बहुत मोटा एनाकोंडा ऐसा, और वो अपना फन फैला के देख रहा था उनकी तरफ और जवान निकाला तो बहुत मोटा, मतलब बताती है कि मतलब जितना कूला था उतना बड़ा उसका फन था, पूरा काला था और बहुत डर गई थी वो। उनका कम से कम 18 दिन बुखार नहीं उतरा था डर के मारे। 12 साल की बुखार नहीं, क्या पता भाई क्या होता है, सब हम लोग के साथ तो कभी हुआ नहीं। अब जैसे एक जल परी जो नहीं होती, हाँ मरमेड, हमारे दादाजी के जो भाई हैं उनको बड़ा शौक पड़ा कि हम मच्छी पकड़ेंगे। तो एक पुराना बहुत सारा तालाब था, ये समुद्र भी नहीं था, तालाब था। तो वो पहुंच गए तालाब में मच्छी पकड़ने के लिए, बोले उनने जाला डाले तो जाले में कुछ फंसा नहीं, तो उनने जाला डाल के छोड़ दिए। फिर अचानक से मतलब उस जाले में कुछ हलचल नहीं होती, तो लोग खींचते हैं जाला बाहर, तो इनने खींचे, एक आदमी से खींचा नहीं, तो दूसरे को देखने गए कि अरे भाई कोई आ जाए खींच ले, तो खींच ही नहीं रहा, तो फिर वो ना वहीं छोड़ के आ गए। फिर दूसरे दिन जब उन्हें दोबारा खींचे तो उसके अंदर से एक मतलब उनका कहना है कि मछली जैसे आकार की निकली, जिसके अंदर मतलब नथत नहीं पहनते, सब पूरा बताते हैं कि मछली जो नथत बिल्कुल पहन के बिल्कुल देवी वेवी जैसे निकली। तो उसको देख के तो इनको 12 दिन तक बुखार चढ़ गया भाई। बोलते भाई वो लाल देवी, लाल कलर की थी बिल्कुल, मतलब कपड़े वो बोलो या फिर उनकी स्कल्स नहीं होते जो मछलियों के वो होते हैं, जो चमड़ी होती है वो भी लाल कलर की थी, सब लाल कलर था, लेकिन जो चेहरा था वो इंसानों का था। उसको देख के उनको 12 दिन तक के लिए बुखार चढ़ गया। बोलते हम सच बता रहे, हमको 12 दिन तक बुखार चढ़ गया था। ये सब एक्सपीरियंस हम लोग के साथ भी होना चाहिए था, जो मेरी मम्मी के साथ हुआ था, और ये सब जलपरी वाला एक्सपीरियंस। वो तो तुम पुरानी जगह में जाओगे तो हो भी सकता है भाई, उसमें क्या है। वैसे अब पुरानी जगह बची कहाँ है, सब जगह तो घर बना देते हैं, बचा क्या है। तो समुद्र के अंदर ही पहुंच ही गए हैं, बचा ही गया है। कुछ नहीं बचा। अरे बताते हैं समुद्र के अंदर वो एक नगरी मिली है, द्वारका नगरी, क्या मैं भूल गया। वो तो पहले से ही है, हाँ वो तो है ही, वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है, वो तो है ही। क्या गॉड सच में है क्या? गॉड्स का तो पता नहीं, अब वो तो इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पांडव केव्स जो हैं जिसमें जो बनाई हुई है पत्थरों पे जो ड्राइंग बनाई हुई है, साइंटिस्ट ने भी देख लिया भाई कि ऐसा तो कोई जानवर तो बना नहीं सकता इतने बढ़िया से, कोई इंसान ही बनाएगा। लेकिन वो इतनी पुरानी है, उनने देखे कि कितने साल हुए होंगे, बोले इसको तो 10,000 साल हो चुके हैं। उस टाइम तक तो ये भी नहीं पता कि कौन जिंदा था कौन नहीं था, बोले इतना पुराना कैसे हो सकता है। तो मतलब होगा भाई, पांडव ही रहे होंगे। क्योंकि मतलब इन लोग को कैसे पता कि हाँ भगवान थे, वो ऐसे करते थे ऐसे करते थे, ये लोग क्या जाने, ये लोग भी तो नॉर्मल ह्यूमन ही है। उसका ये रीजन है कि तुम्हें कैसे पता है कि ए फॉर एप्पल ही होता है, वो किसी ने तुमको बताया होगा ना, वो तो तब तो तुम्हें समझ में आया ना। तो ये तो हमारे पास तो इंस्क्रिप्चर्स है ना, पुराण हैं, ये सब जितने पुराने लिखा हुआ है, प्रूफ है। ऐसे तो देखो, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, जो कि बिहार में थी, जो वहाँ का क्या बोलना चाहिए भाई, जो वॉइस रॉय नहीं होते थे इंडिया में आके, जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, उस वॉइस रॉय ने जानबूझ के नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। लेकिन उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर और बुक्स थी वो भी जला दी। क्यों? क्योंकि उनका सोचना ये था कि इतने सारे इंस्क्रिप्शन का यूज हम तो समझ में नहीं आती, वो संस्कृत में था ना, संस्कृत तो इन लोगों को घंटा नहीं आती थी। बोले ये सब चीजें अगर इनको वापस से बता दें तो ये वापस से भाई बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पुरानी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अगर कहीं है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार की। तो उनने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लखनऊ में जो जू है वो, उनका तो मैं नाम भूल गया, जू का, जू मतलब एक पुराने मुगल एम्पायर में नहीं, एक मुगल एम्पायर में एक राजा थे, उनका बगीचा है वो, लेकिन वो इतना बड़ा है, कम से कम 5 किलोमीटर का तो जू है। लखनऊ नवाब कहा जाता है ना लखनऊ के पुराने राजाओं को, तो वो नवाबी में बनवाया था उन्होंने अपने लिए गार्डन टाइप का, तो उसके अंदर सब जानवर, तो उसके अंदर एक वो बनाया गया म्यूजियम, उसके अंदर नवाब सिस्टम तो अभी भी है, नवाब सिस्टम तो अभी भी है।
हाँ नवाब सिस्टम, लेकिन अब लखनऊ में काम हो गया। लखनऊ में कम हो गया, नहीं तो हैदराबाद वगैरह वाले तो अभी भी उधर पे चलता ही है। हैदराबाद में तो रियल नवाब रहते हैं ना, लखनऊ में तो हाँ पहले थे, हाँ, लखनऊ तो में अब तो वो ज्यादा हटा दिए। नवाब है। और तुम्हें वो तो पता ही होगा ना पता है। ये तो जैसे ये कौन सा वो सिंधिया है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पता होगा उनका जो राजस्थान में जो पैलेस है। एक्चुअल में सरकार ने, जब इंदिरा गांधी वगैरह की सरकार थी ना, तो उन्होंने ये रूल बनाया था, या तो तुम हर साल इतना टैक्स भरोगे, फिक्स कर दिया था, इतना करोड़ का टैक्स भरो, या तो फिर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट एक साथ कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर भी नवाब शवाउद्दीन पता नहीं कोई थे, उन्हीं का है सब। वो तुझे पता ही नहीं, जो पद्मनाभ मंदिर में बता रहा हूँ वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नहीं पता मुझे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको भी ऐसा ही हुआ होगा। सारे सुनो, पद्मनाभ ना वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पद्मनाभ मंदिर की गेट खोले, सरकार ने अपने जबरदस्ती बोल दी कि नहीं ये तो हमारी है, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसके जो जमीन की कागजात वगैरह बहुत पुराने हुआ करते थे, वो भले ही 2000 रुपए में खरीदी थी बहुत पुराने जमाने में किसी ने, लेकिन उससे जमीन के पूरे कागजात थे, ठीक है। उनने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दिया भाई कि भैया देखो ये हमारी जमीन थी, अब भले इसमें से करोड़ रुपए निकले चाहे 10 अरब निकले, उससे हमें मतलब नहीं, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। तो उनने प्रूफ दिखा दिया कि भाई ये तो हमारा है तो है, तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा भाई, प्रूफ दे रहा भाई, हर चीज की प्रूफ है भाई, तो उन्होंने गवर्नमेंट से हटा के उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। तो पैसे दिए वाले रिश्ते निकले थे। नहीं देंगे ना, तू जाके सर्च कर भाई, वो यूज कर सकते हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन हाँ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिसपे वो जो बने हुए हैं सांप बना हुआ जो गेट, वो नहीं खोल सकते। तो लखनऊ में बताते हैं कि वहाँ पे असली मम्मी है उस म्यूजियम में, तो पता नहीं मम्मी क्या होता है, मम्मी होता क्या, मम्मी ये तो बस वही है कि एक कोई भी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रख दिया। मम्मी मतलब ये थोड़ी कि जिंदा ही हो जाएगी, ऐसे तो इसको भी मम्मी बना के छोड़ दिया है, क्या नाम था उसका, हिटलर को। हाँ दिमाग निकाल दिया, ऊपर से सफेद पेट, वो सब सफेद कपड़े में रैप कर दिया। ऐसे तो फिर ये जो है जगन्नाथपुरी, वो उसका पता ही नहीं तेरे को? नहीं, जगन्नाथपुरी में हर 5-1 साल में मूर्ति जो होती है ना, जो देखने जाते हो जगन्नाथपुरी, वो हर 5-1 साल में चेंज हो जाती है। आप मतलब जो मूर्ति देखने जाओगे वो जगन्नाथपुरी में वही मूर्ति नहीं है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन वहां पे जब उसके अंदर जाते हैं, जब वो मूर्ति चेंज करने के लिए, उसके अंदर से कोई ऐसी चीज निकाली जाती है जिसको तुम ना देख सकते हो, मतलब पूरे आर्मी लगती है भाई उसके लिए, पूरी आर्मी जाती है। यहाँ तक कि जो पांडा होते हैं ना, पांडा, पंडित भी नहीं, पांडा जो होते हैं, पांडा मतलब जो हाईएस्ट ऑफ द रैंकिंग इन द पंडित्स, जानता हूँ। सिर्फ उनको परमिशन है, वो भी जब आर्मी आ जाती है तब उनको परमिशन रहती है। लेकिन वो भी भले ही उनको वो चीज उनके मूर्ति के अंदर से निकालना, लेकिन वो देख नहीं सकते, उनकी आंखों में पट्टी बंदी रहेगी और वो ना खोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस, उनका कहना ये है कि जब हम वो मूर्ति के अंदर हाथ डालते हैं तो कुछ ऐसा लगता है जैसे धड़क रहा हो, जैसे दिल हो, ठीक है, धुपुक धुप करता रहता है, लेकिन वो इतना गर्म लगता है जैसा असली का दिल धड़क रहा हो। साथ ही साथ उसके अंदर बोले इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, कुछ जो 20-20 साल से ये चीज करते आ रहे हैं, बोलते हैं कि जितने बार हम करते हैं हमें अलग ही महसूस होता है, और हमें आंख बंद करके ही वो चीज बोलते हैं कि जो देख लेगा वो वहीं की वहीं पत्थर का बन जाएगा, इसलिए वो कोई देख नहीं सकता, भले तुम कोई भी रैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो निकाल के पुरानी मूर्ति से निकाल दिया जाता है और नई मूर्ति के अंदर रख के वो मूर्ति बंद कर दी जाती है, और फिर से वो वापस से भगवान की तरह रख दिए जाते हैं, और पुरानी मूर्तियों को पूजा पाठ करके सिरा दिया जाता है नदी के अंदर। तो हर साल मूर्ति नई चेंज होती है, हर साल नहीं, कोई फिक्स टाइम है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है। और जो भी पुराणों में लिखा गया, तो ये कृष्ण भगवान जब मरे थे तो उनका जो हृदय था, मतलब जो दिल था, वो निकाल लिया गया था, और वो जो हृदय है वही है जो कि जगन्नाथपुरी के अंदर से, जो मूर्तियों के अंदर से निकालते हैं और वापस रख दिया जाता है। ओ भाई
और ये तो एग्जैक्ट फैक्ट है भाई, भले ही तुम वहां के राष्ट्रपति क्यों ना हो, तुम्हें पर नहीं है, तुम खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते हो। वो भी जब ये चीज होती है ना, पूरा भाई जगन्नाथपुरी के आसपास पूरा आर्मी वाले जब तक आ नहीं जाएंगे, पूरा वहां पे सिक्योरिटी नहीं हो जाएगी, और सिर्फ जिसको ऑथोराइज किया है वो ही जाएगा, वो भी आंख बंद करके, ये भी नहीं जाके देख ले, आंख खोल नहीं सकता बंदा। मिलिट्री के जनरल खड़े होते होंगे फिर वहीं पे। अरे भाई फुल ऑन सिक्योरिटी भाई साहब, यहाँ पे मिलिट्री का जनरल खड़ा है, वहाँ पे तो क्या ही होगा किसी। ये तो मतलब ऐसी मिथिकल बातें हैं, लेकिन जो कर रहा है वो तो बोल रहा है ना भाई कि मैं देख रहा हूँ भाई, धड़क रहा है, गर्म सा है, पता नहीं क्या है। अब ऐसा क्या ही होगा जो 5 एक 10 साल 20 साल तक होने के बाद भी वैसे ही काम कर रहा हो। अगर मान लो कोई मशीन भी है तो ऐसे कैसे काम कर रहा है बिना एनर्जी के भाई। कुछ तो है भाई दुनिया में, कुछ तो है भाई, अलग अलग चीजें हैं, अब क्या पता है वो एलियन का दिल हो। नहीं अब हमें थोड़ी पता है कि हम लोग एलियन का दिल अच्छा एक बार बता, नहीं एलियन की बात हो ही रही ना, अगर तू अपना वो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाई करेगा, वैसे तुमने पढ़ाई तो करी नहीं, लेकिन अगर पढ़ाई करोगे जेनेटिक्स के बारे में तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसमें अगर तुम देखोगे तो सिर्फ 30% ओरिजिनल जेनेटिक्स हमारे हैं, ठीक है, और 70% उसमें से ऐसी जर्म्स और वायरसेस हैं जिनने ह्यूमन बॉडी को इतना मॉडिफाई किया हुआ है। हम इतने ज़्यादा क्यों अडेप्ट कर पाते हैं हर चीज़ को, नई बीमारी आती है अपन क्यों उससे अडेप्ट कर लेते हैं, अगर क्यों हमारे अंदर इवोल्यूशन होते ही चला जा रहा है, तो वो उस वायरस के होने की वजह से। अब वो वायरस आया कहाँ से, वो अर्थ पे कहीं भी वो वायरस नहीं होता है, वो जेनेटिक्स के अंदर है हमारे। अब एलियंस बोलो या फिर कैसे भी आया, लेकिन उस वजह से हम इतना इवॉल्व हो पाते हैं, हमारा ब्रेन इतना बढ़िया काम करता है, हम उसी वजह से इवॉल्व हो। सिर्फ 30% ओरिजिनल जेनेटिक्स है हमारे, बाकी इतने वायरस भरे हुए हैं जो कि हमें अडेप्ट करवा रहे हैं। और क्यों वायरस है, रीजन ये है कि वायरस की जो लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, इसलिए वो इतनी जल्दी जल्दी रीजनरेट होते हैं, उनकी जनरेशन इवॉल्व होती रहती है। अब फॉर एग्जांपल मच्छरों को ही देख लो, पहले तुम मॉर्टिन जलाते थे, धुआं करते थे, मर जाते थे, अब क्यों नहीं मरते? अब नहीं मरते। अब उनको भी और एडवांस चीज चाहिए, जेनेटिक्स बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज्यादा रिपीटेटिव जो चीज होती रहेगी वो उतने ज्यादा एडवांस होती जाएगी। ये फैक्ट है, उसमें सुनो जो एलियंस को जो आता ना, वो जो आया वो अंकल का नाम क्या है भाई, जो स्पेस के बारे में ज्ञान देते रहते, बाहर के फेमस अंकल हैं, वो टीवी पे आते हैं। नहीं याद मुझे। उसने बोली थी कि भाई देखो, अगर आप देखा जाए तो उस टाइम में एलियन की वजह से ही, अब वो एलियन है कि क्या है, उनको उसने ऐसा डिफरेंट वर्ड यूज किया कि मैं ऐसा श्योर नहीं बोल सकता कि वो एलियंस ही थे जो भी थे, लेकिन हमारे पास उस जेनेटिक्स के हिसाब से इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम इतना बड़ा पिरामिड बना सकें। लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ हुआ उस टाइम फ्रेम में जो हमें नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम कोई डेटा स्टोरेज तो होता नहीं था। उस टाइम फ्रेम में हमारे जेनेटिक्स में इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है, जिसमें कि हमारे ओरिजिनल जेनेटिक्स तो सिर्फ 30% ही बचे हुए हैं, बाकी के अंदर तो वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से, जो कि इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी इवॉल्व होते हैं, जिस वजह से हम इवॉल्व हो पाए। जैसे पहले बहुत ज़्यादा फेस पे हेयर्स होते थे, अब वो कम होते जा रहे हैं। हमारा अंगूठा नहीं हुआ करता था, अंगूठा इवॉल्व हुआ। हमारा ब्रेन जो है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया। हम्बल को वोट करने का रे बाबा। तो यही सब चीजें हैं भाई, सिंपल सा फंडा है। ये लोग मम्मी स्टफ में ऐसा करते हैं पिरामिड में तो पिरामिड में बोलते हैं कि वो जो उनका स्पेस क्राफ्ट रहता था ना एलियंस का, वो रखने की जगह थी पहले, फिर वो एलियंस कहीं पे चले गए। अंदर कैसे जाता है वो स्पेस क्राफ्ट? खुल जाता पिरामिड खुल जाता बीच में से। सच में ऐसा बोला जाता है, ऐसा रिसर्च अब नहीं पता ना भाई, देखो तो सीक्रेट है। मतलब किसी ने कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा वो कैसे खुलेगा भाई? इतना बड़ा पिरामिड खोलने के लिए चाबी थोड़ी होती होगी, पासवर्ड होते होंगे। आज तक लोग गए हैं क्या पिरामिड के अंदर?
क्यों नहीं जाएंगे? अपन भी पिरामिड जा के अंदर सकते हैं, जा कोई भी जा सकते हैं, सकता है। जा सकते पिरामिड हैं, के अंदर लेकिन कोई भी जा बोल सकता है। कैसे सकते हैं ये नहीं फिर क्या पता। क्या है पिरामिड के? पिरामिड के अंदर बने हैं, जैसे यहाँ खाली पे और क्या। पांडव केव्स में जो पुरानी पुरानी हाँ। ड्राइंग्स बनी है ना, वैसे हाँ, उनने हाँ। पत्थरों बस पे इधर वही बन तोड़ तोड़ के उसके ऊपर स्क्रिप्चर्स बनाए हैं। अच्छा लैंग्वेज मतलब भाई इजिप्शियन लैंग्वेज आर्कियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, यही करते कोई नहीं रहते हैं पता। भाई। चलो भाई, मजेदार चीजें हैं वे। चलो इजिप्ट घूम रॉबिन के को आए। बुलाना पड़ेगा गोल्डी भाई, हाँ, रॉबिन की मदद चाहिए रही। वो सब बता देगी भाई। वैसे ये लोग मम्मी स्टफ में फिर करते क्या होंगे? खाली बस एक सफेद सेकंड रुको, कपड़ा एक सेकंड लगाते होंगे। रुको, आ रहा हूँ 2 मिनट। अच्छा ए, मनु सुन बे, बोल भाई। फिर से चैनल हैक कर लिया भाई। ये लोग मम्मी बनाने के लिए करते क्या होंगे बे आदमी को? वही लोग जाने भाई, इजिप्ट वाले लोग जाने, अपन क्या क्या हो गया? क्या मैंने तो सुना ये लोग मम्मी बनाने के लिए करते क्या होंगे? जैसे कोई मम्मी को प्रिजर्व करना है, कैसे करेंगे? मैंने तो सुना है एक गरम सिरिंज लेके नाक से डालते हैं और कान और नाक से निकल आता है। ऐसा फिर कुछ एक नहीं करते। मम्मी को बनाने के लिए जो उनको पता चला, उसमें 3 टाइप की चीजें यूज की जाती थी पुराने जमाने। कुछ जो कि अभी पाए नहीं जाते वो। सेकेंडली हनी, हनी जो कि उसकी एज नहीं होती, वो तो एज के साथ और अच्छा होते जाता है, इसलिए हनी यूज किया जाता है। पहला पहला कौन सा मटेरियल था हनी के? अरे प्रिजर्वेटिव्स जैसे होते हैं ना, जड़ी बूटियां जो उस जमाने में मिला करती थी बस, जो कि अब कहीं मिलती नहीं है। अब वो अच्छा, वो कहीं जड़ी किसी बूटियां और मिलती नहीं है। स्पेस से भी हो सकती हैं, नहीं पता मैं, ठीक है। वो जड़ी बूटियों के साथ साथ हनी और पट्टी जो होती थी, जो बैंडेजेस वगैरह लगाए हुए हैं उसके ऊपर प्रिजर्व करने के लिए, उसमें तेल यूज किया जाता था जो कि ऑलिव ऑयल होता था। ये 3 चीजें कंफर्म है, जो कि खुद इजिप्शियन वालों ने बताई हुई हैं। उनको एक और कोई बॉडी अभी बीच पार्लियामेंट में वो लोग एलियन बॉडी लेके आ गए थे, अगर जाकर सर्च करो 8-10 पुरानी न्यूज है, उनने बीच पार्लियामेंट में उसकी डेड बॉडी, एलियन की डेड बॉडी लाके दिखा दिया। अब लोगों का ना ये फेक भी है कि इतना ऐसा कुछ हो नहीं सकता। इन लोग खुद ही अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा ला के छोड़ दिया, ऐसा एलियन हो ही नहीं सकता। अगर जाके देखोगे उनने बीच पार्लियामेंट में डेड बॉडी ले आया भाई एलियन की। एलियन से पूरी दुनिया इसलिए डरती क्योंकि अगर वो एडवांस हुए तो फिर अपन नहीं जीत सकते। देखो 2 चीजें हैं, या तो एलियंस बहुत ज्यादा अपने से पीछे हैं, या तो वो इतने ज्यादा एडवांस है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है अपने जैसे लोगों से। बोले इनको क्या ही करना, उनको अपने लाइफ वो में रह जी के रहे चले हैं। गए होंगे भाई, मेरे को तो यही लग रहा है। अच्छा, तो मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब कि खाली बस ऑलिव ऑयल और हनी के साथ प्रिजर्व करते हैं बॉडी को। वाह। हाँ, तो तू कोई भी चीज में अगर वहां पे तू वैक्यूम डाल लेगा जहाँ पे एयर नहीं आ रही है, इवन आयरन के ऊपर भी रस्ट क्यों लगता है, जंग क्यों लगती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन चीजों को खराब करती है, ठीक है। अच्छा। अगर तू उसके अंदर एयर ही नहीं जाने देगा तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा कैसे? समझ रहा है? हनी के अंदर एज कहाँ से जाएगी? अबे अगर इतना अच्छा मेरा हिस्ट्री टीचर होता ना तो आज भाई मैं आईएएस होता। हिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाई। वही चीज है भाई। अभी क्या पढ़ाया बता? अभी जस्ट अभी। ज्योग्राफी। वाह भाई। अभी तो लोगों को अपने खुद की ज्योग्राफी नहीं पती भाई। मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे ना, देख इंस्टाग्राम वगैरह पे ना ये सब रील्स वगैरह से देखने से अच्छा ये तू ये सब जो चीजें पढ़नी है ना अगर तुझे, तो देख एक मैं चैनल बताता हूँ, व्हाट इफ। देख गूगल पे है, मतलब यूट्यूब पे है, उस पे देखो A to Z, मतलब जो तेरे दिमाग में आता होगा ना कि मान लो अपनी बॉडी को इतने सारे थूक के अंदर जो है ना, थूकते हैं जो अपन, उसके अंदर पूरा एक पूल भर के थूक दिया जाए और इसमें अपनी बॉडी को डुबा दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ तक कि जो अपने पेट के अंदर एसिड बनता है उसका पूल बना दिया और अपने अंदर बॉडी को उसके अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा। अगर पुराने जमाने के डायनासोर अगर अभी भी जिंदा होते तो क्या होगा। उनने ये सब भी तो बताते हैं, सिनेरियो बताते हैं, उसके साथ साथ फैक्ट भी बताते हैं कि एक्चुअल में भी क्या हो सकता है या हो रहा है। तो तेरे को दोनों चीजें पता चल जाएंगी।
भाई अपनी बॉडी कुछ अलग ही है भाई, पेट का एसिड बाहर आया मतलब खत्म करियर भाई। पेट का एसिड पेट में इतना एसिड है, बनने लगा तो भी दिक्कत। बनता ही है, पगला गया है क्या? पेट के अंदर हाँ मतलब हमेशा एसिड ही होता वही है, चीज। लेकिन और अपनी मतलब बॉडी जो कहते हैं कि होती है, खाना ना खाओ तो और बनने लगता है। नहीं, अपने अंदर जो बहुत एसिड खतरनाक है डेवलप करा हुआ है भाई हमेशा बॉडी उसमें को। बॉडी के अंदर टिश्यू बनते रहते हैं, ताकि वो पेट में जो एसिड है जो अपनी स्किन को तो जलाता ही है, वो हमेशा जलाता ही रहता है, तुरंत अपनी बॉडी उसमें नई नई स्किन की परत बनाती रहती है कि जलाते रहे भाई तू, लेकिन एसिड ही रहेगा। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, ये भांगड़ फोर्ट के बारे में क्या नाटक है? यार कुछ नहीं है, लोग जाके रह भी लिए, कुछ दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक जगह तो तुम्हें अगर देखना है, अगर तुम्हें उससे भी खतरनाक जगह देखना है तो ये तुम्हें मेघालय वगैरह के साइड मिल जाएगी, जहाँ पे मतलब कोई रडार काम नहीं करता है। इवन खुद साइंटिस्टों को नहीं पता है कि वहां पर पहुंचने के बाद टाइम जोन अपने आप कैसे चेंज हो जाता है। मेघालय में? अच्छा, मतलब वो जो मेरे मामा है वो गए थे, आवारा टाइप के हैं थोड़ा, तो गए थे कहता आवारा टाइप अरे मतलब थोड़ा वो है, तो फिर उसमें गए थे, तो मतलब कि फिर उसके बाद आके बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वहाँ पे गए, वहाँ पे चूड़ी की आवाज आने लगी, पायल की आवाज आने लगी, ये वो भाई भाई जब तक आंखों से नहीं देख लेंगे ना, जब तक कोई कुछ विश्वास नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कृष्ण जी आते हैं, फिर रात में पेड़ नाचते हैं, क्या ना? वो तो वो है वृंदावन में होता है। होता है क्या? अरे वृंदावन में वो जो है रासलीला करते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये वो उसने बनाया था ना, कुत्ता उड़ा दिया था, उसने वीडियो बनाया था, जेल ले गया था उसको, क्या नाम था उसका, वहीं तो गया था बनाने। गुलाब जोन हाँ जो भी है, गौरव जोन नाम है, हम लोग तो गुलाब जोन बोलते हैं। तो इसीलिए तो जेल गया था वो, क्योंकि रात में किसी को भी जाना वहाँ की परमिशन नहीं है, वो वहाँ जाके वीडियो बनाया था। बहुत क्रिंज है वो, बहुत क्रिंज है भाई, बहुत क्रिंज है। तो उस बेटा उस क्रिंज के चक्कर में 6 महीने जेल भी तो रहा, मजा ही आ गया होगा उसको, कुटाई हुई होगी मस्त। वो कहता है कि मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीद ली, उसके बाद कहता है कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर की देखिए गाइस मैं रिव्यू ले रहा हूँ, ओनर बगल में खड़ा होकर देख रहा है कि क्या नाटक हो रहा है। देखो अपने कोई मतलब नहीं, वो कमाता होगा भाई। देखो अगर व्यूज आ रहे हैं तो वो कमा रहा है, सीधी सी बात ही है। अब पागल जोन बोलो या जो बोलो, तुम ढिंचक पूजा का मजाक उड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, उसको देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको गाली दे रहे हो या फिर सर पे उठा के बैठा के रखे हो, अगर उसको व्यूज आ रहे हैं वो पैसा कमा रहा है। हाँ उनको व्यूज से मतलब, उनको पैसे से मतलब है। अब तुम पागल जोन को भले गालियां बकते हो, यार ये तो कैसा वीडियो बनाती है, भाई वो लाखों में कमा रही है, तुमसे ज्यादा कमाती है, समझ रहे हो। लोग जॉब करते हैं 8-8 10-10 घंटे की, तो इतने नहीं कमा पा रहे जितना वो कमा रही है। उसकी बराबरी मत करो तुम उसको गाली दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है उसको। अगर तुमको 12-12 20-20 लाख रुपए मिल रहे हो साल के, और गाली देने के लिए भी गाली खा ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितनी गाली दे दोगे, नेट बंद कर देंगे, पैसे एंजॉय करेंगे, खत्म। अरे भाई पता नहीं, और बताते हैं कि जैसे कि चलो छोड़ो अब क्या ही बोलूं, वो तो फिर उसके ऊपर आ जाएगा वीकेंड पे, तो बात क्या ही बोलूं। मेरे दोस्त लोग बोला करते हैं जो बातें कि मतलब जैसे जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनकी जैसे बॉडी, अगर उन्होंने गलत कर्म किए हैं जैसे उनको अगर अंदर दफनाया गया तो बॉडी धस जाती है। नाटक तो दफनाएगा तो धसेगी ना बॉडी तो भाई, और सब गल जाता है। अरे मतलब सब मिट्टी सब उधर उधर हो जाती है और सुबह बॉडी ऊपर आ जाती है। अरे बहुत नाटक है भाई दुनिया में। ऐसे तो भाई जो है फालतू के फंड, अगर तेरे को जानना है तो फिर तो जो वो जहाँ जाते हैं ना हज करने के लिए सऊदी अरब में, जहाँ पे बताते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं कि वो जो है उसके बीच में, जिसको ये बोलते हैं शैतान है शैतान है, इसलिए वहां पे जाके कंकड़ मारते हैं। उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, बोले एक काला पत्थर है, जो कि अपन शिवलिंग जिसको बोलते हैं ना, वैसी टाइप का एक काला पत्थर है। तो उनका कहना है कि वो शिवलिंग को ही मानने जाते हैं, उसी को राक्षस बोलते हैं, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि भाई इंडिया मतलब हिंदू जो है वो वैसे हैं, इसलिए जाके उस कंकड़ को ही मारा जाता है। भाई कमबैक कर लिया इन्होंने तो। हाँ भाई हम्बल वाले पीछे जीतते जीतते हार गए भाई।
पार्टी ने हक दिया और क्या। उसको नीचे जाना था। और क्या दिया भाई, फैंग ने उड़ के आके मारा उसको। तो उसको कवर में रहना था ना, वो ग्रास के अंदर छिपा बैठा है, ऊपर लोकेशन दे रहा है। अरे भाई फ्लैंग ले लो, मतलब अब तो किसी भी मैप में भाई जीत ही जाते। फैंग को भाई नफ मिल मतलब बफ मिल गया कायदे से। करंट मेटा में बहुत चल रहा है भाई फैंग। हाँ वे ग्रिफ और फैंग मिलाए पड़े हैं सिस्टम। मुझे तो भाई नहीं करते भाई, ब्लैक होल की मिस्ट्री समझना है भाई, ब्लैक होल की मिस्ट्री। इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनाटी एक ग्रुप है जो कि एक ग्रुप ऑफ हैकर्स कह सकते हो, जिनने बहुत पहले ऐसे काम किए हैं, जो कि फिर एक इल्यूमिनाटी नाम के ग्रुप ने क्लेम किया कि हाँ भाई हमने किया था। लेकिन अगर तुम्हें पता हो, एनोनिमस एक बहुत बड़ा फेमस हैकर है जिसको कोई नहीं जानता कि कहाँ से है, कैसा है, कैसा दिखता है। वैसे एक फेमस ग्रुप है जिसका नाम इल्यूमिनाटी है। ये तो मतलब ओरिजिन तो इंसान ही है। हैकर तो इंसान ही है। खतरनाक हिस्ट्री तो भाई ओशियन वाली ही लगती है। ओशियन के नीचे तो कभी तक गए नहीं है। जा चुके हैं उसकी, नहीं उसके भी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। हाँ उसकी भी सॉल्व हो चुकी है। ये जो था, ये जो जिसने अवतार मूवी बनाई है, वो पहुंच गया था मारियाना ट्रेंच के नीचे तक। उसकी स्टोरी नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने? ना भाई अभी नहीं सुनी। अरे तो जाके करते क्या हो भाई, तुम मूवी देख के आ जाते हो क्या? अगर वैसे तुम्हें उसकी हिस्ट्री पता हो, अरे वही तो बात है। तो तुमने क्या देखा? अगर तुम्हें अगर हिस्ट्री पता हो उसकी, तो एक तो पहली बात उसने टाइटैनिक बनाई थी, वो तो पता है ना। जितने में टाइटैनिक बनी थी उतने में तो उसने असली शिप बना के उसको दोबारा डुबा दिया था। ये पता है कि नहीं पता है? कौन सी उसमें मूवी में, टाइटैनिक में? टाइटैनिक जो मूवी है जिसपे उसको इतना खर्चा है, उसने टाइटैनिक की वही शिप असली में बनवाई, असली में उस पर शूटिंग हुई, और लास्ट में असली में उसने वो शिप को डुबा दिया। ये पता है कि नहीं पता है? हाँ हाँ पता है ये तो। क्योंकि उसको लगता है कि हर चीज रियलिटी में होनी चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए, ठीक है। उसने एक्चुअल में इतना खर्चा किया, लेकिन उसको करने से पहले वो टाइटैनिक जहाँ डूबा था वहां तक वो गया, जो कि अब तो वैसे पॉसिबल हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे जितनी सबमरीन टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आई थी, तब वो बंदा पागलों की तरह नीचे डूब के देखने गया था कि टाइटैनिक एक्चुअल में दिखता कैसा था, ठीक है। अब बात करते हैं अब की बात। तो उसको अभी मूवी बनानी थी अवतार सेकंड वाली, द वे ऑफ वाटर वाली। तो उसके लिए उसने अपना पूरा टीम इकट्ठी करके वो मारियाना ट्रेंच के नीचे तक गया था, नल्ला, ठीक है। और जितने भी उसमें मछली दिख रही हैं तुमको, वो उसको उस टाइप की मछलियां नीचे मिली हैं, ठीक है। और बोलता है लेकिन मारियाना ट्रेंच पे नीचे जाने के बाद उसकी शिप एक जगह अटक गई, और वो उसको समझ नहीं आया पहली बार कि क्यों अटक गई। तो ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा। तो इनने भाई उनको हड़बड़ी हो गई, भाई फंस गए, अब मरने तो नहीं वाले हैं, क्योंकि उनको आजू बाजू कुछ दिखता नहीं। अगर तुम्हें लाइट के बारे में पता हो तो लाइट 1 किलोमीटर के बाद सिर्फ रेड लाइट ही दिखती है नीचे पानी के अंदर, और उसके और नीचे जाओगे तो आपको लाइट भी नहीं दिखेगी। भले ही तुम पूरा लाइट स्टेडियम की लाइट जला लो, उसके अंदर नीचे जाके इतनी डेंसिटी है कि लाइट भी बैंड हो जाती है, लाइट दिखेगी नहीं तुमको। बाजू में कोई खड़ा होगा तो नहीं दिखेगा। सिर्फ जो एक्सरे विजन्स हैं और जो पार्स कर सकते हैं RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को जो पार्स कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करती है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी यूज करती है, सिर्फ वो देख सकते हो। लाइट नहीं दिखेगी तुमको, लाइट होती ही नहीं, मतलब होगी भी तो दिखेगी नहीं। तो उसको पहली बार तो समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है, और उस टाइम उस पर पूरी टेक्नोलॉजी यूज कर ली, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। तो इन्हें जबरदस्ती कैसे भी अपना थ्रस्ट यूज करके ऊपर आ गए। फिर भी चचा माने नहीं, बोले नहीं हमें नीचे तक तो पहुंचना ही है। इस बार गए थे तो नीचे तक तो पहुंच नहीं पाए थे। तो उन चचा ने इस बार स्पेशलिस्ट डाइवर्स की टीम बनाई, जिसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड
ठीक है, उस टाइम भी उसको वो उस बंदे को भी समझ में नहीं आया था हमारे यहाँ ट्रेंच के जो नीचे तक गया था कि भाई उसका जो एक बंदा था ना वो तो नीचे मर गया है, मर गया वो बंदा, वो तो नहीं ऊपर एक बंदा नीचे मर चुका उसके साथ थी, वो भी 90s के जमाने में। तो उसने उसको लेके आया कि भाई तू चल अब हमारे साथ चल, हमारी हेल्प कर, कि तुम नीचे तक कैसे गए थे, क्या क्या यूज करके गए थे। तो उसने डबल कोटेड आयरन शील्ड यूज करी थी सबमरीन में, तो इतना प्रेशर कुछ और झेल ही नहीं सकता पानी के अंदर। इतने प्रेशर में ना जो मेटल है वो भी पानी बन जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, इतना ज्यादा डेंसिटी, इतना ज्यादा प्रेशर है। इसलिए मून मिशन कर लिए जाते हैं, स्पेस मिशन किए जाते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है, जितना तो स्पेस में नहीं होता उतना ज्यादा प्रेशर हमारी खुद की ओशियन के अंदर है। ठीक है, इतना वजन होता है कि एक टाइप से 1000 धरती का वजन एक साथ एक जगह पे डाल दिया, PSI जो बोलते हैं, प्रेशर पर इंच। ठीक है, तो बंदा उसको लेके गया। ठीक है, और जब इस बार गए तो उसने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी और तुम इसमें डालो, सोनार डाल दिया, आजू बाजू में क्या क्या जो रेडियो एक्टिविटीज होती हैं वो डाल दिया, इवन जिसने जो पहले की थर्मल क्वालिटी जो होती है ना उस पर भी एडवांस टेक्नोलॉजी डलवाई। और इस बार जब वो लोग नीचे गए तो इस बार तो और नीचे तक पहुंच गए, लेकिन फिर जाके उनकी शिप अटक गई, सबमरीन बोले तो। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ना हिल पा रहे हैं ना ऊपर नीचे जा पा रहे हैं। इस बार उसने जो नई टेक्नोलॉजी डलवाई थी, जब उसको ऑन किया गया तो उसको जो दिखाई दिया भाई, उसके बाद तो ये जो ऊपर भागे हैं मजा ही आ गया इनको देख के। एक बड़ा सा क्रैब जिसकी मतलब हाइट वेट तो पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना बड़ा, सबमरीन इतनी बड़ी होती, सबमरीन से बड़ा तो उसका हाथ था जिसने उसको पकड़ रखा था। उसको लगा कि कोई मछली जा रही है तो उस क्रैब ने इनकी शिप को पकड़ लिया। ठीक है, इनकी सबमरीन को उसने क्रैब ने पकड़ रखा है। अब उसको थर्मल में दिख रहा है कि भाई इतनी बड़ी क्रैब, मतलब कितना ही बड़ा, वो वेल से भी बड़ा वो क्रैब है। क्रैब देखा है ना कितना छोटा सा रहता है, इतना बड़ा तो क्रैब था। ठीक है, जिसने उसको पकड़ लिया था एक हाथ से। अब इनको लग रहा था क्योंकि क्रैब का जो हाथ का जो PSI होता है बहुत ज्यादा होता है, वो उसको क्रश कर सकता है, तो इनने उस एरिया को, मतलब सबमरीन को उतनी जगह पे छोड़ दिया। और दूसरा जो उसमें इमरजेंसी जो होता है ना, इमरजेंसी जो पुल आउट करते हैं, वो यूज करके ये लोग बाहर आ गए और वो वहीं की वहीं छोड़ के भाग के आ गए। उसके बाद फिर वो नीचे गया नहीं, उसने जितना एक्सपीरियंस, जितनी मच्छी वगैरह उनको दिखी थी उसको यूज करके उसने बना दिया। लेकिन उसके बाद फिर एक और रिसर्च की गई जिसमें पता चला कि जो नीचे हैं, ऊपर जानवर दिखते हैं ना, जो मच्छी वगैरह दिखती हैं, वो तो इनका 1% भी नहीं है। नीचे वही जानवर, क्योंकि वहां पे उनको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो वो लोग खुद के अंदर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो भी बोलो लाइट वगैरह, तो उनके अंदर खुद के अंदर लाइट जलती रहती है, वो थर्मल यूज करके एक दूसरे को देख पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना बड़ा होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उनको 1 से 2 कैलोरी ही चाहिए होती है पूरा दिन सरवाइव करने के लिए। मतलब अगर इन्हें एक मछली जो है, जो अपन मछली जो खाते हैं, एक मछली छोटी सी साइज की अगर खा लिए तो 1 आध महीने तक तो इनको खाना खाने की भी जरूरत नहीं, इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी, क्योंकि उनने इस हिसाब से उनका मेटाबॉलिज्म हो गया है कि उनकी एनर्जी खर्च ही नहीं होगी। इसके लिए भी अगर तुमको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो के लिंक दे सकता हूँ, जाकर देख सकते हो, बहुत बढ़िया वीडियो है। वो गेट सेट फ्लाई साइंस वाले में भी डाला हुआ है, बढ़िया, उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों इतना बड़ा होने के बाद भी उनके अंदर मेटाबॉलिज्म ऐसा बन गया है कि सिर्फ 2 कैलोरी में उनको पूरा दिन निकल जाता है, इतना बड़ा होने के बाद भी। तो फिर गोल्डी भाई और भी बहुत बड़े बड़े क्रीचर होंगे। हाँ तो है ही ना, सभी होंगे सब। अरे वही तो वो बोल रहा है कि जो ऊपर तुम्हें दिखाई देते हैं वो तो 1% है उनका, नीचे जो है तुमको बड़े बड़े डायनासोर भी मिल जाएंगे, क्रैकन भी मिल जाएंगे, और जो ऐसी ऐसी चीजें जो ऊपर नहीं जानना चाहती, 2 रीजन की वजह से नहीं आती उनको जरूरत क्या है आने की। पहली बात तो ये, हाँ अगर जो नीचे का बैलेंस अगर चेंज होगा, मतलब नीचे भी टेम्परेचर जो है -5000 है, -5000 समझ रहे हो। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से -5000 से -4000 भी अगर हो गया, तो क्योंकि उनको इतने साल से जिंदा है, उनको 5000 माइनस डिग्री में रहने की आदत है, अचानक से उनको गर्मी लगने लगेगी, भाई टेम्परेचर कम कैसे हो गया, तो वो एक लेवल और ऊपर आएंगे। जो एक लेवल ऊपर आएंगे तो वो खाना शुरू कर देंगे, जो वहां पे रहते हैं तो वो और ऊपर आएंगे।
इस तरीके से जो लेवल अप है समुद्र वो का लेवल बाहर कभी आते कम रहेंगे। नहीं हो सकता, किसका? बढ़ ही सकता है बस। किसका? समुद्र का। समुद्र का लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात करते हैं ना, अंदर का टेम्परेचर। लेकिन लेवल बढ़ेगा तो भाई लैंड तो कम ही होता जाएगा। हाँ, लैंड तो कम होना ही है ना। हाँ, लेकिन जो ओशियन है वो जो शुरू से बहुत स्केरी लगता है, शुरू से तब से बहुत छोटा सा। हाँ तो अब है जो ही, कैरी अपन तो है ही। मार्स की बात करते हैं कि भाई मार्स पे जाना, मार्स पे जाना, कोई प्लूटो की बात क्यों नहीं करता है? कि प्लूटो जो है वो उसमें पूरा हाइड्रोजन भरा पड़ा है, उसके अंदर क्रिएचर भी हो सकते हैं, उसके अंदर जानवर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगले साल तक जो है, जो इन्हें नासा ने मिशन पे भेजा था, वो उसमें ड्रिल करके अंदर जाने वाला है उसकी आइस को, उस प्लानेट की, भाई इसके नीचे क्या क्रिएचर्स हैं, क्या मछली वगैरह वहाँ भी है, होती हैं नहीं होती हैं, कि ऊपर से वो पूरा बर्फ का एक वो गोला है, अंदर उसको ड्रिल करेगा और अंदर जाएगा और देख के आएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। वो इस साल कर देंगे, नासा वाले कर देंगे, उनका पहुंच चुका है वो रोवर उधर पे। ओ भाई, अच्छा गोल्डी भाई, ये घोस्ट वोस्ट लोग बोलते हैं, भूत वूत, क्या होता है ये? एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी। भाई, देखो हर चीज में एनर्जी होती है, तुम्हें पता हो हमारे अंदर भी प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, सब कुछ है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव आयोन, एक होता है नेगेटिव आयोन, ठीक है। तो मैं घोस्ट वाली फीलिंग तब महसूस होगी जहाँ पे आसपास में नेगेटिव आयोन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि तुम्हें जो फील हो रहा है वो भूत वेला बोलो, जो भी बोलो, एक्शन हो भी सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हर एक के अंदर एटॉम है, एटॉम नेगेटिव भी होते हैं, एक पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो नेगेटिव एनर्जी अगर तुमको महसूस होगी तो तुमको लगेगा जी घोस्ट वगैरह है, पॉजिटिव एनर्जी अगर तुम्हें महसूस होगी तो तुम्हें लगा जी भाई आसपास भगवान वगैरह हैं। तो सिंपल सा फंडा है भाई, अगर एनर्जी है तो सब चीज़ हो सकती है, स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, भूत भी हो सकते हैं, जो बोलो। अरे यहाँ उत्तर प्रदेश में हेलो एक जगह मिस्टर है, रेव हैट, अरे यू आर ऑन टू द यूट्यूब राइट नाउ, वाओ, हाउ आर यू डूइंग मिस्टर रेव हैट? वेलकम टू द स्ट्रीम, हाउ आर यू डूइंग? तो गोल्डी भाई, ये जो दिल्ली हाईवे और लखनऊ जो है, इसमें जो बीच में कम से कम कितना 600 किलोमीटर है, तो उसमें 600 किलोमीटर जैसे ही हम लोग लखनऊ से चलते हैं तो हाईवे तुरंत आते हैं, हाईवे पे तो बस 40 किलोमीटर चलते हैं, तुरंत आता है एक मंदिर चंडिका देवी नाम का। वहाँ पे कहते हैं विष्णु जी ने चक्र गिराया था, चक्र के बीच में बहुत मतलब नीचे तक पानी ही पानी, मतलब कितना भी नीचे चले जाओ उसके नीचे मतलब गहराई कभी खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं। Hope the stream going well. Yes, it is going super. No issues. Just watching Brawl Stars tournaments and just talking to some bird onto the Discord. How are you doing, bro? सर्कल के अंदर जितना नीचे चले जाओ मतलब कोई वो है ही नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, कहते हैं। देखो इकोसिस्टम ऐसे जहाँ पे इतनी सारी जगह है जहाँ पे अपन पहुँचे ही नहीं। अब अंटार्कटिका की रिसर्च कोई ले ले, अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो तो ग्लेशियर इतने साल पुराने हैं ना, अभी के थोड़ी है वो ग्लेशियर्स। वो तो कब जब आइस एज आई थी तब से वो ग्लेशियर्स हैं, ये तो पता है कि नहीं? वहाँ पे जमे पड़े हैं तो अभी, हाँ अब तक पड़े थे। आवाजें सुनो, तो जो तुमको कोरोना वायरस तुमको अगर नया लग रहा है, जिसका इलाज मिलने के लिए महीनों लग गए, सालों लग गए, इतने लोग मर गए, ठीक है। जब उन लोगों ने वहाँ पे पहुंचे तो उनने ग्लेशियर की खुदाई करना शुरू की, ये देखें तो सही कितने पुराने हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसमें जब इन लोगों ने ग्लेशियर को खोदा तो उनको अचानक से वहाँ से गैस निकलने लगी। उस गैस के आने की वजह से, सूंघने की वजह से, उसके मतलब एरिया में आने की वजह से कुछ लोगों को तो ऐसे इन्फेक्शन हो गया कि वो एक हफ्ते में मर गए, ठीक है। अब कुछ लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा जिसका अभी भी इलाज नहीं मिला है। उसके बाद से उन्होंने वो उसको वापस बंद कर दिया और साइंटिस्टों का कहना है कि इसके अंदर जो वायरसेस हैं और जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं और जो यहाँ पे क्रिएचर्स रहते हैं वो इतने पुराने हैं और इतने ज़्यादा खतरनाक हैं
कि हमारे पास उसका रिसर्च ढूंढने के लिए भी 1-2 साल के 20 साल भी लगेंगे ना, तो भी हम उस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ सकते। तो इससे अच्छा करो ही मत रिसर्च। तो उनने वो बंद कर दिया अभी, जाके देख लेना उस पर रिसर्च में। उनने जानबूझ के वहाँ अंटार्कटिका की रिसर्च में ही बंद कर दिया भाई। बोले नहीं, हमसे ना हो पाएगा भाई, एक और कोरोना नहीं चाहिए हमें। क्योंकि देख पहले ऐसा था सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह ही जा पाते थे ना अंटार्कटिका वगैरह में, कौन रिसर्चर ही जाते थे। अब देख ले मिस्टर बीस्ट तक वहां जाके वीडियो बना रहा है, कोई भी पहुंच जाता अब तो अंटार्कटिका उड़ के। अपने आप मेल्ट होने वाले हैं भाई ग्लेशियर। ये अगर वो मेल्ट हो गए तो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस निकलेंगे उससे तो वैसी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, भले पानी से डूबे ना मरे। Yeah, doing good. Thinking of trying to stream on YouTube as well. Not sure how that would go down through. Bro, it is gonna be a good one. Nice. You can actually grow on both the platforms, and later you can decide where you want to grow properly and permanently. According to me, you should try each and every place before getting and settling it to one place. And yeah, Twitch is also good. YouTube is also good for some. Kick is also good. You can try out your luck because sometimes you might not be getting success in one platform, but sometimes you are getting more success on another platform. So yeah, until you feel like this is the place I want to be, keep on trying. It doesn't matter. Hello. Hello. हाँ बोलो भाई। गोल्डी भाई कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया है भाई। पता कैसे चल जाता है बे, जिस दिन हम लोग वीसी पे बैठते हैं देख लेता है, हमको सब पता चल जाता है भाई, अलग से दिखता है। इसको जाने को अलग से दिखता है भाई। जिस दिन हम लोग वीसी पे होंगे, जिस दिन उस दिन आ जाता है। ऐसे तो हम लोग मेहनत में होते हैं एक बार। अरे भाई, अरे सुनो, अरे रुको, मेरे को बात करने दो पहले। उस दिन भाई तू जो यूट्यूब पे सरप्राइज देने आया था, जिसके बाद फिर वो 8, 10, 20 व्यूअर हो गए थे, कैसे किया था बता जरा पहले तो। कौन? किसको बता रहे हो? तुम्ही को पूछ रहा हूँ भाई। सरप्राइज दे रहे थे। सरप्राइज दे रहा हूँ, सरप्राइज देता हूँ। देखो अभी देखो क्या होता है। फिर वो अचानक से 4 व्यूअर से 20 व्यूअर हो गए थे, कैसे किए थे हमको? 20 व्यूअर मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, हो गया था गलती से। वाह वाह, ऐसे कैसे गलती होगी? तुमने बोला उसी टाइम में कैसे? मैं बोल रहा था ऐसे मजाक मजाक में। पहले तो ये बताइए, आवाज को क्या हुआ? आवाज को क्या हुआ? आज कुछ भारी भारी लग रही है, सर्दी अर्दी हो रखी है। नहीं, वो एक जगह पे गया था ना, वो इनविटेशन मिली थी, खाना खा रहा था उधर जाके। खाना खा रहा है, दारू पी रहा था भाई? ऐसी क्या ऐसा लग रहा है भाई, पी के बैठा भाई। उसके बाद आने के बाद वो गाड़ी में सो गया था ना, बहुत नींद आई। सो के उठा है, ऐसा बोलो ना। हाँ समझ गया, तो ठीक है। हमको लगा दारू पी के यहाँ घूम रहा है। और बताएं, बता भाई और क्या चल रहा है? अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से खाना। वो तो पता है, वो तो बिना खाने के तो जिंदगी चल ही नहीं सकती भाई तुम्हारी तो। हाँ, उसके बाद हम उसको खाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहाँ का मौसम क्या है? अरे भैया, हम आते हैं ना ऑटोमेटिक व्यूअर भर जाता है, कैसे नहीं पता। वाओ, फिर एक काम करते हैं, तुम अभी बांग्लादेश में हो है ना? है ना? है ना? एक काम करो ना, मेरे को लेके लाइव स्ट्रीम करो, बहुत बनना है। हाँ, बोलने ही वाला था, मैं तेरे को किडनैप करके बैठा लेता हूँ। ऐसे व्यूअर बढ़ गए। देखो 7 बंदे हो गए। वही मुझे जानना है, क्या मतलब क्या करता है तू? मुझे बता जरा क्या मैं कुछ करता ही नहीं भैया। तो ऐसा तो है नहीं भाई, तू एक साथ 50 कंप्यूटर तो चलाता नहीं होगा, है ना? 7 से 8 करके दिखा भाई, तब मानो। 7 से 70 करके दिखा, 7 से 70 करके दिखा, 7 से 70 करके दिखा।
अरे कैसे करूं भैया, ये मेरा हाथ का खेल थोड़ी ना है। तुम ट्राई तो करो, तुम्हारे आने से हो तो जाता है, ट्राई करो भाई, करने से अरे होता है, भैया करने से होता वो हमारे पास खाली 3 ही क्रोम है और क्रोम नहीं है हमारे पास। है। अरे यार, भी ठीक है। नहीं और एक तरीका है लेकिन क्या है वो नहीं बताएंगे सॉरी। वो नहीं बताएंगे, अच्छा मतलब है, देखा मतलब है, बता नहीं रहा लेकिन है, समझ रहे हो? वो जरा अलग किस्म का चीज है, वो बोल नहीं सकते यार। अरे अरे अरे, अपने ट्रेड सीक्रेट नहीं बता सकते, ऐसा बोला ना, ट्रेड सीक्रेट नहीं बताएंगे हम किसी को। हाँ, उससे लाइव का क्या कुछ भी फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। नहीं सुन, हमें फॉलोअर नहीं बढ़ाने भाई, सुन, हमें सिर्फ एक चीज बढ़ानी है। क्या बोल, करेगा? क्या बोलो? वॉच ओवर्स बढ़वाने हैं। वॉच ओवर, हाँ वो तरीका बता दे बस। वॉच ओवर्स, देख सब्सक्राइबर हैं अपने पास, सब्सक्राइबर टेंशन नहीं है। वो बताओ, वो वॉच ओवर चाहिए तुम लोगों को? हाँ सब्सक्राइबर तो बराबर के हैं। मेरे चैनल पे 20,000 वॉच आ रहा है, वो सेल कर सकते हो तो लो। वाह, सेल नहीं करनी भाई, सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पे, वॉच आवर्स नहीं है, मेरे को उस चैनल को मोनेटाइज करना है, तू तरीका बोल। अरे भैया उस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर है, बहुत सब कुछ है, लेकिन मोनेटाइज नहीं कर रहे, नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, क्या लफड़ा क्या है उसमें? वो कॉपीराइट बोलते हैं, सब वीडियो पे कॉपीराइट लग के। तो फायदा क्या उसको मोनेटाइज करके, कॉपीराइट भरा हुआ है तो उसको फिर गेमिंग चैनल में बना लिए, उसके ऊपर नया वीडियो देंगे हम लोग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर उसमें कॉपीराइट इतने सारे आ गए ना, उस चैनल की रीच तो वैसे ही डाउन हो जानी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बता। उसका तो मैं सब वीडियो डिलीट कर दिया। डिलीट करने से कुछ नहीं होता, डिलीटेड वीडियोस को भी यूट्यूब देख सकता है। डाउन हो गई तो हो गई, फिर ऊपर नहीं आती है। अरे भाई ऊपर हम खुद लेंगे, तुम क्या करोगे? अरे भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता, वो सब छोड़ दे, वो सब छोड़ दे, मैं जो बोल रहा हूँ वो बता, मुझे तरीका बता भाई। तू फॉलोअर्स छोड़ दे, नहीं चाहिए, वो तो है हमारे पास, 1000 हो रखे हैं उस चैनल, 1500 हो रखे हैं एक्चुअल में। तो तू वॉच आवर्स का तरीका बता। वैसे तो एक तो दूसरा तरीका मुझे पता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए पूरे ये समझ ले कि 2-3 महीने लग जाएंगे उसमें 4000 घंटे कंप्लीट करने के। 4000 सुनो, वीडियो बनाओ ना ऐसे। वीडियो है उसमें, अबे वीडियो भर के हैं उसमें, व्यूज भी आते हैं, 1000 व्यूज आते हैं। अब भी डाला था उसमें 1000 व्यूज आए, वो 1500 व्यूज होने वाले उसमें। 1000 नहीं चाहिए, 1000 नहीं चलता, एकदम लाख व्यूज आना चाहिए। अब तो लाख व्यूज कहाँ से लेके हैं? नहीं, एक लाख व्यूज मिनट कहाँ में से 1 लेके? लाख हो गए तो हो जाएंगे 4000। हाँ तो वो तो हो ही जाएंगे, इतने व्यूज कहाँ से लेके आऊंगा मैं? मेरा तो 10 मिनट में भाई, मेरा तो 10 मिनट में 8 लाख हो गए थे, इसलिए पूरा 20,000 हो गए। वाह वाह वाह, तो कर भाई, हमारा भी कर, क्या कर रहा है? अरे वो तो कॉपीराइटेड गाना लेके दे दिया था, हो गया था भैया। अरे यार भाई, अरे भाई तू 10 लाख व्यूज ला, मैं भाई नंगा नाचूं। नाच ले भाई, फोटो भी भेज दियो। उससे भी व्यूज आ जाएंगे, उससे भी व्यूज आ जाएंगे, उससे भी लेकिन पहले व्यूज ला तू, पहले लेकिन भैया के चैनल पे व्यूज तो ला। अरे व्यूज नहीं चाहिए, अरे व्यूज का क्या करूंगा मैं, मेरे को उस चैनल को मोनेटाइज करना है। अच्छा, तुम्हारा चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या चाहिए? वॉच टाइम, और वॉच टाइम कैसे मिलते पहले वो बताओ। वॉच टाइम कैसे मिलता? वीडियो देखेगा तो मिलेगा, और क्या होगा? तो क्या तुम्हारा मैं लाइव स्ट्रीम में देखता रहूं एकदम बैठ के एकदम रात तक? अरे उस चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता, उस पे सिर्फ वीडियो डालता हूँ मैं, टाइम पास वाली। मेरा ये चैनल, अरे कौन देखेगा भैया? भाई ये वाला चैनल तो मैंने ऑलरेडी मोनेटाइज है, 2 साल होने वाले हैं, इस पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पहले चैनल की बात कर रहा हूँ, जिसपे मैंने एक्चुअल में स्टार्ट किया था। पहले वाला चैनल का लिंक कराओ, चलो पहले वाले चैनल की लिंक गोल्डीरॉक ओरिजिनल्स अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर इसी चैनल गोल्डीरॉक को सर्च करो, वहाँ पे फीचर्ड चैनल्स में तुम्हें गोल्डीरॉक ओरिजिनल मिल जाएगा। भैया मिल गया, भैया मिल गया, हो गया भैया, हो गया, मिल गया हमको। हाँ मिल गया ना, हाँ बस। भैया ये क्या है? दिस सीन इज हिंदी फ्रॉम नारुतो। हाँ ये अभी लेटेस्ट डाला था। 69 लाइक आए, मैं ठीक कर देता हूँ। अब 69 लाइक को टच नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। 69 इज ओजी, 69 को टच नहीं करने का।
monthly final appearances. They didn't सुनो सुनो, qualify मैं for ना March, तुमको they एक गाना qualified देता for हूँ, वो August, but डालो, उसके बाद nonetheless, उसमें April 100 was के व्यू हो their जाएंगे, best उसके बाद डिलीट कर performance दो, हो to जाएगी। date. They won the वाह इसकी grand क्या, final अरे इसकी against क्या SK. गारंटी है भाई कि उसमें गाना डालने के बाद वो 100 के व्यूज आ ही जाएंगे। अरे सब कर रहे हैं भाई, मेरे तो 1 मिलियन होने वाला है यार। वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह। Of course, making the grand finals of the world finals back in 2020 with अच्छा देखते हैं, रुको, तुम्हारा चैनल का कैसे बढ़ाया जाए जिंदगी। the number 3 seed out of South देखो, America West. अगर मैं तरीका बताऊं तो वो है, वो काम करता है, और ठीक है। क्या क्या तरीके बताओ तुम पहले। सबसे पहली बात, मैं ब्राउजर में खोलना है इनकॉग्निटो विंडोज, ठीक है, और जितने विंडो खोलोगे उतने पे वीडियो रन कर देने का। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी यूट्यूब ने एक और नया सिस्टम ले आया जिसमें वो डिटेक्ट कर लेता है कि अगर एक ही आईपी से अगर ये आ रहे हैं व्यूज या वॉच आवर्स, तो काउंट नहीं करता, एक ही का काउंट करता है। बोलो हाँ, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि 10 प्रोफाइल बनाओ क्रोम में। कैसे प्रोफाइल बनाता है अगर नहीं पता तो जो जहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल आता है उस पर क्लिक करो, ऐड न्यू प्रोफाइल करो, तो एक और प्रोफाइल बन जाएगी। मतलब एक टाइप से एक नया विंडो बन जाएगा क्रोम का। टैब नहीं, मैं विंडो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बना दिए, आप उसमें फ्री वीपीएन डालो, कोई सा वीपीएन डाल सकते हो जो फ्री होना चाहिए। ओके, डाल दिया, उसमें वीपीएन को चालू करो, सब में अलग अलग जगह की लोकेशन का वीपीएन स्टार्ट कर दो। कर दिया, अब वो जो वीडियो तुम्हारा है उसको रन कर दो और वॉच आवर्स बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि जितने घंटे वो वीडियो चलेंगे तुम्हारे उस पे ब्राउजर पे, उतने घंटे का ही वॉच आवर्स मिलेगा। चूस पे क्या है भैया? हैं? उस पे कुछ और सुनाई दिया। Just downloaded Kick. Doesn't seem like there are many who stream Brawl Stars there. Bro, I've tried on Kick, but they doesn't support much. Their support team is like so much dull in each and every spec. For example, I was having a crack in my videos, like live stream just goes on live and after 5 minutes it goes down and after 1 minute it goes live once again, even after doing nothing. So I have contacted them to fix that stuff, that they are saying you should change your browser, you should change your stream key, you should change your streaming software, and I have tried that thing also. But even after that, those things they tell me you should start streaming at this time, that time, ye to wo, you should stream in lower quality, higher quality. It doesn't support much, so there is much more issue in the Kick. If you want to try it, 4K के ज़माने में 480 पे करने का बोल रहे थे। They were telling me to just drop down my video quality to 480p because they think 1080 pixels is not enough to actually run my stream on Kick. So yeah, I have dropped my idea. Otherwise, I was streaming on Twitch, Kick, and YouTube. हाँ तो भाई कहाँ गया वो ड्रैगन है जो उड़ गया भाई? वो एक वेबसाइट है, वो खो गया, ढूंढना पड़ेगा। वो वेबसाइट भी मुझे पता है। सुन वो वेबसाइट भी मुझे पता है, उसके फंडिंग मैं पूरा क्रैक कर चुका हूँ। उस वेबसाइट का नाम था yt-premium.repl36.co.com, ऐसी कुछ थी। नहीं वो नहीं था, गलत। अरे मैं बता रहा हूँ, सुन तो सही, पता है हर जगह फेमस थी वो। नहीं था यार, नहीं था। अरे मैं बता रहा हूँ, सुन तो ले ऐसी सुन। उसके बाद वो नहीं चली, उस वेबसाइट ने अपने 50 अलग अलग डोमेन बना डाले, ठीक है। अब वो हर जगह फैली हुई है और लोग भी उसका प्रमोशन करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक। क्योंकि टिकटॉक इंडिया में तो बैन है लेकिन बाकी जगह तो चलता है ना। तो वो वेबसाइट का ये प्रमोशन करते हैं कि इस वेबसाइट पे जाओ, अपनी लिंक डालो, जितने ब्राउजर तुम्हें खोलने हैं 10 20 50 खोल पे क्लिक करके ऑन कर दो, तुम्हारे वीडियोस के व्यूज बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ तुम्हारे वॉच आवर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं। हेलो हाँ तो सुनो, हाँ, उसको करने के बाद वो तुम्हारे व्यूज और तुम्हारे जो वॉच आवर्स हैं वो तुम्हारे उसमें एनालिटिक्स में, जो कि स्टूडियो में आता है, उसके अंदर तुम्हारे 2 दिन तक दिखाएंगे। कितने दिन तक? 2 दिन तक। उसके बाद
2 दिन के बाद तुम्हारा सिर्फ एक ही का काउंट होगा। अगर तुमने उसमें 50 घंटे वो वीडियो रन करी थी, 10 वीडियो चला के, 10 ब्राउजर चला के, तो वो एक ही ब्राउजर का काउंट करके वो 50 में से पूरे 50 हटा के वो 1 घंटे का काउंट करके तुम्हारे अंदर व्यूज भी एक ही काउंट करेगा, और वॉच आवर्स भी अगर तुमने उसको 10 घंटे चलाई थी 10 घंटे का व्यू काउंट देके खत्म कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसमें कुछ होता है। मैंने जो बताया फंडा वो अभी काम करता है, लेकिन उसके लिए अगर 4000 घंटे कंप्लीट करना है तो सबसे पहली बात तुम्हें 10 ब्राउजर खोल के उनको 10 घंटे तब 100 घंटे मिलेंगे। समझ रहे हो कितना टायरिंग हो रही है। तो करो ना, काहे बुलाए, मैं तो बात करना आया था। अरे तुम तो ड्रैगन, अरे मैंने अभी देखा था बीजीएमआई में शेनरॉन नाम का ड्रैगन विश पूरी कर रहा था, तो मेरे को लगा तो पूरी कर देगा। तो नल्ला निकला भाई। बहुत कुछ करके निकाल तो सकता हूँ, लेकिन क्या काम था भाई, क्या भाई क्या यार, मैं सोचा ड्रैगन है तो वो विश पूरी कर देगा, कोई काम नहीं। अरे ड्रैगन भैया, है, मैं नल्ला करूँ, ड्रैगन मैं है, करूँ, नल्ला ड्रैगन है, तो नहीं, इसके तो मैं पंख करूँगा। काटने पड़ेंगे भाई, इसके पंख काट दो भाई। मेरे पंख नहीं करने का, मैं करेगा, मैं करेगा। ए तेरी माँ लास्ट में नहीं, ए मैं करेगा, मैं करेगा। ये तो नल्ला ड्रैगन निकल गया यार। हाँ भाई, नल्ला ड्रैगन निकल गया भाई। अब अच्छा बता रहा वो हूँ तुम जो वेबसाइट का बात किया, वो वेबसाइट एक बार बताना, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। वाह 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 बड़ा होशियार बंदा है। मजा आएगा। हाँ ठीक है, मेरे को क्या है, मैं बता देता हूँ। ट्राई करने में क्या जाता है, जिसको जो ट्राई करना कर सकता है भाई। हाँ मैं भैया, क्यों वही मना तो करूं? बोल रहा, तुम समझ नहीं आ रहा। बोलो बोलो भैया। अरे रुक जा, मेरे को थोड़ी याद है, मेरे को देखना पड़ेगा भाई। ये तो चीटिंग है भैया, ये तो चीटिंग है। अरे अभी दे रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लग रहा है। हाँ सुन, YT-Premium 35 REPL.co। भैया मिल गया, मेरे को मिल गया। बिल भी कहती जल्दी, वाह। यूट्यूब, हाँ मिल गया, वही वेबसाइट है। वाह, वही है ना। मैं देख सुन भाई, मैं पूरा रिसर्च करके बैठा हूँ, तू मेरे को मत बता, मैं तो पूरा रिसर्च करके बैठा हूँ। ये इधर क्या लिखा होता है? फ्री यूट्यूब यूज बाय डार्क हैट हैकर। हाँ तो उसमें देख आते हैं, एक्चुअल में व्यूज आते हैं। अगर कोई समझे कि नहीं आते तो आते हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद यूट्यूब उसको पूरा नॉर्मलाइज करके पूरा 0 कर देता है। नहीं ना, लाइव स्ट्रीम में व्यूज बढ़ाने के लिए तो ओके है ना। अब 2 दिन के लिए बढ़ाना, तेरे को 2 दिन के लिए दिखाएगा, बाद में 0 ही करने वाला वो उसको। 2 दिन के लिए दिखाना तो मेरे को क्या, वो खाली लाइव स्ट्रीम में दिख जाए, यही बहुत है। वो तो फिर मैं ऐसे ही करवा दूंगा भाई, तो ऐसे टेंशन ले रहा। 2 दिन के लिए तो ऐसे ही दिख हो जाएंगे। ये कौन सा ग्रुप चल रहा है अभी? सी चल रहा है, डी चल रहा है? रुको देखते पूरा हैं। देख के जाएगा, पूरा देख के। देख के तो पूरा जाएंगे, लेकिन चल कौन सा रहा है? डी ग्रुप चल रहा है, लास्ट ही है। अब भाई आज इंतजाम करवाया जाए थोड़ा बहुत, समझ रहे? भाई क्या लैग हो रहा है गोल्डी भाई का। वेबसाइट को एक बार रीलोड मारना पड़ेगा, बहुत देर से रन हो रही है। मेरे को लग रहा है क्रोम जो है पूरा खींच गया है इसका। हाँ भाई, बोल भाई ड्रैगन भाई। हेलो बोल भाई, क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ भैया। तो फिर कैसे होंगे वॉच आवर्स, ये बता तू तो। मेरा चैनल को बेच देता हूँ, उससे वॉच आवर्स मिल जाएंगे। अच्छा, कितने वॉच आवर्स हैं उसमें? उसमें 20,000। और सब्सक्राइबर कितने उसमें? 1K। कितने में बेचेगा? अब 150 रुपया लेगा। बस अब भी ले भाई, तो अब भी दे, चैनल दे। भैया एक नाइट को खरीद के तो चैनल दे देंगे जब। क्या खरीद के दूं? डिस्कॉर्ड वाला। हाँ ठीक है, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो भैया तो कितने वाला चाहिए तेरे को, पहले रेट तो बता। वो जिसमें 2 बूस्ट होते हैं, वही वाला। अबे 850 पर तो मांग रहा है तो। हाँ तो तब भी ठीक है। अरे तो दिक्कत थोड़ी है यार, क्या लगता है गोल्डी भैया? हाँ लेकिन चैनल पे वो सब चीजें होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं, डील खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं
नहीं भाई दे दिया, फिर बोले अरे यार इसमें तो कम हो गए, माइनस हो गए। मैं जाता हूँ, बाय बाय। लाइव डीलिंग चल रही है। हाँ और क्या भाई, ये स्क्रीनशॉट देखो, मैं दिखाता हूँ। यूट्यूब वाले पगला जाएंगे, बोलेंगे चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है इधर। ब्रॉल स्टार की जगह ये डीलिंग था। ये देखो स्क्रीनशॉट देखो। मैं कहाँ से देखूं, मैं डिस्कॉर्ड पे थोड़ी हूँ। ये देखो, ये वाला वो चैनल है। ये पहले म्यूजिक चैनल था, मैंने गेमिंग में किया क्योंकि। अरे रुको भाई, कहाँ दिखा रहा है ये, किधर दिखा रहा है? डिस्कॉर्ड में स्क्रीनशॉट किया। रुको पीसी पे आउट है। ये वो वेबसाइट है ना। आई नहीं भाई। स्ट्रीम Yeah, if Angel Boy was just able to land that shot a bit closer, the hack gadget, which I'm sure Cube will be running, would have been enough to seal the deal. And Sorry, gaming knob. further in the lead. Now 30 हाँ, seconds तेरे left पास on the नहीं clock. है। I think he used it there to keep. अच्छा, इसके वॉच आवर्स कितने हैं? देखो कस्टमाइज चैनल पे गया, फिर कहाँ जाना है? हाँ ये आर्ट पे क्लिक करना, आर्ट पे क्लिक कर। फिर इधर हमको अटका दिया गया है, ये सब्सक्राइबर है और ये वॉच है। रुक 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 रुक, मेरे को दिख नहीं रहा, इसको बड़ा करना दो पहले। हाँ क्या दिख रहा है, क्या हो गया इसमें, क्या लिमिट नहीं है? 20,000 हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, नीचे क्या आ रहा है? ये नहीं हो रहा भैया, ये नहीं हो रहा। अरे एक सेकंड रुकना, मैं बता रहा हूँ ना। कंटेंट इनफ फिल्मिंग क्रिएटिंग एक्टिविटी रीयूज्ड कंटेंट, भाई नहीं होगा ये चैनल मोनेटाइज। तो इस रीजन है भाई, इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए इसकी कम से कम चैनल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी भाई। अरे वही तो करेंगे, रुको थोड़ी देर बाद, थोड़ी दिन बाद, सॉरी। क्योंकि देख तुमने इसमें डाल रखी खिचड़ी, तुमको जो फेमस दिख जाता तुम उठा के री अपलोड मार देते हो, ठीक है ना? खिचड़ी नहीं खाता मैं, खिचड़ी खाता हूँ। हाँ तुम बिरयानी खाते हो, मुझे पता है, तुमने बिरयानी बना दी इसकी चैनल की। मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है, सच्ची बिरयानी। तो मुझे पता है, I love बिरयानी। हाँ तो भाई मैं बांग्लादेश आऊंगा तो मेरे को बिरयानी खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? तुम बांग्लादेश जिधर आओगे उधर तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम बांग्लादेश सिराजगंज में आना तब खिलाऊंगा। मैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी में आऊंगा ना भाई, ढाका आऊंगा। और कहाँ आऊंगा? ढाका, ढाका में मैं नहीं आ सकता माँ। कहाँ आना बता? ढाका का ही सिराजगंज में आना है। अच्छा कितना दूर है? तो उधर से आने 3 घंटा लगेगा। ढाका 3 घंटा ही ना है, कौन सा 50 घंटे हैं? अरे भाई कैसी मजाक। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। हाँ ठीक है। हम लोग का भैया है, गोल्डी भैया है, बहुत कुछ खिलाएंगे तुमको। ठीक है ना? तुमको क्या वो मीट वाला खाना है क्या? मीट वाला कच्ची बिरयानी अपने को कोई सा भी चलेगा जो तुमको खाते हो। अरे भैया हमको जो अच्छा लगता है वो तुम नहीं खाओगे भैया। हाँ वो तो हमें पता है, वो तो तुम्हारा वो अलग वाला है, वो तो हमें पता है। क्यों फिर भी खाओगे? बीफ वाला है वो तुम्हारा, वो तो हमें पता है। फिर भी खाओगे? ना 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 ऐसा खाएंगे नहीं, लेकिन क्या होता है भाई मूड के ऊपर। टेस्ट करके देखते हैं। हाँ एस्ट्रो कौन है? एस्ट्रो ड्रैगन है, वो शेनरॉन जो बंचे उड़ता ना बजबी में, ये वही है। बस ये है कि नल्ला ड्रैगन, इसके विंग्स काट दिए हैं, कंप्लीट नहीं करता चीजें। क्या क्या? कुछ नहीं। हाँ तो भाई बताओ। गोल्डी भैया थैंक यू भैया। इसलिए याद है एक दिन मैंने बोला था मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, और तुमने मेरा सब्सक्राइबर 50 बढ़ा दिए। गाइस सुनो, ये गोल्डी भैया ना सबको सब्सक्राइबर बांटते हैं। गोल्डी भैया को 150 रुपया देने का और सब्सक्राइबर मिल जाने का। नहीं अब रेट बढ़ा दिया मैंने, रेट बढ़ा दिया मैंने। यस तेरे को 1000 सब्सक्राइबर करवाना है क्या? बोल करना है, मेरा गेमिंग चैनल पे करना है। 1000 सब्सक्राइबर करवा दूंगा, लेकिन वॉच आवर्स नहीं बढ़ेंगे।
1000 सब्सक्राइबर तो मैं वॉच करवा आवर दूंगा। नहीं चाहिए भैया। हाँ तो वॉच वॉच आवर ओवर कैसे करेगा तू नल्ले? वॉच ओवर कैसे करेगा? कैसे तो करेगा मैं तू? अपने हाथों से करूंगा, तो वो तुम नहीं समझोगे, वो छोड़ो भैया। हाँ तो मेरे को वॉच ओवर बता, तू मेरे को वॉच ओवर दे, मैं तेरे को 1000 सब्सक्राइबर देता हूँ। और बोल डील, जल्दी बोल। भाई यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पे डील कर रहे हो भाई। बोल अरे तो क्या भाई, डील तो डील हो गए। मैं तेरे को नॉर्मली लीगली दिलवाऊंगा, तेरे को क्या टेंशन है? मैं कौन सा खरीद के दे रहा हूँ तुझे? नहीं तो खरीद के भी दे तो मैं कोई इतना अमीर व्यक्ति थोड़ा हूँ तेरे को फ्री में 1000 सब्सक्राइबर दूंगा। मैं तो लीगली करवाऊंगा। अच्छा हाँ लीगली करवाऊंगा, लेकिन हाँ तू मुझे वॉच ओवर दे, मैं तुझे 1000 सब्सक्राइबर दूंगा। बोल बोल बोल। वॉच ओवर खरीद के दूंगा तो चलेगा। वॉच ओवर खरीद के देगा तो वो तो 2 दिन बाद चले जाएंगे। 2 दिन पहले मोनेटाइज हो जाएंगे ना। 1 दिन में मोनेटाइज होने लगता है। कई बात तो हालांकि तो चैनल 4 घंटे मोनेटाइज हो गया था, लेकिन जो चैनल हिस्ट्री इसलिए। तुम्हारा आवाज अटक काहे आ रहा है? एक मिनट में हेलो गोल्डी भैया। हाँ बोलो भैया। हाँ तो क्या करना था? हाँ क्या करना था? वॉच टाइम बढ़ाना है ना। हाँ तो मेहनत करो, वॉच टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बस तो फिर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ना। हाँ भैया मेहनत करो, एक ना एक दिन बढ़ जाएगा। अरे भाई कैसे ले आऊं भाई, यूट्यूब का चाचा थोड़ी ना हूँ मैं। तो मेरे को क्या पता भाई, उन्हें को क्या पता भाई साहब। भाई यार ये शेडॉन वाला काम तो कर नहीं रहा नल्ला ड्रैगन है। क्या मैं बोल रहा हूँ। अरे बड़ो क्या ड्रैगन होने का क्या अलग था, मेरे को फीस देना पड़ेगा। और क्या भाई, ड्रैगन चार्ज लगता है भाई। हाँ भाई ये तो शेडॉन तो ठीक कर है। नहीं रहा। हाँ मैंने किसी का नाम भी चोरी नहीं किया भैया। हाँ तो नहीं किया, हम कम बोल रहे हैं भाई तुमने नाम चोरी किया, लेकिन ड्रैगन तो ड्रैगन होवे, जैसे डायनासोर तो डायनासोर होवे। भैया तो हमको भाई लाल कौन ड्रैगन सा? पसंद है, हमको लाल ड्रैगन पसंद है। वाह It's going to be अब जो Navi's भाई game, and they're going to be moving on. They're going to take उनको the लाल Pans the first पसंद pick, है। and I really do like the हाँ Pans. हमको लाल पूरा कलर बहुत ठेला पसंद लाल है भाई, यहाँ तो पूरा ठेला लाल है। लाल है लाल है, पूरा ठेला लाल है। तुम जितना घसीट तो उतना लाल है, समझ लो। देखो लाइव स्ट्रीम में अश्लील बातें कर रहे हैं, इसको निकालो। अब इसमें अश्लील क्या है भाई, पूरा ठेला लाल है भाई, तो है तो है। पूरा ठेला लाल है भाई, तुम ठेला घसीटोगे नहीं क्या? देखो सेब लाल होता है ठीक है, उसको अब तुम घसीटोगे रोड पे तभी तो जाएगा ठेला 1 किलोमीटर। लो यार तुम्हारी सोच गंदी है भाई। डाटी माइंड सॉरी चोरी बिरयानी खाना ब्रो छोड़ दो, तुम खाओ ये दाल चावल। वेरी डेंजरस। मैं दाल चावल और बीफ खाता हूँ। दाल चावल और क्या खाता है? नहीं चिकन। बीफ खाता है, अभी बीफ तू खाता बोला है बे, अभी तू बोला है। है। साला पलट गया है। अरे कानों से गलत सुना है तू, कानों के अंधे। कानों का अंधा नहीं हूँ भाई मैं। अरे सुन भाई प्यार सुन, में अंधा हूँ। तू खा भाई, किसी ने मना थोड़ी किया, तो घबरा क्यों रहा है? तुम्हारा चलता है तो चलता है भाई। अब इसमें हम क्यों बुरा मानेंगे, हम क्यों बुरा माने? तुम्हारा चलता तो चलता है। डर लगता है भाई देखो गाली वो लोग देते हैं जो दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, जिनके यहाँ चलता तो चलता है। अब जैसे चाइना वाले, अब चाइना वाले चमगादड़ खाते हैं, मजबूरी खाते हैं तो खाते हैं भाई, जाकर लड़ेंगे थोड़ी। चमगादड़ जो खाया तो खाते तो खाते हैं भाई। अरे भाई साहब क्रो की गजन कोयल को लाइक करूंगा मैं तो, ठीक है भाई कर क्या? मैं मेरा क्रश का कसम तुम्हारा वॉच टाइम कर दूंगा, लेकिन क्रश का तो ऑलरेडी बीएफ है। ओके कोई बात नहीं, तू मत करना, काम करना मत करना, वो मर जाएगी। कसम खाया ना, तू मर जाएगी, वो कोई दिक्कत थोड़ी। तेरा तो फिर ही फायदा है। हाँ तेरा तो फिर ही फायदा है ना। तू बोल सकता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। सिंपल फंडा भाई, उसकी कसम खा लेने का है कि नहीं? एक दिन मैंने क्या जानते हो, उसका जो व्यू है ना, उसका व्यू का अकाउंट का सेम नाम देके और एक अकाउंट खोल के भेज दूंगा। वाह डिस्कॉर्ड का, और वो मान भी ली। हाँ तो भाई क्या बात की है बता जरा।
गाली दे। तो ब्रेकअप नहीं करवा पाया तू, चीप है, क्या टैलेंट बनेगा भाई। अरे यार इतना कर लिया, वो मान भी गई, वो मान भी गई कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है, तब भी तू ब्रेकअप नहीं करवा पाया भाई साहब। ची 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 ची। देखो गोल्ड भैया, ये लड़की की फोटो तुमको देता हूँ मैं। नहीं मीडिया पे देता हूँ ना, देखो मीडिया पे देता हूँ। दिखा भाई, दिखा। देखो भाई, देखो भाई, मैं खुले में दिखा रहा हूँ। मीडिया में दे रहा है। दे भाई दे, क्या दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कहाँ मीडियम भेजा भाई। कौन सी मीडिया भेजा तूने? मीम सरीना में तो नहीं भेज दिया। कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को तो। ये मीडिया नाम का चैनल पे अभी आएगा, देखो अभी आएगा। आ गया, देखो आ गया, आ गया, आ गया, देखो वो आ गया। वाओ कितना क्यूट है यार। अरे 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 कितनी क्यूट है। हो गया, हो गया, और मत देखो, हो गया। अरे फोटो हम तो देख, अंदर तक तो गए नहीं थे, पहले डिलीट हो गई। चलो अच्छी बात है। अंदर मतलब व्हाट, 3 फोटो थी ना उसमें, हम तो एक ही फोटो पाए। ओ हाँ सॉरी, और 2 देता हूँ। बेचारा भैया, लड़कियों को ये सब काम चलता है, समझ रहे हो, ये सब काम होता है। मीडिया पे दे दिया। ओके भाई देख लिया, आप डिलीट कर दे, देख लिया मैंने। भाभी जी को बोलना पड़ेगा, अरे बोल दे। आपका पति दूसरे लड़कियों के सामने दूसरा लड़कियों को वो बोलते हैं। हाँ ठीक है, तू तो ऐसा बोल रहा है। मनु भाई हेलो देवाशीष, देवाशीश सरकार व्हाट्सएप क्या हेलो LCQ चल रहा था, लास्ट चांस को मजा नहीं आ रहा था तो बैठ के टाइम पास कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे। आइए आइए आप भी डिस्कॉर्ड पे हमारी चंपायत सुनिए, पंचायत होती वैसे, आप चंपायत सुनिए हमारी। हाँ जल्दी आके नाच दिखाओ, मजा आएगा। और क्या टैलेंट है भाई ड्रैगन तेरे, ये तो कर नहीं पाया भाई तो। हाँ ये तो हो नहीं पाया। मैं सर्वर न्यू कर सकता हूँ। सर्वर न्यू कर सकता हूँ? हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर का ओनर तो मैं न्यू कर देता हूँ। अरे वो तो ऐसे ही नया भाई, मैं डिस्कॉर्ड सर्वर तो क्या ही नया करूंगा, सब चल रहा है वैसे ही, झकाझक चल रहा है। अच्छा चलो ये तो ये हो गया, वॉच आवर्स तो नहीं बढ़ा सकता। नहीं मैं बढ़ाऊंगा, मैं जैसे तैसे बढ़ाऊंगा। मैं व्यूज का क्या भाई, व्यूज का भी चक्कर बता दो, व्यूज का क्या होगा, व्यूज बढ़ेंगे। मैं तुमने जो मेथड बोला ना वो मैं 5-6 घंटे तक करेगा, मैं एकदम 20 दिन तक करेगा है। करते करते जब हो जाएगा तुम्हारा, तब तुम मेरे को 3 के सब्सक्राइबर दे देना, ठीक है? चल ठीक है। ओ भैया मान गए सच्ची में। हाँ तो मैं दे दूंगी, मेरे को क्या है, जो चीज मेरे हाथ में वो दे सकता हूँ ना, जो नहीं है वो नहीं दे सकता। कसम से मेरे पास अकाउंट की कमी नहीं है। क्या अकाउंट की कमी है? कमी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अकाउंट है मेरे पास। अबे अकाउंट का करना क्या है, अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। मैंने कब बोला अकाउंट की जरूरत? तुमने तो बोला अकाउंट से। अरे मेरा भाई अकाउंट तू लॉगिन भी मत कर भाई, तब भी व्यूअर्स काउंट होते हैं। हाँ तेरे को लॉगिन नहीं करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो नहीं समझा तू। तुझे नए प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल किस चीज से बनाना है, मतलब नए विंडो बनाने हैं तुझे, क्रोम के या फिर जो भी ब्राउजर तू यूज करता है उसके अंदर तुझे VPN डालने, हर एक के अंदर अलग अलग VPN डालेगा। हाँ तो समझ में ही नहीं पाया, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ ऐसा करूँगा। उसके बाद कितने घंटे करके देखना है भाई? तुझे जितने व्यूअर्स बढ़ाने, जितने मतलब जितने वॉच आवर्स बढ़ाने, उस हिसाब से जितनी विंडो तू चलाएगा उसका 1 घंटे का 1 घंटा काउंट होगा। अब तूने 10 खोले तो 1 घंटे में 10 घंटे काउंट होंगे, 20 घंटे चलाया उसको तो 200 घंटे काउंट हो जाएंगे। सिंपल फंडा भाई। और 1 घंटे में कितना घंटा होंगे? 10 घंटे। अरे तूने 10 विंडो खोले होंगे तो 10 घंटे काउंट होंगे ना भैया। मैं 30 खोलूंगा। इतना तेरा ना लैपटॉप हो चाहे PC हो, सब लुढ़क जाएंगे। खोलूंगा 20 घंटे। मैं लैपटॉप से 10 खोलूंगा, मोबाइल पे तो होता ही नहीं है सच। लैपटॉप से 10 खोलूंगा और इधर से 20 खोलूंगा, हो गए। इसमें 20 खोलूंगा, PC में
भाई बड़े बड़े गेमिंग पीसी नहीं चला पा रहे इतने विंडो, वो भी क्रोम के, उसमें तो वीपीएन चला के वीडियो चला के इतना घंटा चलाएगा। वाह भाई वाह, तेरा पीसी चल जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। सुनो, तो एक काम करूंगा, इस पीसी में 10 चलाऊंगा, लैपटॉप में 10 चलाऊंगा, दूसरा लैपटॉप पे 10 चलाऊंगा, हो गए। वाह वाह, क्या बात, लैपटॉप पे कमी है क्या है? बात तो सही है। चलो 10-10 करके चला, तो एक पीसी पे 10 चला तो ठीक है। तो दिन में 6 घंटे तक चलाऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। अच्छा, वैसे अगर तू दिन में अगर 6 घंटे भी चलाता है भाई, तू तेरे तो 100 घंटे तो वैसे ही दिन जो गए, तू 40 दिन में तो 4000 घंटे कर देगा इस हिसाब से। 40 दिन में तो और क्या, दिन के एक दिन में तू अगर 100 घंटे कर रहा है तो 40 दिन में 4000 घंटे ना हो जाएंगे? तो मैं सुबह को 6 घंटे करूंगा, रात को 6 घंटे करूंगा। 20 दिन में हो जाएगा। बात तो सही है। अरे भाई 24 घंटे करता हूँ, इतना मेहनत कौन करता है रे बाबा। क्या बात बोली। तो कितने दिन लगेंगे? अगर तू 24 घंटे पूरे चलाएगा, और अगर तू 10 ब्राउजर चला के 24 घंटे चला रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए? 240 घंटे। सिर्फ 10 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा चलाया तो और पता लगे, तो तेरे 15 दिन में हो जाएंगे तेरे। और मैं 2 और 5 खोला तो 15। 10 दिन में हो जाएगा, और 5 खोला तो 10 दिन में हो जाएगा, और क्या ही होगा। और 5 दूसरे दोस्त से खुलाया तो 8 दिन में। अरे भैया मैं अभी कर देता हूँ यार, अभी हो जाएगा तुम्हारा 4000। यार अभी करना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, माना थोड़ी क्या, तू अभी कर। अरे मेरे पास वीपीएन है, मैं खोल रहा था सब। मेरे पास वीपीएन रहते भैया, मैं काम करता हूँ ना वीपीएन से सुबह को। क्या, वही मैं बोल रहा हूँ, सीक्रेट काम तू क्या करता है वीपीएन से? हाँ भाई, मैं कुछ नहीं करता भैया, मैं अच्छा बच्चा। बड़ा यार, समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं, बहुत चालाक हो रहे हैं। कौन सा वीपीएन यूज करता है ये भी बता दे चल। वाटरमेलन। वाटरमेलन, गोल्डी लॉक्स है, रॉक्स नहीं। रॉक्स सर्च करो आएगा। करने से होता है, तो करने से होता है। लॉक्स है, रॉक्स नहीं। अबे लॉक्स एक बेयर आता था, उसका कार्टून का शो है बच्चों के, तू रॉक से सर्च कर पाएगा। रॉक्स, गोल्डी रॉक देखता था, तेरे को कैसे पता? नहीं बे, मैं जानता हूँ ना। नहीं तू देखता था मेरे को। नहीं भाई देख, मैं वीपीएन चला के कुछ और नहीं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब ही देखता हूँ। हाँ बेटे मेरे को पता है, तू सुबह को तू सुबह को वीपीएन यूज करता है। मैं वीपीएन यूज करता ही नहीं हूँ भाई, ना मैं बिरयानी खाता हूँ, ना मैं वीपीएन यूज करता हूँ। कौन सा झूठ बोल रहा भाई, बिरयानी तो ठूस ठूस के खाता है। कैसे झूठ बोल रहे हैं? पलट गया, आरामी मानुस पलट गया तुरंत। मेरे को पता है, ये रात के 2 बजे ये मोबाइल पे पीएच देखता है ये बैठ के। फोन हमें क्या बोल रहा हूँ मैं? हम ये जो सही बोल रहा। गोल्डी भैया कौन सा वीडियो में व्यूज लाने हैं? भाई मुझे क्या पता, मुझे तो वॉच आवर से मतलब है, व्यूज से कोई मतलब ही नहीं है मुझे। वो नया वीडियो पे हाँ तो नए वीडियो किया था। लेकिन वो भाई उसमें तो व्यूज कैसे लाएगा? उसमें तो व्यूज आ भी गए तो वो तो वीडियो ही 2 मिनट का है, उसमें होंगे कितने 2 मिनट, वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर तो वॉच आवर्स कहाँ से आएगा? कोई पुराने लाइव उठा के उसमें भले करेगा तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे के लाइव है भाई। एक बार चला डाला तो 4 घंटे तो वैसे ही चल जाएंगे। नहीं 1 घंटे का ये नहीं, मेरा लहंगा तेरा लहंगा, वाह लहंगा पहनता है, बता। नई टेक्नोलॉजी आई है, नया ड्रेस, नया फैशन।
गाना गाना बोल रहा था भैया, गाना। नहीं नया फैशन चल रहा है भाई बांग्लादेश में, मुझे नहीं पता था। अरे बिरयानी खाने के साइड इफेक्ट नहीं और कुछ नहीं है। अरे साइड इफेक्ट है ना, तू जन्म हो गया। भाई तू तो बिरयानी का ना ही बोल भाई, खुद बिरयानी खाता और दूसरों को बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? भाई वो पुलाव होता है, वो पुलाव है भाई। नहीं पुलाव नहीं है, वो बिरयानी है। वो बिरयानी नहीं है भाई, पुलाव है भाई। अच्छा तेरे को बुलाओ साले, चुप रहा। जी जी नाउ वी वन इजी पिजी 2-0 जरा डाला। भैया 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 मैं बाद में कर लूंगा, चलो एमोंग अस खेलते, बहुत मजा आएगा। अबे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई। छोड़ो स्ट्रीम आ जाओ। सॉरी कांट डू दैट प्लीज भैया। अभी तो चल रही स्ट्रीम चल रही है, अभी वही लाइव करना स्ट्रीम में खेलो। अरे नहीं खेल सकता वैसे भी। अरे कोड निकालो और खेलो। वाओ वेरी डेंजरस। ये क्या हो रहा है भैया ब्रॉल स्टार्स में? टूर्नामेंट हो रहा है अभी, वो खत्म होने दो फिर देखेंगे। भाई मेरा तो डबल बार पॉइंट कंप्लीट होने वाले हैं, इतने पॉइंट हो रखे हैं। अरे भाई 2 दिन बाद जिधर टूर्नामेंट हो रहा है उधर तुमको लेंगे, देखना भैया। ऐसा क्या? लेकिन मेरा अभी मैं क्या करूँगा जाके? गोल्ड वे देखेंगे, गोल्ड वे प्रो है भाई। रुको भाई अब मैं इसको रीलोड मार ही देता हूँ, बहुत देर चल रहा है तो अटक अटक के चल रही थी। ये गेम में दिख रहा है क्या? क्या? ओ नहीं ये तो यूट्यूब है, सॉरी ओपेरा है। ये तो ओपेरा है गाइस, ये तो ओपेरा है। अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी माइनक्राफ्ट का 1.8.9 का वो एसपी खेलने जा रहा हूँ। 1.8.9 इतना पुराना? नहीं सॉरी 1.8.8 हाँ। 1.2.2 आ रखा है, क्या खेल रहा है? 1.22 आ रखा है भाई। नहीं वो पुराना वर्जन खेलने में मजा आता है, तुम नहीं समझोगे। वाह उस सर्वर का क्या हुआ? चल रहा है अभी? कौन सा सर्वर? मुझे बनाया था मल्टीप्लेयर, वो गेम बेम थे वो वाला। अरे उसमें 1 ब्लॉक वाला जो बनाया था वो हाँ है ना बैकअप अभी भी। नहीं खेलता क्या? नहीं ठीक है बढ़िया है। खेलना है तो बोलो, मेरे पास बैकअप है, बैकअप डालूंगा हो जाएगा। अरे मेरा लैग करता ना, 300 ms आता, मैं नहीं चल पाता उसमें, गेम ही नहीं चलता मेरा। तुम्हारा तो 1 लाख का पीसी है ना। बात उसकी है ही नहीं, तुम्हारा सर्वर किसी और कंट्री का, मेरा सर्वर किसी और कंट्री का, इसलिए इतना लैग करता है। मैं बना सकता हूँ और एक कंट्री का, लेकिन वो पहले से शुरू होएगा। एक सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा वो चैनल है ना वो गोल्डीरॉक ओरिजिनल्स, उसमें हम लोग 1 ब्लॉक के वीडियो डालते, क्या बोलते? डाल देंगे भाई। एडिटिंग तुम कर लेना, तुम्हारी तो वीडियो मैं तो कर लेने वाला। देखो मैंने उस चैनल पे ऑलरेडी नेज को भी ऑफर दे रखा है, ठीक है कि भाई तुम्हारा जो वीडियो तुमको डालना है, मतलब ऐसा फालतू फालतू नहीं, तुम्हारा खुद का ओरिजिनल वीडियो अगर तुम डालोगे और उस पे जितने भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका आधा तुम्हारा आधा मेरा, सिंपल। तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारा कंटेंट तुम यहाँ डालो, उसका आधा तुम लो, आधा मैं ले लूंगा, काम करता हूँ। अरे भैया आधा नहीं चाहिए, खाली तुम्हारा प्यार चाहिए, हो जाएगा मेरे। अरे किडनी में दर्द हो गया मेरे, ये डायलॉग नहीं चलेगा भाई इधर। बिजनेस भाई बिजनेस, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन कंटेंट है, मेरे पास कंटेंट नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म है, तो तुम्हारा ही फायदा मेरा ही फायदा, समझ रहे हो? अरे भैया हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अरे अरे क्या बिजनेस है हमें बताइए। अरे भैया हम डिस्कॉर्ड का न्यू बॉट बेचेंगे भैया, हम डिस्कॉर्ड के बूस्ट टूल बेचेंगे भैया, हम डिस्कॉर्ड के बूस्ट बेचेंगे भैया। डिस्कॉर्ड के क्या बेचेगा? बूस्ट टूल उससे क्या होगा? हाँ समझ गया, उससे सर्वर अनलिमिटेड बूस्ट हो जाएगा। हाँ तो तुम मेरे से भी काइंडली नाइट्रो मांग रहे, तेरे पास खुद ही
ही बूस्ट कर रखा है तो नहीं नहीं नहीं, वो बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। अभी हम लोग सिर्फ न्यूक टूल बना रहे हैं ना, न्यूक सर्वर न्यूक। बढ़िया भाई, बनाओ बनाओ। वो हम बेच के अमीर हो जाएंगे भैया, क्या बताए। फिर दुआओं में याद रखना, ठीक है। जैसे गोल्डी भैया एक काम करो, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है? नहीं हाँ, वो मेरे को वो डिस्काउंट में फ्री नेचर मिला है तो दे दो ना भैया। भाई देखो सुनो, मैं सुबह इसको यश को ही बताया था, मेरे उस पर क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो वो दोबारा एक ही चीज पे दोबारा नहीं देगा, समझ रहे हो। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने, बहुत बुरा लगा। धोखा क्या भाई, तू फेक क्रेडिट कार्ड बना देना। अबे साले डिस्कॉर्ड फ्री फेक कार्ड लेता नहीं। डिस्कॉर्ड का बाप डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का बाप डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का भी डिस्कॉर्ड है। गोल्डी भाई पूछ, गोल्डी भाई गोल्डी भैया बोलो भाई। भाभी जी क्या कर रही है? खाना खा रही है। और तुम क्या कर रहे हो? मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। भाभी जी तुमको मारती नहीं है कि स्ट्रीम करते इतनी देर तक? हाँ होती ना, पिटाई होती है। किससे मारती है तुमको? चप्पल से, बेलन से। जैसे कि क्या? अभी तो बताया नहीं, वो इसमें कुत्ता भौंक लिया ना, एक सुनाई नहीं दिया। अरे यार हो गया भाई, अब वापस से रिपीट नहीं करते अपन। भैया प्लीज भैया ऐसे नहीं करते। नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, शर्माओ मत, शर्माओ मत। नहीं नहीं नहीं, बस एक बार बता दिया बहुत है भाई। लाइव स्ट्रीम में तो बता रहे थे, लाइव स्ट्रीम करके देख लेंगे। वही तो बात है, वही एक बार बता दिया पीछे कर दे। लेकिन हम लाइव उतना मेहनत कौन करेगा बोलो ना। अरे बता दिया बात। अरे भाई रिजेक्ट में लेवी है, चापी है, मैनमी है, ये तो बुरा ना हुआ है। अबे जोशी गोल्डी भैया निब्बा मतलब क्या है? क्या? निब्बा? हाँ तो और निब्बी इसका मतलब क्या है? निब्बा निब्बी मतलब छोटे छोटे बच्चे जो अपने आप को बड़ा समझ के प्यार करने का ट्राई कर रहे हैं। और तुम क्या हो? भाई निब्बा निब्बी वो जिनकी एज अभी 18 भी नहीं हुई है, लेकिन काम 18 के ऊपर वाला कर रहे हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बनाना, किच्ची इच्ची करना, किच्ची बिच्ची, डांस वांस करना, घूमना, डायलॉग बाजी का वीडियो बनाना, ये सब निब्बा निब्बी वाला काम है। उल्लू करना है। हाँ उल्लू करना है, वो भी सबके सामने करना। भाई इस वर्ल्ड कप में ना इंडिया को सपोर्ट करना, ठीक है, बांग्लादेश को मत करना। नहीं मैं बांग्लादेश को करेगा। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करूंगा। नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया को सपोर्ट करना, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ ऐसे होता है। ऐसे करोगे तो मैं हिंदी बोलने छोड़ दूंगा भाई। हाँ फिर क्या वो बंगाली बोलेगा? क्या मुना छोटू में वो है हमारे पास बंगाली ट्रांसलेटर, एक बुलाने दो उसको। कहाँ गया वो? पकड़ लिया उसको। तो रहा होगा भाई अल्लाह। अरे यार कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तो मतलब तू भाई बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, इंडिया को नहीं करेगा? कहाँ गया ये? सोचो मैं वीडियो देख रहा था, सोचो बांग्लादेश हार गया तो इंडिया को करूंगा, और इंडिया हार गया तो बांग्लादेश, लेकिन दोनों को करूंगा। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ तो बांग्लादेश को करूंगा। मैं अगर होता ना तो मैं रेफरी को सपोर्ट करता, अंपायर को सपोर्ट कर लेता, कभी एक साइड नहीं लेता, लेकिन नहीं, इसके धोखाबाजी देख लो भाई, ये होती दगाबाजी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तू इंडिया को सपोर्ट कर, बांग्लादेश को सपोर्ट कर। बांग्लादेश का तो अफगानिस्तान को हरा दिया।
आज ही था ना, कब था? नो आइडिया, आज तो ऐसे था कचली, कल तो इंग्लैंड और उसका था, आज इसने इनका देखा था। ही नहीं भाई, बांग्लादेश 6 विकेट से जीत गई। तो उसको पता ही नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तू किसी को भी सपोर्ट कर, कि तू देखता ही नहीं है। भाई साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच चल रहा है, साउथ अफ्रीका ने 429 का टारगेट दिया है। कितना 429? हाँ। अबे 50-50 खेल रहे थे, 100 ओवर खेलने लगे बैठ के। 50 ओवर में 429 का, और अभी गोल्डी भैया ऑस्ट्रेलिया के 18 ओवर में गोल्डी भैया 134 हाँ के 4 बोल ओवर। भाई। जानते हो मेरे को ना एक लड़की से प्यार हो गया, उसका नाम था तमज्जिम। साले मैं ना एक दिन वो ना वो क्या उसका नाम फायर एमसी नाम का डिस्कशन हुआ है ना, वो पीएचडी ऑन का, तो उधर मैं गया, बैठा था, वो बैठा था, तो मैं सोचा दूसरे अकाउंट से चलता हूँ, फेक अकाउंट से मैं गया, साला लड़के का वॉइस है भाई तो हर जगह यही है। अब तुझे मनीषा से बात करनी है तो कभी बताना, मनीषा तो पागल है भाई, मतलब मनीषा तो पागल हो जाएगी तेरी आवाज सुन के भाई, ड्रैगन। अरे भाई मनीषा कौन है? मनीषा है, अभी अभी मिली है, भैया जल्दी साथ में निभाया। बीजीएमआई पे मिली है ना, लेकिन बीजीएमआई तुम्हारा चलेगा नहीं। मेरा सब कुछ चलेगा, लड़की के लिए मेरे में चलेगा, चलो जल्दी दो। हाँ तो उसके लिए यश से बात कर लेना, वो दे देगा उसकी आईडी। दो ना, जल्दी बात करो। स्टॉक में नहीं हुआ है क्या? स्टॉक में न्यू है, मनीषा है उसका नाम। स्टॉक में नया माल आया ये भाई यहाँ कुछ मैं बात करा दूंगा ड्रैगन भाई, लेकिन यहाँ कुछ ये लिखा है NITRO, पढ़ना नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं। मेरे को ना VPS मिला, जानते हो, जिसका 32 GB रैम है फ्री में, और 16 CPU। हाँ तो कितने दिन के लिए है? लाइफ टाइम। हाँ बढ़िया भाई, फिर तो तू कर ले, उसमें लाइव स्ट्रीम चालू कर दे 24/7 वाली। भैया तुम तो गरीब से अमीर हो जाओगे, और मैं तो मजा आएगा। अरे तू चालू कर दे, मैंने बोला, मैंने ये थोड़ी बोला मुझे दे दे। अरे मेरे को आता नहीं है ना करना, मैं तुमको दूंगा, तुम खुद कर लेना। ला दे दे, मैं तो कल से ही चालू कर दूंगा 24/7 लाइव स्ट्रीम। तो उसके लिए खाली 8 GB लेना है, ठीक है ना? क्या लेना? 8 GB, क्योंकि बाकी GB मेरे को माइनक्राफ्ट सर्वर बनाना है ना। भाई तेरे को जो करना करो, जो गोल्डी भैया तुमको बोल देंगे, हो जाएगा। सब्सक्राइबर क्या भाड़ा? अरे सुन, मुझे 8 GB भी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ उसमें 2 GB चाहिए, 2 GB में उसमें स्ट्रीम लैब्स चलेगा, खत्म। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, गुल्लू गुल्लू भैया, क्या भैया, मैं आता हूँ, रुको VPS लेके आता हूँ। उसमें से भी तेरे को पैसा मिल जाएगा, टेंशन न ले, कैंडी खा लेना। कितना बोलता बे, तेरा ही तो भाई है भाई, तेरा ही तो भाई है, क्या सी बात कर रहा है भाई, तेरा ही तो भाई है। अपने से खतरनाक आदमी देख लिया भाई। ना कौन बोलता है बे, अरे बार बार एक ही चीज बोलेगा, बिरयानी बिरयानी, वो भी चिकन भी नहीं बे। It's meta everywhere, but in East Asia particularly, it's just really popular. चलो भाई, 1.5 घंटे टाइम पास हो गया, 8 बजे का पता ही नहीं चला। गोल्डी भाई कितने बजे आ रहे हैं फिर? अब ऑफलाइन जा रहे हैं ना? मैं थोड़ी ऑफलाइन जा रहा हूँ, मैं पूरा खत्म करके जा रहा हूँ। ना चाहे डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। खेलोगे भी क्या? अभी अगर 9 बजे तक खत्म हो गया तो खेलोगे? ना फिर तो खत्म, तो खत्म। 9 बजे तक नहीं करोगे? हो जाएगा, ऐसा क्वेस्ट तो करना था। भैया हनी सिंह बैक आ गया, मैंने सुना। हाँ आ गया ना। ये नाचो। उसने गाना गाया ना वापस से, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। नहीं, उसका वो वाला गाना मेरे को मस्त पसंद है, जिसमें बहुत सारे गालियां हैं। क्या है? वॉल्यूम बोल रहा है भाई, वॉल्यूम। हाँ वही क्या गाना था यार, मस्त है।
बढ़िया भाई बढ़िया। क्या मस्त था यार। और फेवरेट गाना है मेरा। तो गाजे तो बताए एक आध लाइन, तब तो समझ में आया हाँ जी भैया फेवरेट गाली है। खिलाना है क्या? गलत गाली खिलाना है कोई नहीं गाली देगा भाई, तू गा तो सही, एक दो लाइन गा तो सही भाई, हम भी फैन हो जाएंगे पता चला। मेरा फैन तुम लोग हैं। ओ भाई मिल गया। क्या मिल गया? Oh yes. On this map. My I mean, there are some maps where it's much more playable than this. वो शॉप में लगाया था ना। As you already mentioned, it was before We Unbreakable see World, because Asho. now is super. I mean, it can still open up some Or walls. But also, you kind of bow. want to keep them close because the bounce is nice for you and gives you the advantage in many matchups. And the Oh mid yes, walls, Danny. you'll break them eventually. And with a Brock in your team, you don't really need the भाई extra वॉच आवर्स तो वैसे ही हो जाएंगे अगर तेरे पास सच में सर्वर है VPS। Gmail ले पाठाइसे बुझ्छो गोल्डी भैया। हेलो गोल्डी भैया। हाँ बोलना। ओए Gmail ले पाठाइसे Gmail। Gmail है? ओ भाई पाठाइसे यस पाठाइसे। क्या बोल रहा है ये? क्या हो गया इसको? गोल्डी भैया पाठाइसे VPS पाठाइसे। You have a Daryl wall onto your save plus 20%. That's pip squeaks. That's gonna go गोल्डी भैया। down so quick. बोलना भाई। म्योनिक Too much of a problem for a Chappie, but never mind. That supply drop is gonna be lethal. कुछ समझ में आया है? Also gonna be falling there 1-for-1. मिल गया नहीं मिला क्या बोल रहे हैं? In favor of Navi. ट्रांसलेटर अभी नहीं है हमारे पास, बाद में आना फिर। Power up there for MMA as well. Obviously, claim that from that bottom left-hand side where Angel Boy took down the Daryl, but now the roll comes forward. Damage should start coming through as well. और चापी ने To the realm there to free up this save, and he needs to get one of them down. And it's Levy who is looking the lowest at the moment, but Memi adding some damage to the safe is still not comparable to what Navi. A little bit more of a wall-breaking cube's being dragged into the realm. Good shots coming through now from MMA. Should be able to mute the Daryl if he comes towards it. Chappie goes down. Supply drop to buff up Cube, and he's going to be a good brawler to have that buff on. Will have to stay safe at a distance to really maximize his chances to use that effectively. Menmi going to get भाई पुरानी डेटा तो बढ़िया खेल रही है, from Angel Boy. लेकिन अभी पीछे है। That kill. So far, still about अच्छा twice अभी आगे the सुपर। remaining on Navi safe. And they have more mid control too. Shadow Realm is going to be bringing Cube in as Menmi is trying to make a run for the save. अरे भाई बताते नहीं क्या बंदे कि भाई तेरे नीचे वहाँ पे चला गया वो। Dispatch of the rest पता नहीं। and that is going to be a walk in the park really for now. जी तोड़ दिया भाई नावी वाला। Navi. I mean, you can't मैं बोल रहा था underestimate तुम these बहुत guys at सुंदर हो all. I mean, बंगला में। as good as this reject team are, that was, you know, it was all Same to Navi. you. The only damage they got was really when Thank Navi just went for you. damage themselves there, to be fair. And I mean, obviously they did set up that 8-bit turret once, got the Daryl roll on, but the Daryl roll didn't do too much. And, you know, Levy was left on a map. अरे गोल्डी भैया स्क्रीन शेयर देखो ना। Not lucky, but he positioned himself well to stay alive to get that little bit, Screen not share. a little bit, 50% damage that they did get. But Screen share. quite easily be defended by Navi on a different day. इधर मैं साइन इन करूँ क्या अभी I would like to अकाउंट? disagree and say it's a little bit teddy too because like the rough spick, you know. ये देखो। I'm proud. I mean, Aye. I love this so far. The wall break on the right hand side, opening up the mid, and that's where you want it first. Remove ये देखो those मेरे दोस्त को तो walls, मिल get गया a little bit ये more देखो। space, easier to get those ये wiggle गोल्डी walls भाई down आओ to the far, टिकटॉक but देखते हैं also इसके removing स्क्रीन शेयर से advantage टिकटॉक spots. देखते हैं क्या टिकटॉक That is really हाले देखो dangerous. टिकटॉक देखना Near है। safe, especially हाँ against दिखा तो जरा देख। Man Milo ना with भाई। some nice tags there. MMA able to take him down. A Chappie gets melted as well. Levy will fall too. लगता है वो वाले जीमेल और पासवर्ड देना Left on the पड़ेगा। clock, roughly. It is going to be Navi that takes मतलब क्या इसमें तेरे को फ्री मिलेगा या तो लिमिटेड टाइम के लिए है? almost 30% ना down on ना the ही safe. पता है। That spot to keep Menmi a bit low then. अरे ठीक है मिल चलो। लो ना यार मिल जाए हाँ तो ठीक है भाई जो मिले वही फ्री भाई हाँ। जो मिले खुश रहो भाई। एक महीने के लिए मिले चाहे 50 दिन के लिए, खुश तो खुश रहो भाई, फ्री तो फ्री हो गए। लो भाई वही तो फ्री है। A lot more damage, but now MMA comes out of that shadow realm into a
great position to get some brilliant damage, and Cube's going to join him around that side as well to hopefully stay alive for his sake a little bit longer. 8% left now, and MMA has a mute as well. अरे भाई जरा सा है तो बचा तोड़ दे 4%. ये देखो ये क्या है? My products and services. अरे कैंसल्ड है, फ्री अकाउंट तो कैंसल्ड हो रखा है. अब ये कैसे करो इसको? Incredibly convincing set here from Navi. फ्री अकाउंट वापस एक्टिवेट हो रहा तो कर लो भाई. But it is comfortable. ये कहाँ आ गया मैं? In this set. Not at a single point. फुल स्क्रीन नहीं होता क्या? कुछ नहीं This is है an guys. incredible performance from them so far. That number 1 seed is one step closer. And that step is literally just ये साला कॉल में नहीं आ रहा भाई. Reject out no matter their opponent, no matter their अरे इसमें situation. जाना बिलिंग पे जा. बिलिंग में जा रहा हूँ. बिलिंग उसके बाद माई Surely they can reverse sweep. ये देखो Regardless, it's not हीरो gonna be कोड्स easy हैं. feat. And right ऊपर now, आ ऊपर आ ऊपर आ they ऊपर आ. are full of momentum. इस पे क्लिक करना. ये हेलो लिखा है जहाँ पे हेलो यूमी लिखा. Team that is the loudest इसमें usually on ऐड stage. दिखाते Not that they ऐड have been डालो. on stage like a billion times either. हेलो यूमी पे जाना. हेलो यूमी पे फिर बता रहा हूँ. हेलो पूरे बाजू यूमी में कहाँ है भाई? ये लिखा लास्ट में. हाँ इधर देख. इसमें अकाउंट डिटेल्स देख. And making sure that they let their opponents know as well how confident they are. भाई अभी नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ. इसमें तो कुछ नहीं है. और क्या ऑप्शंस थे उसके अंदर? हाँ नीचे नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है? नीचे 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 इंस्टेंट एक्टिवेशन जेट. स्टेप फॉर जेट लिखा था. स्टेप्स क्या करना है? फिल फॉर्म करना है. इंटरव्यू क्लाइंट एरिया करना है. अब एक्टिवेट कर लेना है. इधर मैंने रजिस्टर किया उसके बाद रिसेंट हाँ ईमेल पे लिंक गई होगी. उसको वेरीफाई कर. ये आया है. इसको कहाँ इस लिंक से वेरीफाई. अबे यार कितना मेहनती काम है यार साला. ये तो ऐड दिखाते भाई हैं. फ्री में तो भाई ये सब करना पड़ेगा भाई. Yeah, फालतू it is RDP, absolutely black crazy when you think money. about it because Navi, as you mentioned, they are the final spot that बोल makes रहा it है into अच्छा नहीं है LCQ वाह. for EMEA. Reject, they're second in वाह. East. लेकिन चल जाएगा ना वो. ये वीडियो ही तो चाहिए यार. वीडियो ही तो चलेगा यार. छोड़ो ना. Competitive because the top teams are like फ्री तो फ्री हो है. चल रहा है तो चल रहा है. वीडियो चलेगा तो बहुत है ना. the हमको strongest when it comes to मेरे को 16 GB थोड़ी चाहिए. मेरे को तो फ्री चाहिए बस. हमको 30 जो भी नहीं चाहिए भाई. 2 GB दोगे चल जाएगा भाई. I mean, last year it was an East वैसे Asian मेरे पास 2 GB वाला पड़ा है लेकिन वो लैग करता है. It doesn't really get better than that कहीं चल जाता है. for a region, especially a smaller region when you Amazon का है मेरे पास. what I think is वो crazy कौन सी ऐड दिखा रहा है तू बैठ के? ये हनी सिंह का चैनल है. अब यहाँ मत बजा देना तू ऑनलाइन. कॉपीराइट दिला के मानेगा ये. हाँ ठीक. right? They'd be like, oh yeah, we're gonna win. And I mean, as a sensible human being, you would probably think like, You know. oh, no, probably not. But right now they are winning. इसका वो वाला गाना कहाँ And गया? they do वो have मस्त Nani. वाला जो Nani is था an वो absolute गाली वाला. threat at the moment. Just ridiculous damage. Is pretty bulky as well for हाँ वो तो मेरी a Spotify में longer range है. brawler. Has just ridiculous range too. Like the shotgun effect towards the end of the shot too. So hitting someone from far away is definitely doable too. And up close, I mean, it's not like Piper where it deals like, you know, it tickles you up close. The Nani will blow you up quite literally. Whether it's with मैं हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ. very, very strong brawler right now. अच्छा. Max is the kind of answer ठीक. that I do like. Because मैं हनी सिंह का they घर went का for बहुत some बड़ा fancy फैन हूँ. stuff in our first set here. This feels more like the East Asian roots. Yeah, but that's bold, though. Like, this is a sharpshooter map, and I understand Max can be played. We saw it played earlier, but it was played with Gene, who it pairs with so well. Gene being banned out literally ये by गाना themselves. मस्त है यार. They're gonna go in with the Pam afterwards, though, and I think that's all कौन right. सा वाला गाना बजा रहा है ये? Really place a successful turret, to be honest with you. So ये तो उसमें है. that will get, and even getting there it's gonna be hard because नहीं बजाना है. नहीं बजाना है. देख लिया. समझ गया. कॉपीराइट पड़ेंगे. अरे आ तो गया तेरा अकाउंट. No matter what. Might be seeing कहाँ some इधर more एड comfort बिलिंग picks ये करो. or something हाँ ये along तो those फालतू lines. है. Best of three. ये तेरे पूरी डिटेल ही ले लेगा. मतलब कर पहले भर. क्या भरो यार. कुछ ही भर दे. कुछ जरूरी थोड़ी है खुद का एड्रेस बनना है. कुछ भी भर दे. देख कर ले भर के हो रहा नहीं हो रहा. क्या लिखो ये बताओ. नाम अरे कुछ भी नाम डाल दे भाई.
रैंक गोकू डाल दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आधार कार्ड थोड़ी मांग लेगा तुझसे। नंबर नहीं लेने का मार डालूंगा। तो मोन नंबर अरे भाई फोन करूं क्या तुझे? बांग्लादेश इधर है ही नहीं, मैं ऐसे करूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं, क्या कोड है बांग्लादेश का? 0880। सर्च कर, होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं है यार, अरे टाइप करना, टाइप करके आएगा ना। कहाँ टाइप करो? कहीं भी टाइप करें, यहाँ पे यहीं पे इसमें लिखना शुरू करना, आ जाएगा। अरे जहाँ +44 लिखा है इधर दिखाना चाहिए भाई, इसका कहीं और दिखा रहा है। ये देखो, ये देखो, इसका तो चालू हो गया इसलिए दिखा रहा है। सुन, ये तो आरडीपी बनेगी, आरडीपी मिलने के बाद एक फाइल मिलती है, उसको जब तू रन करेगा ना तो एक रिमोट सिस्टम तुझे मिल जाएगा ऐसा। हाँ ऐसा आरडीपी मेरे पास है ना। हाँ वो तो पता है, तो आरडीसी अलग है, आरडीपी बोले तो उसको रन करने के परमिशन। तो मेरे को मेरा वीपीएस क्यों नहीं मिल रहा? अरे पहले डिटेल पूरी करेगा तब मिलेगा ना। डिटेल पूरा ही है, ये पूरा है ना? ठीक है, सुन अब आज ही जा। इसमें क्यों नहीं आ रहा है? सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? सर्विसेज में क्या है? रूल सर्विसेज में क्या है? होम गन सर्विसेज में क्या है? ये देखो मैंने इधर गया था तो इधर था ये देखो, इधर वो कल रात पेंडिंग पे दिखा रहा था, तो मैं कल तो ऐड है, वो तो ऐड है, कैंसिल हो गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। रीजन क्या है उसमें? क्लिक कर, रीजन बताएगा ना। अरे कैंसिल पे क्लिक करना, कैंसिल जो लिखा है उस पर क्लिक कर। हुआ क्लिक? घूम रहा है। हाँ वो लोड हो रहा है। क्या डिटेल, क्या किस लिए कैंसिल कर दिया इन्होंने? नाम नहीं पढ़ने का कोई बात होता है। नेक्स्ट ड्यू डेट कुछ नहीं। Yeah, low HP players on the top of the map here for reject, but not able to find that. हाले इसको कॉल में बुला रहा हो यार, I mean, it's not gonna work out here, evidently, but still, I like that they're showing that like just gonna like run away to the bottom of the map and go for the gas. हमारे ग्रुप में गालियाँ चलते रहते They actually did still try to play a little bit. Now they would have had to wait for the gas anyways. नहीं, तेरा कोड्स नहीं आएगा, उन्होंने कैंसिल कर दिया, यहाँ थोड़ी आएगा। क्यों कैंसिल किया? वही तो बोल रहा हूँ, रीजन नहीं आया ना। मैंने उसके बाप का क्या उखाड़ा? अरे देखो ईमेल पे देते हैं, क्या बोल रहा है? पढ़ो पढ़ो भैया पढ़ो। कैसे देखूं इसको बड़ा करके? हाँ क्या लिखा है? योर फ्री आरडीपी काउंट रिक्वेस्ट डिक्लाइन, नीचे नीचे मेल दिखाना। ये तो पढ़ लिया मैंने। एक सेकंड ऊपर है, दिस कुड नॉट बी पॉसिबल क्योंकि इनकरेक्ट प्रोफाइल डेटा, अनवेरिफाइड ईमेल, मेल तो वेरीफाई हो गया था। यूज ऑफ VPN, डुप्लीकेट ऑर्डर, मतलब इस आईडी इस नंबर और ये सब को यूज करके ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए नहीं हो रहा। क्या बना चुके हैं? अरे ऑलरेडी फ्री सर्वर ले चुके हैं इस आईडी को यूज करके। अब वो चाहे फोन नंबर हो चाहे ईमेल आईडी हो। तुमको नया ईमेल आईडी ये सब बना के फिर होना पड़ेगा। मैं काम करूँ? इससे लेके आता हूँ ना वही ये। अभी तो ऑनलाइन नहीं है ना वो। And it's more passive here from Navi, not willing to give much away. Don't know who would win an end game. अरे ये वाला नया स्किन का है इफेक्ट। टाइम आ रहा भाई, 12 बजा रहे हैं तो। But finding a target is going to be really hard against the Max because there's just so much mobility that if the Max pushes up, it's going to be dangerous. Angel Boy going to be right next to the gas, though needs to hurry up with that connection. Will find a decent bit of damage, but there is the first kill. It's a trade actually, 1 for 1.
Angel Boy in a 1v2 gets one. ओ भाई साहब एंजल बॉय ओपी भाई क्या बात है क्या बात है बढ़िया 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 शॉट मारा Was a phenomenal performance. I mean, that's beautiful from Angel Boy there, really. Needs to bring that same energy again to this next round, preferably without losing his teammates first, I imagine. But now, just trying to play out against this Brock. Obviously has a little bit of a range advantage, so just playing that out. Emme versus Memi on this left-hand side. Someone needs to deal with this Max, as that seems to be the big pressure. When the Max speed comes through, Reject do as well. Again, it's going to be both teams chasing down some chip damage, trying to get those supers. Live team from खत्म हो the गया later क्या? stages of that game. अभी नहीं We saw कब? how ridiculously टाइम लगेगा Boy was on नया the बनाओ ground. क्या And अभी? also we mentioned how that Nani should have been banned most likely. वेबसाइट का नाम दिया था मैं देख लूंगा But it's slow and steady so far on both sides. rdphosting.com Quite a bit. अरे For a bit of a crazy trick shot. उसका लिंक जो है ना वो यहाँ डाल दे मैं देख लूंगा उसको मीडिया में ही डाल दे मैं बाद में देख लूंगा लोइस गेमिंग चैट में डाल हाँ गेमिंग का चैट में डाल दिया अरे ये तो चला जाएगा ओपन चैट ठीक है चल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी टेक्स्ट करके किधर डालूं पर्सनल में ही भेज देता भाई इधर तो भेज दिया तेरे को मैच कर देता हूँ याद रहेगा गोल्ड भाई याद है हम लोग कैसे मिले थे माइनक्राफ्ट के सर्वर में मिले थे कैसे मिले थे कैसे मिले थे मेरी सर्वर पे आया था भाई तू खेलने और मेरे ही सर्वर में आके पूरा खा गया था वहाँ के पंपकिन शर्म नहीं आती कैसे कैसे लोग होते हैं भाई जब तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखता था ना तुम मेरे को गाली मत देना जब तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखते तुम जब घर बना देता मैं बोलता था क्या बना रहा है बंदा यार अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसे बहुत दिनों तक हुआ फिर मैंने सोचा एक बार जाके देखता हूँ बंदा कैसा है फिर मैं आया फिर तो मैं Bobby might be biting his nails right now, not hoping to face Reject tomorrow. But for that first Navi, ये ऑर्डर क्या था हाँ ये ऑर्डर क्या था मैंने ऑर्डर नाउ in Group D early on, pretty much the same as we've seen all set long so far. Very safe approach, playing range, respecting their opponents on both sides. Domain name. Maybe a little bit too much sometimes. VPS did though. Overall, things have been fairly even. Supers are going to be starting to come in soon enough. मेरे गले में कांटा घुस गया Yeah, man. Well, Memi's going to get hit there and get hit, I should say. ये क्या talent है भाई? As well, but pressure coming in from Levy there, and he's not going to be able to use his return center on a max shot because it's not going to do a lot whatsoever. Few throwing up a pin now, not in the best position. Surely going to get taken down, and this is looking like a reject game mode or game. Sorry, Angel Boy does go down. Slight signs of life there from Navi. वो क्या रहा है एक मैच ये लोग जीत रहे हैं एक मैच फिर वो लोग जीत जाते हैं. Getting this set. Let's see if Reject can take this series all the way to a third and final set, or if Navi can reverse sweep this game to close out the match in 2. It's a slow approach, as usual, and that is going to be the name of the game most of the time when it comes to knockout at a pro level. You want to लाइट उड़ा दी नल्ले लोग वाओ वेरी डेंजरस so you मतलब manage to इसके 3-1 घंटे बाद हमारे यहाँ की लाइट जाएगी. But right now, Navi, they'll have to take anything they can get. Yeah, Mark desperately needed from Cube now. Pressure forwards, Enemy gets caught. That's disappointing for him. Angel Boy returns in, gets the kill, 2v2. Bounces as well, but he surely can't escape that. Actually gets it. Oh yeah, hey. Nowhere. Navi clutching up 2v1, and the bounces continue. Angel Boy is blowing my mind with those Nani plays, and that is around क्या बात है बढ़िया किल भाई. And no matter the map, no matter the mode, you gotta ban that Nani. You gotta keep it away from him.
That peep almost connected with the Brock there. I believe that would have been the end of him if it did. But Angel Boy now coming up after wasted that, not getting any charge क्या हो गया back. भाई? Now becomes the stereotype. क्या भाई? Screen share मत देखना. Hope that something हाँ नहीं देख रहा हूँ मैं तो स्ट्रीम देख रहा हूँ अभी. mistake because it's Navi who want this round just Oh, as much as मजा आ रहा है Reject. गाना They सुनना. want to close it here. Reject want this set number 3. It's been disappointing so far today for East Asia. Can they turn this around? It is going to be tough. Control-wise, it's looking a little bit better for Navi as Levy is low HP on the left. He's not had the easiest game on the left, despite having some good matchups here and there. Levy with super trying to relieve some pressure. Big tag from Angel Boy. Angel Boy finds a Chappie, but there is a trade as well. As अब यार Gmail लिखने वाला था, गार्ड लिख दिया गलती से. 2 versus 2, but Angel Boy has been so consistent at closing them down. Can he close out another one? He gets a tag. Is that gonna be enough? Menmi is right there. ओ भाई साहब क्लच कर गया. Angel Boy. जीजी भाई जीजी. नावी ओपी भाई पप्पू भाई. एंजल बॉय क्लच कर दिया भाई. You've got to get these brawlers away from him, but he makes anything work. Angel Boy has got to be the best player we have seen today. Just off that Nani set, that was phenomenal. They had the drafts for the most part figured out, and Reject made mistakes that we're not used to seeing from them. अरे क्या हो गया बे? क्या गाना कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है यार. Yet they will have a tiebreaker match to अलग figure out whether इतना जितने जोर से कांटा लग गया भाई. in the meantime though, ये लो मारो भाई नीला कांटा. कोई दिक्कत नहीं. dare I say yet another upset today. I mean, that is absolutely huge coming in from Navi there. Beautiful plays all around, but Angel Boy, the main man, कितना टाइम हो गया? showing us how it's वे 8 सेट पे ही हो गया. sets as well. अभी और कितने मैच बचे हैं? Specifically, that knockout. His nanny plays were gorgeous. Clutched up so many rounds when he had to. And I mean, अभी ये कौन सा गाना है बे? 3 मैच बचे हैं भाई. again. And look at this. The perfect shot gets like 5k damage onto its नहीं opponent. भाई ये गाने का Look how वीडियो much it देखूंगा ना means मम्मी for them मारेगी. coming in that first. See, that Wow. is the emotion that goes through these guys. It just means so much to Oh. win this group and get a step closer to मैं worlds. 2 मिनट बाद आ रहा हूँ. I'm telling you क्यों? already, that is confirmed. मुत्तु स्वामी से मिलने जा रहा हूँ मैं. You see the passion. नहीं As you नहीं said, जाने. you see the passion. अच्छा तुम जाओ मैं ट्राई There करता is हूँ. that is one of the most beautiful things with Brawl Stars. You know that there is this amount of passion behind the teams, and just that's what drives them. एंजल बॉय to- भाई to एंजल keep बॉय. playing, एंजल बॉय के try अलावा to कोई नहीं है. consistently improve at the game, be दो the best बच्चे हैं. version of आ themselves. रहा हूँ. And right now, I mean, I'm on top of the moon for Navi because that was probably the best performance I have ever seen on their end. Yeah, well, we are going to have a little bit of an interview with Angel Boy himself, and boy, oh boy, do I want to hear what he has to say. Thank you, Trav. Yes, I am backstage with the man himself. What a phenomenal performance that was from Navi. Angel Boy, I mean, you absolutely killed it on that stage. Thank you. I appreciate it. Yeah, still a lot of improvement to do. I played not that good in some moments, but yeah, finally we played a very strong knockout, very tough game. GG's to both teams, SK Kalalas and Reject. Yeah, and speaking of Reject in particular, they were a massive favourite in this competition. You know, Chappie's a 2-time world champion, and Navi faced them, you know, that very player back in 2021. So in that respect, did you guys feel any additional pressure going into that matchup? Actually, we were very pressured and very nervous. I'm talking about myself. My arm were cold when I was playing against SK Kalalas, but against Reject we were like warm up already. My arms weren't cold. I was more focused and stuff. So yeah, no pressure, I think. But in knockout, some moments, yeah. You were an absolute demon on the nanny pick, which brings me around to ask the question regarding kind of like what you guys tend to often play, which is those big tanky comps, big healing ideas. Was that strategic to step outside of your comfort zone here today? Are you holding something back, or are you keeping people guessing? Because either way, it's working phenomenally well.
I want to shout out my coach Sylvie. He's doing an amazing work. He has a lot of ideas in his mind that maybe sometimes doesn't work, but in general, I think he's the smartest coach in the world of Brawl Stars. And yeah, today I think all combos were better, and I hopefully tomorrow as well. Yeah, I wish you the best of luck. Before we sign off, any shout-outs that you want to give to your crew, your team, the Navi Nation? Actually, there are a lot of people who I wanted to mention, but if I mention someone, the other one will be said, so I will not. A shout out to everyone then in that regard. Congratulations once again, Angel Boy, and go and celebrate with your teammates and get focused up for tomorrow. We cannot wait to see you back once more. We're gonna head Marcus over Gaming to the for casting Reject desk versus to finalize things off. I mean, what a nice guy, honestly. Like, you genuinely might be the nicest guy in Brawl Stars esports, because genuinely, how much it meant to him, and, you know, only speaking for himself, how much pressure he was feeling, and still overcoming that and playing as well as he did. If that's pressured Angel Boy, what does non-pressured Angel Boy look like? I love as well how it may have just been lost in translation in all fairness, but I love the first thing he said is like he apologized for his performance. And this was like some of the best Nani gameplay I have seen in my life. Dare I say, that was the best Nani gameplay I have ever seen in my life. And I think it maybe lost in translation. It may have meant like throughout the year or something like that. And I love how humble he is as well. I mean, MVP, like... obviously. No hesitation here whatsoever. Just off that performance, absolutely deserved. But I love how humble he was as well, you know? Like, mentioning the coach and how important he was with his comms and how much respect there is in the relationship as well. And I think those are all, like, very important things in a team. Like... How many teams have like complained that like they disagreed with the coach picks and all that? इनको जैसे पता नेस्टलास जीतेगा डिसाइडर में डाल दिया है टैलेंट है भाई टैलेंट together and how much love and passion there is in that team. Yeah, it really is incredible to see. Let's take a little bit of a look at what happened off stream in that game. 2-0 to SK Colors, which I can't say I didn't expect, but it's sad to see Marcos Gaming go out. At least they've still got that representation through Revenant Esports though, because they played some great Brawl Stars today. Oh yeah, Revenant was one of my top performance today, really, or like biggest underdog stories for sure. In a group where honestly it wasn't even guaranteed they would make it out, at least not on paper, probably not according to most people at home, but they did, and valiantly as well. Really strong performance from them. But looking here at SKC and Marcus Gaming, in all honesty here, like if I had to make like a team tier list, I'm not gonna go too much in detail because players will probably murder me, but Marcos Gaming was probably the lowest team in my books, and SKC maybe just above, but I already felt like there was a decent bit of a gap between those teams as well, where SKC, I've seen some good things from them in SA West, and it wasn't consistently good, really not, but I've seen some really good signs of promise. They are very serious as well, which I can really appreciate. I mean, as much as they do like to, you know, mess around a little bit at times, they are very passionate and serious about competing, even though like it was very likely they would not even qualify here in the first place. Yeah, exactly. And I mean, look at this next game as well. SK Colors versus Reject. It's Reject-sided, but the last one was as well. So let's not rule SKC out. I mean, yes, Navi and SKC are different teams. Navi, you know, destroyed SKC. I fully expect Reject to be able to dismantle SKC, but I really want a good game. I want another region to prove that East Asia might be knocked down a peg this year. I think that realistically, at least to my eyes, and I really like where you're going as well, because I don't think SKC can win. Like, you know, honestly, I don't think that they can, but I want them to come up with their best performance because they have not had a single chance in the past to face a team of the caliber of Reject. And this is huge for them experience-wise. SK, Kalalas, that's Exic, Lukitas, and Prozzy. They are a roster that has shown some great signs of promise during the regular season. They didn't quite make it, but got a little bit fortunate that they were still able to snatch a spot. They are a team that I think can do some damage here and there. What I am really hoping from them is just to show their best gameplay.
I don't really expect them to win. It's never going to be impossible, but I just want them to show us what they got, and if anything, I want them to leave here as proud as they can be. They still managed to make it to this point. Regardless, they were not one of the favorites to be here. On the other hand, Reject, they did come here as favorites. A very, very strong Japanese roster. Lots of fun, as well as you can see. Not gonna be the happiest after that previous match, but they are a team that definitely has good mental as well, and that should be able to recover from that. The skill difference here between both teams is gonna be a big factor in how they can just, you know, rebuild some confidence quickly, Art. Absolutely so. Definitely going to be a tough one here for SK Kaleas, as it would be for any team, let's be honest. I did say that I felt that Reject were going to get the win over Navi. How wrong was I? And how exciting was it to see just those pop-off moments? But again, this second seed so important to get a handle on, and for SKC, they're going to have to really step outside of their comfort zone in a way which we haven't really seen from them yet before. Is it possible? Absolutely so, if they get this right when it comes to these drafts. Hard Rock Mine will be our first map for Gem Grab, and then Split for Hot Zone. If we get to the third and final set, Dry Season. 7 घंटे की स्ट्रीम Yeah, this is no matter what, like, हो जाती है. I was quite negative 7 towards कई बार SKC 12 घंटे की भी की है. coming up to the stage. Like, I think this is one of the more one-sided matches of the day, in theory. But, I mean, we've seen upsets already today. We saw that Reject did not perform their best against Navi earlier. That might be enough to, like, close the gap a little bit and bring from what regularly you'd expect to be like a 90-10, in all honesty, a bit closer to like a 70-30, you know? And that's already, like, doable. I mean, I would say that Navi were quite big underdogs. Again, on paper, in practice, they were able to make it work. And SKC, they're a team that definitely works hard, that takes this very seriously. Even when it was very unlikely that they would qualify here in the first place, they were still trying their absolute best in the monthly finals, showing up every time, qualifying every time, and just giving us their best performance. And that's what I'm expecting from them here, to just give it their best. And if it were to not work out, it's still like a really big experience for them. I mean, they made it further than, like, you know, half the teams here. Yeah, I couldn't agree more. Honestly, it's valuable learnings along the way, isn't it? And coming off the back of that win, and with Reject's loss, I suggest that SK Kaleas really try to hit the ground running quickly. Because if they're able to get this first set, that might help them considerably just whittle down Reject. They're such a tough team to break, as we know. It's such a competitive region. East Asia, it has been, just one of those obscure regions in the sense that their player pool is very small when you compare it to the overall big picture, but their skill set, their mechanics, it is unmatched, or at least certainly was coming in to today and over the course of the years. It really has been what everyone has been saying is the region to beat. Obviously, of course, for Reject, I'm sure they're not letting that kind of reputation worry them too much. They're just keeping their eyes on the prize. Certainly for SK Kaleas, it's fair to call them the underdogs in this scenario. But again, like you rightly said, we've seen many upsets happening today. We've seen things that have gone outside the realms of what we've come to expect from Brawl esports. So, part of me wants to really root for them, but it is going to be a tough one. I'm not going to lie. It's going to be somewhat of a mountain to climb. Yeah, no, that's really my point. Like, it's the same thing. Like, I think that, like, if I was, like, rooting for a victory from SKC, I think that would be very bold and optimistic. I'm just rooting to see, like, a phenomenal match on their end. I want them to play the best Brawl Stars they have ever played, and I'm happy with that. As much as I would love an underdog story here, that would be absolutely crazy. But in all fairness, I think that if they take enough risks, try to set up some traps here and there in the draft, who knows? Maybe Reject might underestimate them, fall into some of those draft traps, and maybe make some mistakes here and there, and it can go quicker than you realize in a best of 3. Still, the odds are going to be in favor of Reject here quite massively. I mean, they kind of have to be. They've got the best set percentage of any team in the last chance qualifiers, and that is really quite phenomenal for me. 89% of a win rate
it is nothing to be trifled at, really. 48 खड़े कर सकते नहीं है। out of 54. I mean, that is तो वही just absolutely चांस चेंज होती insane. रहती है ना The इनकी, fact that they अलग-अलग are बंदे in the आते रहते हैं। LCQ and just came short to Crazy Raccoon time and time again. That was really the team which they just were not able to topple very often in their run-ins. They did so. No, they actually did not at all in any of their instances. So, you know, it is certainly something to consider here. The bans are in. It's going to be Buster, 8-Bit, and Max for SK Players. Buster, 8-Bit, and Crow for Reject. The first pick coming in shortly will be an SK Players one, and let's see, it's probably going to be like a lane safe idea for me, or they might just go for a mid position, but normally I wouldn't mind necessarily something along the lines of a Ruffs or a Bell if they want to choose that kind of mid approach, but the 8-Bit ban certainly does minimize things somewhat, or not, or not. Just, you know what? I like it. I like it. I think they can try to set up some traps here as well, try to force in some heavy tank counters and maybe find ways to deal with that. I think they have to be bold. I think they have to take big risks, because if they play it fair and square, like if they're playing a mirror matchup, you know, they're not going to win that. Like, I don't see a world where that goes well for SKC. Where they can make a big difference is with that draft, and they're going to need it. Otis going to be picked up by a Reject. A very good tank counter, but obviously if the Rosa does get in range to hit you, you will be taking a decent bit of damage, but the mute does really help. Just slow things down, give you some time to get that kill. The Gene, not a bad shout. Will be, you know, a little bit careful with what you're going to be pulling. But honestly, I'm not even sure if the Gene here is the best play with the Rosa as a first pick, because right now SKC could literally just like pick up another tank or an RT or things that you can't pull, and then suddenly the Gene, like, it's going to struggle. It's going to be a PAM that they go for. A very traditional mid here on Hard Rock Mine. Not necessarily a go-to at the moment per se. I would have preferred the RT because it's harder to pull, but you can still do stuff against Gene for sure. It's a tanky brawler. You have some healing capabilities. You get pulled. You can place a healing station. You can play around a healing station that's already there. So there is some play, but I don't know. I don't feel like it's as flashy as I would kind of have hoped. Very old school, you know, very old school, I would say. Pam and Gene certainly going to get a lot of value from the Vision gear. Sandy, though, coming in is a very underrated one that we're seeing a bit of a rise up in play rates for, one that I really, really do like. It can just deflate so much pressure, but obtaining those sandstorms, that is really the key, with the Sandy pushing forwards and just kind of getting those shots to land as quickly as you can for your team. If they are able to do that on the side of SK Players, bring that Pam forwards, bring forwards the Rosa as well, who can probably do so a little bit easier in that regard. But, you know, it is going to get in the faces very much so of Reject. Rico going to come in. You know, I was saying backstage to Adrian from the Supercell team, we haven't really seen much Rico, and we're kind of surprised. It's a bit more of a niche idea, but this is a map where Rico can absolutely thrive in the right hands, and that really is the key, and I feel like it is in the right hands here. I never need an excuse to see a Rico. I absolutely love it, and this is a great map for it. Definitely so. I think it's a really good option, and I think as well that it can be one that catches you off guard. You have a deceptive amount of range at times. You can really reach the mid as well with your super and just get some cheeky kills. So I do like that option quite a bit. Draft-wise, I'm gonna have to admit I do prefer what Reject brought into the mix, but a good stack into the mid will help them get a kill, and SKC getting away with a couple gems, although not for long. They are going to be dropped down, and Levy is going to be the one to pick them up, which is a bit of a curious one. Yeah, it wasn't a terrible start for SKC until that moment in time. They might get the gems back actually there, but Prosy has pulled the gems though, safe in the hands of Lukitas, and I think that is a good person to have them with. But certainly Reject at the moment being the more successful in these takedowns, and as time goes on, that is going to be proving quite key. On the right-hand side there is Levo, who comes out on top here, able to heal now accordingly so, and will shortly be putting pressure. Yeah, getting that healing station taken care of, and now asserting his authority on this lane side. Yeah, Exit gonna struggle to push up there against Levy. Let's see if he can create the space he needs. A super from Levy is quite terrible in all fairness, and it's gonna be fully missed, but they do manage to make up for that, and Reject not in trouble anytime soon here. 2 more gems picked up, and Reject extending their lead. A gene pool available as well. Prosy is low HP, didn't quite have time to place his super down, but at that point, they will need to use it for the retake. Let's see if they can find some good value from it. The Rosa could definitely try to sneak up,
and get into some good position, and that might be exactly what they need. Yeah, I felt X maybe got stuck on the wall there. Maybe could have aggressed a little bit more. Obviously, it's a bit of a tough matchup when you're against the Rico with such close proximity, but Gems in the spawn side, Memi can't really make a play for them just yet, and would prefer them to be with Chappie regardless. It's going to be somewhat of a reset for SKC really to get themselves stuck into this mid. 9 gems in their pocket now, and the aggression is starting to pay off. They're one away from countdown. It's going to be in an unfavorable spawn, so they can't really contest it, and Chappie has got the magic hand, and they've got to evade that. Levy does have super now, goes for it, but no connection onto Lukitas. He's gonna have to fall back, and I don't really know how we ended up getting those gems. I mean, I saw where he got them, but I don't know how Reject let that happen. Bit of a disaster on there, and that's gonna be a countdown. Starting off, they have some gems to pick up. Is it enough? Yes, it is 10, so they're all right. They'll be able to equalize, but control-wise, it is SKC in the lead. Prozzy is gonna get pulled and taken out. Exic also in a tough position here. Countdown started again, but they need another gem here if they want to hold that countdown. Which side does it spawn on? It spawns on the side of Reject. We might very much here go all the way to 29. भाई 12-12 हो रखा है. Possibly so. Countdown now for SKC, and Prozzy trying to go on the aggressive. Lukitas as well seeking out these shots, is connecting them nicely, but the healing puffs will be providing a lot of value as that pull does connect. Prozzy goes down. They're retreating now, and they might be in a terrible spot here, but I think RC are not going to be able to get this reset in time. It's not going to happen. नहीं हुआ. SKC take the first game. So I was saying 90-10. I might revise to 85-15 for now. My words. I mean, I don't know if you guys heard it at home, but SKC are loud as well, and they absolutely are right to be, because it's a huge W here already. And Reject, they are going to need to adapt a bit, because that was loads of mistakes. And we know they know better. They have world champions on that team. Does feel like Reject are a bit stirred and shaken, and it's unusual to see them like this. Unfriendly pushes there, won't really connect with anything at all, but Chappie going down is terrible there for Reject. Prozzy there on the top of the map, really giving Levi a hard time there and gaining towards his sandstorm, which we know how much it can really do for his squad to get that in early. But no gems on the side of SK Kaleonis now, as Reject are starting to pick up the pace, and they do need to do that to even out this set. Lukitas placing down a healing station, very aggressive one as well, is able to clear up the bottom left corner, bottom right rather. Gene has pull, he is patient for it. At least for now, a double slow connects there from Exit, he gets pulled, and beautiful combo there from Reject to take care of their pesky Rosa that sneaked up onto the left-hand side. And right now, even though it's a very small gem lead, Reject are in quite a bit of a better position when the gem lead keeps extending, as they have that center control. Levy with a super, not going to find the most value off it, but eventually that healing station should go down. That will help keep SKC at bay. Countdown for Reject, and one that they cannot afford to slip on, and that's a good way to start it. Levy takes the takedown of Exic, and now Lukitas is very low on the left-hand side, keeping the pressure on. Prozzy just being chipped away slowly but surely, and there's places to run here for Rejects, and they are able to do so. This set now all tied up. Well done by Reject, calm and composed. And I think you can see the underdog